Visions in my head of this, you don't know the half of it. I got dreams of looking up, high as I can get, but nothing feels like how it feels to know these things I don't know yet. The weight of everything, and everything's just fate. Sometimes I'm trapped inside and I don't know what I'm gonna do. But to take on the world is the only thing that we know how to do. I've got dreams of finding out what all of this is for. It's you and me, and everywhere we go will lead us to an open door. The first team could be fully eliminated from making it to playoffs today, depending on how everything goes down. But of course, welcome back to the show. Day number 5 of Ascension Pacific. Let's see if Fancy can fight for their tournament lives. And this Thrifty Buy is getting more value inside the Cloudburst he hides, inside the Cloudburst he lurks. It's back into cover first as he waits for Xiaoxi, and it's all down to Yes I Can. It's a game, a complicated game. Teammates are already here as well. Ooh. It's just a bit of a pick. It's going to be Yes I Can getting a quick triple now. Rainy, the last one left alive with a ghost, tries to go for a couple of taps, but Yes I Can gets the quadra. The shot from before, but Fancy United are pushing into them. The showstopper, oh, and the aftershock. It actually blows it up. Oh, this is so bad for Xiaowei. One steps up to the corner, and he even cannot get banned, and Fancy finishes this off 13-8. This has turned into a very wacky kind of situation, and you don't want to give Xiaoyu that bit of space. Oh my God! And it's turned into the 1 versus 1 winner. Has a legitimate shot at this. Why did they let the Viper Pit actually dissipate? Oh no, the turret right behind the generator. And it kind of reveals so much. Nizzy! He just reacts, gets the first. So many angles held. 2 from generator, 1 from Dice. Nizzy, another shot. And then the flash up front, Nizzy! He is the one to enter it all.
and he wins the match 2-0 for Fancy United. To remember that at the end of the day, this is dangerous for both of them. This is super important for the grand scheme of things. Boom and Naos, let's get into the action. Holds it up by Garden. Oh my God! Just the collateral and then the repeat. Blaze King is suddenly left alone, deserted. Ja again with a peek. Or push in through the spawn, which they're doing right now, but Severine is a menace! Severine with the hat trick! Not good, not good! And then eliminated by Blaze King. Trades from these two teams. And then the spray from Puppy Cholo! With the peek off his contact, Naos! They close this map out 13-11. Wits is in a good position to actually pop off. Pushes through the coast, and Wits! Triple kill hat trick! They know where the rest of Boom are, not taking any chances, wants to save all of the weapons, and it's a game of cat and mouse, of hide and seek. Singer Carl is good for the one. Severine this side. Puppy Chulo is trying to chase, but the wall gives cover. Puppy Chulo, oh my God, he gets it! Time! He has time! He gets it! He has the clutch! They've managed to allow Boom through, but all it is to sandwich them onto the site. Wits and Papi Chul, they spray, but here comes Boom. Maybe a single player, but Ja has to work against every other opponent. With the first shot, and Blaze King. Here comes the Boom. This is outrageous, and there's going to be the orbital for the double kill onto Mojer and Ja, and Mojer, oh, no, it's Bobby Chulo. Double flank indeed. It's gonna be now surrounding the side, and Papi Chulo! Papi! He connects onto a third! On towards Truck though, and Berserk just needs the right peak, the right timing onto this. He sees the barrel, but no! Wits! He ends it all with a double spray! Naos! Now is the time! But can D plus Kia prove us all wrong and hit back harder and serve up bleed their first loss? Let's find out. Go for the retake here. They go on in, they flood on in, and Axie! How sexy that was! A triple for him! And the Rolling Thunder might punish them. Esperanza with a takedown. Axie's there too. And D plus they were ready, but Darion, the hand cannon! Takedown 2, and it's 2v1 Nef. He clutches it though for Bleed. In that created chaos, it's Bleed who stands. 4v4, allow on top, and here comes Lackey as well. Danger Close still gets the takedown. It's 2v1, all up the Scary, and it's not enough. And there you have it. In the Clash of Titans, it's D plus Kia who draws first blood. Crazy guy makes the trade work. Lackey is there too, and these 1-for-1s, it's still D plus Kia. D plus Kia buying so much time, and Scary's caught off guard. And D plus Kia, they hold together. Lakia with a quad. A nice duck from Lakia. Esperanza on the other side too. Exy's there for the clear as well. And well done by Exy. Well done by D plus Kia. Just didn't know what's going on the other side, waiting for the cross. The lance is ripped. The spray though gets no connections whatsoever. The flash is there too, and Bleed just trying to secure this kill. But Australia! He still finds the spray down anyway. Has the reload now. Darion gets halfway on the deep. And what a shot! And what a way to win! This is D plus Kia, and this is how they keep things going. A 2-0 victory over Bleed Esports. What a sweep here coming from D plus Kia, and they might have just shot up in the favorites. Welcome back to VCT Ascension Pacific 2023. We're entering day 6 of games. And look, Bangkok, Thailand, it's a wonderful place. It's a mystical place, but I didn't know that cows could fly. You want to know why? Because the stakes could not be higher. They're going up to the clouds. They're going up to the stars. Every single game from this moment matters. And I cannot wait to get into the action and get into the fun. Yeah. I'm Mac. Nice to meet you guys yet again. I've got 2 handsome individuals to bring you all the action for the first game today, and they can't wait for this one either. We have Dax, we've got Black and Blue, and these 2 beautiful gentlemen are hoping that Naos can win a map.
Yeah, I mean, we're getting into the meat here of the stage, especially for Alpha, where the standings do lie. The games today will decide who makes it to the playoffs to join Fancy into that latter stage. Yeah, it's a choice cut of incredible matches, and we all know here, it's playoffs-bound time for some of these teams. Tiebreakers, they may happen, but you rising up to those standings, you getting those win conditions today, and today of all days, final matches for certain teams too. Yeah, it's insane how much is on the table for every single one of these matches. I thought you wanted to make a steak joke again. I was very close to it, but I'm trying to pull back a little bit. I already went pretty hard on We'll that keep one. that on the cutting board for now. Yeah, look, let's quickly recap yesterday. You saw everything that went down there in the highlights package before we came to the desk. Yep. And there was just action. There was mayhem. And Yeah. I don't think anyone could have called a 2-0 from D plus Kia over the top of Bleed. I mean, we were especially looking at how they were able to kind of make their statement coming into this tournament, right? But what we have seen from D plus Kia is that they play their best when they're against the best, and they certainly delivered yesterday. We thought the Scars match would be one of the upsets, but really here, D plus, I think they finally cemented that they are the team to look out for in this tournament. Standards, expectations, and we got it all there from D plus Kia. Not only that though, I think it's what everyone wanted to see from them. That kind of dominance, that kind of clean gameplay, and of course, the outstanding tactics we saw from the likes of Australia, the likes of XE. They just knew exactly what to do against the firepower of Bleed. I mean, don't forget Esperanza as well. The 3 E's. Honestly, every single person on that team was pulling their weight yesterday, and that's exactly why they looked so good and finally met the expectations we had for D plus Kia. We spoke about them as one of the superpowers coming out of Korea, coming into this tournament, but they just started so slow. But are they going to continue increasing growth? That's a conversation for another day. Let's talk about that Naos game as well. Managing to take the W over Boom has set them up well for this first game today, and I'm hoping that they can make it into playoffs. Probably not as much as you guys are hoping for. I mean, definitely. So you have to put kind of whatever biases aside or whatever hopes. But you look at this Naos team, they still did have struggles closing things out. It came arguably closer than it should have. But that rally on map number 2 on Pearl, I think especially, is what gave me hope for what they could bring to this table. For sure, for sure. But before we get into too much of that discussion, again, yesterday, look, Fancy, they locked in a position, tied for second. They locked in to potentially make their way into the 5-way tie. But in doing so, they've just done enough already that they've been that first team to lock in a playoff spot, no matter where it may be, from Group Alpha. So big early congrats to them. They played all their games first and did enough in each of those. One, unfortunately, didn't look like the one we've seen previously going into that game. So it was an interesting affair, but I'm hoping personally that we can see one bounce back today, because it'd be lovely to see a Taiwanese team like them really succeed on the international stage for the first time. Well, I believe they have to be locked in, and you talked about that here, because they have to win this in a flush, in a sweep, 2-0, just to qualify. If they give Naos a single map, they might not have the best chances of making it into the playoffs. But you talked about already Naos and Fancy, and these two teams, with them kind of fighting here for that third slot, it's actually Naos who are looking in a more precarious state. Yeah, and Boom as well, their lives are on the line. They're in a must-win position after that loss yesterday, and they have the final game today, at the end of the day, up against Zerxia as well. So it's not going to be an easy approach. Yeah, and then you just watch exactly what happened there between Naos and Boom. Some of the closest margins we've seen all throughout the tournament. The closest score, or the biggest gap we saw in terms of the ending, 13-10, and then we went to Bleed versus D plus Kia, just the Omega matchup that everyone was watching out for. And I think really the success that D plus brought here did surprise many after that slow start. And we kind of wonder where that sophistication will come from here for a team like Bleed. Will they be able to finally adjust? Because it's been DK who, have, as the tournament progresses, have continuously made the adjustments and finally found their footing when they needed to the most. And there may be a potential for Bleed to miss out on playoffs now, because they've won games 2-1. So there is a chance of those map differentials coming into the conversation, but of course that'll be moving towards tomorrow. They don't have their final game until then. But it also depends on today's games, right? Depends on that middle game we're going to see against Bonkers and Orangutan. Those two teams need to keep it clean, right? Orangutan can ruin the run for Bonkers if they take a win today, and they've got nothing to lose here, Dax. Yeah, and you look at how Omega can end up if Bonkers does get that dub. Everyone will be 2-1, except Orangutan, which unfortunately is effectively eliminated from the playoffs right now. So there is that chance for tiebreakers yet again that we expected from Group Alpha to happen there. You know, I'm kind of almost expecting Orangutan to come back in their final game of this entire group stage, just because of the classic Filipino standard. They got the Ziz and Tesseract. We know they love to bring each other down. Even saw the tweet from one of their analysts in Sky, like, we're looking to ruin Bonkers day to day. It'll just be a poison pill, basically. I don't want that.
I don't think anyone from back home. Look, there's just such an underdog storyline going in with Bonkers. They came in, they looked horrendous in that first game, but then they managed to pick it up. They managed to find that confidence, get rid of the stage jitters, and we need an OS team in VCT Pacific, in my opinion. We need, you know, a little bit of extra representation. So we have that investment domestically down under. But of course, look, I'd love to see Orangutan at least find a win. We know that they're a really good team, and it'd suck to see them go home without a single win on the board, I mean, even though they've taken some good maps. To extend an olive branch here, to be fair, I think Bonkers have one of the best storylines coming into this tournament, right? Where do they stand? The Pacific League slot would mean wonders for this team, especially more so than most, considering you don't really have that org structure above them that will help them sustain this play. Yeah, unfortunately for the likes of Mac, what's new with OC? Unsigned orgs, everyone having to go for that crowdfunding situation that you have to go all the way here just to have that chance. Well, that's it, right? Like Bonkers, they've got not only the hearts of Australia, the hearts of Oceania on their sleeves, they've also got that financial backing from the community. Yeah. So they've won the community's hearts as well with all that social media presence. You got Tarek helping them out, you even got Bleed helping them out. So hopefully we'll see them start to move forward, but let's move into the first match discussion for today. One team, if they want to make playoffs, they need to win this, and they need to win it as clean as possible, 2-0. So we shall see how it goes from the get-go, because Naos, of course, only need one map. Yeah, they can't let Naos get that one. And the one to watch out for here for one team, it's always going to be Xiao Yu. The struggles in the first map versus Fancy United, when he was trying to force that operator, it was very apparent. Onto the second one, he popped off 25 takedowns. That's the Xiao Yu that we know and love. And the problem for such a young gun there for one team is sometimes you can see the stage jitters get in the way. But one team, we've seen them really grow as a unit, get a bit more aggressive, be willing to be a bit more proactive than we expected. Yeah, I mean, the crucial word and the crucial number here is that number one. Only one map that they can lose, otherwise they're on out, and they have to play as one whole cohesive unit. That's what we saw to be a big problem here on this Ascent map. Fancy, if you look at the way they play, there are very thin margins of error, and yet they were able to thread those lines perfectly to still keep the lead. And then when it came close on split, you still saw them, even though one were keeping it a bit closer in terms of the scoreline, Fancy were in the lead, they were in the driver's seat, and we have to see more of that one team that came up against in their earlier games. Yeah, and that was the thing, right? One team looked so good every time they hit Ascension as a map pick. And Fancy looked terrible. Before this map, they had lost, or they had only won 9 rounds in 2 games. So that means that it's not looking super great for them. It wasn't looking great at all. And they went and rose above all expectations, essentially. They were the team to take their place and be the first team in playoffs securing it. I mean, the way that they were able to at least get a hot start in this tournament, they, I think, are also the first team to finish all their games. Yeah, that's a big thing, right? match. Yeah, so you can kind of already see where they set, and that's a big thing for Fancy because they have more time to prep now. They have more time to kind of expect the unexpected coming into the playoffs. But the big thing here from one team, they beat a team like Boom, a great powerhouse team, and it's put them in a great position to overtake Naos. But still, the stakes against them, even though they might be high, even though the odds are ever against their favor, I don't think they mind. I think they can still make something happen today. Yeah, there's upset potential, and we always have to go back to their signature pick of Ascent. That's where they look so comfortable. They have that meta composition, and they always enable their front line as much as possible. I've talked about Xiao Yu extensively, but you keep an eye out on Winner and Rainy too. These guys have been stable pillars of the Taiwanese community for so long. Wayne, do you think it's still a good decision to pick that Ascent, even though Naos are great on the set? Yes, best map. You gotta believe. Okay. Okay, I'll be a believer. I'll be a believer for one team for the moment, but let's believe in Naos as well. Had a quick chat with Jar this morning. He said that they're confident, but they're not overconfident. They realize what they have to do in this game. They only need that one map. And what I want to ask you, Dax, is do you think that that's going to change up how the Veto plays out? Do you think that they're going to play, try to pick towards one team's worst map, or they're going to play towards their strongest and just play for at least one map in the series? Because that is their win condition for playoffs. I mean, we've seen in the fun facts also from yesterday, it's always been Naos going the distance, 3 map affairs for every single kind of score line. And as of right now, I feel like we're going to get something new here from Naos. They might bring out something like Split. Will they be daring to go for that permaban of Haven? I wouldn't know. But as of right now, they're looking for that just one single win that they know they can attain. It's always a close game
courtesy of Naos Esports. It's just about getting the job done where they do stumble. But isn't that the thing, Dax? A lot of their series, arguably all three of them, should have been cleaner than it apparently was. Maybe Pearl not happening for Boom. That's the only one where you can really tell, okay, Boom were in the driver's seat. Zerxia should have been closed out 2-0. Their match against Fancy could have been closed out 2-0. It just never came that way. So for Naos, to do it cleanly here, it might not be necessarily required, but it's a great way to make a statement and finally cap off their group stage run. Yeah, I feel like for Naos, they are the team where you can say, yes, they're 2-1 right now. It could have been better. It could have been 3-0. It could have been worse. It could have been 1-2. And that's just how close these games have gone for them. Yeah, I managed to have a chat with Big Puppy Chulo as I'm well just yesterday. impressed first, Yes. because that means they gave an interview in pure English with you. So good job, Naos. I was down. They asked if they could do a translation, and I was like, how's your English? Huh? You Like, talked to okay, Papi good. Chulo. Yeah. You'd be surprised. That man is quite quiet. So for him to give out a statement like that and talk to you, or good job now. I think we'll see it on the broadcast later, but he did. I did have to hold the microphone very close. He was very softly spoken, you know, but still very confident. You know, he's got a lot of experience. He had a lot of passion and a lot of potential, and knows that this means more than just like, this means a lot for more than just for Naos, right? Yeah. It means it for all of the Philippines. You know that you guys, like, I can tell with you two here, just the amount of passion that you bring to the desk every time Naos play, that everyone back home in the Philippines are going to be just as crazy fanatic about Naos, and they want to hit the hashtag Now's the time, but now really has to be the time, right? Now, we've got a head-to-head here. It's Yan Lee up against Senior Carl. Dax, why have you picked these two today? Yeah, because these two teams are the biggest reasons they're here in the first place on the Ascension Pacific stage. Senior Carl added in mid-season because of NDG prioritizing his education, and he filled in so well for that controller initiator role. On the other hand, same case, you gotta give it to Yan Lee. Back in Split 1, one team, they would have Xiao Wei on that jet, you have Xiao Yu and something else, and it wasn't as optimized as you would like. Yan Lee coming on in, he used to be teammates, I think, with Xiao Wei in a different title, and he filled in that initiator role, he filled in that controller role, and you could see that for both of these guys, when they struggle, they actually lose the map. We saw it for against Fancy United for Yan Lee, we saw it for Senior Carl when they were facing off against Zerxia. Yeah, I mean, huge implications if Yan Lee's not able to provide what he does, especially on something like a KO, like what they had on Split, what they had on Ascent versus Fancy, as you talked about. And if he's not activated, this team is not won. Now, I'm keen to see exactly how Puppy plays today, all right? Because he has been the most consistent performer across all of it. Yesterday, though, there were big names, Wits as well, keeping them in it. I'm just thinking back to that Sky 3K, 4K, managing to hold the site, which turned it around on Pearl, managed to allow him to bring it back, and really shut down the hopes of Indonesia, of Boom. And if they can make heroic plays like that again, then they're going to win my heart. They're going to win everyone's heart. And I feel like moving in towards playoffs, they're just going to have so much potential to take the whole thing, to make their way all the way to VCT Pacific through Ascension Pacific. Now, it is time to put our money where our mouths are. It's time for predictions. I'm not going to ask you to, but I'm just going to let you know I'm with you today. Really? Yay! Do you believe, Mac, that now is the time for them to secure no, it? no. I got you so bad. Look down. Look at it. Oh! He has tricked us. You have played me like a fiddle. He's bamboozled us. Wow, how could you do this? Look, I think Naos are the favorites. Yeah. Naos are heavy favorites, in my opinion, going into this. But I didn't want, you know, Taiwan to go down without #1 supporter MacMate on the desk here. All right. You know, backing him. I didn't want it to be, you know, everyone Naos full bias on the desk. Yeah. I wanted Hey, someone to be fair, the last time we all kind of predicted one team being bleed yesterday, look what happened. 2-0 sweep. We also all predict Naos one time. Yeah, and they lost to Zerxia. That was the one. Oh, thank you. Thank you for predicting against them. I'm so happy. He's actually helping just, us. just for reference, we calculated all the predictions yesterday. I've only got 4 correct over the whole week because there was a point after I had like 2 bad days, I was like, I'm the underdog guy. I'm the quack. I'm the quack of Ascension Pacific this time. So look, someone needs to believe in one. And I'm going to rizz you up, all right? I'm going to let you know exactly how it's going to happen. Xiao Yu, you know, they finally got another loss, finally got more of a crucial loss yesterday. So they're going to be able to bounce back. We've seen so many teams off the back of losses bounce back and have their best performances. And one team, they got close. You saw them get a huge win in that second performance. Then, of course, third game didn't go right. I'm expecting to bounce back yet again. One team, they have what it takes. They're going to be coordinated. They're going to realize how much pressure is on their shoulders. And that's going to activate a new level for the Taiwanese superpower, and I want to see them making it through. I want to see that 2-0, baby. I want to see Taiwan Valorant make it into the live crowd, in front of the arena. But before, of course, we get into the game, it is time for a break. We'll be back in a minute with the players and the maps.
the world from the eye of the horse. If you Alexander the Great, then I am the Boris. Coming straight from the mud like I am a lotus. So हाथियों का बल कैसे सकेगा तू मुझे रोका? देख तू कैसे मैं लड़ूं, तुम लोगों से ऐसे मैं डरूं. तरूं मैं जिससे मैं तरुण, पानी पे चलो मैं जिससे मैं वरुण. चाहे मैं जीऊं या मरूं, जो करना चाहूं मैं वही तो करूं. आता है तू ना गरीब, तू बेटी चीप, जब तक कटे ना तेरी ये जीप. Better believe you're gonna bleed. Pick up a seat, get your team. I'm the king of kings, brother in arms in a battle. You all gonna die if you act like a vandal. Bring the realm to reality from every angle. This is the public service announcement from Mumbai to the rest of the world. I am a Raja. I am the Raja. भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना. तू मेरी तरफ आना. आ गया तो होगा फिर तनाजा ना. ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना. 'Cause I am the Raja. 'Cause I am the Raja. Look in my eyes, what do you see? I'm more than an average man. I'm a maverick, I can grow flowers on a barren land. Break a mountain with my bare hands and step back and cause a literal avalanche. Should've been about it. Naos looking for one map and one team looking for every single map, every single round that they can take to make their way into playoffs. Who wants it more is the question. I'm going to throw it to you guys. Who do you think is that? Who do you think wants it more? I mean, I don't even know if it's a question about want in this case. It's about how they perform, and especially how they can do it. You look at one, and it has to be a clear-cut win for them just to make it into the playoffs. Yeah, that's what I'm thinking of. Realistically, it's so difficult for one team to get things done, even if they win the series. If Naos Esports gets that map win anyway, then they might not even make it into the next week, into the next destination, and that's a bit of a heartbreaker. There's always going to be that weight on the shoulders of one team if they see Naos get even a victory along the way. It's 2-0 or adio for one team. I like that. I like that from you. Now, look, 2-0 or RDO, but which map do we go? Do you think they're going to leave Ascent? You were talking about it a while ago. They have to kind of be, right? One team is going to play Ascent. This is their comfort pick. This is where they shined all the way back in their own local stages. And we already know what Naos is going to ban. Let's not be unrealistic. Yeah, I mean, it's going to be Haven, right? Definitely. Said at the same time. Oh, Jinx. It's like you owe me a soda. Whoa. Whoa, okay. I mean, you I'm going to add it to my tab, I guess. All right. I mean, you got a long-running one. But in this case, I think the tab of what one are going for, Mac, it's going to be difficult. I hope they don't lose confidence due to Fancy. They tried to make it happen on their best map, but obviously Fancy was able to turn that around yesterday. Now, quickly, before we keep talking about maps, I just want to let everyone know that these two have unmatched chemistry on the desk and off the desk as well. You can't get a word in, especially when they're bouncing off one another. Handsome gentlemen, look, this is your last series together here at Ascension Pacific. And I can't wait to hear you guys just keep on going, keep on talking, keep on just doing you. Dax, you're a crazy, crazy man, and Black and Blue as well. Look, what do you think the maps are going to be? Give me your three right now before we jump in. Haven obviously off the board. Ascent, they're going to obviously pick it. I think Fracture could be one here too that they're going to pull out. Maybe. I think it's going to be banned by one team. I'm thinking Ascent, maybe a bind along the way. Okay. I'm thinking even split out of nowhere. Okay, well, let's see if Dax is on it or not. But it is time to check out the maps. It's time to welcome the players. It is time to kick off day 6. The battle in Ascension, I think it's gonna be really tough.
It will be challenging. It won't be easy. It's gonna be very chaotic. I think this tournament will be like very hard and a lot of pressure. Buat tim yang tanding di Ascension, we can't just play not to lose. We are here To make sure mistake won't happen again. So I think friendship is something which makes Orangutan different from all other teams. Just want to say, are you guys ready? Because we're coming. As the home team, I want to show them that and we have lots of strategy and firepower to beat any team in the world. Mình muốn thấy những điều bất ngờ ở giải đấu này, chẳng hạn như những ứng cử viên vô địch bị loại ngay vòng bảng. All the team here is a winner of their regions. I think this tournament will be like very hard and a lot of pressure. We won't like scare anyone. Bleed has no fear. Do we play against Ascension teams? Yeah, we need ready for it. We feel like we didn't get the opportunities that we deserve, and we're gonna prove why we deserve to be here. 저희는 칼에 갈아고 나온 게 아니라 뽕을 들고 왔기 때문에 都已经在这里了，我们不怕，来吧。 Karena kita itu boom, kita itu confidence, kita itu pengen mendominasi sini ini dan kita tuh pede banget kita bakal angkat juara ya. You better bring your A game, because we're not gonna mess around. Alright, so we'll begin the map veto process for today's first match. One is Team A and Naos is Team B, so we'll begin with Naos banning the first map. Oh, sorry, one banning the first map. And fracture. One bans Fracture, Naos will ban the map. Ban Haven. Naos bans Haven. One, you may now pick the first map. Ascent. One picks Ascent. Side for Naos. We're gonna play defense. Naos plays defense. Naos, you may pick the second map. Naos picks Split. Side for one. Defense. One will play defense. And now one can now ban the next map. You have Bind, Lotus, and Pearl left. Ban Lotus. One bans Lotus. Naos, you can either ban Bind or Pearl. You have 30 seconds left. We're gonna ban Pearl. Bind, sorry? We're gonna ban Pearl. Bind. Okay, so the final map will be... We ban Pearl, we play Bind. Oh, Pearl, okay, Yeah. gotcha. Play what? Play Bind. Yeah. So, Play Bind, okay. so side for one for Bind? Bind defense, all right. I'll have a quick recap, guys. So one bans Fracture, Naos bans Haven. One picks Ascent, Naos plays defense. Naos picks Split, one plays defense. One bans Lotus, Naos bans Pearl. The final map will be one playing defense on Bind. You good? All right, then good luck and have fun.
हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार से दिन में इनटू VCT Ascension Pacific 2023। मैं हूं आपकी होस्ट आना एंड मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं स्पार्टस फॉर दिस ब्यूटीफुल मैच बिटवीन नाउस एंड वन टीम। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? वेल, ये मैच वन टीम के लिए तो एक डू और डाई सिचुएशन होने वाली है। सिर्फ एक मैच अभी तक जीते हैं, 2 मैचेस हार चुके हैं एंड अगर आज का दिन भी ये हारते हुए नजर आते हैं तो टूर्नामेंट के अंदर टॉप 3 के अंदर आना एक बहुत मुश्किल चीज हो जाएगी इनके लिए। सो दे हैव टू कीप इट इन माइंड। वहीं अगर नेओस की बात की जाए, ऑलरेडी 2 मैच जीत के सेकंड स्लॉट अपने लिए कंटेन कर रखा है एंड अगर आज हार भी जाते हैं तो इनको कोई दिक्कतें आने नहीं वाली है। सो नेओस के लिए तो सारी चीजें कंट्रोल में है एंड वन को यहाँ से जीत के कहीं ना कहीं जो अगले स्टेज में जाना है उसका सपना आज कंटिन्यू करना पड़ेगा। एग्जैक्टली आज का मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वन टीम के लिए एंड अगर वन टीम चैलेंजिंग लगती है तो कहीं ना कहीं नेओस के लिए भी, बिकॉज नेओस विल हैव टू मेक श्योर कि आज जीत के वन टीम को पूल से ही बाहर कर दिया जाए, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू डोंट हैव टू फेस देम अगेन। बट वेल, जैसा कि हमने इनका मैच देखा है, वी बोथ नो बहुत हिट एंड मिस सा गेम इनका देखने को मिला है एंड काफी अनएक्सपेक्टेड सा गेम होता है। इवन दो वो मेटाकॉम यूज कर रहे होते हैं जो जनरली चलता हुआ नजर आ रहा है, दे स्टिल गो अहेड एंड चेंज देयर प्ले स्टाइल क्वाइट अ बिट। डेफिनेटली ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा है। लाइक इवन एसेंशियल में काफ़ी हमें यूनिक कॉम्स भी देखने को नजर आया, खासकर फैंसी यूनाइटेड जैसे टीम्स के उससे। लाइक वो योरू का इस्तेमाल, फिनिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड वहीं अगर देखा जाए लाइक द मूड ऑन दिस टीम। लाइक नेओस को पता है कि टॉप 3 में आना था अपने ग्रुप स्टेज के अंदर, वो टॉप 3 का स्लॉट ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं। क्योंकि अगर ग्रुप अल्फा की बात की जाए, 3 ही टीम्स हैं जिन्होंने 2 मैचेस जीते हैं, दैट इज नेओस, ज़र्शिया एंड फैंसी। सो उनके लिए तो बिल्कुल चिल सीन्स हैं, आज कोई ज़्यादा प्रेशर की सिचुएशन होने ही नहीं वाली है। वन टीम की अगर बात की जाए, सिर्फ एक मैच विक्टोरियस में है। अगर आज जीते हैं, सेकंड मैच अपना ऑनबोर्ड लगाएंगे एंड फिर जो राउंड मैप डिफरेंशियल है वो कहीं ना कहीं काउंट में आएगा एंड फिर डिसाइड होगा क्या वो टॉप 3 के अंदर आ सकते हैं या नहीं। सो वन टीम के ऊपर दुनिया भर का प्रेशर रहने वाला है एंड इसको ओवरकम करने के लिए पहला मैप जो खेलने वाला है वो रहेगा इनका खुद का मैप पिक, द मैप ऑफ एसेंट। I think हम थोड़ा सा नाम यहाँ मिसप्रोनाउंस कर रहे हैं स्पार्टस। आई थिंक इट्स नाउस एंड नॉट नेओस, क्योंकि जो पन लगा हुआ है इनके स्वेटशर्ट पे वो कंप्लीटली क्लियर कर रहा है इसको। तो पन लिटरली सेड नाउस द टाइम, लाइक नाउस द टाइम। ब्यूटीफुल, I like it. I like it. Yes. So it's naos. Now we can correct ourselves. Yes. बट येस, डेफिनेटली एक बहुत एक्साइटिंग मैच रहने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी पापाचुलो's गेम, क्योंकि पापाचुलो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गेम प्ले दिखाते हैं एंड ही हैज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल। सो ओपन टू सीइंग दैट। वन टीम लाइक रिलेटिवली न्यू टीम बट स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग। जिस तरह से ये अपने कॉम्प्स को चेंज कर रहे हैं, जिस तरह से ये अपने गेम प्ले को चेंज कर रहे हैं, आई एम लाइकिंग दैट। अडैप्टेबिलिटी पसंद आ रही है मुझे इस टीम की। डेफिनेटली। एंड अगर एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर है कि अभी तक नेओस ने कोई भी मैच को क्लीन स्वीप नहीं करा है। हर एक बार यहाँ पे 2-1 के स्कोर लाइन से देखने को मिले हैं, चाहे इनके फेवर में गया हो चाहे इनके अगेंस्ट गया हो। तो वो जो 0-2 का जो स्कोर लाइन है वो तो हमें शायद ही आज देखने को मिलने वाला है। सो एक काफ़ी ज़्यादा क्लोज कॉम्पिटिशन है एंड अगर वन टीम इस क्लोज कॉम्पिटिशन को अपने फेवर में टर्न कर लेती है, ग्रुप अल्फा की जो स्टैंडिंग्स है उसमें बहुत मेजर चेंजेस आ सकते हैं। वेल एब्सोल्युटली, यहाँ पर जो भी लहरें उठाने का मौका है, तूफान बनाने का मौका है, वो रहने वाला है वन टीम के पास में। पर लेट्स सी क्या नाउस यहाँ पर शांति का माहौल बरकरार रख पाएगी। एक ऑलमोस्ट मिरर कॉम्प देखने को मिल रहा है। वी हैव ओमन ऑन बोथ साइड्स, वी हैव जेट, वी हैव किलजॉय ऑन बोथ साइड्स एंड सो ऑन। सो बेसिकली यहाँ पर सेज एंड केओ के अंदर चेंज रहने वाला है। डबल इनिशिएटर अलोंग फ्रॉम द साइड ऑफ वन टीम एंड यहाँ पर सेंटिनल देखने को मिल रहे हैं डबल फ्रॉम द साइड ऑफ नाउस। वन टीम बिल्कुल मेटाकॉम के लिए गई है, वो डबल इनिशिएटर की ओके फ्लैश ये सप्रेस करो, साइड में फ्लैश करो, स्मोक के थ्रू घुस जाओ 5 बंदे अंदर। एग्जैक्ट वही कॉम्पोजिशन वन रन कर रहा है। बट अगर नेओस की बात की जाए, लाइक नाउ अस की बात की जाए, सेज के साथ खेल रहे हैं जो हमें सिर्फ पेपर एक्स अच्छे से रन डाउन करते हुए नजर आई थी, लेकिन उसका भी कारण ये था कि वो फेड का इस्तेमाल करते थे। हाँ, सोवा को हटा के फेड इस्तेमाल कर रहे थे। और मे बी इवन किलजॉय भी नहीं खेलते पेपर एक्स के प्लेयर्स, सो वो एक और फैक्टर है। वो डबल डुअलिस्ट के लिए जाते हैं, एक रहना जेट हाबक भी ऐसा कॉम्पोजिशन रन करते हैं। सो सेज का इन्वॉल्वमेंट डबल सेंटिनल के अंदर किस तरीके से यूज कर पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ एक रेकॉन बॉल एबिलिटी है एंड वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड रहती है। और जनरली आप जब भी एक सोवा का रेकॉन भेजते हैं, अभी करंट मेटा में यही सीन है कि आप उस रेकॉन के साथ साथ आपको एक फ्लैश भी बर्स्ट इन करना है ताकि वो रेकॉन सीधा वन टैप में ब्रेक ना हो जाए एंड आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करके दे सके। तो वो फ्लैश पॉइंट ही नहीं है नेओस के पास, तो ये काफी ज्यादा दिक्कत का सिचुएशन हो सकता है उनके लिए।
एग्जैक्टली अगर आप बात करें वन टीम की तो इनके पास में केओ, सोवा एंड ओमन रहने वाले हैं अलोंगसाइड किलजॉय। ये चारों एजेंट्स को अगर आप बात करें तो यू कैन एक्चुअली कलेक्ट इंटेल एज वेल एज डिनाई इंटेल, बट सेज की एबिलिटीज वो दोनों चीजें उतने अच्छे से नहीं कर पाती, वो एफिशिएंसी कम रहती है सेज के पास में टू एक्चुअली गैदर और डिनाई इंटेल। सो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ पर जब रीड करने की बारी आएगी ओपोनेंट्स को तो उस जगह पे बहुत अच्छा एक फायदा रहने वाला है वन टीम के प्लेयर्स के पास। एंड नाओस की नाव वहां पर थोड़ी सी डूबती हुई नजर आ सकती है। एंड वन टीम चाहेगा भी कि नाओस के नाव यहाँ डुबा दे, क्योंकि नाओस को लिए तो ये मैच कह सकते हैं कि फर्क ही नहीं पड़ता जीते हारे, टॉप 3 के अंदर स्लॉट बना हुआ है उनका, क्योंकि मैप डिफरेंशियली बहुत अच्छा है, उनको कोई इश्यूज ही नहीं आने वाले। सो एक काफ़ी आराम से वो मैच खेलने वाले हैं। एंड माइट बी देखिए इसके वो इस मैप के अंदर हमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी यूज़ करते हुए नजर नहीं आएंगे, तो वो बहुत ईजिली यहाँ पे खेल सकते हैं इस गेम को। बट अगेन वन टीम दे हैव द मेटा कॉम्प, सो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। ना आई गेस जो सेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना नेवाज, उसका रीज़न भी शायद यही हो सकता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मौका है आज। Absolutely, we have seen PaperX use Sage and उस समय पे हमने उसको literally battle Sage मोड में जाते हुए देखा है। The Grim Place showed up in that. So देखते हैं कि यहाँ पर Sage healer रहने वाली है या फिर fighter, because that's something I'm really excited to see and that's the reason I always love to have Sage picks because मजा सा आता है जब Sage अपना healing का काम छोड़ के बिल्कुल धूम धड़ाके पे आ जाती है। ओके एंड अगेन नेओस का जो पिछला मैच था बूम स्पोर्ट्स के खिलाफ, वहां भी इन्होंने ओपनिंग मैप एसेंट ही खेला था एंड वहां पे फेट एंड सोवा का इस्तेमाल कर रहे थे। सो दिस इज गुड कि अब इनको भी पता है कि मैच हारने से इनको तो फर्क पड़ने नहीं वाला है, तो एक बिल्कुल ही ऑफ मेटा कॉम्प सेज के साथ जा रहे हैं। लेट्स सी वेट्स आज सेज के साथ किस तरीके का गेम प्ले दिखाते हैं, क्योंकि मजा जरूर आने वाला है देखने में। एब्सोल्युटली यहाँ पर देखिए किलजॉय की बहुत सारी एबिलिटीज डिप्लॉयड रहने वाली है साइट ए के ऊपर एंड वहीं की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें वन टीम के प्लेयर्स भी। काफी अच्छा एंगल यहाँ पर रहेगा जूस के पास में, बट आई थिंक पिस्टल के साथ में इस एंगल पे ज्यादा कैपिटलाइजेशन मिलना तभी पॉसिबल है जब आपका एम बिल्कुल सटीक हो। कॉन्वर्ट चार्जिंग है, लेकिन विनर को देखे तो मिड लर्क के लिए जहां जरूर है, लेकिन आप ऐसे बिना इंफॉर्मेशन गैदर करे तो नहीं कर सकते। आपकी टीम ने ए पे कांटेक्ट भी नहीं किया था, उससे पहले ही यहाँ पे विनर को पिक ऑफ यहाँ पे कर लिया गया। एंड नाओस का ये डिफेंस तो इम्पॉसिबल टू ब्रेक इन द नाइफ फ्रॉम विट्स। Oh, that disrespect already in the first round. क्या ही स्टार्ट मिला है यहाँ पर नाउस की टीम को एंड वेल दे आर डूइंग गुड, दे आर कंफर्टेबल राइट नाउ, उन्हें ऑलरेडी कॉन्फिडेंस काफी मिल चुका है एंड लुक एट दैट 2 kills साथ ही साथ 2 assists फ्रॉम किलजॉय इटसेल्फ, स्ट्रॉन्ग लाइक इट। एंड आखिरी में वो नाइफ किल ऑब्वियसली सोने पे सुहागा, लुक एट दैट। ये बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है। ये पहले ही राउंड से यहाँ पे टीज करने के मूड में आए, इनको पता है कि आज वन पे ऑलरेडी इतना प्रेशर है और ज्यादा मजे ले लो, उनको और ज्यादा प्रेशर में धकेल दो। एग्जैक्टली इस बार देखिए सेटअप पूरा चेंज कर लिया है, 3 प्लेयर्स खेलने वाले हैं ए पर एंड बहुत अग्रेसिव आके खेल रहे हैं बिकॉज वेपनरी का एडवांटेज है, उसका उपयोग करेंगे एंड बी पर ऑलरेडी किलजॉय की एबिलिटीज डिप्लॉयड रहने वाली है जिसका खास उपयोग करना पड़ेगा नहीं बिकॉज अगेन वेपनरी एडवांटेज बहुत खतरनाक है। यहाँ पे यू हैव weapons which literally fire bullets on a rate of on actually a rate to begin with और सामने single shots, so ठीक है अच्छा जा रहा है राउंड ना उसके लिए। डेफिनेटली बट एक चीज यहाँ पे अगेन फास्ट एग्जीक्यूट नेओस का आई गेस उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे वेट्स ने अपनी बैरियर का इस्तेमाल किया, ही जस्ट ब्लॉक द साइड एंड उसी के अंदर उनको 3 फ्रैग्स और आई गेस मे बी इवन 2 फ्रैग्स वहाँ मिलते हुए नजर आए। सो अगेन क्लासिक राउंड के अंदर फास्ट हिट करना आई डोंट थिंक वन के लिए इतना वर्थ इट रहने वाला था, क्योंकि मेजॉरिटी चांसेस यही रहते हैं कि जब भी आप अटैकिंग साइड पे एक एंटाई को खेल रहे हो आप सिर्फ ओपोनेंट्स की इकोनॉमी को डैमेज करने का ट्राई करें, एक थोड़ा सा स्लो अप्रोच करके 1-2 फ्रैग्स क्लासिक से निकाल सकें, वो अप्रोच रहती जरूर है। लेकिन फास्ट हिट के लिए गए एंड एक फ्लॉलेस की तरफ अब नाओस बढ़ती हुई नजर आ रही है एंड आई डोंट थिंक कि वो फ्लॉलेस किसी भी करके डिनाई कर सकते हैं। विट्स ऑल्दो एक एस के ऊपर जा रहे हैं, सो डेफिनेटली पापू चूलो कोई फ्रैग नहीं लेना चाहिए भाई, छोड़ दो विट्स को लेने दो फ्रैग, ही वांट्स द एस। हमें देखना है विट्स का एस, हमने विट्स का ऑलरेडी नाइफ किल देख लिया है, अब एस देखने वाले हैं विद द एस। ये सेज बैटल मोड में है एंड ये सेज अच्छा काम कर रही है। Although an eco is it works. Although an eco is सिर्फ क्लासिक थे तो कहीं ना कहीं you like you expect कि हाँ ठीक है फ्रैग्स आप निकाल ही लेंगे एंड exactly इतना लाइक नहीं कह सकते लाइक वन ऑफ द बेस्ट एसेस ना एंटी इको के अंदर एस तो मतलब ठीक है चल जाता। not saying that just yet but yeah
it's still remarkable to have one person just go ahead and demolish the whole team on the other side. But yes, I remember one of these games that I used to play earlier in the night. जिसमें एक dialogue था, the best way to save life is to take some. And वही यहाँ पर win करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एग्जैक्टली यार. अब इस राउंड में देखना पड़ेगा कि वन एक्चुअली क्या अप्रोच यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि अब फुल बाय राउंड है, उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल खेलना पड़ेगा एंड उसी के चलते 3-2 का स्प्लिट जरूर बना रहे हैं एंड वो स्प्लिट भी काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर जरूर कर रहे हैं. लेकिन अभी भी कोई भी प्लेयर मिड वॉक इन या कैट वॉक की तरफ नजर नहीं आ रहा एंड बाय द लुक्स ऑफ इट नेओस जिस तरीके से मार्क कर रही है उनका पूरा एम्फेसिस कैट वॉक के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि इवन वेट्स भी यहाँ पे मार्केट के लिए जिगल करते हुए नजर आ रहे हैं, मिड टॉप के ऊपर इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं एंड फिर 2 प्लेयर्स ट्री रीजन के अंदर कॉन्टैक्ट पे के अंदर खेलते नजर आ रहे हैं. तो सेटअप बहुत अच्छा है नेओस का. उनको पता है कि उनका वीकर वेपनरी है तो आराम से कैटवॉक का एरिया ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है. लेकिन वन का एक कंप्लीट हिट आता हुआ नजर आएगा. 5 स्टैक पुश ऑन द साइड, आराम से का पूरा कंट्रोल मिलेगा एंड रिवील होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला. स्पाइक विल गो डाउन एंड अब यहाँ पे एक 5-5 का रीटेक रहने वाला है नेओस के लिए. एग्जैक्टली नाउस बहुत पहले ही समझ गई थी कि वेपनरी का डिसएडवांटेज रहने वाला है, तो वहां पर पिक्स पर खेलने की कोशिश हो रही थी. काफी अच्छे से एंगल्स होल्ड किए हुए थे, लेकिन उन सबको कंप्लीटली डिनाई करते हुए वन टीम ने अपने लिए जगह बना ली. बट लुक एट दैट, लुक एट द वे पापी चूलो इज प्लेइंग राइट नाउ. चाहे से रिटेलिएशन आया जरूर है, लेकिन 4 फ्लैग्स यहाँ पर अपने लिए कंसील करेंगे वेपनरी अपग्रेड के एंड बहुत अच्छे से उस अपग्रेडेड वेपनरी का यहाँ पर इस्तेमाल किया. एक और राउंड, अपना बोनस राउंड नाउस यहाँ पर जीतती हुई नजर आने वाली है, व्हिच मींस वन टीम दोबारा से एक सेव पर पुश हो चुकी है. ये बहुत बड़ा ब्लंडर करा है यहाँ वन टीम ने. लाइक आपको साइट फ्री में मिली है, आपने साइट पे किसी भी को स्पॉट नहीं किया, किसी से आपने चैलेंज नहीं लड़ा है. देन ये कहीं ना कहीं एक आपको पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट के प्लेयर्स ऑलरेडी ट्री के एरिया में या फिर हेवन के एरिया में मार्किंग कर रहे होंगे. सो सिर्फ मेन एंड साइड का एरिया जो सेफ है आपके लिए, लेकिन यहाँ पे डबल स्टैक ट्री को पुश करना वो भी एक इस तरीके से कि आप बिना किसी फ्लैश पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे थे एंड देन 2 प्लेयर्स का ट्री में पिक ऑफ हो जाना. नाउस को पूरा एडवांटेज उन्होंने खुद बना के दिया है, क्योंकि वन के लिए ये साइड होल्ड करना बहुत आसान होना चाहिए था सिर्फ ए मेन के एंगल से. यूजिंग दैट वैंडल्स आप लॉन्ग रेंज फाइट बहुत अच्छे से अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगेंस्ट स्पेक्टर्स. बट वन का ये अप्रोच बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया उनको. एग्जैक्टली वन बार साइड ए पे हिट कर रही थी एंड उन्होंने कहीं ना कहीं नाउस को यहाँ पर कंडीशन कर दिया टू बिलीव कि साइड ए के ऊपर हिट आ सकते हैं. सारी कैपेबिलिटीज एंड साथ में 3 प्लेयर्स डिप्लॉयड है वहाँ पे. पर अब साइड बी के अंदर हलचल समझ में आ चुकी है नाउस को. हाउएवर अभी भी अर्ली रोटेशन नहीं लेना चाहिए बिकॉज इट कुड बी अ फेक हिट एंड दे आर ऑलरेडी सस्पेक्टिंग दैट. सो यहाँ पर एक एंगल रहने वाला है टुवर्ड्स कोर्टयार्ड जस्ट टू मेक श्योर कि अगर कोई भी रोटेशन आता है तो वो यहाँ पर पिक ऑफ करने की एबिलिटी रहे जा के पास में. एंड लाइक ऑलरेडी अगर हेल्थ पॉइंट्स देखा जाए वन ई स्पोर्ट्स के, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डैमेज ले चुके हैं. वो शॉक डार्ट्स की जो लाइनअप यहाँ पे कनेक्ट हुई है ना, ये दिक्कत दे रही है, क्योंकि अब विनर 44 HP, शिवी 55 HP, तो ही इज वेरी डाउन टू वेल्थ एंड जा यहाँ पे 2 इनिशियल फ्रैग्स निकाल के एंड विड्स थर्ड कन्वर्ट करेंगे एंड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे गैदर है जरूर. तो एक और फ्लॉलेस की तरफ यहाँ पे नाउस की टीम बढ़ती हुई नजर आ रही है एंड आई डोंट थिंक कि जिस तरीके का वन का अप्रोच है वो कुछ भी वैल्यू भी यहाँ पे सेशन कर पा रहे हैं. Sad situation for one team right now, very sad situation. काफी अच्छा सेटअप यहाँ पर नाउस की तरफ से हमें देखने को मिला. दे न्यू कि साइट ए पे बार हिट हो रहा है, तो साइट ए पे काफी अच्छा रीइंफोर्समेंट रखा उन्होंने. वहां पर कंप्लीटली एंट्री को डिनाई करने के लिए तैयार थे. साइट बी की तरफ जैसे ही पुश आया, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, वैसे ही स्लो और एज वेल एज वॉल का यूज करके वहां पर एंट्री को कंप्लीटली डिनाई किया गया ताकि फोर्स कर सके उनको साइट बी की तरफ पुश करने के लिए. एंड साइट बी पे तो ऑलरेडी नाउस तैयार बैठी थी टू टेक द होल गेम डाउन. लेकिन अब वन ई स्पोर्ट्स को एक चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से यहाँ पे जो खेलना चाहते हैं नाउस के प्लेयर्स, उनके पास डबल सेंटिनल है. तो अगर एक भी टीम डबल सेंटिनल रन कर रही है तो आप साइड्स के ऊपर जाना उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि आप सीधा मेन को कंटेस्ट करके साइड का अप्रोच बना लेंगे. आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों साइड आपको एक सेंटिनल मिलेगा. सो अगेन आपको कहीं ना कहीं मिड अप्रोच करना पड़ेगा एंड अगेन वो कैटवॉक का फ्रैग मिलता हुआ नजर आएगा एंड वो प्रेशर क्रिएट करेगा ए मेन के प्लेयर्स के ऊपर टू रीक्लियर द एंगल्स एंड उसका फायदा उठाएंगे. लेकिन जाकर स्पॉट ना होना ये बहुत इंसेन वैल्यू देके जाएगा, क्योंकि अब स्मोक का कंट्रोलर पे यहाँ पे डाउन हो चुके हैं वन के. बट ऑल्दो एक 2v4 सिनेरियो है तो साइड हिट यहाँ पे हो जाना चाहिए. बट यही चीज इनको फर्स्ट राउंड से करनी चाहिए थी. डबल सेंटिनल है, आप ए मेन या बी मेन को डायरेक्ट कंटेस्ट करेंगे तो आप फंसते हुए नजर आएंगे. मिड से स्प्लिट करना बेटर रहेगा. बट मोयर 2 फ्रैग्स निकाल के सिचुएशन को अभी भी अंडर कंट्रोल रखा हुआ है. एग्जैक्टली मोहर ने काफी ज्यादा एडवांटेजेस बना दिया इस सिचुएशन को, जो एक कंप्लीटली डन फॉर राउंड लग रहा था
जहां पर वन टीम की विन कंप्लीटली स्थापित हो चुकी है, ऐसा फील हो रहा था, वहां पर दोबारा से एक फाइटिंग चांस नाउस को दिला चुके हैं मोहिर बाय टेकिंग दोस 2 पिक्स, जो कि बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं उनके लिए। लेकिन वक्त अब बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है यहाँ पे, बिकॉज वक्त के साथ साथ यहाँ पर चलना पड़ेगा। जाको ही हैज़ टू टेक बोथ द पिक्स एंड कंप्लीट द डिफ्यूजर। आई थिंक दैट्स गोना बी अ हार्ड ट्राई। सो यहाँ पर शायद वेपन्स डाउन करवाने की कोशिश नहीं की, जो कि नाकामयाब हो चुकी है, बिकॉज चाइवे वाज प्रीटी रेडी फॉर दैट वन। द फर्स्ट राउंड फॉर वन, एंड ये कहीं ना कहीं इनको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा, क्योंकि 4 राउंड लगातार हारने के बाद ये फर्स्ट राउंड ऑन द अटैकिंग साइड काफी ज्यादा क्रूशियल है। बट ये जो पिक निकला है पापे जिलो के ऊपर, लाइक ये तो आई डोंट थिंक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड इतना इमीडिएट रिक्लियर करना चाहते थे कि वहां पे ऑलरेडी रेडी थे वन के प्लेयर्स, दे गॉट द फ्रैग्स। बट अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक इंडिकेशन होना चाहिए वन के पास कि मिड स्प्लिट करना ज्यादा बेटर अप्रोच है रादर देन हिटिंग द साइड्स डायरेक्टली। एंड इस बार भी अगर कॉम्पोजिशन जिस तरीके से फॉर्म हो रहा है वन का, वो फिर से एमएन कंटेस्ट के लिए जा रहे हैं, जिसमें फिर से फर्स्ट पे नजर आएंगे स्लो और विद दैट नाइफ वन वे स्मोक, हर एक यूटिल को उन पे डंप कर दिया गया है। Did the drone just miss Wits? Alrighty, वैल्यू निकाल लेंगे विट्स उस चीज के ऊपर से। चाइवे का ड्रोन आया था, लेकिन विट्स को उन्होंने स्कैन आउट ही नहीं किया, एंड विट्स उसी बात पे एक फ्रैग यहाँ पर निकाल कर चले गए। वन ने अब प्लांट जरूर कर दिया है, एंड दे आर लुकिंग लाइक दे आर इन अ बेटर पोजीशन। लेकिन सेनियर यहाँ पर खास कुछ कर नहीं पाएंगे, उनके पास शॉक डार्ट्स अवेलेबल है, बट द लाइनअप वोंट बी सिटिंग राइट जस्ट येट। सो लॉकडाउन के खत्म होने का वेट करना पड़ेगा, एंड अब मूव इन करते हुए नजर आएंगे। इट्स अ 2v3 सिनेरियो, डिफिकल्ट एज सच, क्योंकि एक सिंगल एंट्री पॉइंट से जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरी जगह पे डोर बंद है, डोर खोलेंगे, आप ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि एक प्लेयर यहाँ से आ रहा है। दिस माइट नॉट लुक गुड। वन सॉन्ग्स भी है जो कि यूज हो चुकी है, बट इट स्टिल सर्वाइव्स। और काफी अच्छा राउंड, एंड अगेन ये राउंड पूरा कंप्लीट कर सकते हैं कि जायस ने जिस तरीके से वो कैटवॉक पे रन डाउन करते हुए नजर आए, क्योंकि यही चीज कहीं ना कहीं वीकन है नेओस की। उनके लिए कोई कैटवॉक के अंदर जो क्रॉस फायर है, अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है देन पूरी टीम को एंट्री मिलती हुई नजर आएगी। एंड वही चीज है इस बार वन ने फिर से एक्सप्लॉइट करी, बैक टू बैक दूसरा राउंड निकाल के लेके गए। अब ब्रह्मास्त्र हाथ लग चुका है टीम वन के। दे नो एग्जैक्टली हाउ टू एग्जीक्यूट, दे आर डूइंग एग्जैक्टली दैट। बट अब नाओस ऑब्वियसली अडेप्ट करेगी, चेंजेस लाएगी। However, here's the thing, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट अल्टीमेट यहाँ पर नाओस के पास आया हुआ है, विच इज द अल्टीमेट फ्रॉम द साइड ऑफ मोहेर लॉकडाउन, उसको शट डाउन करने की एबिलिटी चाइवे के पास रहने वाली है। He has the Hunter's Fury on. So अब वो Hunter's Fury को यूज करवाना पड़ेगा आपको जल्दी, सो दैट आप अपने लॉकडाउन के ऊपर अच्छे से कैपिटलाइज कर सकें। सो लेट्स सी कि नाओस वो चीज मद्देनजर रखने वाली है, या फिर they're just gonna go for the gamble. We'll find out. चाइवे यहाँ पे तो वो हंटर फ्यूरी इस्तेमाल नहीं करने वाले, लेकिन डार्क कवर को बिना फ्लैश के सीधा यहाँ पे स्विंग आउट करना चाहते थे, एंड यान ली उसका बिल्कुल फायदा उठाएंगे। एंड यही चीजें रहती हैं इस कॉम्पोजिशन की जो सबसे बड़ी वीकनेस है। आपको देखिए फ्लैश पॉइंट है, बट जा बिना एंगल क्लियर करे टेल विंड का इस्तेमाल, गेट शट डाउन। एंड एक और बार मिड का कंट्रोल लेना वन के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल साबित होता है। एंड बैक टू बैक थर्ड राउंड ऑन बोर्ड आ सकता है, बट मोयर टेक्स डाउन वन। स्पाइक कैरियर के ऊपर यहाँ पे प्रेशर काफी ज्यादा बना रहे हैं, बट एक बहुत अच्छा पैरानोइक का इस्तेमाल टाइम बाय करेंगे अपनी टीम के लिए। बट स्टिल जिस तरीके से पोजीशन मार्क करके 2v2 का सिनेरियो है जरूर। रेनी यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी एमिन के साथ ही चैलेंज करना चाहते हैं, एंड ही इज ट्राइंग टू गो फॉर दैट वन वे। एंड यहाँ पे कोलैट ऑलमोस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। एक ही स्प्रे में सेयोन एंड मोयर दोनों आ गए। ब्यूटीफुली डन बाय रेनी। काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन बन चुकी थी नाउस के लिए, लेकिन उसको शट डाउन किया गया बहुत ही शानदार तरीके से रेनी के द्वारा। नाउस कॉन्स्टेंटली थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुकी है, जितनी ज़रूरत होती है उससे, एंड उसी के चक्कर में ओवरपीक कर रही है कई सारे एंगल्स को, एंड बार बार हारती हुई नजर आ रही है। दे हैव टू फिगर आउट कि अब इक्वलाइजर लिटरली एक राउंड दूर बचा है वन टीम के लिए, तो जल्द से जल्द अपने आप को वापस से पिक बैक करके एक अच्छा प्रदर्शन दिखाना होगा यहाँ पे, बिकॉज यू वांट टू मेक श्योर दैट यू हैव द लीड, राइट? डेफिनेटली। एंड अगेन अब यहाँ पे अगर सिर्फ अल्टीमेट बैंक को भी अगर देखें, मैं और अपना ऑलरेडी यहाँ पे लॉकडाउन यूज कर चुके थे लास्ट राउंड में रीटेक के लिए, बट वो कोई वैल्यू नहीं मिला उनको उसके साथ, क्योंकि ऑलरेडी वो रीटेक जब तक स्टार्ट होता उससे पहले वो फ्रैग्स निकल गए थे। बट नाउ हंटर्स फ्यूरी अभी भी शाइवे के पास अवेलेबल है, तो साइट के अंदर एग्जीक्यूट करना एक काफी कंफर्टेबल स्पॉट होना चाहिए, क्योंकि आप हंटर्स फ्यूरी से वो जो ट्रिपल लेन एंगल रहता है उसको बिल्कुल क्लियर आउट कर सकते हैं। बट अभी जिस तरीके से मूव इन कर रहे हैं, सोवा अभी स्पाइक के साथ सिर्फ मिड को होल्ड करते नजर आ रहे हैं, एंड कोई भी मिड कंटेशन अभी वन की तरफ से देखने को नहीं मिला। साइड हिट डायरेक्ट यहाँ आएंगे बिना किसी अल्टीमेट को कमिट करे।
जायज कह सकते हैं कि बिल्कुल स्प्लिट हो चुका है अपनी टीम से एंड उसका फायदा मेयर उठाते हुए नजर आएंगे क्योंकि बाकी टीम को बिना किसी फ्लैश के और डार्क कवर को फोर्स करना पड़ रहा था एंड उसका फायदा बिल्कुल मेयर को मिलेगा। तो फ्रैग्स उन्होंने निकाल चुके हैं ऑल्दो यहाँ पे डैमेज हुआ है कार के ऊपर बट दे हैव द सेज फॉर दैट हीलिंग हमें मिल जाएगी। अब एक 3v3 का रीटेक रहने वाला है एंड रिसेप्शन एज वेल। Exactly. This was the round that the resurrection was saved for. इस राउंड में ऑलरेडी नंबर्स बहुत ज़्यादा इक्वलाइज सिचुएशन पे थे। काफ़ी अच्छे से resurrection का इस्तेमाल किया, एक और प्लेयर को ऑनलाइन लाए एंड अब एक विनेबल पोजीशन बन चुकी है नाउस के लिए एंड दोबारा से खेला जा रहा है वन टीम को टुवर्ड्स लूजिंग राउंड्स। रेड निकाला है लेकिन अभी भी 1v3 का सिचुएशन रहेगा, उसको 1v3 का सिचुएशन बनाया जाएगा एंड विद दैट जा विल शट द राउंड डाउन। डिफ्यूजल के लिए इनफ टाइम बचा हुआ है, एक और राउंड नाउस के हित में आता हुआ एंड अब धीरे धीरे करके दोबारा से सरमाउंट करने का टाइम आ चुका है नाउस के लिए बिकॉज अभी के लिए इकोनॉमी स्टेबल है वन टीम की। इफ अ कपल मोर राउंड्स आर टेकन अवे फ्रॉम देम देन थोड़ी बहुत आप ऐसी उम्मीद रख सकते हैं कि आपको फ्री के राउंड्स मिल जाएंगे। डेफिनेटली एंड अगेन ये यहाँ पे मॉयर के जो फ्रैग्स मिले हैं ये कहीं ना कहीं नहीं मिलने चाहिए। अगेन दे हैड द क्यू बट आई डोंट नो कि उन्होंने फ्लैश क्यों नहीं किया वहाँ से क्योंकि ये आप एक्सपेक्ट करते हो कि डार्क कवर के थ्रू आपके पास केओ का इस्तेमाल ही इसलिए होता है कि आप पॉप फ्लैश करके बाहर निकल सके एंड मॉयर बार बार वो जो एंगल्स खेल रहे हैं वो एक फ्लैश वनरेबल एंगल्स हैं बट यानली की तरफ से अभी तक वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं एंड जो स्कोर बोर्ड है वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है कि यानली को थोड़ा सा स्टेप अप करने की जरूरत है क्योंकि इनिशिएटर होने के बावजूद वो भी एक ऐसा इनिशिएटर जो एक्चुअली एसेंट के मैप पे डोमिनेट कर सकता है विद दैट फ्लैश लाइनअप्स एंड दैट फ्रैगमेंट लाइनअप्स, वो अभी तक यानली की तरफ से नजर नहीं आ रही है। एग्जैक्टली यहाँ पर यानली की यूटिलिटीज थोड़ी सी अंडर यूज दिखाई दे रही है वन टीम की तरफ से एंड अगर उस पर कैपिटलाइज नहीं करते हैं जल्दी तो फिर बहुत अच्छा एक पोजीशन अपने आप के लिए नाउस क्रिएट कर लेगी इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ एंड देन कम बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक इस बात के ऊपर डिस्कशन होगा जरूर एंड आफ्टर द टाइम आउट वी विल बी सीइंग यानली गोइंग इन विद द एबिलिटीज एंड वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है बिकॉज आप केओ के फ्लैश को काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज इट एज अ पॉप फ्लैश, यू कैन ऑल्सो यूज इट एज अ फेक फ्लैश एंड मेक श्योर दैट यू गेट द फ्लैग्स आउट देयर। इट्स जस्ट द इंटेल कलेक्शन जो कि नहीं हो पाता है केओ फ्लैश से। अगेन ये लाइक वन का जो कॉम्पोजिशन है अटैकिंग साइड पे इनको एटलीस्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 से 6 राउंड टारगेट करने चाहिए क्योंकि न्योस की अगर बात की जाए तो वो न्योस के लिए डेफिनेटली अटैकर साइड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगी। उनके पास कोई भी ऐसा यूटिल नहीं है जो अटैक में उनको प्रेफर या फिर एक स्पेस कंट्रोल के लिए अलाउ कर पाए बट कीपिंग इन माइंड के वो एक डिफरेंट कॉम खेल रहे हैं सो माइट भी कुछ एक्स फैक्टर आपके अगेंस्ट ना चला जाए तो पेयर मिनिमम वन के लिए मैप सिक्योर करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है बिकॉज वी नो वो एक ऐसे स्पॉट में है इन द ग्रुप कि यहाँ से अगर वो हारते हैं देन दे कैन जस्ट गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द एसेंशियन टूर्नामेंट ऑल इन ऑल। बट अभी के लिए जिस तरीके से मूव इन कर रहे हैं वन के प्लेयर्स, एक 2-1-2 का स्प्लिट है, जरूर डिफॉल्ट रन करने का ट्राई कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर जरूर रहे हैं बट ये इन्फॉर्मेशन आई डोंट थिंक को ज़्यादा मिलने वाली है इन्हें क्योंकि अभी भी जो मिड का एरिया है वहाँ पे 3 प्लेयर्स नाउस की तरफ से मार्क इन कर रहे हैं एंड मिड बॉटम को बिना स्मोक करे आप कैटवॉक का एरिया तो कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो अपने टीम को ऑलरेडी पता है कि आप एक डिफॉल्ट में है तो वो और ज़्यादा पैसिव खेल रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर ल्यूर किया जा रहा है वन टीम के प्लेयर्स को एंड नाउस इज वेटिंग फॉर देम टू पेनिट्रेट इन। काफी अच्छा सेटअप यहाँ पर साइड ए पे भी देखने को मिल रहा है। अगर आप ट्रीज से पुश करने की कोशिश करते हैं अलार्म बॉट से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली एंटर करते हैं साइड ए के अंदर मेन के थ्रू तो फिर आपके ऊपर नैनो स्वॉर्म्स एंड टर्रेट दोनों का अटैक एक साथ आएगा एंड वंस यू आर इनसाइड द नैनो स्वॉर्म्स आप बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाते हैं एंड एट दैट पॉइंट टर्रेट का कोई भी हिट आपको कंप्लीटली डिमोलिश कर सकता है। बहुत ही शानदार सेटअप यहाँ पर बना हुआ है साइड ए के ऊपर तो वहाँ की एंट्री तो पूरी बट अभी साइड बी की तरफ मूव कर चुके हैं सो यहाँ पर शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन पाए बिकॉज प्लेयर्स इनसाइड साइड बी आर प्रीटी लेस। रोटेशन आएगा फ्रॉम द साइड ऑफ सिन्यो। द फर्स्ट फ्रैग जायज वापस निकालते हुए नजर आएंगे जा शटडाउन लेकिन विड्स फिर से एक 2K सिक्योर करने में कामयाब। मेक इट अ 3 साइड एंकर ऑन इट्स बेस्ट। 3 फ्रैग्स भी निकाले अपने लिए, डैमेज भी दिया एंड एंकर करने में कामयाब। बहुत इजी राउंड यहाँ पे नेहोस के पास जाता हुआ एंड जिस तरीके से साइड होल्ड करिए सिर्फ 2 प्लेयर्स ने मिलकर खासकर विड्स लाइक यूटिलिटी तो छोड़ ही दीजिए सिर्फ एम के बैटल पे गेम निकाल दिया है। एग्जैक्टली लाइक स्टार्टिंग में मैं बता चुकी थी ये से फुल्ली बैटल मोड में आई है। ही इज गोना बी वन ऑफ द फाइटर्स फॉर द टीम एंड वही यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड इसका जो एक सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है पूरी टीम को दैट इज विच इज टेकिंग मल्टीपल फ्रैग्स इन एवरी सिंगल राउंड जिसकी वजह से उनका अल्टीमेट बहुत ज़्यादा जल्दी रिचार्ज हो जा रहा है एंड ही इज एबल टू गेट दैट ऑन बोर्ड विच विल हेल्प एवरी सिंगल टाइम जब भी वन टीम आपके क्लोज आती है ऑन द स्कोर बोर्ड।
जैसे ही वन टीम क्लोज आएगी रेजरेक्शन का इस्तेमाल करके आप अपने प्लेयर को दोबारा से ऑन फील्ड ला सकते हैं और अपने लिए एक लीड दोबारा कायम कर सकते हैं। तो फर्स्ट हाफ के अंदर वन टीम के लिए लीड लेना तो पॉसिबल नहीं है विद द वे विच इज प्लेइंग। एक पैरानोया के साथ ऑलरेडी यहाँ पापुचुलो वेट कर रहे हैं, सो एक कोई भी फास्ट हिट अगर आता है वन की तरफ से इमीडिएटली उसको शट डाउन किया जाएगा। एंड ब्लाइंड हेड होने के बाद डैश एंट्री करी जरूर है, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं थी पापुचुलो को। बहुत अच्छा एंट्री फ्रैग या जायज निकालते हुए नजर आएंगे, वेपन रिकवर किया, टेक्स डाउन मोयर एज वेल, साइड एंगल शट डाउन कर चुके हैं। एंड विनर विद दैट लेट फ्लैंक ऑन द कैटवॉक अपने लिए एक और फ्रैग निकालेंगे जरूर, लेकिन विड्स कहीं ना कहीं एंकर कर रहे थे बट ज्यादा देर तक वो भी नहीं टिक पाएंगे। एक 3v1 का सिनेरियो यहाँ पे बन चुका है। एंड काल की अगर बात की जाए हंटर्स फ्यूरी है जरूर, लेकिन इस्तेमाल करने का कोई मौका भी नहीं मिलने वाला उनको। रेडीज टेक्स द लास्ट फ्रैग एंड एक थ्रिफ्टी राउंड वन के फेवर में जाता हुआ। काफ़ी अग्रेसिव तरीके से नाउस खेल रही है एंड उस चीज़ के थ्रू कंडीशन करने की कोशिश है उनकी वन टीम की, लेकिन वन टीम उस कंडीशनिंग से काफ़ी अच्छे से बाहर भी निकल के आ रही है एंड एवरी सिंगल टाइम रिटेलिएट कर रही है। दे लूज अ कपल ऑफ राउंड्स बट देन दे आर बैक ऑन फील्ड एंड दे नो एक्जेक्टली व्हाट टू डू। एंड जब उन्हें पता चल जाता है क्या करना है तब वो बहुत अच्छे से अपने प्लान को एग्जीक्यूट भी कर पा रहे हैं, विच इज पुटिंग देम ऑन द विनिंग साइड इन multiple rounds. Specifically Ja, like the way this Zeus, the way he's playing is really good and very supportive for the team. डेफिनेटली। एंड अब इस राउंड में अगर देखा जाए इकोनॉमी डेफिनेटली दोनों की इक्वलाइज है, बट सबसे बड़ी विन कंडीशन यही रहने वाली है कि विनर के पास उनका लॉकडाउन अवेलेबल है एंड उसके लिए नेओस एक्चुअली प्रिपेयर्ड है, क्योंकि आप जनरली देखते हैं लॉकडाउन बी साइड पे एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आता है विद दैट केओ लाइनअप्स 0 पॉइंट के एंड उसके बाद फ्लैश पॉइंट। So, जो सेटअप है ना उसका वो बिल्कुल बी साइड को एंकर करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से वन आगे बढ़ रही है आई गेस ये एक डेथ ट्रैप में बसने वाले हैं इस समय। एग्जैक्टली विनर के पास में लेकिन ऑपरेटर भी आ चुकी है, थोड़ा समझ के रहना पड़ेगा। अटैकिंग साइड में ऑपरेटर, लेट्स सी हाउ यूजफुल दैट टर्न्स आउट टू बी एंड दैट टू इन अ मैप व्हिच इज दैट पेपर थिन। विल फाइंड आउट। अभी के लिए साइड ए का जो एग्जीक्यूशन है उससे तो जैसे आप बता रहे थे बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, they're just gonna save themselves। ये लीजिए वैल्यू निकाल लिया ऑपरेटर से एंड अब लॉकडाउन में लग जाएगा। स्टिल होल्ड कर रहे हैं लॉकडाउन को ये। ओके ही इज बाइंग टाइम एंड ओके प्लेयर्स रोटेशन आ चुका है, लॉकडाउन भी परफेक्टली पोजीशन है तो बैक साइड का भी कोई एक्सेस यहाँ पे नहीं रहने वाला है। एंड जितनी भी यहाँ पे नेओस की टीम है उन्हें पूरी साइड को क्लियर अप करना पड़ेगा। जो फैसिलिटीज थी वो भी ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुकी है। सो एक 3 साइडेड बिल्कुल यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा अपने अल्टीमेट के चलते, लेकिन एक 45 का रीटेक रहने वाला है। एंड इसके लिए नेओस के पास सबसे मेजर चीज यही है कि अगर विड्स को एक फ्रैग मिल जाता है वो इमीडिएटली यहाँ पे एक रिजर्वेशन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो फ्रैग मिलना अभी के लिए काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि डिसिप्लिन वन रिसोर्स का काफी ज्यादा सुप्रीम नजर आ रहा है इस पॉइंट पे। एग्जैक्टली काफी हैवी इन्वेस्टमेंट इस राउंड में ऑलरेडी हो चुका था, तो पोस्ट प्लान सिनेरियो में काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर हंटर्स फ्यूरी भी यूज की गई फ्रॉम द साइड ऑफ चाइवे जस्ट टू मेक श्योर कि एक एडवांटेजियस पोजीशन रहे वन टीम के पास में ऑल थ्रू द गेम। नाउ वन पर बात आ चुकी है एंड ये लीजिए पहला फ्रैग तो निकाल लेंगे पापी चीजों, लेकिन दूसरे में नहीं टिक पाएंगे एंड यार्डली विल शट इट डाउन इन द फेवर ऑफ वन टीम। दोबारा से वो मौका आ चुका है जहां पर क्लोज इन कर रही है वन टीम एंड ये देखिए विट्स विथ हिज गेम प्ले ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं अपना रेजरेक्शन। जैसा मैं बता रही थी जैसे ही क्लोज इन करेगी वन टीम नाओस के पास में अपने प्लेयर को दोबारा वापस लाने की अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, एज वेल एज यहाँ पर हंटर्स फ्यूरी भी अवेलेबल है फॉर द साइड ऑफ सीनियर काल, जो कि काफी यूजफुल साबित हो सकता है। अगर एक इक्वलाइजर के लिए खेल जरूर है बट एक चीज जरूर है कि वो मिनिमम 5 राउंड ऑन द अटैकर साइड यहाँ पे निकाल चुके हैं अगेंस्ट नेओस जो एक डिफेंसिव कॉम्प रन कर रही है डबल सेंटिनल का। तो कह सकते हैं कि अभी तक तो डिसेंट हाफ रहा है वन की तरफ से एंड अगर एक और राउंड निकाल लेते हैं डेफिनेटली एक काफी अच्छा हाफ उसको टर्न कर सकते हैं। लेकिन ये शॉक डार्ट का लाइनअप जो है कैसे मिड मार्केट के अंदर वो अलार्म बॉट तोड़ने के लिए एंड वो अलार्म बॉट टूटेगा भी जरूर। परफेक्ट लाइनअप एंड ये जो शाइबे ने लाइनअप इस्तेमाल करा ना अब पूरी नेओस की टीम को पूरे राउंड के अंदर एक कह सकते हैं बैक साइड में दिक्कतें रहने वाली है कि आपको मिड को मैनुअली मार्किंग करना पड़ेगा, लेकिन जाका एक बहुत एग्रेसिव प्ले बिना किसी यूटिल के डायरेक्टली यहाँ पे मिड बॉटम के अंदर स्विंग करते गए एल्स के एरिया के अंदर विनर को शट डाउन करके वापस आ चुके हैं। Exactly, that was definitely not a recommended move, लेकिन उसके बावजूद ही capitalized on it and as long as आप अच्छे से value निकाल रहे हैं अपने unusual move से it's fine and it's acceptable। बट जी बिल्कुल यहाँ पर सिचुएशन जो है वो एडवांटेजेस बना चुकी है अपने आप के लिए नाउस। फ्रैग निकालना इटसेल्फ इनको मिड के खतरे से बचा लेता है। नाउ द एंट्री इज कमिंग इन बट जा को दोबारा साइड में जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। फ्रैग में डिप्लॉय हो चुका है, वो एंटर ही नहीं कर पा रहे मार्केट में अटके हुए हैं बट मोहेर यहाँ पर एक फ्रैग निकालेंगे जरूर, however does not survive for long। रेजरेक्ट कर दिया जाएगा।
रिजरेक्शन इनके पास अवेलेबल है, जरूर करना भी चाहेंगे। ओके, एक काफी अच्छा रिजरेक्शन वापस आता है। मैंने यानली की पोजीशन देखे, स्पैम एंगल में खड़े जरूर है, लेकिन अभी के लिए कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। 3v3 का सिनेरियो, जा के पास ब्लेस्ट अवेलेबल है जो उनको ऑलरेडी एक्टिवेट कर लेना चाहिए ताकि वैल्यू निकाल सके। बट एक फ्लैट पॉइंट खुद ही की टीम को ब्लाइंड जरूर कराता है एंड उसका फायदा जा उठाते हुए नजर आने वाले हैं। पापू जिलो गेट्स अनदर एंड ये जो पोजीशनिंग है इससे निकल पाना यानली के लिए इम्पॉसिबल सा टास्क। अंडर लेन सर्वाइव करने का ट्राई जरूर कर रहे थे बट पिंच करा गया एंड नेओस 7वां राउंड ऑनबोर्ड लगा देगी इस पहले हाफ में। एग्जैक्टली काफी अच्छा क्रॉस फायर यहाँ पर सेटअप किया विट्स एंड पापी चूलो ने एंड उसपे बहुत अच्छे से कैप्टलाइज भी करते हुए नजर आए पापी चूलो। जैसा आप बता रहे थे उस सिचुएशन से बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो चुका था एंड वही हमें देखने को भी मिला। काफी शानदार तरीके से ये राउंड दोबारा नाओस अपने हक में लेते हुए प्रिटी वेल डन एंड आई मीन जहाँ पर एक 6-6 इक्वलाइजर के पोजीशन पर ला चुकी थी वन टीम, वहां पर विट्स के रेजरेक्शन ने चीजें बदल दी, काया पलट दी एंड एक और राउंड नाओस के लिए सिक्योर कर दिया। अगेन एक काफी अच्छा हाफ देखने को मिला जरूर हमें, बट एक चीज जरूर है कि हम नेओस एक डिफेंसिव साइड रन कर रहे थे तो एक एडवांटेज होना काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था उनकी तरफ से। डबल सेंटिनल के साथ वो चीज जरूर कर सकते थे बट ओके। Ascension Pacific is the first regional tournament for the majority of one team players. Exactly. First regional tournament and क्या ही performance. Exactly. I mean, I'm loving the way this team is bringing something new, even with the much calculated, you know, meta comps. बहुत usual comps लेके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका performance काफी ज़्यादा different होता है than the current metas, and that is putting the other teams in a lot of trouble. And again, जो adaptability है one team पे वो भी काफी अच्छी है. So like, I feel like with time, this team definitely has quite a lot of potential. ओके नाउ अब यहाँ पे कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि डिफेंसिव साइड कैसे रहते हैं, क्योंकि अब वन के पास कह सकते हैं एसेंट बीइंग अ डिफेंडर साइड मैप एक एडवांटेज रहना चाहिए। अब वो डिफेंसिव साइड ही खेल रहे हैं। कॉम भी यहाँ पे उनका काफी ज्यादा सुटेबल है क्योंकि अब उनके पास इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हर एक चीज है। वही नेओस की बात की जाए, किलजॉय एंड सेज के साथ साइड में हिट करना काफी ज्यादा एक चैलेंज रहने वाला है उनके लिए। एंड जो ओनली इंफॉर्मेशन रहेगी वो सिर्फ काल का रेकॉन बोल्ट रहने वाला है जो कि इमीडिएटली शट डाउन हो सकता है क्योंकि आप कवर अप करने के लिए फ्लैशेस नहीं है। सो अगेन वन के पास एक एडवांटेज होना चाहिए साथ में। लेट्स सी किस तरीके से स्टार्ट करते हैं स्पेशल राउंड को। नाओस के पास में इंटेल कलेक्शन की उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी जैसा कि आपने बताया, पर इसीलिए उनको इंटेल डिनायल पे वर्क करना पड़ेगा जो कि वो काफ़ी अच्छे से करते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल के लिए फर्स्ट स्ट्राइक यहाँ पर जाको मिल चुका है, एंटर करेंगे, क्लाउड बर्स्ट का इस्तेमाल किया लेकिन यानी के सामने टिक नहीं पाई। यानी ऑलरेडी 2 फ्रैग्स निकाल चुके हैं, मेक्स इट अ 3v2 बट देन यानी को शट डाउन करके इसको एक विनेबल सिचुएशन बनाया जाएगा। एक क्लीन पिस्टल राउंड मिड मार्केट में ट्रिपल स्टैक पुश करते हुए नजर आया और उसकी इनसेन वैल्यू भी निकाली है। कोई डिफॉल्ट नहीं, कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करने का तरीका नहीं, सीधा एम बैटल्स के लिए गए, वो मिड मार्केट पुशिंग किया गया एंड देन स्पॉन रीजन के बैरियर लगाने के बाद तो जो रोटेशन थी उसको भी कट ऑफ करते हुए नजर आए। विट्स का जो गेम प्लान है वो काफी क्लीन नजर आया एंड जिस तरीके से यहाँ पे पिस्टल राउंड निकाला गया वन को बहुत ज्यादा चीजें रिकैलकुलेट करनी पड़ सकती है इस समय। एग्जैक्टली काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हिट की कोशिश रही यहाँ पर नाउस की तरफ से जो कि सक्सेसफुल भी हुई। काफ़ी अच्छे तरीके से स्लो और एज वेल एज क्लाउड बर्स्ट का इस्तेमाल किया, बहुत क्लीन एंट्री मिली एंड फिर उस एंट्री के बाद में तो गन गेम पे बात होता रही थी जिसमें ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुके थे नाउस के प्लेयर्स। सो वेरी वेल एग्जीक्यूटेड फ्रॉम देयर साइड एंड नाउ इट सीम्स लाइक सेकेंड राउंड में एडवांटेज के साथ अटैकिंग साइड घुसती हुई नजर आने वाली है यहाँ पे। अभी सिर्फ होल्ड करने वन वे स्मोक को पुश नहीं करना चाहता है जो एक्चुअली अच्छी चीज़ है। आराम से वेट किया जाएगा उसके फेड होने का एंड देन उसके बाद पूरी यूटिल डंप के साथ ये ए हिट देखने को मिलने वाला है विद दैट आउट ड्रोन फॉलोड बाय द जेट डैश। वाइंस को पहले क्लियर करें तो शॉटगन का खतरा यहाँ पे हटाते हुए सीधा साइड में होगी एंट्री बिना किसी दिक्कत हो गए। अब आराम साइड में आ चुके हैं तो क्लोज प्लांट के अंदर भी कहने का देखना पड़ेगा किसी के हिट करेंगे, लेकिन ये कमाल का शॉट आता है विट्स का, यानी को शट डाउन किया विद दैट मार्शल एंड अब यहाँ पे अगर देखा जाए ऑलमोस्ट कह सकते हैं फ्लॉलेस की तरफ यहाँ पर नाउस बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो चाहेंगे जरूर वन के प्लेयर्स के 1-2 फ्रैग्स निकाल सके, लेकिन ये जो ऑफ एंगल विट्स खेल रहे हैं ना ये किसी भी हेवन प्लेयर को स्विंग भी नहीं करने देने वाले। एग्जैक्टली नाउस का हमेशा से ये एक आउटलुक रहता है कि अपने बोनस राउंड को कंप्लीटली फ्लॉलेस तरीके से कन्वर्ट करना है ताकि एक्चुअल वैल्यू स्क्वीज कर सके उसमें से इनटू द वन दैट कम्स आफ्टर द एंटी इको। बट वेल लेट्स सी एंटी इको को बोनस में कन्वर्ट करने के लिए कितने वेपन्स बचा पाते हैं, बिकॉज अभी के लिए जैसा आप बता रहे थे स्विंग करने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं रहने वाली। ये लीजिए कोशिश करी एंड काम नहीं आई। नाउ इट्स विनर लाइक लास्ट वन सर्वाइविंग। आई डोंट थिंक ज़्यादा देर सर्वाइव कर भी पाएंगे, इट्स जस्ट अ वेपन स्विच गेम फॉर हिम।
एक काफ़ी अच्छा राउंड है उसकी तरफ से। एंड जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे कि इनके पास इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए चीज़ें नहीं है, फ्लैशेस नहीं है साइड हिट्स के लिए, लेकिन अगर इतने फास्ट हिट के लिए जा रहे हैं देन आई डोंट थिंक कि आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए भी। आप सीधा एक आउटडोन के ऊपर ही डैश करते हुए नजर आए। ऑल्दो एक एंटी इको राउंड था, वेपनरी का बहुत मेजर एडवांटेज था, दे हैड द स्पेक्टर्स, बुलडॉग, एवरीथिंग दे वांटेड, तो फायदा जरूर मिला उस चीज़ का। बट अब यहाँ पे वन के लिए एक फुल बाय राउंड रहने वाला है एंड उस फुल बाय राउंड के अंदर इसको सिक्योर करना सबसे क्रूशियल चीज़ रहेगी उनके लिए। अगर ये हारते हैं देन इट विल बी अ 10-5 ऑन द स्कोर लाइन एंड फिर आपका सेव राउंड आएगा तो 11-5 एंड ऐसे करते हुए नाओस एक बहुत क्लीन एसेंट का मैप जो खुद वन का पिक है उस पर जीतती हुई नजर आएगी, जो वन को आज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन एज वी नो डू और डाई सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आज हारना इस बेस्ट ऑफ 3 को उनके लिए एसेंशियन से बाहर का रास्ता कंफर्म करवा देगा। एग्जैक्टली वन अडेप्ट तो काफी जल्दी कर रही है लेकिन रीड नहीं कर पा रही है। दैट्स वेयर द वन बिग प्रॉब्लम इज। पहला राउंड मिड से एंटर किया था तो उन्होंने सेकंड राउंड में मिड पे टर्रेट लगा दिया जो उनको ज्यादा वैल्यू ही नहीं दे पाया क्योंकि सीधे साइड ए पे हिट करते हुए दिखाई दी नाओस। इस राउंड में दोबारा से थोड़े से अलॉटमेंट्स में चेंजेस किए गए किलजॉय की तरफ से, लेकिन अगेन साइड ए की तरफ क्लीन एग्जीक्यूशन, लेकिन घुसे जरूर है बट यानली रास्ते का बड़ा सा पत्थर बनने वाला है। यहाँ पर ट्री की एंट्री तो डिनाई हो चुकी है। काफी अच्छा क्रॉसफायर सेटअप यहाँ पे रहा है। जिस तरीके से यहाँ ट्रिपल एंगल्स मार्किंग कर रहे थे, एक्सपेक्ट किया था वन ने कि शायद वापस से कैटवॉक खुशी देखने को मिलेगा, और उसके लिए 3 प्लेयर्स को डिप्लॉय किया गया था ये साइड पे, जो कंट्रोल था जिससे कि पैरानोया का इस्तेमाल किया गया फ्रॉम बोथ द साइड्स। डेफिनेटली बहुत अच्छा राउंड वन यहाँ निकालता हुआ नजर आया। बी का जो कंप्लीट सेटअप था वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विनर के हाथ में था, कोई दिक्कत है उनको भी नहीं आती हुई। एंड एक बहुत अच्छा राउंड एंड एक ऐसा राउंड जो दरकार थी वन को, क्योंकि डेफिनेटली उनका फुल बाय राउंड है, दे हैव टू विन दैट एंड काफी अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर लिया उसे। एब्सोल्युटली एंड यहाँ पे थोड़ा सा और मोरल यहाँ पर बूस्ट होगा वन टीम के प्लेयर्स का, बिकॉज ऑलरेडी स्कोर लाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका था। दे आर फाइनली एबल टू मेक इट अप, सो दैट्स गुड, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो ये सिनेरियो नहीं देखने को मिला था हमें। नाओस कंप्लीटली अपने बोनस राउंड को कन्वर्ट करती हुई नजर आई थी एंड वो भी एक फ्लॉलेस तरीके से दोबारा। सो विल फाइंड आउट हाउ दिस वन गोस, क्योंकि नाओस अभी भी इन द गेम तो जरूर है एंड अभी भी स्ट्रॉन्गर फुट पे है। ओके, मिड प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, मैसिव प्रेजेंस। एग्जैक्टली एंड एसेंट का मैप आपको कहीं ना कहीं फंडामेंटली ऐसे है, आपको मिड का कंट्रोल चाहिए ताकि आप वो ए साइड एंड बी साइड का स्प्लिट कर सकें। एंड इस बार भी देखा जाए एक्सट्रीमिटीज को एक प्लेयर मार्किंग कर रहा है, पैरानोया आएगा जाके लिए साइड के अंदर बिल्कुल एंगल्स क्लियर अप करना और आसान हो जाएगा। इसी अटैकिंग साइड की हम बात कर रहे थे कि वन की तरफ से हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आप सीधा मेन्स को कंटेस्ट कर रहे हैं, जो एसेंट के मैप में तो वैल्यूएबल इतना ज्यादा नहीं रहता है। नाओस की टीम एग्जैक्टली फंडामेंटल के ऊपर खेलती हुई नजर आ रही है, ऑलरेडी साइड हिट कर चुके हैं। 3-4 का रीटेक सिनेरियो रहने वाला है, विनर यहाँ पे फ्रैग निकालेंगे जरूर काल के ऊपर, बट अब ऐसे ही कुछ और प्रैक्टिस दरकार रहने वाले, लेकिन एक और बार बैरियर ऑफ का इस्तेमाल और ज़्यादा टाइम बाय किया जाएगा। एंड कीपिंग इन माइंड कि आपके लिए जो मैगजीन क्लिप्स हैं गन्स के अंदर वो और ज़्यादा शॉर्टन अप हो गई है, तो सेज को काइंड ऑफ कह सकते हैं एक इनडायरेक्ट बफ भी मिला है विद दैट बैरियर ऑफ। एग्जैक्टली काफी बुरी सिचुएशन वन टीम के लिए कॉन्स्टेंटली बनती जा रही है, बिकॉज दे आर अनेबल टू होल्ड देयर फोर्ट। एंड जिस तरह से एंट्री को डिनाई किया जा रहा था फ्रॉम द साइड ऑफ नाओस व्हेन दे वर इन डिफेंस, वो सेम चीज वन टीम रेप्लिकेट नहीं कर पा रही है। साइड का कंट्रोल बहुत जल्दी खो जा रहा है एंड जैसे ही साइड का कंट्रोल खो रहा है तो फिर रीटेक का तो सिचुएशन ही नहीं बन पा रहा, बिकॉज विट्स इज यूजिंग हिज एबिलिटीज प्रीटी ऑन पॉइंट टू मेक श्योर कि जो भी आने वाले रीटेक के लिए प्लेयर्स हैं उनको जितना हो सके उतना डिले किया जा सके। कभी स्लो अप, कभी बैरियर ऑप्स, ही इज ऑलवेज ऑन पॉइंट एंड ऑन टाइम व्हेनेवर द टीम नीड्स हिम। 10th राउंड ऑन बोर्ड ऑलरेडी एंड अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपोनेंट टीम जैसे डबल डिजिट हिट्स करती है वो थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशन बढ़ता हुआ नजर आता है, तो वन के ऊपर ये जरूर रहने वाला है। बट एक चीज काफी ज्यादा क्लियर रही है नाओस के अटैक में कि मिड स्प्लिट्स जो आ रहे हैं इनके वो बिल्कुल यहाँ पे वेल रिहर्स्ड है। एक ओमन का पैरानोया टुवर्ड्स द कैटवॉक, देन उसके बाद सीधा यहाँ पे जाकी एंट्री, ये बहुत इजी साइड हिट्स जा रहे हैं उनके लिए। एंड वन को थोड़ा सा काउंटर प्ले बनाने की जरूरत है, आई गेस वो काउंटर प्ले इस राउंड में बनाते हुए नजर आ सकते हैं। ट्रिपल स्टैक है यहाँ पे पिज्जा की तरफ एंड आई थिंक वो मिड को रन डाउन करना चाहते हैं इस राउंड में। एग्जैक्टली मिड से अगर रन डाउन करते हैं तो ऑफ गार्ड पकड़ने की पॉसिबिलिटी रह सकती है कुछ प्लेयर्स को, लेकिन अगेन इस बार कंप्लीटली ए मेन की तरफ ऑक्यूपाइड दिखाई दे रहे हैं नाओस के प्लेयर्स। तो देखते हैं कितना ज़्यादा अपने फुटस्टेप्स को कंसील कर पाते हैं, बिकॉज अगेन कैटवॉक पे अगर आप बहुत धीमे चलेंगे तो फिर तो आप बहुत लेट हो जाएंगे टू द पार्टी, एंड अगर आप तेज चलेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करेंगे जो कि पहुंच जाएगी अटैकर्स के पास बहुत जल्दी। टाइम आउट फ्रॉम वन, ये चाहिए इनको, उनको पता है कि exactly. थोड़ा सा अडेप्टेशंस करनी पड़ेंगे, क्योंकि डिफेंडर साइड पे होने के बाद आपको कहीं ना कहीं वो जो फेवर एडवांटेज रहता है साइड कंट्रोल करने का वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल्दो जो पिछला राउंड निकाला गया इनकी तरफ से एक
फुल बाय राउंड वर्सेस एट बोनस था, सो वो एक राउंड जरूर निकाल, लेकिन उसके अलावा कुछ खासा यहाँ पे डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं एंड दे नीड टू फिक्स थिंग्स अप बिकॉज वी नो डू और डाई मैच। एग्जैक्टली वन टीम की तरफ से मुझे एक चीज़ जो बहुत लैकिंग लग रही है, दैट इज़ द ऑन द फ्लाई थिंकिंग, क्योंकि अडेप्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अगले राउंड के लिए सेटअप कर लेते हैं। बीइंग ऑन द डिफेंसिव साइड और डिफिकल्ट हो रहा है इनके लिए, क्योंकि ये अपने पिछले राउंड के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने आप को सेटअप कर रहे हैं रादर देन एक्चुअली सीइंग कि ये राउंड कैसा जाने वाला है। सो जैसा मैं बोल रही थी, अडेप्टेबिलिटी है पर रीड नहीं है। ये टाइम आउट के बाद में उस रीड को अप्लाई जरूर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब दोबारा से राउंड्स में चेंजेस आते हैं नाउस की तरफ से, तो अडेप्ट करने में इनको दिक्कत आ जाती है बिकॉज दे आर जस्ट टू लेट टू द पार्टी। अभी के लिए तो देखिए विड्स ऑलरेडी फर्स्ट फ्लैग निकाल चुके हैं, साथ ही साथ जाको एक और पिक मिल जाने वाला है। दोबारा से यहाँ पे पूरी की पूरी जो टेक्निक्स थी वन टीम की वो धरी की धरी रहती हुई नजर आने वाली है एंड दिस इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। अभी तो आपने टाइम आउट किया था, कहाँ है उसकी वैल्यू, कहाँ है उसकी वैल्यू? यू गेट जस्ट 2, यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर डूइंग द वर्क फॉर यू। बट वेल ठीक है, डैमेज दिया यहाँ पर, जनरेटर से उतर जाएंगे उसके रिस्पॉन्स पे पापी चूलो एंड इट्स स्टिल नॉट लुकिंग गुड फॉर वन टीम। अपने वेपन सेव करना चाहेंगे, इकॉनमी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ मनी ऑन ज़्यूस बट दैट्स द ओनली प्लेयर विद मनी। बाकी सब यहाँ पर थोड़े कंगाली के परछाए में है, सो यहाँ से निकलना चाहेंगे बट देन दैट पुट्स नाउस लिटरली ऑन द 11th राउंड। ये दर्दनाक सिचुएशन है। अब नाउस मात्र एक राउंड में पहुँच जाएगी ऑन टू द मैच पॉइंट, जिसके बाद में उन्हें रोकना कम्प्लीटली इम्पॉसिबल रहने वाला है। ओके एक और अब तो कह सकते हैं कि नाओस अलग ही डोमिनेंसी क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। नाओस का ये जो अटैकिंग हाफ है, आई डोंट थिंक कि किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा। मैंने तो बिल्कुल नहीं किया था जिस तरीके से रन डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं एंड कीपिंग इन माइंड कि एक ऑफ मेटा कॉम खेल रहे हैं, फेड का इस्तेमाल कर रहे थे प्रीवियस गेम्स में, उसमें भी विक्ट्री निकाली गई थी 13-11 अगेंस्ट बूम एंड अब जब यहाँ सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी यहाँ पे विक्ट्री निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो प्रिपरेशंस होती है प्री मैच वो बिल्कुल ऑन पॉइंट है नाओस की। एंड अब अगर यहाँ पे बायस भी देखे जाए वन टीम के इस समय, सो 2 बुलडॉग्स 3 पिछले राउंड की सेव्ड राइफल्स उनके पास रहने वाली है। ये राउंड हारना नाओस के लिए बिल्कुल गेम खत्म करने वाला राउंड रहेगा। सो आखिरी राउंड काइंड ऑफ स्टफ होने वाला है एंड वन डेफिनेटली चाहेगी कि इस राउंड के अंदर पूरी जान झोंक दी जाए। एंड सेटअप की जहां तक बात की जाए, ए साइड को कंट्रोल कर रहे हैं जो एबिलिटीज के साथ मिड के अंदर मार्क करते हुए नजर आ रहे हैं मैनुअली एंड दोनों इनिशिएटर्स बी साइड की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए खेल रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे थे पूरी जान झोंक दी जाएगी इस राउंड में एंड उसके लिए आई फील लाइक विच यहाँ पर शायद हमें एक आध और भी फार्म करते हुए नजर आएंगे बिकॉज विच का रेजरेक्शन बहुत ज़्यादा क्रूशियल साबित हुआ है जब भी डू और डाई सिचुएशन वाले राउंड्स आए हैं नाओस के लिए। एंड जाके पास में भी ब्लेड स्टॉर्म अवेलेबल है जिसकी हम जानते हैं एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है एंड कुछ प्लेयर्स ने काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी भी बना दिया है इस ब्लेड स्टॉर्म प्ले को। सो विल फाइंड आउट इफ दैट हैपेंस एंड अभी के लिए तो नाओस बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है। ऑन द अदर हैंड ये एक ऐसा राउंड हो चुका है जिसको जीतना वन टीम के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। ये अगर हारते तो मैच कंप्लीट खत्म है मैच। एग्जैक्टली गेम बॉल ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया, लेकिन वेट्स को ये काफी अच्छा लगा। शायद यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे थे जैसे यहाँ पे बैरियर आउट की आवाज आई, इमीडिएटली यहाँ पे क्रॉस फायर शिफ्ट हुआ, वेट्स को शट डाउन करने में कामयाब एंड जो क्रॉस फायर बनाना चाहता है नाओस की टीम वो अभी के लिए तो बिल्कुल यहाँ पे थाम दिया गया है। एंड इस आखिरी के 30 सेकंड में साइड का कंट्रोल लेना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि वन ई स्पोर्ट्स के 3 प्लेयर्स भी साइड को एंकर कर रहे हैं। एग्जैक्टली वन टीम के बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं ऑलरेडी साइड के अंदर, लेकिन ये क्या बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है उनके लिए। यहाँ पर नाओस को कोई एंट्री नहीं मिलने वाली। पापी चूलो विल गेट टेकन डाउन एज वेल। मुझे हल्का सा सस्पिशन यहाँ पर हो रहा था क्योंकि कोई भी मूव विनर की तरफ से नहीं देखने को मिला था, जबकि पूरा अंदाजा हो चुका था कि टीम पूरी की पूरी साइड बी में उपलब्ध है। And I was like, okay, why is winner not moving? But then I guess winner को move करने की जरूरत ही नहीं थी because चाहे अकेले ही काफी थे। Exactly. And again, अगर विनर बीइंग द सेंटिनल आपको ए साइड एंकर करनी पड़ेगी, आप किसी भी लेट लक को या फिर एक इमीडिएट स्प्लिट जो शायद से जो बी में साउंड कट ऑफ कर दिया गया था उसके चलते एक एज की तरफ अगर प्लेयर्स मूव इन कर जाते उस चीज को बिल्कुल अवॉइड करना था। तो लाइक परफेक्टली डन बीइंग द एंकर आप ए साइड को होल्ड अप कर जरूर रहे थे। बट अब यहाँ पे अगर देखा जाए एक राउंड जिसमें डायरेक्टली मेन कंटेस्ट करने के लिए नाओस गई उसको हारते हुए नजर आए हैं। सो अगला रिबाउंड यही होना चाहिए कि अब वापस से अपने मिड पिज्जा मिड कैट वॉक की तरफ भिड़ते हुए नजर आएंगे एंड मिड बॉटम स्मोक करके खुद ही का स्मोक यहाँ पे पुशिंग करना चाहते हैं। ओके ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके सामने से मिड बॉटम स्मोक किया गया फ्रॉम द साइड ऑफ वन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग डिसीजन है क्योंकि आप
being the defender, mid bottom पे smoke क्यों ही डालना चाहेंगे? आपको information और ज़्यादा deny हो रही है। Exactly, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर था यहाँ पर, बट लेकिन बहुत ही शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ नाउस के लिए काफी अच्छे से कैपिटलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ये लीजिए कंप्लीटली क्लियर आउट कर लिया जाएगा, साइड को रीटेक के ऊपर खेलने पे मजबूर किया जाएगा वन टीम को। एंड नाउ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द साइड इज अंडर नाउस। ये नहीं करना चाहिए था बिकॉज नाउस इज रियली गुड एट मेंटेनिंग दैट कंट्रोल एंड वन टीम को अभी तक हर बार दिक्कत हुई है रीगेन करने में साइड को। सो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन, बट देखते हैं कितना वर्कआउट करता है। बिट्स जाने से पहले दोबारा से एक फ्लैग निकाल दीजिए, बट आई थिंक बिट्स का टेक डाउन होना बहुत ज्यादा क्रूशियल रह रहा है नाउस के लिए बिकॉज वो रेजरेक्शन ऑफलाइन हो जा रहा है आपका। अब वापस अगर देखें 2v4 का सिनेरियो, मेक इट वन मोर डाउन, 2v3 रहने वाला है। मेयर का काफी अच्छा शॉट यहाँ पे कनेक्ट होता है एंड बैक साइड कंट्रोल यहाँ पे काल मेंटेन करने में कामयाब। एक और फ्रैग निकाल के 2v2 पे नंबर्स को लेके आगे, पर रेनी का वाइट सिंह टेकन डाउन। काल इन 1v2 टाइम बाय करना है अपनी टीम को, लेकिन विनर डिनाई करेंगे उनको भी। टाइम भी यहाँ पे बाय नहीं करने दिया गया। काफी अच्छा राउंड 1 के लिए देखने को मिलता हुआ, एक परफेक्ट रीटेक फ्रॉम देयर साइड एंड अभी भी इस मैच में, इस राउंड में जान बाकी कर रखी है इन्होंने। एक चीज जो कम्प्लीटली इम्पॉसिबल लग रही थी वन टीम की तरफ से वो उन्होंने कर दिखाई है। तो जैसा हम कह रहे थे अडेप्टेबिलिटी तो है एंड काफ़ी अच्छे से वो एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं अपने अडेप्टेड मूव्स को, लेकिन अगेन जो एडवांटेज यहाँ पर क्रिएट हुआ था नाउस ने वो धीरे धीरे अब श्रिंकन होता जा रहा है। लेकिन इस बार जो एबिलिटीज इनके पास मौजूद है, जो अल्टीमेट्स इनके पास मौजूद है, वो काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होने वाले। दे हैव अ रेजरेक्शन टू गेट वन प्लेयर ऑनलाइन अगेन, दे हैव द लॉकडाउन टू कीप द साइड क्लियर फॉर देमसेल्व्स। तो ये दोनों अल्टीमेट्स का इस्तेमाल करके नाउस एक अच्छा राउंड निकाल सकती है। बट अगर वन टीम इस राउंड को डिनाई कर पाती है देन वन टीम के लिए रास्ता बहुत साफ हो जाएगा बिकॉज नाउस भी इस राउंड के बाद धीरे धीरे सेव की तरफ पुश होने लग जाएगी। डेफिनेटली यार, अभी अगर यहाँ देखा जाए तो हाफ शील्ड्स के ऊपर ही खेल रहे हैं, तो एक चीज़ काफ़ी अच्छी है कि वो हाफ शील्ड मेटा को ही अडाप्ट कर रहे हैं, तो इकोनॉमी को काफ़ी अच्छे से इन चेक रखा जरूर जाएगा। बट एक बहुत डीप एम इन स्मोक यहाँ पे करते हुए नजर आए हैं एंड अटैकर्स के पास ऑलरेडी यहाँ पे लॉकडाउन है, तो आई डोंट थिंक उधर वैल्यू देने वाला है। लेकिन सरप्राइजिंगली ए का जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है उसको कोई मार्किंग नहीं करा, तो एक प्रॉपर रीटेक पे बनिया खेलना चाहती है एंड उस रीटेक को करने के लिए उनके पास कोई अल्टीमेट है नहीं, तो दिक्कतें आ सकती है। लेकिन यहाँ पे एक प्लेयर डिटेन भी होंगे एंड यान ली को जरूर शट डाउन कर दिया गया है एंड मिड बॉटम में रेनी अब डिटेन से इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक क्रॉस एंगल काफी अच्छा जाता है, बट एम डुअल यहाँ पे आ रहे हैं। रेनी टेक्स हिम डाउन, 4v4 का रीटेक अब यहाँ पे रहने वाला है वन के पास। एग्जैक्टली एंड दो प्लेयर्स ट्री से अलाउंड साइड दो प्लेयर्स हेवन से यहाँ पर मूव करते हुए नजर आएंगे। जेनी की जो पोजीशन है वहां से एक फ्लैग निकाला जरूर जा सकता है, स्पॉट हो गए लेकिन प्लेयर्स, तो इसी के चलते वो पोजीशन को गिव अप करना पड़ेगा। ट्रेड्स आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, टाइम बाय करना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रेजरेक्शन है लेकिन कर नहीं सकते बिकॉज़ आसपास कोई डेड बॉडी नहीं है। फर्स्ट टू केयर बिट्स एंड ये लीजिए बाहर भी भगा दिया जाएगा उन्हें। शानदार परफॉर्मेंस जूस की तरफ से, बहुत अच्छा राउंड है जिस तरीके से सिर्फ टाइम वेट कराया गया, जो क्रॉस फायर से जो डबल स्विंग यहाँ पे किया रेनी एंड विनर ने, एंड उसके बाद विनर कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्रूशियल फ्रैग्स निकाले अपनी टीम के लिए। एंड जिस तरीके से जो फर्स्ट फ्रैग निकाला गया द रिकॉन बोल्ट एंड देन उसके बाद स्मोक का स्पैम करने के बाद दैट गेम सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हर एक चीज को परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल में लेते हुए अपनी टीम को अभी भी इस मैच में कंटेस्ट के अंदर बनाए रखा है। 9th राउंड ऑलरेडी ऑन बोर्ड एंड नेओस की जो यहाँ पे विन स्ट्रीक थी उसको अब काफी ज्यादा होल्ड पे इसमें डाल दिया गया है। Exactly, Naos is not able to come back from here. Let's see किस तरह से अपने आप को दोबारा से एक हायर ग्राउंड पे रखते हैं बिकॉज थोड़ी देर पहले खुशी में नाचते हुए देखा था हमने नाओस के कोच को। अब सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा गंभीरता की तरफ जा रही है, अब थोड़ा ध्यान से डिस्कशन करना होगा बिकॉज यहाँ से अगर आप इतनी अच्छी इतनी मेजर एडवांटेज के बावजूद हारते हुए नजर आते हैं तो वो तो दुख की घड़ी ही कहलाएगी बिकॉज यू लिटरली हैड 5-7 स्वॉप एंड उसके बाद स्वॉप के बाद ना आपने मात्र एक राउंड दिया था आउट ऑफ 5 विच मीन्स आपने अपने आप को 11-6 के पोजीशन पे रखा हुआ था। अब ये 11-9 हो चुकी है, 3 राउंड लगातार निकाल चुके हैं नाओस वन टीम के प्लेयर नाओस के अगेंस्ट। सो आखिरी टाइम आउट बचेगा यहाँ पर नाओस के पास इसके बाद, जबकि वन टीम के सारे ड्रेन हो चुके हैं। बट वेल अगेन इट्स स्टिल नॉट गोना बी ऑफ दैट मच कंसिडरेशन क्योंकि बहुत कम राउंड्स बचे हैं। बट स्पार्टस क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से वन टीम जीत सकती है? डेफिनेटली जीतने के बहुत अच्छे चांसेस है क्योंकि जिस तरीके से अपने रीटेक्स को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके की टाइमिंग्स यहाँ पे कैच कर रहे हैं वन के प्लेयर्स, ये देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कोई भी एक ऐसा ब्लंडर गेम प्ले नहीं है, कोई यहाँ पे गैम्बल स्टैक के लिए नहीं जा रहे हैं, बहुत आराम से काम एंड कंपोजर के साथ यहाँ पे अपने लिए रीटेक्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड जो टाइमिंग भी है हर एक यूटिलिटी की वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रही है। सो अगेन
वन के लिए स्टार्ट जरूर स्लो हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो मोमेंटम एंड पेस रीगेन करना शुरू कर चुके हैं। बट नेओस की अगर बात की जाए इस राउंड में वापस से एक मिड स्प्लिट आता हुआ नजर आ सकता है। 2 प्लेयर्स ए साइड को कंटेस्ट कर रहे हैं, बाकी 3 प्लेयर्स शायद मिड रन डाउन करने वाले हैं विद दैट रेकॉन बोल्ट एंड जेट इंस्टेंटली उस पर कैपिटलाइज करने के लिए जा जरूर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी विन कंडीशन जो है वन के लिए वो यही है कि ट्री रीजन में ऑपरेटर के साथ जायज मार्क कर रहे हैं। सो कोई भी प्लेयर अगर ट्री से एंटर करने का ट्राई करता है इमीडिएटली उसको शट ऑफ किया जाएगा। एग्जैक्टली सो साइट ए के ऊपर एंटर करने का ख्वाब तो जल्द ही यहाँ पर गिव अप कर देना पड़ेगा नाउस को, बिकॉज वंस दे हियर दैट ऑपरेटर शॉट कमिंग इन आई डोंट थिंक उसको कॉन्टेस्ट करने कोई भी जाना चाहेगा एंड फिर साइट ए को तो अबैंडन किया जाएगा। ये एक काफी अच्छा फोर्स मूव है फ्रॉम द साइड ऑफ वन टीम एंड नाउस को फोर्स किया जाएगा टू मूव टुवर्ड्स साइट बी, जहाँ पर देखिए किलजॉय की यूटिलिटीज कितने अच्छे तरीके से डिप्लॉयड है ऑलरेडी। ब्यूटीफुल मार्केट के रीजन से आप एंटर करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नैनो स्वॉर्म्स रहने वाले ऑन साइट भी, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करेंगे आपकी एंट्री को। जैसे ही आपके साउंड का क्यू आएगा वैसे ही उनको ट्रिगर कर दिया जाएगा एंड टर्रेट तो खैर एक बहुत ही विशालकाई इंटेल गिविंग डैमेज डीलिंग एबिलिटी रहती ही है यहाँ पे। सो दैट्स ऑल्सो गोना बी इन अ वेरी सेफ पोजिशन नियर द लॉन्ग्स। ओके मार्केट तक पहुँच चुके हैं। बी हिट एंड आई गेस यहाँ पे कहीं ना कहीं वन को प्रेडिक्टेड था कि बी हिट आ सकता है। दोनों प्लेयर्स बैक साइड खेल जरूर रहे हैं एंड इस बैक साइड का कंट्रोल रिटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है इस समय। बट द रेजरेक्शन इज स्टिल अवेलेबल एंड अभी भी आगे देखा जाए विनर अभी भी उस एंगल को गार्ड करते हुए नजर आने एंड वन की टीम बिना कोई रोटेट करे इनफ टाइम में बाय कर चुके हैं। आखिर के अब 10 सेकंड के अंदर कहने के नेओस को ए साइड पे हिट करना पड़ेगा एंड जायज के ऊपर फॉर द रिस्पांसिबिलिटी टू बाय द टाइम एंड ही विल बाय द टाइम। डन एंड डस्टेड फ्रॉम जायज। एंकर कर रहे थे, ब्लेम स्टॉर्म निकाला, चारों प्लेयर को शट डाउन करते हुए एंड जो यहाँ इमीडिएट रोटेशन का कॉल था फ्रॉम साइड ऑफ नेओस ये बहुत ज्यादा भारी पड़ गया उनके ऊपर। हंटर फ्यूरी का इस्तेमाल प्लेयर्स को टेक डाउन करने में कामयाब। यहाँ पे लॉकडाउन डिप्लॉय किया वायर ने, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं मिलती थी। हर एक चीज जो यहाँ पे नेओस करना चाहती थी उसको इमीडिएटली शट ऑफ किया गया है। The most beautiful round of the day so far. हंटर फ्यूरी इस्तेमाल हुई, काफी अच्छा डैमेज मिला, सीधे के सीधे एक प्लेयर को शट डाउन कर दिया। रेजरेक्शन अवेलेबल था, दोबारा से उनको वापस लाया गया गेम में एंड हिट रोटेट करने की कोशिश की गई। डिफेंसिव स्पॉन से यहाँ पर नाउस मूव होती हुई नजर आई, लेकिन सिंगल हैंडेडली जायज ने सबको शट डाउन कर दिया एंड इट वाज कंप्लीटली अनइमेजिनेबल द वे ही बॉट टाइम। हमें लग रहा था टाइम बाय हो सकता है, उन्होंने लिटरली पूरा राउंड बाय कर लिया अपने आप के लिए। दिस वाज ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड एंड पूरा का पूरा क्रेडिट यहाँ पे ज़्यूस को। डेफिनेटली एंकर करने का जो उन्होंने रोल निभाया वो बिल्कुल परफेक्ट था। अब कह सकते हैं आखिरी बाय राउंड रहने वाला नेओस का, क्योंकि अगर क्रेडिट्स देखें तो बहुत ज्यादा वीकन अप नजर आ रहे हैं। वो आखिरी बाय राउंड में भी दिक्कत आएंगे बट इंस्टेंट ट्रेड आएगा यैनली पे। 0 पॉइंट इस्तेमाल कर रहे थे कॉट ऑफ गार्ड बट रेनी स्टिल एमिन का कंट्रोल काफी अच्छे से बनाए हुए हैं। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा पापी जी लोगों को, बट फाइनली यहाँ पे उस एरिया को कवर अप करते हुए नजर आया। थोड़ा जल्दी आने की दरकार जरूर थी, टीममेट्स गॉट शट डाउन बट नाउ साइड इज इन देयर कंट्रोल। 1v3 होने वाला है शवाई के लिए, सो उनको सिर्फ टाइम यहाँ पे बाय करना है। बैरियर ऑफ सॉल्व दो, उनकी रोटेशन में मार्क जरूर कर देगा बट अब यहाँ पे रीटेक जैसे स्टार्ट होगा वेट्स का ये ऑफ एंगल पनिश करेगा दोनों ही प्लेयर्स को। दे गॉट टेकन डाउन एंड जायज वापस से एक ऐसी सिचुएशन में है कि यहाँ से अपनी टीम के लिए एक मैसिव क्लच निकालना पड़ेगा। 1v2 का सिनेरियो, एक प्लेयर हेल के अंदर खेल रहा है, एक प्लेयर जनरेटर, तो क्रॉस फायर बिल्कुल है परफेक्ट फ्रॉम द साइड। द क्लाउड बर्स्ट कम्स इन एंड उसके अंदर ये खेलते हुए नजर आ रहे थे वेट्स, लेकिन इंस्टेंट शट ऑफ किया गया। लेकिन मॉयर का फिर से स्मोक स्पैम को वैल्यू निकाल के देगा। मैच पॉइंट पे अब नाउस आ चुकी है। बहुत ही शानदार गेम प्ले फ्रॉम द साइड ऑफ विट्स एंड मोहे। साइड को अक्वायर कर ही ली थी एंड साइड को होल्ड डाउन करने के लिए जो एक क्रॉस फायर चाहिए थी बहुत अच्छे से मेंटेन करी दोनों ने। दे वर एबल टू होल्ड देयर एंगल्स प्रीटी वेल एंड जैसे ही क्लाउड बर्स्ट आया अंदाजा हो चुका था कि क्लाउड बर्स्ट का उपयोग किया जाने वाला है यहाँ पर एंड उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट भी किया। द स्पैम वेंट परफेक्टली वेल फॉर द साइड ऑफ मोहेर एंड द राउंड वेंट फॉर द साइड ऑफ नाउस। मैच पॉइंट पर आ चुके हैं, अब एक आखिरी राउंड बचता है एंड यहाँ पर जीत हासिल कर ली तो फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हाउएवर अभी भी संभावना है कि ये राउंड हाथ से जा सकता है एंड अगर फिसल गया तो फिर वन टीम भी यहाँ पर ओवर टाइम पे पुश करने के लिए कामयाब हो जाएगी बिकॉज 11th राउंड एंड उसके बाद में सेव पर पुश करी हुई नाओस के ऊपर 12th राउंड। सिचुएशन अभी भी हाथ से गई नहीं है उनके, बट इस राउंड में पूरी जान झोंकनी पड़ेगी। आई थिंक इस राउंड की सबसे विन कंडीशन यही है कि विनर को जैसे ही फ्रैग मिलेगा उनके पास लॉकडाउन अवेलेबल आ जाएगा। लॉकडाउन अब उनके पास आ चुका, सर्वाइव करना, लेकिन लेन कवर अप नहीं कर रहे शिवाय ये शायवाई, इनको ये थोड़ा सा भारी पड़ेगा अपने टीममेट के ऊपर क्योंकि वो लेन कवर की जिम्मेदारी इनकी थी यार। ही गॉट टक इनटू द कवर एंड ये यहाँ से कह सकते हैं कि शायद वन
इतना क्लोज आके भी इस एसएन के मैप को जीतने में कामयाब नहीं रहने वाला है। 2v4 का सिनेरियो मोया डेफिनेटली लो एन एचपी है जरूर, लेकिन फीलिंग बहुत आराम से उनके ऊपर पहुंचा दी जा सकती है अगर यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव आने का ट्राई करते हैं। बट फॉर नाउ दे आर बाइंग द टाइम, दे गॉट डिटेक्टेड। काल यहाँ पे शट डाउन करेंगे एक और बेर को। गैनली इन अ 1v4 कांट डू मच, ही कैन टेक एन ऑफ। एक बहुत अच्छा राउंड है उसने निकालते हुए नजर आई एंड वन ने ट्राई बहुत अच्छा किया, बैक करते हुए नजर आए टुवर्ड्स द डबल डिजिट राउंड, लेकिन उसके बाद जो अडैप्टेशन थी नाओस की वो बिल्कुल पिंच परफेक्ट थी एंड देन थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन उनके ऊपर और ज्यादा भारी पड़ता हुआ एंड पहला राउंड द मैप पिक ऑफ वन ई-स्पोर्ट जो नाओस जीतते हुए नजर आ रही है। Absolutely amazingly done. Both the teams tried their best and काफी अच्छा वो बेस्ट हमें देखने को भी मिला। बहुत ही शानदार प्रदर्शन एंड वो जो एक राउंड था जहाँ पर छोड़ के निकाला जाए अपने ब्लेड स्टॉर्म से was definitely one of the highlight rounds of the whole match. एंड आई गेस कि उसके बाद कहीं ना कहीं मन में इच्छा से आने लगी थी कि वन टीम एटलीस्ट ओवर टाइम तक तो पुश कर ही जाओ, लेकिन नाउस वाज ऑन पॉइंट। दे न्यू एग्जैक्टली कहाँ से राउंड हारने की अपॉर्चुनिटी नहीं बचने वाली है एंड उन्होंने अच्छे से कैपिटलाइज किया, क्लोज डाउन किया। स्टार्टिंग इटसेल्फ बहुत ही शानदार थी जैसा आप देख सकते हैं, द नाइफ किल एंड उसके बाद में 2 फ्लॉलेस, ब्यूटीफुल। बट येस आई स्टिल फील कि जो ऑन द फ्लाई थिंकिंग वाला पार्ट है वो वन टीम के लिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट रहने वाला है एंड दैट्स समथिंग दैट डज नॉट चेंज ओवरनाइट। सो अभी भी मुझे लग रहा है कि चांसेस जो नाउस के वो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। वन टीम का बहुत अच्छा हिस्ट्री रहा है एसएन के मैप पे एंड वहाँ पर भी उनको जीत हासिल नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ब्रेकर भी बन चुका है ये उनका एंड अगला मैप रहना है नाउस का खुद का। सो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रही है नाउस के लिए अभी। डेफिनेटली, बट अगेन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि आप इतना ज़्यादा क्लोज आ गए थे वन के लिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगे उन्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मोमेंटम गेन कर लिया था वो 10वें राउंड तक जैसे ड्रैगर करके आए थे। देन इट लुक्ड लाइक कि शायद अब यहाँ से वन जीतने में कामयाब हो सकती है एंड ये जो राउंड निकालता जायस ने बिल्कुल कॉन्फिडेंस बूस्टर था पूरी टीम के लिए। पर फिर अचानक से ये जो डबल स्विंग देखा गया एंड उसके विड्स का ये ऑफ एंगल बिल्कुल कहानी बदलता हुआ नजर आया एंड देन कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पाए। एंड अगेन जिस तरीके के जो गेम प्ले रहा है उसका अप्स एंड डाउन्स से जरूर, बट द अटैकिंग साइड वाज वेरी वेरी क्लीन। जिस तरीके का ओवरऑल यहाँ पे एग्जीक्यूशन था, खासकर मिड कंट्रोल लेने के बाद वो टाइल्स के अंदर फ्रैग्स के लिए जाना एंड देन गोइंग टुवर्ड्स द कैट वॉक, टेकिंग प्लेयर्स डाउन, वन के लिए अडैप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। एग्जैक्टली, बट वेल और ज्यादा जानकारी हम डिस्कस करें उसके पहले एक बार नजर डालते हैं ऑन टू द इंटरव्यू। सो लेट्स गो टू द इंग्लिश डेस्क। Left. So far, so good here. Do you want to talk about, how your journey has been through Ascension Pacific so far? Actually, we got a rough start and a shaky start, and because we can't close out the runs that we needed, so we got lost by Zerxia. And so far, up to this day, I think it's good. It's going good. Now, you've had a lot of high expectations. The people back home in the Philippines, of course, they're looking up to you guys. You're sort of like the secondary hope coming through the challenges, obviously. And you want to be that second Filipino team making it all the way to VCT Pacific. Is that adding a lot of extra pressure? Does that affect your gameplay, or have you been around for a long enough time that it doesn't really affect you anymore? I think for us, it doesn't really affect us because we're just focusing on our goal and doing it step by step. Beautiful. Now, of course, your individual goals, you've played tactical FPS for a very long time now. You've got a lot of experience. In Valorant, has the goal changed? Is it just looking to make it out of the Philippines, make it into an international league, or is it just more about, the passion for you? For me, I want to win. I want to win Ascension and then hopefully go to Pacific League and join the big teams. What would it mean to you personally if you did make it into VCT Pacific? It means how do I say it? It's like the world to me because it's like everyone's dream playing Valorant and in the Pacific League, or the franchising league. So yeah. Beautiful. And what keeps you passionate? What keeps you playing the game? Because you've been in tactical FPS for so long. Is it just that competitive drive? Is it just the glory you get every time you win? Yeah, I think it's the passion and just every time we're losing, we're just converting it to motivation. Yeah. Beautiful. And that's been me and Papi Chulo. Good luck in your last game.
And unfortunately for Taiwan and one team, now's the time. And unfortunately because of that, they lost the map. It was maybe a little bit too messy at the start of Ascent for one team. Now's they're thriving in the pressure, they're thriving in the chaos, and they managed to get too many rounds in that first half for one team to formulate the comeback. But that didn't stop them trying. They got so close. But my big takeaway is Naos with this half-buy approach they're doing and utilizing with that economy. It stretches out that economy for so long and just keeps up the pressure, and one team eventually cracked. Yeah, I mean, we look at how they were able to finally adjust late into the game. We always kind of question why isn't it cleaner than it should have been. But hey, if you're one team right now, perhaps they can still go down here with a great fight. If they win this series, that might just bolster kind of their stock value for the offseason, how maybe they can be picked up by, or at least even continue this team. The series still matters, guys. Come on. Even though Naos is kind of into the playoffs right now mathematically, what seed will they end up in? If they win the series, they're going to have to deal with whoever wins versus Boom versus Zerxia in terms of the standings. Right now, they're trying to avoid the Fancy United third slot that's there. And overall, Mac mentioned it so much earlier on. First half, Naos built that lead, and they're able to use that as a springboard. Yeah, great performance from Wits as well. You're looking at his Sage here, 24 and 13. Big performance. Man was feeling sharp today. And usually when you're looking at this team, you're not looking at Wits to be the one to carry, right? You're looking at some other names. You're looking at your Jar. You're looking at your Papi Chulo. You're even looking at Senor Carl. But today it was the IGL that did it for them. Shout outs to Xiaoyu, some of those plays, my lord. Yeah, that 4K, the 4K blades on the punish was great. Yeah, the clutch moment too possibly there. It's a heartbreaker for one team because that second half was the best we've seen from them all throughout that series. It was Zhao Wei having some incredible holds, Yanli keeping an angle every single time that Naos would try. Yanli would be there, and Rainy and Winner picking up the moments when they needed to the most. But it's just that overwhelming scoreline that Naos builds so very early on. And it's really the buffer that has kept Naos alive in this tournament. Yeah, that's exactly it, right? A very solid start out of the gates was enough to secure the playoffs position. But as you mentioned, they now need to play for placement. They now need to play for glory, and the job's not quite done. One team, of course, have a chance to make a reverse sweep happen and just show that Taiwan Valorant is something to behold, something to be worried about. But of course, they can't make playoffs now, which is a bit of a sad story in the series. But it needs to be said. It needs to be said. One team can still impress us, and they have won the hearts of many. They've won the hearts of me. And every time I walk past Yanli's dad over there, he's just got this folder with all these fold-out pictures of Yanli. It's like, welcome, Yanli. He was the first one here. Like, before the gates were open, he was already asking us which side is one team going to play. He wanted to dedicate his heart to his son. And it's lovely to see that kind of passion, especially from the Taiwan region. These guys, there's so many fans behind them, and they want to see them succeed. Hey, I mean, I think also the family here of Amix, the coach of Naos, is also here. His mom is here, his sister is here. So it's great to see that, they've got some backing from their families as well. And the support, I bet it keeps their spirits alive and ever well, especially in these type of matches. Yeah, that's a thing for professional players as well, right? Sometimes if you don't have that support behind you, if your family doesn't agree with what you're doing, it makes the job that much harder. So having your family on your side, having people here to support you, to make you feel good, is just, it's a bit of a caveat to everything. Now, look, let's start turning the conversation to where we're going. It's split. And I have one big question, right? We haven't seen Naos play this, but they've picked it. But they've already secured playoffs. So do they show their strats? Do they show what they've been working on? Or do they go for a different approach? I think they do. Because you mentioned it. They have no proof whatsoever. This is the best litmus test that they have right now. They can be a bit more calm that playoffs is already secure. They want to go for that seeding. And sure, it'll be a VOD for other teams to study. But they themselves need to finally get to play this map. I mentioned it a while ago. There are times where they do let it pass in the map pool. They just don't make it that far. And as of right now, there is that confidence for Naos that they can get the win through this. That's the thing. It depends on what they value more here. Being able to have an actual proper field test of what they're planning up, or trying to hide those strats because they know playoffs bound. They're going to have to play it at some point. What are we thinking from now? Like, we haven't seen him for 9 months. We haven't seen this lineup do it. So let's talk agents, right? Let's talk. I'm wondering, where are they going? Actually, like, do they put Modra in the front line back again? Because they like to play Raze, right? And whenever it's Raze, a lot of times it's Modra in that front line. Do they go for Papi Chulo Omen, or do they even decide to go for the Astra? Does Wits play something like the Sky, or can he run that Sage yet again? There's so many possibilities on the agent pool here for Naos.
I would be surprised though if they do go double controller, because we've seen how stable they are with the Sentinel. I have a bigger surprise and a curveball for Yeah. you. What if this is where they put their 6-man in NDG in? Nah. No believers. Nah, I don't think so. He's a Sova main. That's why they made that comp work last time on the Ascent, because since you have Senior Carl who can still play the Sova, NDG used to use that when Wits was playing Stage. True. It worked out. Hey, you with know? people pulling out Sova and Fracture, you might just see it on Split nowadays No. too. What about Ja? What about Ja? He's been able to pick up the Chamber every now and then. Chamber not necessarily a meta pick for Split, but with those buffs coming in, you can get aggressive. You can go for those early picks. You can play mid, and also still use that trademark, which is a little bit more potent now. I'm actually also wondering if instead of going to the chamber, if he pulls out the Cypher, because we've seen that from him in the past too. Yeah, and then look at the side for one team. What do they run? Double controller, double duelist. So it's going to be high impact onto the site with a strong front line, and then there is that to be a bit of that lurk potential from the Asha and the Viper, depending on how they want to manipulate that battlefield. So talking about that Cypher, it can be actually very effective. If Naos do want to go for a bigger stack onto a site, leave some traps behind just for the retake later on, it can help them. Ooh, I just don't know which way this one's going to go. The theory crafting. It's just we've spoken about unknown quantities all week, right? And now this is the biggest unknown quantity. Yes, they're hitting their stride. Yes, they're playing out of their minds and looking to hit that playoffs performance. But going into a map which we haven't seen them at all, it's literally just theorizing what's going to happen, because we don't know who's playing what. They've done that thing where they're like, yo, I'm going to play a duelist today. I'm going to be a controller today. Yeah, I'll be the flex initiator. It just is what it is. And we just have to strap in and essentially sit back, enjoy our steel case chairs, and watch the show. And that's what I'm doing downstairs. I've been happy for how many days we've been here. Just sitting back, relaxing, watching the games. Yes, we stand up from time to time just like that to check out the action. But I do wonder how one team is gonna try and take this map in the first place. They haven't succeeded so far. Losses against Fancy, losses against Boom. And from what we've seen for both Boom and Fancy United, it's about how they set up their play and condition one team, that they have this presence elsewhere. Like, for example, when you watched against Fancy United, I think it was Nizzy who was playing that Cypher. He would bring in one team towards Sewer, just buy that space in time, that pulled attention away, and one team couldn't rotate in time for the sites. Yeah, that's a good point, because Nizzy just wreaked havoc here from the backline when they did play against Fancy on Split. And I wouldn't be surprised if they pulled out the Sage once more, because we look at their composition of what one team brings out, your double controller, they bring that double duelist in the Jet and the Raze, and so there's many ways for them to get into the site. Having a tripwire could be one of their biggest problems, and also because they only have that Sky for information gathering, they might not be too aware of what's happening with a Cypher lurking anywhere and globally throughout the map. And you wonder here, if Naos are going to bring that strat on out, and whatever they show up, we still have the question remains, is this actually what they plan to play, or do they specifically pick this against one team in terms of composition to kind of save and hide some strats? Copium maybe, Hopium possibly, I do love for the playoffs. Copium is my favorite. Now look, it feels like we're taking a little while to go to the flyovers. It's like something seems to be not going super right. So let's just chill out. And before, of course, we get into the game, you guys aren't going to be here for the next two games for today. Orangutan up against Bonkers. I want to know your quick thoughts on that one, as well as Zerxia up against the big dogs. Boom. The big boomers. Boomers? Indonesian Any superpowers. I mean, I'm going to go for Bonkers in terms of the second matchup. They have proven it here. That win against D+, it brought eyes to the squad. Of course, you guys have been hyping them up even before we got started. But I'm a believer now. I've always believed in the RDW, but Lou, man, just how incredible has his performance been so far. Dragon's been very impactful. I love also what we've seen from Minimize, some of the cheeky angles that he can take. You gotta believe in Bonkers in that kind of situation. I mean, my esports answer here, the real one that I officially put in was Bonkers, because they're definitely the better team. They're definitely the one who have proven more and been able to do more and have more expectations of them. And also a better storyline. But then I kind of want OGS to do something here in their final game. I love it when, just a team just brings another down with them, just soils and foils the plan. And if that's their intent, then this is a perfect game to do it. Remember our local challengers? The old Naos esports roster from back then. They were incredible in Split 1. They struggled in Split 2, and they were last seed. And the last game that they did, they brought down a team called Action PH
from second seed all the way to seventh just to eliminate them in the last game. Just one so game. that's why he's a lover of that. We were watching that game, and he was just elated to see something. Especially like since there's Filipinos on the Orangutan squad as well, so they know how to do it, and we might just have some hijinks, but I think that second series, rather the third one you talked about as well, Zerxia versus Boom, that is where the stakes really matter because it's do or die for both of those teams. That was do or die for Thailand, you know. Are Thailand going to be able to get that team in the arena, in the playoffs, and, you know, it's literally all or nothing. They're going to be at the top of the group from the bottom to the top, or they're just going to be straight out completely. There's no other That'd be option. crazy, So especially must win. Especially for the two kind of regions in SEA specifically that were touted as the powerhouse. Thailand and Indonesia, they have some of the best players, some of the best teams, and to have one of them missing in the playoffs, huge implications. And think about the storyline implications themselves. Was Zerxia supposed to be here? Was Boom supposed to be here? There were a few favorites, a few other names up for contention on their own local stages, but they're the ones now representing the banner, and now they're in the situation where they have to eliminate one another. Coming into expectations for Group Alpha, we thought that Zerxia and Boom would be the ones to run away with it. Apparently, we're just seeing Thai after Thai instead. Yeah, I just am so confused as to how everything's going to be playing out, everything's going to be going down, and the storylines on today are just insane. We can quickly touch on tomorrow as well while we're filling time. You know, we got the Bleed matchup up against... They're playing, no, Bleed are playing Bonkers, and Scars are playing D plus Kia. So that's what's going down tomorrow. They're going to be the final games of Group Omega. And again, that is going to shift where teams are in the groups. That's going to shift up the head-to-heads, which very much matter because D plus Kia have shaken up everything. There is a world where Bleed can miss out. Yeah, it's crazy to think who is the big dog of that group. It's changed day per day. We thought it would be D+ coming into the tournament. It became Scars, and then Bleed beat Scars, right? Because we also saw D+ struggle against Bonkers and lose out, and then suddenly D+ comes in and says 2-0 Bleed, no problem whatsoever. If we do see Bonkers win today against Orangutan, we're gonna see another tie that we didn't expect from that group compared to Group Alpha, and it just goes back to how do or die these last 2 days are. We thought it would be a bit more chill sometimes with a few teams that they ascend into the score lines, but as of right now, every match matters. Well, let's start talking shop. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से VCT Ascension Pacific 2023 में। मैं हूं आपकी होस्ट आना एंड मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्पार्टस। अभी हमने एक बहुत रोमांचक मैच देखा है ऑन द मैप ऑफ असेंट बिटवीन नाओस एंड वन टीम। अब इन लोगों का दूसरा मैच ऑन स्टेज आ चुका है व्हिच इज स्प्लिट। स्पार्टस, व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट दिस? एंड आल्सो यानली को सब्स्टिट्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, सो एक नए प्लेयर शी का इस्तेमाल यहाँ देखने को मिलने वाला है। एंड लेट्स सी कि इतने हाई प्रेशर मैच के अंदर वो किस तरीके से डील कर पाते हैं अपने इस कह सकते हैं आज के दिन के पहले मैच को। एंड जहां तक बात की जाए दोनों टीम के कॉम्पोजिशंस की, वन टीम विद अ डबल डुएलिस्ट डबल कंट्रोलर कॉम्पोजिशन रन कर रही है, से इंफॉर्मेशन के रहने वाला स्काई उनके पास। एंड वही अगर बात की जाए नेओस की, तो वो अगर यहाँ देखे जाए डबल इनिशिएटर्स है जरूर, लेकिन केओ बीइंग दैट सेकंड इनिशिएटर एंड विद दैट डबल कंट्रोलर, एक बहुत ज्यादा यूनिक कॉम्पोजिशन है दोनों ही तरफ। बहुत ही यूनिक कॉम्पोजिशंस के साथ रन कर रहे हैं। लेट्स सी क्या वैल्यू यहाँ से निकलने वाली है। आई रिमेम्बर स्पार्टस के जब स्टार्टिंग में मैप पिक्स चल रहे थे तब आपने बताया था कि स्प्लिट का जो मैप पिक है उसने कंप्लीटली यहाँ पर ऑफ गार्ड पकड़ा है वन टीम को, बिकॉज दैट्स डेफिनेटली नॉट समथिंग दैट वन टीम वाज एक्सपेक्टिंग कि नाउस यहाँ पर पिक करती हुई नजर आएगी। ऑलरेडी पिछले मैप में अपना जो कॉम्पोजिशन था वो कंप्लीटली स्विच करके यहाँ पर सरप्राइज फैक्टर ले आए नाउस के प्लेयर्स, एंड इस मैप में एक मैप इटसेल्फ सरप्राइज फैक्टर आया है नाउस की तरफ से। लेट्स सी हाउ वन टीम कोप्स अप हियर। हमने लास्ट केओ को कब देखा था स्प्लिट में, क्योंकि वो एक कंटेस्ट जरूर है। आप डबल कंट्रोलर जरूर देखते हैं, एस्ट्रा दोनों साइड से बहुत रेयरली दिखते हैं आपको। जनरली ओमन एज अ सेकेंडरी कंट्रोलर मिलते हैं वहाँ। अब एस्ट्रास खेल रहे हैं दोनों ही टीम्स, लेकिन केओ का जो इन्वॉल्वमेंट है विड्स के साथ, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सरप्राइज रहने वाला है। क्योंकि अब ये जो डबल डुएलर्स खेल रहे हैं वन टीम के प्लेयर्स, एक लिए दिक्कत यही रहने वाली है कि जैसे ही यहाँ पे साचल करके या फिर अल्टीमेट लेके अंदर आ रहे होंगे, एक खतरा जो बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहेगा वो रहेगा कि 0 पॉइंट्स अगर सप्रेस हो गए पूरा साइड हिट यहाँ पे उनका डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो दे हैव टू कीप दैट इन माइंड। बट एक चीज जरूर है कि बहुत ज्यादा अटैकिंग गेम प्ले हमें देखने को मिलने वाला है। 0 सेंटिनल्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, ये बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। जनरली हम देख रहे थे रिसेंट डेज में कि एक साइफर का इस्तेमाल हमें होता हुआ नजर आ रहा था स्प्लिट पे, बट आज के दिन तो वो केस भी नहीं है।
एग्जैक्टली एंड आप अभी पूछ रहे थे कि केओ का इस्तेमाल लास्ट कब देखा था एंड आई रिमेम्बर दैट वीसीटी पैसिफिक के टाइम टीम टैलेंट ने बोला था दैट हम लोग केओ का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं बिकॉज उसकी वजह से यू आर एबल टू सप्रेस द एबिलिटीज एंड देन वॉक बैक इन। जैसे ही आपने हाईलाइट किया वो पॉइंट मुझे याद आया वो इंटरव्यू टीम टैलेंट का फ्रॉम वीसीटी पैसिफिक अर्ली डेज एंड आई फील दैट वाज द लास्ट टाइम वी सॉ दैट हैपन। बट देखते हैं यहाँ पर कितना यूजेज निकाल सकते हैं बिकॉज जैसा कि आपने बोला दोनों के दोनों डुअलिस्ट यहाँ पे नलिफाई करने की ताकत रहने वाली है नाउस के पास में एंड द कंप्लीट फास्ट एग्जीक्यूट्स तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाले हैं एज लॉन्ग एज केओ इज ऑन द राइट साइड। हाउएवर डिफेंस फर्स्ट इस बार वन टीम के पास में रहने वाला है सो KO being on the right side is the thing that will work out pretty well for the attacking side on Naos. Again, अब यहाँ पे Naos again पिछले बार एसेंट के ऊपर तो अटैकिंग साइड में भी बहुत क्लीन नजर आए थे। लाइक कह सकते हैं कि वेल रिहर्स इनके अटैक्स हैं, इनको पता है कि किस प्लेयर को किस टाइम पे यूटिलिटी डंप करनी है किस एरिया में, सो दे नो दैट एंड ये वेल रिहर्स स्टैट्स को लेट्स सी किस तरीके रोक पास देखो कि अभी अगर सेटअप की बात किया Naos के दे आर गोइंग फॉर द फास्ट ए हेड एंड एस्ट्रा। यहाँ पे एक लेट लड़का मिड का रोल निभाएंगे, वो लेट आएंगे हेवन के ऊपर, वो हेवन का प्लांट खेलने के लिए। एंड वन टीम की अगर बात करें ट्रिपल स्टैक मिड पे करना चाहते हैं, मिड कंट्रोल लेना जरूर चाहते हैं, सिर्फ एक प्लेयर को रखा है ए साइड पे दैट इज द स्काई एंड वो ज्यादा देर तक तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे डिले भी करवा पाएंगे, लेकिन एक इमीडिएट रोटेट आएगा एंड ये कहीं ना कहीं फास्ट जो रीटेक है वन का ये कारगर साबित होता है। स्मोक को स्विंग आउट किया, शायद भाई यहाँ पे पहला फ्रैग निकालेंगे एंड Naos के लिए थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ा दी क्योंकि शी जो भी एक नए सब्स्टिट्यूट की तरह खेल रहे हैं वो ऑलरेडी हेवन से स्मोक पुशिंग करके फ्रैग निकालने का ट्राई कर रहे हैं। एग्जैक्टली बट Naos यहाँ पर अपने गन गेम में ऑन पॉइंट रहने वाली है एंड दे हैव ऑलरेडी मेड इट अ 1v3 सिचुएशन जहाँ पे फाइट ऑफ करना थोड़ा मुश्किल जरूर था लेकिन जीत फिर भी हासिल कर चुके हैं। देयर देखो प्लांटिंग Batorifying those last 300 extra credits for every single player on their team and Naos बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर उठाती हुई नजर आ रही है being on the attacking side because extra credits means extra marks for good fighting. डेफिनेटली ये 300 क्रेडिट्स आपको चाहिए था। लाइक अगर सबको देखें सबके पास स्पेक्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं ऑन साइड ऑफ Naos, ये काफी लाइक डिफरेंट सी चीज है क्योंकि हम जनरली देखते हैं टीम्स को दे एटलीस्ट ट्राई टू इन्वेस्ट इन अ वैंडल, एक राइफल जरूर हर टीम बाई करना चाहती है बट Naos ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है, सारे प्लेयर स्पेक्टर्स एंड बुलडॉग पे स्टिक कर रहे हैं। अभी के लिए अगर देखा जाए सो मिड हैवी यहाँ पे एक प्रेजेंस जरूर है वन की बट उनको ज्यादा कोई दिक्कतें नहीं आने वाली क्योंकि अभी के लिए लाइक स्प्लिट कैसा मैप आप कह सकते हैं जहाँ पे आपको वीकर वेपन्स भी बेनिफिट दे सकते हैं अगर वो शॉटगन्स है तो, लेकिन ये क्लासिक सेंट शेरिफ के साथ कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। पापी चलो टेक द फर्स्ट ब्लड एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं शी को फॉल बैक करना पड़ेगा। ऑल्दो सिर्फ क्लासिक इनके पास कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते हैं बट शॉर्टीज का इस्तेमाल ना करना ये थोड़ा मेरे को सरप्राइजिंग है क्योंकि आप एटलीस्ट इस ऐसे राउंड में चाहते हैं कि आप एक क्लोज एंगल को शॉर्टी के साथ कैंप करते हुए नजर आए एंड कुछ फ्रैग्स आप अपने फेवर में कर सकें। एग्जैक्टली यहाँ पर फ्रैग्स को तो अपने नाम करती हुई सिर्फ Naos दिखाई दे रही है फिलहाल के लिए एंड अपनी प्रथा यहाँ पर कायम रखते हुए अपने एंटा इको को कम्प्लीटली फ्लॉलेस फैशन में खत्म किया जाएगा आज के दिन में तीसरी बार Naos के द्वारा एंड नाउ देयर अप फॉर द बोनस। However, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप जब इतने डिटरमाइंड है कि आप फ्लॉलेस तरीके से अपना राउंड एंड करना चाहते हैं ऑन द एंटा इको देन बेटर इन्वेस्ट इन बुलडॉग्स बिकॉज वो ज़्यादा एक बेटर वेपनरी साबित होती है ऑन द लॉन्गर रेंज बट देन स्पेक्टर्स रहने वाली है मोस्टली सिर्फ एक बुलडॉग दिखाई दे रही है Naos के पास तो देखते हैं क्या उसका यहाँ पर कैपिटलाइजेशन बन पाता है इनके लिए। लाइक अभी तक तो कह सकते हैं एक काफी क्लीन राउंड देखने को मिल रहा है एंड Naos का जो अटैकिंग साइड है कुछ ऐसे क्लीन रहता है एंड वही क्लीननेस का फायदा फिर से उठाएंगे। एक परफेक्ट एग्जीक्यूट ऑफ गार्ड पकड़ा गया शी को एंड सबसे दिक्कत यही है शाओशी के लिए तो वो इस एरिया के अंदर स्मोक ऑफ करना चाहते हैं एंड वो मूव इन करे वेंट टू बी हेवन। आप इतना बड़ा गैम्बल तो नहीं ले सकते अगेंस्ट समवन लाइक Naos जो एक्चुअली किस तरीके से अटैक करेगी आपके लिए प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है बट जाए स्पॉट किए जाएंगे एक प्लेयर द्वारा, शॉट एक्सचेंज किया बट डैमेज अभी तक डिले नहीं करते हुए। एग्जैक्टली काफी अच्छा क्रॉस फायर भी यहाँ पर बना हुआ था, पुश बैक कर दिया गया है जायस को तो अब बहुत अच्छे से यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी थ्रू द वेंट एंड ये लीजिए कंप्लीटली एक्वायर कर लिया गया है साइट ए को। साइट ए के ऊपर जो एक सबसे बड़ी दिक्कत इनके लिए बनने वाला था दैट वाज द टॉक्सिन स्क्रीन, लेकिन अब टॉक्सिन स्क्रीन यूज हो ही नहीं सकती बिकॉज शाओशी को स्टार्टिंग इटसेल्फ में यहाँ पर पिक ऑफ कर लिया गया। चाहे वे अकेले बचे हुए हैं जो साइट के अंदर स्थापित है, बाकी प्लेयर्स को अभी भी रोटेट करने में टाइम लगने वाला है। चाहे वे लेकिन ऑफ गार्ड पकड़ेंगे यहाँ पर जा को एंड जा इज ऑफ द मार्क। राइट नाउ इट्स अ 4v4 रीटेक सिनेरियो जिसको 3v4 में कन्वर्ट करने के लिए पापी चुलो सक्षम साबित होने वाले हैं। एक और बोनस कन्वर्जन हमें शायद यहाँ देखने को मिल सकता है क्योंकि एंगल बहुत अच्छा बट विनर अपना डुअल जीतेंगे। 5 HP पे सर्वाइव कर रहे हैं बट स्टिल मैनेज टू विन दैट डुअल। एक 2v2 का सिनेरियो रहने वाला है लेकिन रेनी एंड विनर
एक लेग शॉट दूर है टू गेट टेकन डाउन एंड जहां स्पाइक को भी प्लांट किया गया उसके लिए भी काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाली है क्योंकि ओपन प्लांट है यहाँ पे। सो अगेन जैसे वन के प्लेयर्स ड्रॉप डाउन करेंगे दिक्कतें और बढ़ेंगे। रेनी एक ऑफ एंगल होल्ड जरूर करे, विंडो का नहीं ऑफ एंगल वैल्यू भी देता हुआ नजर आएगा। एक फ्रैग निकाला बट दैट स्पेक्टर इन दैट क्लोज रेंज वैल्यू निकालेगी इसके ऊपर एंड अब तो यहाँ से स्पैम करके भी विनर को शट डाउन किया जा सकता है एंड बिल्कुल करते हुए भी नजर आएंगे। एक और बार बोनस राउंड कन्वर्जन देखने को मिलता हुआ नेओस की तरफ से एंड एक और मैप में या फुल कंट्रोल में नजर आ रही है नेओस की टीम। एग्जैक्टली बोनस राउंड यहाँ पर कन्वर्ट किया, नॉट इन द फ्लॉलेस फैशन एज दे यूज्ड टू डू अर्लियर, बट कोई बात नहीं, काफी वैल्यू यहाँ पर स्क्वीज आउट कर चुके हैं एंड दोबारा से सेम मैथड को लेके आगे तो चलना ही नहीं था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है उनके लिए। एंड द बिगेस्ट थिंग इज यहाँ पर पापी चूलों का इतना ज्यादा इम्पैक्ट रहा है इस पर्टिकुलर राउंड के अंदर कि अब एकमात्र और दूर है वो अपने अल्टीमेट से। एंड विद द वाइपर स्पिट ऑनलाइन आप जानते हैं लिटरली एक राउंड आपको ऑलमोस्ट फ्री में मिल जाता है, स्पेसिफिकली ऑन द अटैकिंग साइड। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है उस अल्टीमेट। एक दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं अब वन के लिए, हाइडिंग लाइट आई जरूर लेकिन उससे पहले प्लेयर स्विंग आउट करते हुए नजर आए। अब यहाँ पे अकेले प्लेयर शायवा है कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, शायवे को शट डाउन किया जाएगा। पापी चलो गेट्स द 3K, वाइपर्स अल्टीमेट भी ऑनलाइन है तो लेकिन इस राउंड में कमिट तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। ऑल दो एग्जैक्टली शाओशी यहाँ पे काल को शट डाउन करके एटलीस्ट एक फ्रैग निकाला है अपने लिए, एक अल्ट पॉइंट इकट्ठा जरूर करा है बट इसके अलावा तो कोई ज्यादा वैल्यू निकाल पाना बहुत बहुत मेजर आस्क रहेगी इस 4v2 सिनेरियो के अंदर। एंड वेपनरी पे अगर देखें सिर्फ शाओशी के पास एक फैंटम है, रेनी स्टिल एक शेरिफ के साथ आगे बढ़ जरूर है, गेट स्पॉटेड लेकिन रोप्स पे होने के बावजूद वन टैप किया जाको। रेनी के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उस वन टैप के बाद में एक अपग्रेडेड वेपन पे भी स्विच करने की, लेकिन पापी चूलों को देख लीजिए क्या फर्क पड़ रहा है सामने कौन सा वेपन है, ही जस्ट गोज इन फॉर द फाइट एंड शट्स इट डाउन। ओह नो रेनी यू आर वॉकिंग इन द राइट डायरेक्शन बट नॉट विद द राइट इंटेंशन। ये लीजिए मोहेर आपको भी पिक ऑफ करेंगे, चौथा राउंड नाउस के लिए ऊपर बनता हुआ। सेम स्क्रिप्ट फॉलो होती हुई नहीं नजर आ रही स्पार्टस आपको। डेफिनेटली 4 बैक टू बैक राउंड्स बट पिछली बार डिफेंडर साइड पर निकाले थे जो प्रेफर्ड साइड रहती है एसेंट की, इस बार जो अनप्रेफर्ड साइड रहती है बीइंग द अटैकर ऑन स्प्लिट, एक जो चैलेंज रहता है आपके ऊपर उसके अंदर भी ये 4 बैक टू बैक राउंड निकालना वन को तो और ज्यादा दिक्कतें यही रहने वाली है कि ऑलरेडी एक मैप के डेफिसिट में चल रहे हैं, इस मैप में भी अगर यही दिक्कतें रही तो डन एंड डस्टेड हो जाएगा फिर आज के लिए। एब्सोल्युटली वन टीम के लिए आज जीतना बहुत ज़्यादा नेसेसरी रहने वाला था, लेकिन जितनी मुश्किलें उनके रास्ते में नाओस खड़े करती हुई दिखाई दे रही है, आई वुड एग्री विद द कोचेस टी-शर्ट, नाउ इज द टाइम। क्या ही एग्जीक्यूट यहाँ पे आते हैं नाओस की तरफ से, लाइक जो उनका स्ट्रैटेजी है मिड कंट्रोल लेने का, एक ग्रेविटी वेल देन उसके बाद एक फेक स्मोक ऑन द लेफ्ट साइड एंड फिर प्लेयर्स यहाँ पे सिर्फ सैचल करते नजर आते हैं एंड इतना यूटिल टर्म पे स्टार्टिंग के 10-12 सेकंड के अंदर ही आई डोंट थिंक कि कोई भी टीम बीट वन बीट एनी अदर टीम इसको होल्ड बैक भी कर सकती है, क्योंकि आप ग्रेविटी वेल एंड वो सैचल को किसी तरीके से काउंटर कर पाएंगे, आपको वो एरिया गिव अप ही करना पड़ेगा एंड वन टीम के ऊपर से वो चीजें बिल्कुल होते हुए नजर आ रही है। एंड अगर उनका डिफेंस साइड देखा जाए 3 प्लेयर्स बी साइड खेल रहे हैं एंड देन 2 प्लेयर्स ए को बैक साइड से होल्ड करने का ट्राई जरूर करें एंड अब यहाँ पे नेओस की टीम चाहे वो किसी भी तरफ यहाँ पे मूव इन कर सकते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए वो बी हेवन के ऊपर यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का ट्राई जरूर करें, एक ऑफ एंगल के है अंदर जरूर यहाँ पे जायस, लेकिन उस ऑफ एंगल की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी जाएगी एंड दैट कियो नाइस कम्स इन विद दैट फ्लैश, तो प्लेयर्स सप्रेस हो गए तो और ज्यादा दिक्कत है, गाइडिंग लाइट आएगी लेकिन शाओशी टेक्स डाउन विद द ट्रेड्स आर कमिंग बट जा वापस सुपीरियर आते हैं, जायस का एक ऑफ एंगल टेक्स हिम डाउन बट मेयर उनको भी ट्रेड बैक करने में कामयाब। 2v2 पर रीटेक सिनेरियो आ चुका है, सीकर्स का इस्तेमाल किया जाएगा पापू चूलों को पुश बैक करने की कोशिश, लेकिन उनके स्नेक बाइट्स कंप्लीटली ऑन पॉइंट। नाउ इट्स अ प्रीटी डिफिकल्ट सिचुएशन, 1v2 रहने वाला है। पहली फाइट तो यहाँ पर इनिशिएट कर दी लेकिन जीत नहीं पाई, गन टूअल यहाँ पर हारते हुए नजर आए पापी चूलो एंड दैट विल रिजल्ट इन द फर्स्ट विक्ट्री फॉर वन टीम जस्ट लाइक वी सॉ ऑन असेंट। 5वां राउंड वाज द फर्स्ट राउंड जो वन टीम को मिल पाया था एंड यहाँ भी मिल चुका है। अल्टीमेट्स इनके पास भी अब काफी अच्छे से स्टैक होते हुए नजर आ रहे हैं, दे ऑलरेडी हैव द वाइपर स्पिट ऑनलाइन, दे ऑलरेडी हैव द कॉस्मिक डिवाइड ऑनलाइन, 2 और अल्टीमेट्स ऑनलाइन आने की तैयार पर है, एक मात्र और बाहर एक अल्टीमेट के लिए चाहिए होगा। काफी बेहतरीन तरीके से ये राउंड निकाला है वन टीम ने एंड अपने आप को एक बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन पर भी प्लेस कर दिया है। डेफिनेटली एक मस्ट विन राउंड, क्योंकि फिर वो जो इकोनॉमी थी वो एक्चुअली सीसो पोजीशन में जा चुकी थी कि आप एक राउंड हारेंगे एंड देन यू हैव विल बी फोर्स्ड टू सेव, बट अभी के लिए चीजें वापस चेंज होती हुई, लेकिन जो चेंज नहीं हो रहा है वो यही है कि नेओस का जो अटैकिंग सेटअप है वो बिल्कुल स्मोक्स एंड सैचल पे डिपेंडेंट एंड जहां हर बार यहाँ पे कंट्रोल लेने में कामयाब। ऑल द शो स्टॉपर आएगा, शाओशी को शट डाउन किया गया
13 एचपी पे हैं जरूर, लेकिन दिक्कतें नहीं है उनके पास, क्योंकि रीग्रोथ का इस्तेमाल करके उनको यहाँ पे बिल्कुल आराम से रीसेट भी कर देंगे। एंड वापस से बी हेवन का कंप्लीट कंट्रोल नाउस के हाथ में जा चुका है। नाउस काफी ज्यादा अर्ली हिट्स कर रही है, काफी ज्यादा अर्ली एग्जीक्यूशंस कर रही है एंड बार बार वन टी के प्लेयर्स को ऑफगार्ड पकड़ रही है। डबल पीक आने वाला है, यहाँ पर बच के रहना पड़ेगा, लेकिन जाते एक पिक निकालने में कामयाब होंगे। सीनियर कॉल अभी भी अपनी टीम को नंबर्स एडवांटेज में रखने वाले हैं। इट्स 3v4 सिनेरियो एंड अभी के लिए कंट्रोल काफी सारा है जरूर नाउस के पास में, लेकिन अभी भी साइड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बहुत स्लो अप्रोच एंड आई थिंक ये स्लो अप्रोच है, अब फाइनली एग्जीक्यूट होने वाला है। दैट 8 इंच इज कमिंग इन एंड वापस से PRV के लिए दिक्कत यही रहने वाली है। पिछली बार तो एल्बो के अंदर से एक फ्रैग निकाल लिया था, बट दिस टाइम आई गेस वो अवेयर है कि यहाँ पे एक प्लेयर एंकर कर सकता है एंड द टाइमिंग इज कमिंग इन फॉर शाई भी। एक प्लेयर को शट डाउन करा बट इमीडिएटली गेट्स टेकन ऑफ एंड वो भी पापी चूलो को शट डाउन करने में कामयाब रहे हैं। सो वाइपर स्प्लिट इज नाउ ऑफलाइन एंड अब जो एक लौटा मेजर अल्टीमेट रहने वाला है इस राउंड में वो रहेगा रेनी के पास। उनका एस्ट्रल डिवाइड, दैट कॉस्मिक डिवाइड माइट कम इनटू प्ले, बट 2v3 के अंदर क्या रिस्क करना चाहेंगे वो एक सवाल जरूर रहने वाला है इस समय। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी इनिशिएट करना चाहिए अपने एस्ट्रल डिवाइड को, बट लेट्स सी। जा की पोजीशनिंग बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाली है। जायस की ये फाइट नहीं जीत पाएंगे जायस एंड ही विल बी टेकन डाउन एज वेल। नाउ इट्स अ 1v3, अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता है एस्ट्रल डिवाइड का। सो ये लीजिए, रेनी भी चलती है सर पे कफन बांध के सीधे के सीधे डुअल्स में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उनको भी शट डाउन करने के लिए जा यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तीनों प्लेयर्स ने मिल बांट के यहाँ पर आखिरी पिक निकाला है एंड एक और राउंड नाउस ने अपने हक में ले लिया है। रेनी को शायद वो वैंडल बचा लेना चाहिए था उस राउंड में, क्योंकि इकोनॉमी अगर देखो तो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड सी है उनकी। एंड रेनी को भी पता था कि वो राउंड वहां से हार चुके हैं, जिस तरीके से वो डब्ल्यू दबाते हुए जा रहे थे ऊपर। आई गेस सेव करना एक बेटर ऑप्शन रहता, बट इंडीड ही ट्राइड टू टेक एटलीस्ट वन डाउन। ऑल तो फर्क नहीं पड़ता अगर प्लेयर शट डाउन भी होता है नाओस के, क्योंकि बहुत क्रेडिट्स है उनके पास, बट आपको जरूर यहाँ पे फर्क पड़ता है, क्योंकि अब आपकी इकोनॉमी अगर देखें, you have just 2400 2200, you need a timeout, you need to fix a lot of things up, क्योंकि अगर डिफेंडर साइड पे स्प्लिट के आप इस तरीके से डेसिमेट होते हुए नजर आ रहे हैं, देन आज का दिन बहुत लंबा रहने वाला आपके लिए, और मे भी बहुत छोटा, बिकॉज 2-0 खत्म हो सकता है। यस Anyways, दिन को लंबा बनाना is something that one team is looking forward for, क्योंकि वो चाहते हैं कि 1-1 हो जाए, बाइंड तक का सफर तय करने का मौका मिले, because that's where they can finally secure themselves the win that they really need. However, अभी तक तो सिचुएशन वैसी बिल्कुल नहीं लग रही है स्पार्टस। थोड़ा सा दुख दर्द हो रहा है यहाँ पर वन टीम के प्लेयर्स को भी, और उनके लिए हमें भी थोड़ा बहुत यहाँ पर दुख हो रहा है, बट नाउस जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, इट्स कम्प्लीटली इम्पेकेबल। स्टार्टिंग इटसेल्फ में इतना सारा डोमिनेशन, एज यू सेड, असेंट पे समझ में आ रहा था बिकॉज वो फेवरेबल साइड पे थे, बट स्प्लिट में अनफेवरेबल साइड पे होने के बावजूद दे आर मेकिंग इट वर्क फॉर देमसेल्व्स, व्हिच पुट्स इवन मोर प्रेशर फॉर वन टीम। लेकिन इस बार देखिए अल्टीमेट्स की भरमार लगी हुई है वन टीम के लिए। दे हैव द वाइपर स्पिट, दे हैव ब्लेड स्टॉर्म, दे हैव एस्ट्रल डिवाइड एंड दे हैव शो स्टॉपर। काफ़ी अच्छे से अर्ली फ्रैग्स निकालने के लिए विनर एंड जायस के अल्टीमेट्स का इस्तेमाल हो सकता है। शाओशी का अल्टीमेट आपको कंप्लीट कंट्रोल दे सकता है किसी भी एक साइड का, मेकिंग नाउस फोर्स पुश, फोर्स रोटेट इनटू द अदर साइड, एंड साथ ही साथ पोस्ट प्लान सिचुएशंस के लिए आपके पास रेनी का एस्ट्रल डिवाइड रहने वाला है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे सकता है। ये चीज़ ज़रूर है, बट अगेन वेपनरी के साथ ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि जो शेरियस अगले राउंड के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगेन सब लाइक विन कंडीशन की अगर हम बात करें इस राउंड में, वो रहने वाली सिर्फ जायस के हाथ में। ये ब्लेडस्टॉर्म के साथ अगर एक दो फ्रैग्स निकाल देते हैं एंड देन द वेपन्स गेट अपग्रेडेड, ये राउंड के इमेज को पलट सकते हैं, बट उसके लिए जायस को पहले किसी से फाइट इनिशिएट करनी पड़ेगी। एंड जिस पोजीशन को मार्क इन कर रहे हैं नेओस के प्लेयर्स उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाते हुए नजर आ रहे हैं, एंड फॉर द टाइम बीइंग दे आर गोइंग फॉर द ए साइड, एंड ये ए हिट को रोक पाना आई डोंट थिंक वन के लिए पॉसिबल भी होने वाला है, जिस तरीके का उनका सेटअप एंड वेपनरी है। सो एक क्लीन हिट यहाँ पे ए कम मिल जाएगा नेओस को, दे विल टेक दिस फाइट डाउन एज वेल। एंड ये गाइडिंग लाइट आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाली है, एंड क्लासिक के साथ तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे, बट फॉर नाउ स्टिल नेओस वॉक इन करते हुए लिटरली स्पॉन तक पहुंच चुकी है। चियावे एक बहुत अच्छी पोजीशन में थे, एक सरप्राइज ट्रैक वहां से निकाल सकते थे, लेकिन जस्ट इन टाइम वो नजर आ गए एंड उसके बाद में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। एक वेपनरी यहाँ पर लूज की जाएगी, विनर के पास में अपग्रेडेड वेपन आ चुका है, ही हैज अ फैंटम नाउ, एंड अभी भी विन कंडीशन है एज यू सेड, ब्लेड्स ऑफ वो ऑनलाइन रहने वाली थी, लेकिन जा उसको भी शट डाउन करते हुए नजर आएंगे। नाउ इट्स अ सिनेरियो विद नॉट मच ऑन हैंड। वाइपर स्पिट का कमिटमेंट, व्हाई
Why would you do that? आपके पास पूरा साइड कंट्रोल है, आपके सारे प्लेयर एक्सट्रीमिटीज को ऑलरेडी मार्क इन कर रहे हैं एंड वन के लिए कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है एंड वो वाइपर स्पीड के अंदर लाइक शो स्टॉपर को भी पुल ऑफ कराने में कामयाब नहीं रहे. सो एक अल्ट का इन्वेस्टमेंट हुआ जरूर, ऑल्दो वी काइंड ऑफ एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्लेयर्स कि आपके पास जब भी अल्टीमेट रहता है आप उसको कमिट करते हुए नजर आते हैं, बट सम टाइम इट इज बेटर टू सेव दैट. बट अभी के लिए हर चीज जो यहाँ पे नेओस करे वो वर्कआउट करे, सो आई डोंट थिंक ज्यादा फर्क पड़ने वाला है उन्हें. बट ये जो 6-1 का राउंड है वापस से अगर देखा जाए एक बाय राउंड मिला है वन को एंड अगर ये राउंड भी हारते हैं वो फिर से एक सेफ के ऊपर फोर्सिंग कर दे जाएंगे. सो इस चीज का ध्यान को जरूर रखना पड़ेगा. एंड जाके जहाँ तक बात की डबल साजल टुवर्ड्स द ए, रैम्स कंट्रोल मिल चुका है लेकिन एमिंग बहुत खराब हो सकती थी एंड वो खराब होगी क्योंकि चिया वे शट डाउन करेंगे जाको एंड आफ्टर 7 राउंड्स फर्स्ट ब्लड यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा वन टीम को. एग्जैक्टली एंड यहाँ पर ना सिर्फ जहाँ शटडाउन हुए, कोई भी रिफ्लैग करने के लिए उनके साथ मौजूद नहीं था जो यहाँ पे उनके किल को ट्रेड कर पाता, नंबर्स को इक्वलाइज कर पाता एंड दैट जस्ट टर्न्ड आउट टू बी अ बेनिफिशियल सिचुएशन फॉर वन टीम. अब लेकिन अगर आप देखें तो साइड बी की तरफ मूव इन करते हुए नजर आ रहे हैं नाउस के प्लेयर्स. फिलहाल के लिए स्प्लिट्स में मूव करेंगे, 2 प्लेयर्स डायरेक्टली टुवर्ड्स साइड बी एंड 2 प्लेयर्स ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ मिड की तरफ मूव करने वाले प्लेयर्स को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बिकॉज जो पोजीशनिंग यहाँ पर है, जो क्रॉस फायर क्रिएट करा गया है टुवर्ड्स द एंट्री पॉइंट, वो यहाँ पर डिफिकल्ट हो सकता है. ऑल राइट, ये लीजिए डिफिकल्टी सामने भी आ जाएगी बिकॉज शाओशी इज डेफिनेटली अ वेरी गुड कंटेस्टेंट फॉर द मैप ऑफ स्प्लिट. ओह सीनियर काल 2 फ्रैग्स मेजर फ्रैग्स निकाल चुका है. 2v3 का सिनेरियो है जरूर लेकिन शाविया के हेल्थ बहुत ज्यादा लो है. द स्मोक विल फेड ऑफ, ही विल गेट टेकन डाउन एंड सीनियर काल तीसरा फ्रैग निकालेंगे जायज के ऊपर. ऑपरेटर थी जायज के पास, एक बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट किया था इस राउंड में लेकिन कोई वैल्यू नहीं मिलती. द शो स्टॉपर कम्स इनटू प्ले, सीनियर काल को शट डाउन कर चुका. 1v1 से आए बट पापी चुला गेट टेकन डाउन, गेट्स टेक डाउन ऑन 1. एक राउंड जो बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ गया बट इन द एंड नेओस उसको भी सील करने में कामयाब होती हुई. विनर ने शो स्टॉपर लगाया बट जब तक वो ड्रॉप डाउन होते एक काफी अच्छा फ्रैग आने के लिए मिलता हुआ है मैन. एक राउंड जिसकी सबसे ज्यादा दरकार थी वन को वो उनके हाथ से छिन चुका है. एग्जैक्टली यहाँ पर जो स्कोर लाइन है उसको बिल्कुल भी क्लाइम करने का मौका नहीं मिल रहा है वन टीम को. पिछली बार 5-7 तक का स्वॉप ला पाए थे, इस बार ऑलरेडी 1-7 स्कोर लाइन यहाँ पर बनी हुई है. नाउस कॉन्स्टेंटली कैपिटलाइज करते जा रहा है एंड वन टीम के पास अभी के लिए कोई भी जवाब नहीं देखने को मिल रहा है. सीकर्स इस बार ऑनलाइन आने वाले काफ़ी ज़्यादा इंटेल गैदर करने में कामयाब रहेंगे एंड ऑलरेडी साइट ए की तरफ से अगर आप देखें तो ट्रेल ब्लेजर यूज़ हो चुका है, गाइडिंग लाइट्स यूज़ हो रही हैं, काफ़ी सारा इंटेल वहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश रहने वाली है एंड दैट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इनटू अ अर्ली रोटेशन फ्रॉम द साइड ऑफ वन टीम. ये देखिए ऑलरेडी 2 प्लेयर्स डिफेंडर स्पॉन से आते हुए नजर आ रहे हैं साइड बी में एंड अभी भी कोई एंट्री नहीं दिखाई दे रही. गराज में स्टैक्ड है प्लेयर्स नाउस के लेकिन थोड़ा सा होल्ड बैक करना चाहेंगे. Oh, the sheriff round yet again and ये थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि जिस तरीके से नेओस एंटर कर रही है यहाँ पे रेस के डबल साचल से अंदर आते हैं बट रेनी ऑल्दो शेरिफ का कमाल देखेंगे टेक्स 1 डाउन एंड एक अल्टीमेट का इन्वेस्टमेंट भी किया गया है शाओशी की तरफ से. किया द स्टिंगर इन हिज हैंड एंड वाइपर स्पीड का कमिटमेंट बिल्कुल यहाँ पे वैल्यू दिला सकता है द क्लोज रेंज बैटल्स एंड नेओस को उनके ट्रैक्स में समय होल्ड अप करने में कामयाब हुए जरूर है. 4v4 का सिनेरियो है, 40 सेकंड क्लॉक पे तो रोटेट भी करना चाहे तो नेओस फॉल बैक कर सकती है टुवर्ड्स द ए साइड लेकिन मुझे लगता नहीं है इस समय वो कोई भी इंटेंशन है इनका वो अभी भी होल्ड बैक कर रहे हैं. एंड द विन कंडीशन ऑफ दिस राउंड इस समय पापी चलो बी हेवन को रिक्ले करने के लिए जा रहे हैं. अगर वो बी हेवन तक पहुंच जाते हैं बहुत इजी रोटेट बैक यहाँ पे करने का फायदा मिला सकता है लेकिन सीनियर काल उससे पहले फ्रैग निकालना स्टार्ट करेंगे. टेक्स 1 डाउन, रेनी अपने लिए फ्रैग जरूर निकालेंगे बट इंस्टेंट डेट आता है जाक की तरफ से भी शाओशी को शट डाउन किया गया. द वाइपर स्पीड गेट्स ऑफलाइन एंड देन एक और क्लीन राउंड ने और अपने नाम करते हुए नजर आएगी. 8-1 ऑन द बोर्ड. काफी शानदार तरीके से यहाँ पर सीनियर काल ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी साइड बी के अंदर एंड उसको पार करना मुश्किल होने वाला था फॉलिंग साइड ऑफ टीम 1 लेकिन उन्होंने वाइपर स्पीड कमिट की कोशिश की कि आगे नेविगेट कर पाए लेकिन अपनी ही सीमा को लांघ कर पहुंच गए थे नाउस के प्लेयर्स टुवर्ड्स द साइड एंड दे मेड श्योर दैट दे गॉट द फ्लैग्स ऑन पॉइंट. बहुत ही शानदार गेम प्ले यहाँ पर देखने को मिला एंड जो एक बैक से मारा था जिसकी आप बात कर रहे थे लर्क करते हुए पहुंचे जरूर थे पीछे तक हमारे प्यारे पापी लेकिन उनको कोई भी कैपिटलाइजेशन करने का मौका नहीं मिला बिकॉज ऑलरेडी द राउंड वाज डन एंड डस्टेड. ब्यूटीफुल गेम फ्रॉम द साइड ऑफ नाउस. वाइपर स्पीड के कमिटमेंट के बाद में लगने लगा था कि थोड़ा सा डगमगा सकती है यहाँ पर टीम बट दे डिड रियली गुड बाय क्रॉसिंग ओवर द लाइन बाय देमसेल्व्स एंड टेकिंग द फ्लैग्स ऑनटू देयर हैंड्स. डेफिनेटली. नाउ अगर इस राउंड की अगर स्टार्ट की बात की जाए वापस से एक बाय राउंड रहने वाला है बट कहानी यही है कि अगर वन इस बाय राउंड को कैपिटलाइज नहीं कर पाया फिर तो ये डबल डिजिट पे जाके पहला हाफ खत्म होता हुआ नजर आएगा. बट फॉर नाउ
एक ट्रे मेरे से रिक्लियर जरूर कराए मिड को एंड देन सीकर्स को भी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया गया वन की तरफ से एंड एक बहुत अर्ली इन्वेस्टमेंट है ये बट नाउ शाह जाएंगे अपने शो स्टॉपर के साथ रैम्स को क्लियर आउट किया जाएगा उनकी तरफ से बट कोई भी एग्रेसिव कंट्रोल लेने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है बट नाउ एक स्टैक में कहीं ना कहीं न्यूज़ फंसता हुआ नजर आ सकता है लेकिन वो गन डुअल सारे उनके फेवर में जाएंगे 2v3 के सिनेरियो बना हो रहा है बट द स्मोक पुश इन फ्रॉम द साइड टेक्स वन डाउन बट इमीडिएटली शट डाउन यहां करेंगे सीनियर गाल उनको भी विड्स को भी यहां पे वापस से रिवाइव कर दिया गया एंड ही इज बैक ऑन हिज फीट 1v3 वो शिया भी एंड आई गेस वो 1v3 नन v3 हो जाएगा 9th राउंड ऑन बोर्ड नियोस का अटैकिंग हाफ बहुत ज्यादा डोमिनेंट नजर आ रहा है ये क्या देख रही हूँ मैं एक ऐसा मैप जो बहुत डेस्परेटली वन टीम चाहती है कि वो जीत जाए उसको कॉन्फिडेंटली उनके हाथों से छीना जा रहा है ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ा सा ब्लंडर हो रहा है वन टीम की तरफ से दे स्टिल ट्राइंग टू बी कैलकुलेटेड इनटू द गेम लेकिन डुअल्स आते हुए नजर आ रहे हैं एंड कॉन्स्टेंटली उनको पनिश करने के लिए नियोस यहाँ पे तैयार दिखाई दे रही है एंड नाउस इज जस्ट डोमिनेटिंग राइट नाउ लाइक 1-9 2 और राउंड्स बचे हैं एंड आई थिंक डबल डिजिट तो पक्का मिल रहा है ना उसको यहाँ पर बिकॉज ये लीड सेव पर आ चुकी है वन टीम एक बार दो बार जो कि पूरे फर्स्ट हाफ में बार बार होता रहा है वन टीम के साथ ये ऑर्ब का लाइनअप बहुत अच्छा है यू जस्ट दैट ऑर्ब लाइनअप ये आपको हेवन कंट्रोल लेने से रोकता हुआ नजर आएगा बट वो हेवन कंट्रोल आप रोकने के बाद भी फ्रैग कैसे निकालेंगे क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ शेरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं सरप्राइज सबसे बड़ा यही है कि अभी तक कोई भी प्लेयर वन टीम का जजेस इस्तेमाल करता हुआ नजर नहीं आया एंड जिस फास्ट पेस है या नियोस एग्जीक्यूट कर रही थी जज स्टॉप कर सकती थी बट नाउ एक 4-man फ्लैंक यहाँ आता हुआ नियोस के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ जरूर सकती हैं लेकिन पापी चुलो बीइंग दैट लास्ट स्टैंडिंग बिट्स के साथ मिलके बिल्कुल वाइप आउट करने में कामयाब एक और बार फ्लॉलेस राउंड नियोस के पास जाएगा बहुत ही शानदार एग्जीक्यूशन इस राउंड के अंदर पर्टिकुलरली बिकॉज जैसा कि आपने कहा 4 लोग बैक स्टैब के लिए आ चुके थे दिक्कत भरी सिचुएशन बन चुकी थी लेकिन जैसे ही चियावे ने अपना गाइडिंग लाइट निकाला वैसे ही वहाँ पर विड्स की तरफ से एक फ्लैश आया जो कि थोड़ी देर के लिए पुश बैक कर दिया उन्हें एंड एक फ्लैश भी विड्स वहाँ पर कमा पाए एंड उसके बाद में दोबारा से जब बॉल करने की कोशिश की गई तब तक बहुत अच्छी पोजीशन में नाउस आ चुकी थी एंड दे वर प्रिपेयर्ड फॉर द डुअल दैट वाज कमिंग टू देयर हैंड्स बहुत ही शानदार इस्तेमाल यहाँ पर अपनी यूटिलिटी का विड्स की तरफ से होता हुआ नजर आया काउंटर फ्लैश आया एंड उसके बाद में अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में रखते हुए उस फाइट को जीता ब्यूटीफुली डन स्पॉटलेसली डन शानदार स्टार्ट जायज ऑपरेटर इन्वेस्टमेंट एक और राउंड में एंड सबसे पहले पिक ऑफ होने वाले प्लेयर बने क्योंकि जा एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको वो ऑपरेटर के साथ ही गया शट डाउन एंड विड्स हैव विनर को भी टेक डाउन करने में कामयाब इतने क्रेडिट्स हैं यहाँ पे नियोस के पास कि मल्टीपल ऑपरेटर्स पे इन्वेस्ट कर रखा है उसके साथ साथ एक और गन साथ में रखे घूम रहे हैं जाने ऑपरेटर तो फ्रैग निकाला इंस्टेंटली अपनी फैंटम यहाँ पे उठा ली है अब वो मिड कंट्रोल के लिए जा रहे हैं एंड वन ने सोचा जरूर होगा कि हाँ शायद अगर बी मेन के ऊपर एग्रेसिव प्ले आया है शायद ए मेन को रिक्लियर करके अपने फेवर में करा जाए बट वहां पे भी विड्स अपनी ऑपरेटर लगा के बैठे थे एक और फ्रैग उनके नाम गया 3v5 का सिनेरियो एंड रिक्लियर करने के लिए आगे जरूर आ रहे हैं शाओशी लेकिन इंस्टेंटली ट्रेड्स यहां आना शुरू होंगे एंड रेनी ने कहीं ना कहीं उम्मीद बनाए रखी थी अपनी टीम की बट इन द एंड ही गेट्स फॉल डाउन एज वेल बट पापी चलो शियावी को शट डाउन करके इस आखिरी फ्रैग को भी अपने नाम करेंगे 11-1 की मैसिव डोमिनेंट स्कोर लाइन के साथ नियोस ने अपना पहला हाफ खत्म करा है नंबर बड़ा सुंदर है 1-1-1 इट्स नाइस बट ओनली फॉर द साइड ऑफ नियोस यहाँ पर बहुत बुरी सिचुएशन बन चुकी है फॉर द साइड ऑफ वन टीम 10 राउंड लगातार जीतने होंगे इक्वलाइज करने के लिए जो कि मेरे को पॉसिबल नहीं लग रहा बिकॉज जैसा कि हम हिस्ट्री देखते आ रहे हैं फर्स्ट मैप दोनों बार पिस्टल राउंड्स नाओस के पास सेकंड मैप फर्स्ट बार पिस्टल राउंड नाओस के पास एंड अब दोबारा पिस्टल राउंड पे बात आ चुकी है कॉन्फिडेंस इज शैटर्ड मैप नहीं है विगल रूम नहीं है आई डोंट थिंक कि वन टीम ज्यादा देर सर्वाइव कर पाएगी मुझे लग रहा है दोबारा से पिस्टल राउंड यहाँ पर नाओस ले जाएगी एंड खत्म हो जाएगा गेम Definitely, and coming in clutch, Papachulo with 9 clutches and Moir with 6 clutches are the most recorded clutches during the group stage in VCT Ascension. क्या ही बात है एंड ये लाइक पापीचुलो से तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं क्योंकि भाई अलग ही फ्रैगर निकल के आ रहे हैं अगर पापीचुलो को मैं किसी से कंपेयर भी करूँ ना पैसिफिक रीजन में दैट विल बी DRX माको कुछ वैसा ही गेम प्ले हमें पापीचुलो की तरफ से देखने को मिल रहा है बीइंग दैट वाइपर माको भी वो ऐसा ही रोल खेलते हैं एंड परफॉर्मेंस भी कुछ ऐसा निकल के आ रहा है सो क्लच को भी और ऐड कर दीजिए और ज्यादा क्लोज जा रहे हैं वो उस मार्को लेवल प्लेयर के एंड वी नो हाउ मच आई लव मार्को वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्रोलर्स इन द एंटायर वैलोरेंट सर्किट उस लेवल पे पापीचुलो पहुंच रहे हैं अब
Exactly, and not just you, that's completely an undeniable fact. Every single person जिसने VCT Pacific देखा है, जिसने कोई भी DRX के मैचेस देखे हैं, उन्हें पता है कि मार्को के लेवल का कंट्रोलर बहुत कम देखने को मिलता है पैसिफिक रीजन में, एंड पापी चुलो, एज यू सेड, इज फॉलोइंग इन द राइट फुटस्टेप्स. हाउएवर, अभी के लिए वन टीम क्या कर सकती है जो उनको जीत दिलाए, बिकॉज पिस्टल राउंड्स इटसेल्फ, उनके डुअल्स के बेसिस इटसेल्फ पे बहुत ज्यादा शैटर होते हुए नजर आ रहे हैं. एबिलिटीज भी उनके पास ज्यादा नहीं रहने वाली है. द ओनली स्मोक्स दे हैव आर गोना बी एक्स्ट्रा स्मोक्स. यहाँ पर वाइपर के स्मोक्स भी अवेलेबल नहीं रहने वाले. दिस इज ऑलरेडी अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर देम, एंड ऊपर से अटैकिंग साइड ऑन स्प्लिट, ये और ज्यादा और भी दिक्कत है. ज्यादा गंभीर. एग्जैक्टली. ओ सीनेगाल अगर पोजीशनिंग देखे, जंप सही एंगल्स है इसका, जंप स्पॉट के लिए क्रॉस हेयर लगा के बैठे थे अपना. पहला फ्रैग जरूर ले लिया, अब इसमें कैपिटलाइज करने की देरी जरूर रहेगी, लेकिन अभी भी अगर यहाँ पे पोजीशन देखे ना उसके प्लेयर्स की, कोई ज्यादा रोटेशन नहीं आ रहा फ्रॉम द ए साइड. एंकर कर रहे हैं उसी एल्बो रीजन को, एंड जाके अगर बात की जाए, इट इज अ पिछल राउंड, ये कभी भी टर्न अराउंड हो सकता है. उसका जरूर यहाँ पे एक कहीं ना कहीं कॉज रहेगा, बट वापस से वन को देखे, थोड़ा ओवर थिंकिंग फ्रॉम द साइड, रोटेट बैक करे टुवर्ड्स द ए रीजन, जहाँ पे ऑलरेडी दो फ्लैश प्लेयर्स बैठे हैं. गाइडिंग लाइट का इस्तेमाल करके बिल्कुल डैमेज ज्यादा है, बट मॉल के पास वो फ्लैश है नहीं, बट कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि बिना उसके ही फ्रैग उनको मिलेगा, एंड विड्स क्लीन अप करते नजर आएंगे शाओशी को भी. ये थोड़ा सा ज्यादा ओवर थिंक कर गए बन के प्लेयर्स, क्योंकि जो फाइट पे फ्रैग मिला था इंस्टेंटली एग्जीक्यूट कर सकते थे, बट नाउ दे मूव इट टुवर्ड्स द ए साइड. विड सबसे बड़ा यहाँ पे खतरा बन रहा है. एक और फ्रैग यहाँ पे निकालते हुए नजर आने वाले, लेकिन स्टाइल्स की हेल्थ बहुत ज्यादा. विड गेट द 3K फ्रॉम हिमसेल्फ. 1v1 सिनेरियो, चा वर्सेस रेन यहाँ पे होने वाला है. 15 सेकंड ऑन द क्लॉक, एंड स्पाइक भी एक नोमैन्स लैंड में ड्रॉप डाउन है. स्पाइक कलेक्ट करने जाना दरकार हो चुका था, मौका नहीं बचा था, वक्त हाथ से फिसल रहा था, एंड उसी बात पे कंप्लीटली कैपिटलाइज करने के लिए तैयार थे. जा कोई भी ओवर एग्रेशन नहीं दिखाया, एंड अब तो मेरे ख्याल से मान लीजिए कि ये मैप खत्म. बहुत ही छोटा दिन वन टीम के लिए बच चुका है. ये 12-8 का स्कोर है. ये नया शोकेस करिए कि क्यों उन्होंने स्प्लिट का मैप उठाया था. एग्जैक्टली, इट्स क्रेजी डोमिनेशन. एंड अब पापी चलो अगर लाइक किल फीड भी अगर हम देखें तो किल बोर्ड रहता है 18 फ्रैग एंड 4 डेथ्स. लाइक वो फोर्थ भी इस राउंड में आई है, वरना 18-3 का स्कोर चल रहा था पापी चलो का. उसके बाद जहाँ है 17-7 के साथ पापी चलो कुछ अलग ही लेवल की किल्स निकाल रहे हैं. 18, वो भी सिर्फ 3 डेथ के साथ, वो भी वाइपर खेलते हुए. यप, फर्स्ट राउंड में प्लांट तक करने का मौका नहीं मिला वन टीम को, जिसकी वजह से पूरी टीम तो यहाँ पर फोर्स बाय नहीं कर पाएगी, लेकिन अपने फ्लैग्स के बेसिस पे यहाँ पर एक्स्ट्रा बाय करने का मौका 3 प्लेयर्स को मिला जरूर है. अब कैपिटलाइज करना होगा, वेपन्स गिराने होंगे, वेपन्स अपग्रेड करने होंगे, अदरवाइज यहाँ पर कोई स्टैंडिंग नहीं बचने वाली है. 3v4 का सिनेरियो बना दिया है, 2 प्लेयर्स ऑलरेडी पिक कर लिए हैं नाउ उसके, बट नाउ लेट्स सी कि क्या विनर को अपग्रेड मिल पाएगा, बिकॉज दैट अपग्रेडेड वेपन इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर योर डुएलिस्ट. फ्रैगमेंट एंड पेंट शेल का काफी अच्छा एक्सचेंज. डैमेज भी यहाँ पे पड़ा जरूर है विड्स को. He has been brought down to 82 HP. Although 18 HP जो है रीजन हो सकती है, बट अभी के लिए स्ट्रिंगर्स एंड शेरिफ्स के साथ साइड ए पे एग्जीक्यूट करने के लिए जा जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा वापस से रहेगा यही फ्लैश पॉइंट. मोबाइल में वापस फ्लैश किया, फ्रैग नहीं मिलता हुआ, लेकिन पीछे से यहाँ पे कवर फाइट देते हुए विड्स टेक्स वन डाउन, टेक्स अनदर वन डाउन फॉर हिम. ट्रेड हुए जरूर है, लेकिन अब सीनियर काल एक 1v2 सिनेरियो के अंदर है. वेपन्स मिल चुके हैं वन को, सबसे एडवांटेजेस यही है. स्पाइक को भी यहाँ प्लांट करने के फुल कंट्रोल है, लेकिन अब ये 1v2 किस तरीके से सीनियर काल खेलते हैं, क्योंकि मैच एंड सीरीज पॉइंट का सवाल है अब. एग्जैक्टली, एंड अभी तक स्मोक्स भी नहीं आए हैं. स्टार्स को रीजनरेट होने में थोड़ा सा समय रहने वाला है, एंड देयर यू गो, स्टार्स रीजनरेट हो चुके हैं. इंडिविजुअलाइज करना चाहेंगे यहाँ से, फाइट्स को आइसोलेट करना चाहेंगे, एंड ये लीजिए यहाँ पर स्मोक लगा दिया जाएगा. डेसिपेट इस्तेमाल किया, थोड़ा सा यहाँ पर ल्योर करने की कोशिश की गई, एंड ये नीचे कंकस करने की भी कोशिश की गई, लेकिन कोई शिकार नहीं मिलेगा. डबल पीक करना चाहिए था, खुद ही आइसोलेटेड फाइट्स दे रहे हैं, लेकिन विनर विल कम आउट टू बी द विनर, एंड पहली बार एंटी इको राउंड को जीत पाएगी वन टीम. ओह, द फर्स्ट राउंड, एंड ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा, क्योंकि आपने एक सेव राउंड अब यहाँ पे काइंड ऑफ कन्वर्ट कर लिया, ऑल द फोर्थ राउंड की तरफ से, बट विनिंग द एंटी इको विद स्ट्रिंगर्स काफी ज्यादा वैल्यू भी देगा. वेपन्स भी अपग्रेड हो चुके हैं, एंड अब यहाँ पे फोर्स कर दिया जाएगा ऑन द साइड ऑफ नेओस के वो अब सेव राउंड करते हुए नजर आए. लेकिन ये जो 2-12 का स्कोर लाइन है, आपको ऐसे ही राउंड 10 बार लगातार निकालने पड़ेंगे. एग्जैक्टली, 10 और बार. Is that possible against Naos? I don't really think so. But देखते हैं क्या यहाँ पर कैपिटलाइजेशन रह पाता है, बिकॉज अभी के लिए तो सिचुएशन अच्छी लग रही है. हाउएवर नल कमांड यहाँ पर ऑनलाइन आने वाला है नो टाइम एट ऑल, एंड उसके लिए कंप्लीट तैयारी भी दिखाई दे रही है नाउस के प्लेयर्स की.
अभी के लिए अगर आप नजर डालें तो थोड़ा सा पैसिव खेल रहे हैं बिकॉज वेपनरी का डिसएडवांटेज है, तो साइड बी पे ज़्यादा आगे अग्रेसिव नहीं जाएंगे। साइड ए पे थोड़ा अग्रेसिव आने की भूल करी ज़रूर थी, लेकिन उसकी पूरी की पूरी भरपाई उन्हें करनी पड़ गई है। नाउ उसके प्लेयर्स हैव टू बी प्रीटी केयरफुल राइट नाउ। ये नीचे ये तो चेक ही नहीं किया एंगल, सीधे सीधे पापी चिलो के हाथों में आके गिरे हैं एंड उस पे कैपिटलाइजेशन भी होगा। 2v4 का सिनेरियो है, विन कंडीशन तो नहीं रहने वाली यहाँ पर कोई भी, सो आई गेस जस्ट ड्रॉपिंग द वेपन्स इज द एम। डेफिनेटली वो फ्री वेपन्स को बिल्कुल ड्रॉप यहाँ पे कराना जरूर चाहेंगे। अभी के लिए अगर देखा जाए एक हेवन के ऊपर बुलडॉग अवेलेबल है जरूर, अगर कोई भी प्लेयर पिक करना चाहे तो, बट सिर्फ अपनी फ्रेंजी के साथ तो बिल्ड्स आगे बढ़ रहे हैं। ऑल्दो बुलडॉग अवेलेबल था उनके पास, बट डैमेज यहाँ पे बहुत ज्यादा सोकिन यहाँ कर चुके हैं। 30 HP ऑन हिम, एग्जिट फ्रैग मुझे नहीं लगता मिलने वाला है। शट्स बोथ देम डाउन। तीसरा राउंड आएगा यहाँ पे वन के हाथ में, बट नाउ जहाँ तक का सफर तो बिल्कुल उन्होंने टैग कर लिया है। अब एक फुल बाय राउंड रहने वाला नेओस के लिए, एंड नेओस फुल बाय राउंड में बहुत ज्यादा डोमिनेंट नजर आती है। सो अगेन वन के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं दीदी। एग्जैक्टली फुल बाय राउंड जब होता है दोनों टीम्स के पास में, तो कहीं ना कहीं अपने एम डुअल्स में नाउस बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आती है। बट लेट्स सी क्या इन्हें इनफ यूटिल्स एकत्रित करने का मौका देने वाली है या नहीं, बिकॉज बीइंग ऑन द डिफेंसिव साइड यू नीड टू हैव द राइट अमाउंट ऑफ यूटिल्स एंड यू नीड टू फार्म द राइट अल्टीमेट्स एज वेल, ताकि आप रीटेक सिनेरियो पे अच्छे से खेल सकें। बिकॉज साइड को होल्ड कर पाना ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कंसिडरिंग कि आप 2 या 3 प्लेयर्स होते हैं एक साइड पे, एंड अटैकिंग साइड से 5 प्लेयर्स अगर चाहें तो एक साथ आ सकते हैं आपके ऊपर। इस बार जो कि खैर वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। देयर इज अ स्प्लिट, वी आर सीइंग 3 प्लेयर्स मूविंग इन फ्रॉम द मेन। एक प्लेयर मिड का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज गोना बी विनर, जो कि अब वेंट्स की तरफ जा चुके हैं, एंड वी आर स्टिल सीइंग रेनी वे फार फ्रॉम द एक्शन। दो मेजर फ्रैग्स निकाल चुके हैं। जब तक यहाँ पे लर्किन आया विनर का, तब तक वो डील डन हो चुके थे, बट नाउ विनर जाको शटडाउन करेंगे। पेंशन मिस आउट जरूर करेंगे हैं, बट अभी भी मॉयर यहाँ पे कहीं ना कहीं स्मोक के अंदर प्लेस बना सकते हैं। ही इज गोइंग इन। शाओशी की हेल्थ बहुत ज्यादा लो है, लेकिन टाइमिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इशू रहने वाली है। बट मॉयर सही टाइम पे स्विंग करने में कामयाब। टेक्स वन डाउन, एक और फ्रैग निकालेंगे रेनी के ऊपर। आई गेस दिस इज डन एंड डस्टेड फ्रॉम हियर। विनर इन अ 1v1 सिनेरियो स्पाइक प्लांट करना एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है भाई। सीने काल की अगर बात की जाए, स्पॉट कर लिया गया है उनकी तरफ से, उनको पता है कि प्लेयर्स है, और स्पाइक भी पिकअप कर लिया है। नाउ इट इज ऑल कम डाउन फॉर दैट अल्टीमेट, क्योंकि विनर आएगा शो स्टॉपर के साथ राउंड क्लच इन कर सकते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी उन्हें। सीधा यहाँ पे ड्राइव भी किया एंड अपना एम डुअल जीतने में कामयाब। क्या एक कमबैक की शुरुआत हमें देखने को मिल रही है? पॉसिबल है, पॉसिबल जरूर है। इनके अल्टीमेट्स भी काफी स्टैक हो चुके हैं एंड सेव पर जा चुके हैं, तो 2 और राउंड मान लीजिए कि निकल गए वन टीम के लिए। ये राउंड यहाँ पर वेपन के एडवांटेज पे निकल जाएगा, एंड इसके बाद आने वाले राउंड के लिए काफी अच्छी क्रोनोलॉजी यहाँ पर सेट की जा सकती है अल्टीमेट्स के द्वारा इटसेल्फ। सो आई गेस बहुत नजदीक इस लीड को लाया जा रहा है, जो कि एक ऐसा मैच था जो कि लिटरली 13-2 पर खत्म हो सकता था, उसको 12-4 तक खींच लाए एंड 12-6 तक भी ले जाने की पूरी एबिलिटी रहने वाली है। लेट्स सी नाउस इसका जवाब कैसे देती है, बिकॉज फिलहाल के लिए तो इनकी सिचुएशन गंभीर लग रही है। वेपनरी का एडवांटेज नहीं है, ज़्यादा आगे आके खेल नहीं सकते। वेट करना पड़ेगा कि साइड पर एंटर कर जाए प्लेयर्स, उसके बाद में उनको किसी तरह क्रॉस फायर्स के थ्रू यहाँ पर शट डाउन करने की कोशिश की जाए, एंड उसी के साथ साथ अपने वेपन्स अपग्रेड किए जाए। ओके, एक ट्रिपल स्टार टुवर्ड्स द मिड रीजन है जरूर, बट यहाँ पे पेंशन आई थिंक दोनों ही रेस को थोड़ा सा अपने पेंशियल पे वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही टाइम मिस कर रहे हैं उसका। एक और बार बिना कोई वैल्यू दिए पेंशियल का इस्तेमाल होगा, बट अगेन अभी यहाँ देखा जाए एक मिड का पूरा कंट्रोल वन के हाथ में जरूर यहाँ पे जा चुका। दे हैव द ए राफ्टर्स कंट्रोल एज वेल, एंड जहाँ तक नेओस की बात की जाए, बहुत ज्यादा डिफेंसिव सेटअप खेल रहे हैं ऑन दैट ए एंड मिड साइड, एंड बी को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रखा। देखना पड़ेगा क्या अगर जिस तरीके से स्पाइक कैरियर मूव इन कर रहे हैं बन के, अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड मूव इन करते हैं, शायद शेरिफ के साथ भी नेओस से राउंड को सिक्योर कर सकती है फिर। एग्जैक्टली यहाँ पर शेरिफ के साथ में अगर 2 पिक्स भी निकाल लेते तो फिर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, एंड उसके बाद में पापी चूलो वुड बी एबल टू डिप्लॉय द वाइपर स्पिट, लेकिन वो ऑलरेडी शट डाउन हो चुके हैं। सो नेवर माइंड दैट डेरिवेशन, एंड नाउ सभी शट डाउन हो चुके हैं, बिकॉज चाइवे यहाँ पर 3 पिक्स निकाल चुके हैं अपनी टीम के लिए। ब्यूटिफुली डन, एंड एक और राउंड यहाँ वन टीम के हाथ में। हाउएवर नाउ इट्स अ बाय फ्रॉम दिस साइड ऑफ नाउस। अपना मैप इतना राउंड डिफरेंशियल जरूर यहाँ पे कम कर रहे हैं, बट अगेन इस राउंड की अगर बात करें फ्रॉम बोथ द साइड्स, एक काफी अच्छा स्टार्ट जरूर मिला था जहाँ ने जिस तरीके से वन टैप किया था। एक फ्रैग जरूर अपने नाम करने में कामयाब हुए थे, बट उसके बाद क्योंकि वेपन्स एडवांटेज था, दे वर एबल टू गेट द साइड। बट अगर इस राउंड में देखें, दोनों ही वाइपर्स के पास उनका अल्टीमेट अवेलेबल है। दे हैव द वाइपर स्पिट ऑनलाइन,
इन्वेस्टमेंट बिल्कुल यहाँ पे करना चाहेंगे, लेकिन जायस की अगर बात की जाए उससे पहले ही यहाँ पे ऑफ गार्ड पकड़ना चाहते थे पापिचू लोगों को, बट टाइमिंग यहाँ पे काफी अच्छी होती हुई। नाउ द मिड कंट्रोल हैज बीन डिनाइड एंड अभी तक वन जो मिड कंट्रोल के थ्रू एग्जीक्यूट बना रही थी, इस बार अगर मिड में आएंगे तो स्नेक फाइट के अंदर निकलना पड़ेगा, बट राइट क्लिक ऑन जा शट्स हिम डाउन। एग्जैक्टली काफी अच्छी वैल्यू अपने अल्टीमेट की यहाँ पर जायस निकालते हुए। एंड नाउ इट्स अ 5v4 सिचुएशन। ज्यादा प्लेयर्स लूज नहीं हुए, एक मात्र प्लेयर खोया है आपने, एंड उसकी भरपाई भी हो जाएगी। सीनियर काल यहाँ पर रिट्रीट कर लेंगे, लेकिन फाइट्स डिफिकल्ट रहने वाली। विनर यहाँ पर जीतेंगे, बुलेट को पिक ऑफ करते हुए नजर आएंगे। एंड नाउ इट्स अ 3v2 दैट टू विद द वाइपर्स स्पीड ऑन 9। ये तो मुश्किल है, 6-12 तो हो ही गया। 2 HP पे हैं बेड्स ऊपर से, बट 2 HP के ऊपर होने बावजूद दोनों फ्रैग्स यहाँ पे निकाल चुके हैं। ओह, तो वाइपर स्पिट है जरूर, लेकिन प्लांट अभी तक नहीं किया गया। सबसे बड़ा चैलेंज यही है इस 2v1 में स्पाइक को प्लांट करना, एक नाइट में रोने वाला शाओशी के लिए, क्योंकि जैसे ही टैप करेंगे वहां से स्विंग आउट आएगा, लेकिन पापिचू लोग शाओशी को शट डाउन करेंगे बिना किसी दिक्कतों के। एंड वो स्पाइक के अंदर डिले करना बहुत ज्यादा भारी पड़ता है वन को। 3 राउंड्स लगातार निकाल के कहीं ना कहीं थोड़ी जान फूकी थी इस मैच में, बट इन दी एंड नाओस कम्स आउट ऑन टॉप एंड वन को एक बेस्ट ऑफ 3 सीरीज में 2-0 की शिकस्त मिलेगी। ब्यूटीफुली डन, ब्यूटीफुली डन। एक और ऐसा राउंड जो लग रहा था कि कंप्लीटली हाथ से निकल जाएगा। पापू चूलो उसके MVP बनते हुए दिखाई दिए, एंड ही वाज नॉट ओनली एबल टू पिक ऑफ विनर ऑन दी हेवन साइड, बल्कि साथ ही साथ नीचे जाकर उन्होंने सामने वाली वाइपर को भी शट डाउन किया एंड अपने आप के लिए एक विन सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की। साथ ही साथ विक्ट्री भी नाउस को यहाँ पर दिलाते हुए नजर आए। ब्यूटीफुली डन। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन थी फॉर द केओ, विड्स बहुत फंसे हुए थे, तो उनको भी यहाँ पर कंप्लीटली सिक्योरली बचा लिया गया। एंड आई मीन दिस वाज कंप्लीटली अ सरप्राइज फॉर वन टीम। ना सिर्फ पहले मैप की कॉम्पोजिशन बल्कि सेकंड मैप की पिक, एंड दे जस्ट कुड नॉट कोप अप। डेफिनेटली एक चीज काफी यहाँ पे सब अच्छी देखने को मिले कि नाओस ने जिस तरीके से अपने कॉम्पोजिशन बिल्डअप करा है, इवन इन द एंड वो 2v3 जो क्लच करा है यहाँ से, एक काफी अच्छी टीम निकल के जरूर आ रही है। बट आज यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्रुप अल्फा के अंदर स्कोर लाइंस जो है वो बिल्कुल डिसाइड हो चुकी है, क्योंकि 1 के लिए तो अब यहाँ से क्वालिफिकेशन का प्रोसेस बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। दे हैव लॉस्ट द 3 मैप्स, दे हैव लॉस्ट दिस वन एज वेल। सो टॉप 3 में तो स्लॉट उनको नहीं मिलने वाला है, एंड टॉप 3 का स्लॉट नहीं मिलना मतलब अब प्लेऑफ्स के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो वन टीम हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द एसेंशियन, एंड ये चीजें उनको बहुत ज्यादा हर्ट करेंगी। एग्जैक्टली। नाओस की मुझे एक चीज जो बहुत ज्यादा पसंद आई, दैट वाज देयर ऑन द फ्लाई थिंकिंग। कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर पा रहे थे एंड बहुत सही जवाब भी दे पा रहे थे हर एक बैटल का। एंड टू द बेस्ट they were also able to make sure कि हर एक फाइट में, हर एक एम डुअल में यहाँ पर कैपिटलाइज करते हुए नजर आए। However, सीनियर काल को जिस तरह से पिक किया गया था ऑन द जंप पिक इटसेल्फ, दैट वाज ब्यूटीफुली डन फ्रॉम द साइड ऑफ वन टीम, बट उस एक अकेले पिक के ऊपर पूरा मैच तो नहीं जीता जा सकता था। द ट्राई वाज वेरी नाइस। सेकंड हाफ में आने के बाद उन्होंने काफी अच्छा डिलीवर भी किया, लेकिन नाउस वाज जस्ट वन स्टेप अहेड। ऑलरेडी 11-1 का स्वॉप लिए था, 2 राउंड्स मात्र चाहिए थे, जिसमें से पहला राउंड पिस्टल में ही मिल चुका था। So it wasn't a difficult climb for them, and they were able to shut it down pretty well. डेफिनेटली, एंड एक बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हाफ, एंड आई गेस यहाँ पे जो स्कोर लाइन रही है वो 13-1 की भी हो सकती थी, क्योंकि अगेन जिस तरीके का प्ले यहाँ देखने को मिल रहा था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते। 11-1 का स्वैप, देन उसके बाद पिस्टल राउंड भी जीता। नाओस हर एक चीज के अंदर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट इन द एंड वो विक्ट्री जो कहीं ना कहीं चाहिए थी नाओस को, वो उनके हाथ आती है। एक डोमिनेटिंग फैशन में एक 2-0 विक्ट्री के साथ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एंड आज पहली बार यहाँ पे एसेंशियन के टूर्नामेंट में नाओस ने 2-0 विक्ट्री सिक्योर की है, वरना आज से पहले सारे मैचेस 2-1 खत्म हो रहे थे उनके। एग्जैक्टली, एंड आज जो आखिरी मैच था उसको फुल फ्लैजेड डोमिनेशन के साथ यहाँ पर खत्म करते हुए नजर आए। एंड एक चीज अगर आपने नोटिस की हो, उनके एक प्लेयर घुसे थे एंड एंट्री के टाइम उन्होंने बहुत स्वैगर मूव मारा था। उनके पास में एक ऑक्टोपस था जो सैड फेस लेके घुसा था, एंड ही वाज शोइंग सम एंग्री इमोशंस एट दैट पॉइंट। जब विक्ट्री मिली उन्होंने अपने ऑक्टोपस को टर्न अराउंड किया, एंड देन इट वाज इन द हैप्पी फेस, एंड उसके साथ में उन्होंने अपना विक्ट्री फोटो क्लिक करवाया, व्हिच वाज प्रीटी क्यूट। आई मीन उनके पास तो एनिमेशन है ही, साथ ही साथ उन्होंने अपने ऑक्टोपस को भी बहुत सारे इमोशंस यहाँ पर दिए हुए थे। आई थिंक द होल टीम वाज वेरी हाई ऑन दिस विक्ट्री। बट वेल, जो हमारा मेन काम रहने वाला है वो रहेगा हमारी इंग्लिश टेस्ट के ऊपर, बिकॉज देयर इज स्टिल एन इंटरव्यू दैट वी शुड बी टेकिंग अ लुक एट।
incredible angles, and especially Ja, his double blast back setups have been absolutely immense to just buy the space that Naos needs. Well, that's it, you know, great movement all throughout that. As we said, look, it was the double flash setup coming through from Naos, which helped Ja take that space. Papi as well. What's that? Is that a 3.0? Yeah. 3.0 KD. Ridiculous scenes coming through from the big man. And it needs to be said as well, 348 ACS up against the likes of one who tried, who really did try, but unfortunately just didn't have enough left in the tank. And Naos, is this going to be a bit of a bait, right? They've shown their pocket pick of Split before the playoffs. You know that they wanted to save that for as long as possible, but they were just worried that they weren't going to be able to get this map today after a couple of hiccups already throughout the group stage. You're looking at this as well. One got 9 first kills, which means Naos got 4 rounds back from a deficit. That is a spectacular performance. Yeah, this is what we were talking about on the cast. Naos is that team that can work off that deficit. They're going to be pulling on back, and they rely on their lurk value to actually find the angles. We saw it, especially moving to that B site, how we had Senor Carl or Papi Chulo take that heaven control, that they would be taking that garage and give them, again, another angle to work with. And I think it just makes sense, right? Papi coming through as the MVP. Clutch percentage. Look at the clutch percent, Mac. Yep. 100%. How many is that? Like 1 from 1 for 1? 1 for 1? 20 from 20? I don't know what it is at the end of the day, but that is a performance that is going to shoot him up the individual statistics, so he'll feel good. Everyone at home that sees those stats are going to feel good. And you just got to say, not only these two on the desk, but everyone back at home in the Philippines are going to be feeling spectacular knowing Naos came out and asserted the domination to show what they're finally made of. We've been waiting for this Naos to show up all through the group stage. They've looked shaky, but we got what you told me they were capable of right here today. Yeah, I mean, we saw some of those exemplary players here in the final game for the Philippine team. Our final cast, it's lovely to see how they were able to close things out. I think you talked about it during the cast of Papi Chulo had the highest amount of clutches in this tournament right now, and people are asking me, you know, which teams, or rather which players from which teams do you think are franchise and Pacific League ready? I think he's one of them. I think these boys have got what it takes to bring the Philippines finest to the front stage. There's a big chance right now with the form that we're seeing from them. It was that shaky start versus Fancy United. It was that loss from Zerxia, but they lifted themselves to the highest heavens. They've spread their wings and they've flown to the playoffs. And before we jump to the interview, need to shout out to Ja. Got involved in 18 of the opening kills. 11 going his way, 7 certainly not, but we have one big man, one big Papi Chulo up on the stage for a winner's interview. สวัสดีครับผมนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกวันหนึ่งนะครับของ Ascension นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าแค่เปิดมาแมตช์แรกก็สุดยอดกันไปแล้วครับแต่วันนี้ครับเราอยู่กับผู้ชนะนะฮะนั่นก็คือปาปิชูโร่นั่นเองครับจากฝั่งของ Naos Esports ครับผม so ladies and gentlemen we are here today now with Papi Chulo from Naos Esports. What a game. What an incredible performance from your team, and congratulations for the win. Of course, we do have plenty of questions for you that, of course, our fans here and the fans back home would love to know and understand. สำหรับคำถามนะครับอยากรู้เลยเพราะแมตช์เมื่อกี้เนี่ยเป็นแมตช์สำคัญมากอยากรู้ว่าทีมของเขาเนี่ยครับรับแรงกดดันมามากน้อยขนาดไหนนะฮะในการเตรียมตัวสำหรับแมตช์นี้แล้วก็แน่นอนอยู่แล้วรู้สึกยังไงสำหรับการคว้าชัยชนะไปได้เพราะมันมีผลจริงๆครับ So the first question how did your team deal with the mental pressure knowing that you know how important this match was and of course how do you feel after being able to get the win and it was really an incredible performance actually yung pressure parang nire-reset lang namin para makapag-start kami ng bago and nung naka-qualify na kami medyo relieved kami kasi alam namin na makakalaban namin yung iba pang team na mas malakas. So he said that they really just wanted to reset mentally to make sure that, you know, there wasn't that much pressure. And he knows that all of the other teams that they're fighting against are very, very strong. So he just wanted to, the team really was relieved when they knew that they were going to qualify. ครับผมก็บอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะครับกับทีมนั่นก็คือการรีเซ็ตนั่นเองฮะเริ่มต้นใหม่เพราะว่ามันแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันมีแรงกดดัน
แต่พอเราทำได้สำเร็จแล้วเนี่ยแรงกดดันมันก็หายไปส่วนหนึ่งนะครับผมแต่อย่างไรท้ายที่สุดแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโล่งอกเหมือนกันที่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้แล้วนะครับผมก็ยินดีด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าเกมเมื่อกี้นี้ไฟลุกมากนะฮะสำหรับคำถามต่อมาครับอยากรู้แล้วเพราะตอนนี้เราลอยลำละนะเลยอยากรู้ครับว่าตอนนี้มีทีมไหนหรือเปล่านะครับที่น่าจะเป็นปัญหาถ้าเกิดว่าเข้าไปในรอบ playoffs แล้ว And of course, leading to the next question, I would love to know, now that you've made it to the playoffs, which team would actually be the biggest obstacle for you if should they qualify? Siguro sa group namin yung Zerxia kasi natalo kami last time. And sa kabilang group naman is yung D+ and Bleed. So he says that they're definitely looking forward to facing Zerxia once again. I think there's a unfinished business there. And on the other group, they are very much looking forward to seeing D+ Kia and Bleed. นะครับหลักๆแล้วนะครับไม่มีอะไรมากครับอยากเจอเซอร์เซียอีกสักครั้งหนึ่งครับบอกว่ามันมีแค้นที่ต้องชำระอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะครับแต่จะเป็นอย่างไรก็ตามต้องรอดูเนาะแต่ก็ยังมีทีมอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่น Bleed นะครับผมที่น่าต้องจับตามองจริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเกมแรกของเราดุเดือดเผ็ดมันขนาดนี้ครับเป็นเพียงแค่เกมแรกครับเรายังมีอีก2เกมให้ท่านผู้ชมติดตามนะครับผม and of course this is only just the first game that we've gone through we still have 2 more left and what a start of the day it's great I'm looking forward to the rest of the games but in the end congratulations guys for making it to the playoffs but we still have, again as mentioned we still have 2 more games left but don't go anywhere go grab your drinks grab your popcorn and I'll see you guys right after the break Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day.
Hey guys, I'm joined by Blaze King today from Boom Esports. He's been doing pretty well so far. Maybe not as well as he would have liked to, of course, but look, that's what we're here to have a quick chat about. Now, how's your time been here at Ascension Pacific so far, and have you lived up to your own expectations yet? To be honest, not actually, because actually we didn't expect us to lose against like One Esports. Now, it makes us more harder in the group stage, so we need to win the last match against Zerxia. So no, I didn't expect this, to be honest. Yeah. How are you feeling about that game in particular as well? Zerxia, look, they're a scary prospect. You've got to play them tomorrow or today, whenever this video goes out. But yeah, they are looking pretty hot right now, right? Yeah, they are actually playing like really, really good. But just like, you know, we have like prepared also like against them, playing against them. So hopefully everything goes well. Hopefully it does for you guys' sake, of course. Now, look, high expectations for Boom coming into Ascension Pacific. Has that added extra pressure and affected your gameplay, or is it sort of just, you know, part of the job? For me personally, like I didn't like get pressured a lot, but I don't know about the boys. Maybe like they think like, oh, we are the favorite here, so we need to win. So if like when they lose, they get down so pretty bad. So for me, actually, like personally, I didn't get pressured a lot. Okay, that's nice to know. Now, I want to know more about you and your personal goals in Valorant. Is it franchise league? Is it take on the world? Do you want to make it champions one day? What's the plan? For me personally, I'm targeting to win this Ascension first. So it's gonna be like more, how to say this, like more fun if you go to franchise, like by not get recruited by the franchise league teams. So if you're like actually winning here, so you actually like crawling from the bottom. So it's actually like more pressure for me too. But if I do have a chance, like the franchise league teams interested in me, so let's see. So is that also what keeps you passionate about the game as well and playing competitively? Is it just the journey that you're looking for? I really want to win. Actually, I don't care about the money. So my target is just like only winning. Yeah. So just a competitive, passionate bloke. That's Blaze King. That's his thoughts on everything that's gone down so far. Thanks for joining me. Thank you. Y'all sit back and watch me speak. About to take over your screen. Talking bulls in 93. Talking mom, I'm on TV. Y'all know all I do is me. All I do is me. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and all I know, my money green. About to snap and make a scene. My cup off and make this free. My cup off and make them scream. Go back off for TMZ. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and watch. Watch me. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back. Sit back. Sit back. Sit back. Money long, nothing on credit. I got style, don't catch no feelings. All this bread, ain't got no lettuce. I got style, don't catch no feelings. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back and watch. Sit back and watch. If it ain't got style, I ain't with it. I ain't with it. If it ain't got style, I ain't with it. Look, if it ain't got style, I ain't with it. I ain't with it. If it ain't got style, I ain't with it. Look. Watch me. Sit back and watch.
I was a little bit bored after that series, so I decided to go for a wander, go for a journey around the hotel here. And on my journey, I found some fruit bearers. I found 2 jokers, 2 individuals, and they brought me this as a present. I don't know why, but they've been around. They've been walking around Bangkok, Thailand, and they've been experiencing the wildlife, the flora. What are these? This is a pineapple. What's that? It's a fruit of some nature. I think it's named after a Bonkers player. Who are you? Conk. And who's that? Komodo. And what are those? Rambutan. Rambutans. Yeah. Rambutan. There's something new. I have never tried them before. They're hairy and I fruit. got them for you. Oh, I love hairy fruit. It matches my moustache. Yeah. Either way, look, I'll eat these while you guys cast. What do you reckon? Sound Don't like take a deal? the skin off either. You have to eat it that way. Yeah. That's what I was told. Nah, not yet. Maybe later. Look, that's a fruit for another day. But we're here for serious business. And before we get into this game, what's your thoughts on the last one? Jeez, I tell you, Naos, right? Like, you know, they had the storyline coming into this. They've been really, really excited through the whole way. And we've got history with some of these players, like all the way back to, you know, years and years and years of tactical FPS. So to see them thrive and power forward was awesome. So they only needed 1 map. They made it 2. And geez, Split was a stomping. Yeah, absolutely. I mean, they didn't really let one team in whatsoever, right? And I think that was a really big problem as well, because we're looking for one team to try and get something out of them. Something in that series to, you know, get them hyped, get excited towards that. But more often than not, Naos were just doing, I think, more than that series necessarily needed for them, but my oh my, did they make it a show. They certainly did. And speaking of shows, we're jumping back into Group Omega to see exactly what goes down. This isn't a must-win for Bonkers, but it kind of is. And they're doing it not only for OS, but they are doing it for all the crowdfunders. You know, everyone has helped them have themselves a little boot camp and try to hit their stride, which they managed to do in the last game, proving everyone wrong after a bounce back from a rough beginning. Yeah, look, outside of, you know, the funding into the orgs and everything like that, India a little bit more love since the release of Valorant. They've had some orgs, they've had some events going on. OS, a little bit of a rougher side in that thing, but there's actually a lot of comparisons that we can draw between the two, right? Whole lot of Jet players and a whole lot of ego, right? And I think that obviously benefits and also disadvantages a lot of these teams too. So despite the population differences between the two, they are hungry, they do fight, and they've got a lot to prove in the server. Well, let's talk about Orangutan for a minute. A minute? And at the same time, this team, yes, they're already eliminated. They were the first team officially eliminated from the running here at Ascension Pacific, but now we're a little bit worried because I've been seeing the smirks on their faces. They're looking confident. They're looking insane right now in the crazy way. And they have nothing to lose. And we know what they are capable of. Yeah, when you do add that they've got nothing to lose, that's what makes them kind of a problem factor, and it just exponentially makes that all the more different because we don't know what sort of capabilities are going to come from them in this series as well. Because they're eliminated, they have gone through so much emotion through the course of this week. We see them at the very beginning excited. Energy levels are high. They're getting, you know, a map here or there. They're getting good showings against teams that, you know, they're wanting to fight against and give it a massive fight. But the problem being now, right, we've seen them go up and down throughout that journey. When they lost that match the other day, they were so far down that they were wondering how do they mentally get back into it. They've had a bit of a rest. They're going up against the Bonkers. And as you say, this series for them doesn't really change the grand scheme of this tournament, but there's still a chance for them to get a win on the international stage. That's it, right? It's not just about doing it for South Asia. You have 2 Filipino players as well who have seen their countrymen just get a huge win in that first series of the day. So you better believe that Tesseract is going to be fired up as well as this is. He's been fragging the entire tournament as well. Like in some of those big wins that they actually have managed to bring away, it hasn't just been the focus on Raw Fuel or RVK. You know, the Filipino players have been absolutely crushing it as well. So I think that's a perfect way of putting it. You know, there is obviously still a lot to play for. Pride is such an important thing in the server here. You know, we've heard all about it. I think there was actually that cheeky interview you had with Blaze King from Boom as well. Who cares about the money? It's all about the glory. And I think both of these teams in Orangutan and Bonkers have exactly that to prove. And you don't want to be going down 0-4, of course. You want to be going home with at least a win, or all the haters, everyone that was against Orangutan, the whole Ape army that was supporting them, might not support them anymore. You know, you got to do it for the fans. You got to do it for your whole region. You got to do it for your VCT league. And look, at the same time, this is essentially what
we expect from, you know, like a Marvel movie, right? You've got your heroes, you've got your villains, and in this story, Bonkers, at least in my opinion, they are the heroes, Orangutan the villains, and Bonkers, they are looking to make it from the bottom to the top with the support of the community. So many people as well, even when we look toward the crowds that we had in the very beginning in the Scars game, there was not much representation for the Bonkers squad there. But we have seen the turning of those tables right now. Fans here, whoever they are, they have shifted. You know, the Scars game, it is what it is. It had some circumstances. But D plus Kia, who have been rejuvenated in their series since the Bonkers game, where Bonkers got that victory. Now, people are wondering, Bonkers, what have you actually got for us? Are you going to get to playoffs? It's going to be crazy, and I think people don't really understand truly how challenging it can be. We're an expensive region to support. It's hard. The hours are always late. You know, it's hard to get up and watch those games. And that's exactly what I sort of talk about when we mentioned the word resilience, right? Bonkers is a resilient team, getting offers for an international roster, still choosing to stay together and be a part of it. And then not only that, to rock up this on the back of a crowdfunding, showing that they've got support from streamers, from viewers, whoever it might be, and to come here and, as you mentioned, losing the Scars, sure, but D plus Kia, are you joking me? Yeah, the fact that they managed to look so strong there, D plus Kia turning it fully around. But of course, this match matters because you've got to remember strength of schedule for Bonkers. Their last match is against Bleed, and if they don't win this one, they got to win that one. And if they don't win that one, which on paper is a harder game to play, then they could be going home. They could be missing out on playoffs because D plus Kia, as you mentioned, turned it around. Scars came out of the gates so damn hot. Bleed's been looking arguably a little bit shaky, so there is a world where Bonkers can rack up 2 more wins here and make meal of Group Omega. Certainly more than a meal, and I think, yeah, Bleed exactly that, right? They look mortal. They have been cut along the way here because there's so many players and so many people, I think, watching along. You've seen it, fans in the crowd who have come in here being like, Bleed's the favorite. You know, it's silly not to think that. And I think Bleed's potentially actually felt a little bit of that pressure overall. So they're definitely beatable by Bonkers, but yeah, as Max sort of mentions, right, if they don't come in firing today, it'll raise questions. But onto this, the head-to-head that we talk about right now, Lou versus Rawfield. The reason I've gone for these guys is just purely in the back that Lou has, at home, been a little bit inconsistent, but this competition, he has stepped up to the plate. He's no longer a jet main. He's been picking up that raise. He's been looking really, really strong. And on the other side, for Rawfield, he's quite commonly been that player, again, locally, who you look towards, but he has been a bit up and down at this event. So I think the contrast between the two really kind of line the tie because, yeah, both are brilliant players in their own right, fantastic to watch, and very, very exciting, and I think they're going to have to both do that exactly in the server today. And for me as well, look, Lou, he made that cameo yesterday. He was taking notes on D+, he was taking notes on Bleed, but he wasn't taking notes on Orangutan. And even though he thought, look, maybe the top of the group isn't looking as stacked as we initially thought, he was maybe forgetting about Orangutan, and you need to take note of them today because the amount of clutches we've seen from so many of these individuals, I'm looking at RVK, every time he gets a sheriff, the amount of thrifty rounds and clutches he has won just with that, you know, that pistol in his hand is kind of ridiculous here. Definitely the highest rate of success so far with that weapon in Ascension Pacific. Yeah, and you got to remember as well, it's not just those guys too. When you've got Tesseract starting to actually fire up on this team, you don't need Rawfield to go above and beyond. His aggression kind of was brought back a little bit by D plus Kia in their previous game. You see him winning a lot of first duels, but then trying to go for something more. Those first deaths as well, where D plus Kia get that 5 versus 4, they're able to still convert that very, very cleanly. If Bonkers are able to do that as well, coming towards this series, that's going to be one avenue where I think Bonkers can really shine here. Well, I know exactly where the predictions are going here. I feel like we're all going to wear our hearts in our sleeves for this one, so let's just bring it up. There's no beating around the bush. I don't know if anyone has gone for Orangutan. Did you guys pay attention? Did any of the talent? Everyone was Bonkers, and I was kind of also throwing it back to my whole, when I go for Bonkers, they lose. When I go for their opponents, Bonkers win. But I have a very, very large, firm belief today that the Bonkers are actually going to, you know, make me get my prediction right. My predictions have been cursed too. Let's go. It's been absolutely terrible. I'm the only one that actually has anything between the Aussies. We're going to let the Filipino casters win. Are you guys joking? Let me down here. I'm giving Orangutan a pretty decent chance of winning today. I've heard a couple of people backstage as well. Some of the Thai casters too. I was talking to them and they were like, I feel like Orangutan had this. And I'm like, why, man? Like, why you got to tell me that? Why you got to say that to me? And they're like, well, they took a map off of Bleed. They took a map off of Scars. They're pretty good. And I'm like, well, like, yeah.
Yeah, they are good. Yeah. I know that. I don't want to hear it. I don't want to hear it. I really don't want to hear it from you guys right now. Let me live the dream. But it feels like all of the talent, all the English talent at least, are just fully bought into the story of the underdogs from OS, not having many opportunities and just trying to take it while they can. Yeah, I think, well, just how many fans they've had here inside the crowd, right? Yeah. And it's international fans. You know, none of the Aussies have flown over to watch inside here. It's a bunch of international fans. Lou's become a little bit of a ladies' man, a bit of a star, getting cute photos all the way around. It's just been brilliant to see, and I think I love that because it really is that storyline that you want to cheer on and you want to follow. And look, it's not all just the Bonkers fans. There are people wearing the orange and black, but both the teams do share the same strip. They've all got to go to site after this game. They've all got to go to site. Everyone's got their high vis on. They're ready to get to work after they're done working in the server. Yeah, I think it's quite fun. I think it's quite banterous as well. But I think when it does come down to it at the end, you know, Orangutan, the fact that they have that looming of no series wins here, does that add more pressure to them to perform, to get some international eyes on them? Because we do have to remember the performances that we've seen from, you know, Indian players overseas at the moment in global esports, for example, hasn't really hit what the region is kind of wanting on that international stage as well. And when you add the fact that Orangutan wasn't really the team that a lot of people wanted to see or expected to see come out of the India's region, it makes it a little bit more difficult for Orangutan. Well, it is time, of course, for us to go to a short break. The players are getting ready, they're getting warmed up, but after this, we will welcome them to the stage as well as check out the maps. It needs to be said. Bonkers, so far, they haven't had to show too much of their hand because, yes, they lost 2-0. Yes, they then went and won 2-0, and they've only shown Fracture and Bind overall here so far at Ascension Pacific. Which leads us into this discussion about the map pool. Are we going to get to see Bonkers flex something new today? Are they going to be forced to? Because I know Bind has been there in there multiple times. And Orangutan play the hell out of that map as well. Yeah, absolutely. And I would just like 3 maps, if that's okay. I've been asking everyone. They say, no, Mitch, you're only allowed to do 2 O's, and Komodo, same thing. I would really, really want 3 maps. We have to see these hands, right? And that's where I was sort of leading towards in the idea of with Orangutan, you can't just rock up and fall flat on the door, right? You know, you got to make the most of your time here, show that the individuals, because people are watching, right? So I think when it comes to maps, we have to see some further diversity and, you know, them bringing out some exciting stuff. Yeah, and I definitely think as well the maps
is where Bonkers are going to be able to get a little bit of an edge, because we've seen a lot more maps from Orangutan at this event. The victories that Orangutan have got super close, bringing in overtimes. The maps that Orangutan have lost, we're looking at scorelines that are very different. Your 13-6s, 13-4s on Bind, for example, against D plus Kia. That's where things actually can be scary for them. And they've taken maps, as mentioned, off of some big, big names. So we can't see them take Orangutan too lightly today. I feel like anything could happen, which every time I think about it, I'm like, nah. Bonkers, they just looked so good the other day. They felt good. I was talking to them, you know, they had a multitude of issues in that first series, and I checked with Dragon, he was having some resolution issues, had to play on a different res for the first series, which is a big factor. Managed to figure out what was going wrong and fixed it for that second series, which is why we got to see Dragon have some really clutch moments. And resolution issues are hard, right? If you stop going to the gym, obviously you're not going to be able to hit those goals. So they need to lift up. Not New Year's resolutions. Oh, sorry. No, okay, all right. You know, screens. I'm just thinking it's mid-year. You know, maybe we. Okay, never mind. We'll go past that. But nah, I think you want a gym talk? Yeah. You want a gym talk, Dion? That's why we brought you. Have you been going to the gym? I know you have been. I have been, but I'm still not really showing much progress yet. Hey, it's not about the results yet. It's about the journey. Yes. Right? And you've only just begun the journey. Look, you don't make a meat pie in a day. No. Well, maybe. I think it's a croissant that you're talking about, but the journey is the perfect thing of what we're talking about here for a lot of these teams, right? The transition between Ascension and Pacific and into franchising is just a surreal jump, right? We've seen Global obviously make an okay run, but outside of that, not as much as they were kind of hoping for. So Orangutan need to be able to stand up and do the exact same thing. Well, guess what, ladies and gents? It's not too far away. The game that you've all been waiting for, the third remaining game here in Group Omega is about to begin. Let's check out the maps and let's welcome the players to the stage. Okay, now we'll begin the map veto process for our second match. Bonkers is Team A and OGS is Team B, so we'll begin with Bonkers banning the first map. We'll ban Ascent. Bonkers bans Ascent. OGS, will you ban a map? Ban Lotus. OGS bans Lotus. Bonkers, you may not pick the first map. Pick Pearl. Bonkers picks Pearl. OGS side. Attack. OGS picks Attack. OGS, you may not pick the second map. Haven. OGS picks Haven. Side for Bonkers. Attack, right? Oh. Right, now Bonkers, you may now ban the next map. You have Fracture, Bind, and Split left. We'll ban Fracture. Bonkers bans Fracture. OGS, will you ban either Bind or Split? Ban, Bind, they Split. OGS bans Bind. Final map will be Split. So side for Bonkers? CT. Which is defense, right? Yep. All right. Gotcha. Guys, I'll have a quick recap. So Bonkers bans Ascent, OGS bans Lotus, Bonkers picks Pearl, OGS plays Attack, OGS picks Haven, Bonkers plays Attack, Bonkers bans Fracture, OGS bans Bind. Final map will be Bonkers playing defense on Split. You good? All right, then good luck and have fun. Thank you. Good luck. हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है सभी का Valorant चैंपियनशिप पैसिफिक एसेंशन के अंदर। मैं हूं आपका स्पाइडर्स और Orangutan वर्सेस बॉन्कर्स के मैच में मेरे साथ जुड़ने वाले इस मैच को विटनेस करने के लिए हमारे काबिल दोस्त फ्रेड्स। थैंक यू सो मच स्पाइडर्स। एंड एज यू सेड, ये गेम ना मजेदार रहने वाला है। बॉन्कर्स वर्सेस ओजी, मतलब उम्मीदें तो मैं कहूँगा बॉन्कर्स को इस समय ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बॉन्कर्स इस समय क्वालिफिकेशन के लिए अपने लिए स्पॉट ढूंढना चाह रही है स्पाइडर्स। ओजी हाँ, मे भी सफ़र ख़त्म हो गया हो, बट एग्जैक्टली इस चीज़ को होने से बचाना चाहेंगे। अभी मिनिमाइज है, ये 4-0 दिखाया तो है, देखते हैं आज खुद क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ओजी से हारे तो फिर दूसरों के रिजल्ट पे डिपेंड करना पड़ जाएगा इस टीम को। एग्जैक्टली यार, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल मैचअप है। अगेन
Orangutan तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो टॉप 3 का स्लॉट तो ऐसा कंटेस्ट में भी नहीं है उनके लिए, बट डेफिनेटली बॉन्कर जरूर जाएगी कि एटलीस्ट 2-0 अगर कर पाते हैं देन वो अपने मैप डिफरेंशियल के चलते कहीं ना कहीं टॉप 3 का स्लॉट है, ब्लीड के ऊपर कंटेस्ट कर सकते हैं। बॉन्कर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल मैचअप रहने वाला है, बट जिस तरीके से अभी तक बॉन्कर्स खेलती नजर आई है, एक काफ़ी क्लोज मैचअप भी होने वाला है। हाँ बिल्कुल, ये एक क्लोज मैचअप हो ज़रूर सकता है, बट जिस तरीके से मुझे अभी तक मैप वीटो दिखाया ना, एटलीस्ट हमारे रीजन के अंदर और इवन इंटरनेशनल शोइंग असेंशन में यहाँ तक जो मैप्स पिक हुए हैं, हेवन पिक किया है ओजी ने, बॉन्कर्स ने पिक किया है, पर्ल, ये थोड़े से मैं कहूँगा ओजी के लिए बेहतर मैप्स रहेंगे। अब तीसरा मैप जो है डिसाइडर, होपफुली बात वहाँ तक ना जाए फॉर ओजी, 2-0 ये फिनिश करे, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैप्स है ओजी के लिए। स्प्लिट का वो फाइनल मैप रहेगा, अभी तक पूरी सीरीज के अंदर हमें स्प्लिट खेलती हुई नजर आई नहीं है ओजी, सो विल हैव टू बी वेरी केयरफुल टू सी हाउ डू दीज 2 गेम्स गो। पिछली बार जब शोइंग की अगर मैं बात करूँ पर्ल पे, तो ब्लीड के अगेंस्ट ओजी ने गेम खेला था, तो यह जूसी ने ना बड़ी पिटाई करी थी और आंसर बैक कर नहीं पाई थी ओजी की टीम। पर आज ये आखिरी मौका है कि एक इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर अपनी एक तो विन ओजी पक्का करके जाए यहाँ पे स्पार्टस। एग्जैक्टली, एटलीस्ट आप एक विक्ट्री जाएंगे एंड वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी रहेगा कि आपको ये चीज़ पता है कि क्वालिफिकेशन तो नहीं है, बट फॉर द रिकॉर्ड्स फॉर द ग्राउंड एक विक्ट्री निकालना एसेंशियल के स्टेज पे, ये जरूर ओरांगुटान के प्लेयर्स चाहेंगे एंड हम भी ये जरूर देखना चाहेंगे उनकी तरफ से। एंड बॉन्कर के सामने तो थोड़ा सा आई वुड से ईज आउट कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्कर्स भी इतनी ज़्यादा कुछ आउट ऑफ द ब्लू टीम नहीं रही है, उनके भी परफॉर्मेंस थोड़े अप्स एंड डाउन्स के साथ ही देखने को मिले। एंड अगर आज ओरांगुटान जाए, क्योंकि जैसा आपने भी कहा जो मैप पिक्स है वो कहीं ना कहीं ओजी फेवर्ड है, फर्स्ट मैप पर्ल का है जरूर, एंड ओरांगुटान का जो परफॉर्मेंस है पर्ल पे वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा निकल के आता है। हाँ, इस पर्टिकुलर मैप पे ओजी अच्छा तो खेले हैं, बट वही बात है ना, स्पार्टस फिर अपने रीजन में अच्छा खेले थे वो और काफ़ी डोमिनेट करके गए थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वो एस्ट्रा कॉम्प लेकर आते हैं जहाँ पर अजीज़ फीनिक्स खेलते हैं, तो मतलब एक नया कॉम्प था, हल्का सा पेपर एक्स का भी इसमें टच था, वो भी जिनको फीनिक्स खिलवाते थे इस मैप के ऊपर, बट सिंगल कंट्रोलर कहीं ना कहीं अपने डिसएडवांटेजेस के साथ आता है। और भले ही ब्लीड ने भी कुछ वैसा ही कॉम्प खेला था, बट उसके अंदर फिर वो जो रेना आई थी उसने भाई डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा किया था। वो क्लोज राउंड, वो ज़रूरी राउंड जहाँ पर ओजी को जीतने की ज़रूरत थी, वो हाथ से लेकर गए थे, और ओजी का कॉम्पोजिशन में तो पूरे टूर्नामेंट में चेंज नहीं आया है, तो अब तो मुझे लगता नहीं कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। बिल्कुल वही ट्रस्टी कॉम्प के साथ जा रहे हैं, रॉफ्यूल जेट पे देखने को मिलेंगे, अजीज़ फीनिक्स पे। अब की बस उम्मीद ये रहेगी कि पिछली बार की तरह रॉफ्यूल ऑपरेटर जो है वो विफ ना करना शुरू कर दे। एग्जैक्टली, गन डुअल्स जितना बहुत बड़ी यहाँ पे प्रायोरिटी रहने वाली है, क्योंकि ओजी के लिए जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा अलग रही है अभी तक सेशन में, वो यही है कि गन डुअल्स कहीं ना कहीं हारते हुए नजर आ रहे हैं। एंड अब रॉफ्यू अजीज जैसे प्लेयर्स है ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते, वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रैगर्स वी हैव सीन, एंड इनका परफॉर्मेंस जब भी शाइन होना स्टार्ट होता है और ओरांगुटान की डेफिनेटली फ़ायदा मिलता ज़रूर है। बट अगर यहाँ पे कॉम्पोजिशन पिक रेट देखा जाए, बॉन्कर्स के लिए एक नया कॉम्प पिक नजर आ रहा है, और ये बहुत ही डिफ़ॉल्टी सा एक पिक है। मतलब ये जब अर्ली पर्ल शुरू हुआ था ना, तब ये खेला जाता था, तब ये मुझे डबल इनिशिएटर वाला रोल जो है अदा करते हुए नज़र आते थे प्लेयर्स। RDW इस समय सोवा पे है, मिनिमाइज KO के ऊपर है, वॉट ओमन खेलने वाले हैं ल्यू विद द जेट एंड ड्रैगन ऑन द किल जॉय। अब वही बात है, बी साइड तो इनके लिए भी डिफेंस पे बहुत वीक रहने वाली है। वो 2 स्मोक्स आप अर्ली यूज़ करोगे साइड हिट रोकने के लिए, या फिर वो 2 स्मोक्स आप रीटेक के लिए बचा के रखोगे, ये डिसीजन मेकिंग ओजी के लिए भी उतनी ही मुश्किल रहने वाली है। पर उसी के साथ साथ ओमन के साथ तो और भी मुश्किल है स्पार्टस, क्योंकि एक बार आपने अगर अपने दोनों स्मोक्स यूज़ कर दिए तो फिर वो टोटल 80 सेकेंड का समय आपको वेट करना पड़ता है आने के लिए। एग्जैक्टली, एंड ये जो कॉम्प है बॉन्कर्स का, ये पर्ल से ज़्यादा एसेंट साइडेड लग रहा है। सोवा के वो जेट किल जाए वुमन, ये पर्ल पे हम आई गेस हमने इनिशियल फेज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं देखा, खासकर जब से वाइपर एंड हार्बर का मेटा स्टार्ट हुआ था उसके बाद से तो ये कोई भी टीम रन नहीं करते। एंड बॉन्कर्स के लिए एक डेफिनेटली एक सरप्राइज एलिमेंट है जरूर, बट ओरांगुटान अगेन एक फेवर्ड टीम होनी चाहिए, उनके पास जो सेटअप है विद डबल डुएलिस्ट फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि अब जो स्टॉलिंग पावर होती है बॉन्कर्स की काफ़ी ज़्यादा कम है इस मैप में, एंड ओरांगुटान स्टार्ट भी अटैकर साइड पे करने वाली है। देखिए, बी साइड एक्सप्लोइटेशन में बहुत ज़्यादा देखना चाहूँगा। कल एक गेम देखा था मैंने पर्ल के ऊपर, आई थिंक नाओस का था, और उसमें तो दोनों ही टीम ने ऐसा सोच लिया था कि बी साइड एग्जिस्ट ही नहीं करती है, खाली इको राउंड के अंदर फॉर सम रीजन बी साइड जाते थे।
भाई साहब ऐसी स्ट्रैट्स मेरे को बस आज नहीं देखनी है जिनका कोई सर पैर ना हो। थोड़ा सा मैं चाहूँगा प्रॉपर स्टेटिस्टिकल गेम प्ले आए और दोनों ही टीम्स एक दूसरे को बिल्कुल बराबर की टक्कर दे। ओजी फिलहाल यही ए साइड हिट इनका शुरू होने वाला है, लेट लर किया जाएगा एंटी की तरफ से जिस तरीके की मैप। अगेन पोजीशन बिल्कुल ए साइड के ऊपर, यानी ये ए साइड का अटैक काफी ज्यादा ओरंगुटान को फेवर भी कर सकता है क्योंकि अगेन उनके पास पॉप फ्लैश रहने वाला है फिनिक्स के रूप में। एंड फिनिक्स डेफिनेटली अजीज खेल रहा है, सो वैल्यू निकालते हुए नजर हमें जरूर आ सकता है। बट अभी के लिए जिस तरीके से यहाँ पे डिफेंसिव सेटअप लगाया बॉन्कर्स ने, किलजॉय यूटिलिटीज है उनके पास ऑन द साइड, सो बिल्कुल उसका फायदा मिल सकता है। एक पहला फेक स्मोक डेसिपेट का इस्तेमाल, ऑर्ब को कलेक्ट करेंगे एंड और फार्मिंग तो अजीज की तरफ से बिल्कुल एक कांस्टेंट रहने वाली है विद दैट फिनिक्स एंड द आरबीके गेट्स द फर्स्ट ब्लड ऑन मिनिमाइज। पहला पिक यहाँ निकालते ही साइड हिट भी स्टार्ट होगा, लेकिन ये पैरानोया दिक्कत देगा टेसरैक्ट को, शट डाउन किया गया इमीडिएट साइड में। एंड अब कहीं ना कहीं ओजी को रीथिंक करना पड़ेगा अपने पूरा एग्जीक्यूट। एंड अजीज को अगर हम देखें ऑलरेडी स्पाइक लेके बी साइड के ऊपर यहाँ पे रोटेट करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए जिस तरीके से सेटअप लगाया था बॉन्कर्स ने एक अर्ली रोटेट करके, ऑलरेडी ये पे आ चुका है, तो बॉन्कर्स को कोई भी अंदाजा नहीं है कि ऑलरेडी ओरंगुटान की टीम बी साइड हिट करने के लिए जा रही है। सो डेफिनेटली इस चीज का फायदा वो उठा जरूर सकते हैं। बट लेव की जो पोजीशनिंग है विद द शेरिफ सबसे ज्यादा दिक्कत यही दे सकती है क्योंकि आरबीके ऑलरेडी काफी लो ओवर एचपी है, एक बॉडी शॉट एंड ही विल गेट शट डाउन। सो उस चीज का भी उनको ध्यान देना पड़ेगा। बट नाउ ओरंगुटान के चारों प्लेयर रश डाउन करना स्टार्ट करेंगे एंड आरबीके द वन टैप गॉड टेक्स डाउन लिव। 50 एचपी पे थे जरूर, लेकिन पहला फ्रैग भी अपने नाम का, दूसरा किल भी अपने नाम लेके जाएंगे। एंड आरबीके अभी भी सर्वाइव करे ऑन द बैक साइड। एंड ये पोस्ट पॉइंट के अंदर कहीं ना कहीं ओजी को बिल्कुल फायदा मिलना चाहिए, कोई यहाँ पे इश्यूज आने नहीं चाहिए उनके लिए क्योंकि क्रॉस फायर जो सेटअप है वो बहुत अच्छा यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑल दो जो स्पाइक की प्लांट की पोजीशन है ये थोड़ी ऑफ पोजीशन है, आपको साइड से खेलना पड़ेगा इस प्लांट। शॉट अगेन अभी भी कोशिश कर रहे हैं बट ये डबल फेज दिखाया जाएगा। द बेस्ट वे टू डील विद द प्लेयर हु ट्राइड टू क्लच द सिचुएशन आउट। बट चलिए ओजी पिस्टल राउंड तो जीत के गई और ये काफ़ी परेशानी रही है पिस्टल राउंड इनके लिए प्रीवियसली। पिछले कुछ गेम्स के अंदर पिस्टल हारते थे, वो 2 राउंड अर्ली ड्रॉप करते थे, बट आज के दिन पे एक पॉजिटिव शुरुआत ज़रूर हुई है। और जिस तरीके से मैनेज किया एंगल्स को, जिस तरीके से आरवीके ने भी कुछ अच्छे शॉट मारे, सराहनीय रहेगा। और ओवरऑल एक 3K के साथ एक बढ़िया स्टार्ट मिला है गेम को ओजी के लिए। डेफिनेटली एंड आरबीके तो बिल्कुल अगेन उनके मामले शेरिफ्स के भी क्लचेस देखे हैं इस बार, गोश का भी परफॉर्मेंस आया। बट नाउ उनके लिए एक फुल बाय और कह सकते हैं एंटी इको राउंड है, सो एक फास्ट बेट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है विद दैट हेवी वेपन्स एंड बिल्कुल ट्रेल ब्रेकर इस्तेमाल करके साइड को क्लियर किया जाएगा। रॉ फ्यूल विद जस्ट डैश इनटू द साइड्स, कोई यहाँ पे दिक्कतें नहीं आती हुई, एक काफी क्लीन बेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड नाउ द स्पाइक विल गो डाउन एज वेल। 5-5 का रीटेक है बॉन्कर्स के लिए, लेकिन कोई भी प्लेयर फ्लैंक पे नहीं है तो सीधा स्पॉन के थ्रू यहाँ से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो पैरानोया कम्स इनटू प्ले, लेके तो वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अजीज टेक्स वन डाउन एंड अब तो एक फ्लॉलेस की तरफ बढ़ रहा है, एक क्लीन शटडाउन यहाँ देखने को मिलता हुआ। इजी राउंड फॉर टीम ओजी। एक अटेम्प्ट अच्छा था यहाँ पर, देखिए बॉन्कर्स की तरफ से। उनका आइडिया ये था कि साइड के अंदर आने दो प्लेयर्स को, जैसे ही एक प्लेयर प्लान करेगा उसके हाथ रहेंगे बिजी, तभी हम एकदम सेफ फ्लड रीटेक करने की कोशिश करेंगे और वो ऐसे 5v5 उसको 4v5 बना देंगे। तो वही बात है, ऐसे प्लेस के अंदर आपका फर्स्ट ब्लड बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है और रॉफ्यूल ने उस चीज़ को डिनाई किया, बड़े ही आराम से डिनाई किया। एंड एक आसान सा राउंड ओजी यहाँ पर कन्वर्ट करेगी। दूसरा राउंड आया है, ओजी अप इन द गेम 2-0। अगेन अब फुल बाय राउंड है, सो उस चीज का जरूर यहाँ पे बॉन्कर्स को अब कहीं ना कहीं वैल्यू निकलना चाहिए। लेकिन ओरंगुटान का ये एआर पुश ये कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है, कोई भी यहाँ पे कंट्रोल के नहीं था, लेकिन रीएग्रेस करना चाहते हैं एम इन रीजन। गुड शॉट, अच्छा शॉट मारा अजीज ने। रन इट बैक था तो उन्हें पता था कि ये मॉली से मुझे फर्क पड़ता नहीं है, मुझे वैसे ही फ्रैग निकालना है। एक फ्रैग मिला है, बट देखिए अभी भी ल्यू लगातार परेशान कर रहे हैं और ल्यू ने घूम के मारा है। 3 प्लेयर्स ओजी के पिक ऑफ हो गए और ये चौथा आरडीडब्ल्यू तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है यहाँ पे। रॉड पीछे से आके राउंड क्लीन अप करेंगे एंड इवन दो ओजी को वो ओपनिंग फ्रैग मिला, किसी ने फॉलो अप सही से किया नहीं। ल्यू ने पूरा राउंड अपने हाथ में लेके घुमा दिया। लाइक फुल बाय राउंड, बट अगेन जिस तरीके से ओरंगुटान ने आर्ट्स को कंप्लीट पुश बनाया गया था, काफी अच्छा लग जरूर रहा था, बट देन ल्यू एक आखिरी डिफेंस की तरह खड़े रहे इस एरिया में। एंड ये जो एक रीग्रेस करने के लिए गए थे बॉम्बे, बिल्कुल वैल्यू निकाल के देता हुआ एंड एक फुल बाय राउंड को काफी इजी तरीके से कन्वर्ट करने में कामयाब रहे हैं। कोई ज्यादा डैमेज भी यहाँ पे डिले नहीं करा गया। बट नाउ
ओरंगुटान के लिए अगर अभी तक देखा जाए वो ए हिट्स को काफी ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ये जरूर प्रायोरिटाइज हो रही है यहाँ पर ये देखिए फिर से रीडुअल लेने की कोशिश थी। अब दोनों ही प्लेयर्स अपने शॉट्स थोड़े से मिस किए हैं। लियो जरूर अपने आप को कोस रहे होंगे क्योंकि आधा एक सेकंड ऐसा आया था जहाँ पर रॉफिल देख ही नहीं रहे थे उनकी तरफ, वो टाइम पे कैपिटलाइज कर नहीं पाए। पिछले राउंड के अंदर भी मतलब मैं चाहता हूँ प्लेयर जो इमेज से ट्रेल ब्लेजर करता हुआ आए, पर यहाँ पर एंटी था शॉट्स यहाँ पर अपने उन्होंने एक तो विप भी किया, ऊपर से सोलो डुअल लिया है। ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। ये स्पार्टस अकेले नहीं ले सकते आप इस मैप में फाइट्स। एग्जैक्टली कोई एटलीस्ट ट्रेड पोटेंशियल होना चाहिए एंड आप लोग भी ए आर्ट्स के थ्रू कर रहे हो, सो उसका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए था। बट टीम मैच भी जो हम बातें कर रहे थे कि सबसे बड़ी जो बॉन्कर्स की कॉम्पोजिशन में दिक्कत है वो यही है कि बी साइड का कंट्रोल वो बहुत ईजिली गिव अप कर सकते हैं एंड वो ओमन के डबल स्मोक्स के लिए साथ होल्ड कर पाना बी साइड को एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। बट ओरंगुटान का जो अटैक है वो बी साइड की तरफ सिर्फ एक राउंड में गया है, वो भी एंटा एको में। देखिए ये स्प्लिट करना चाह रहे हैं इस बी साइड को, पर ये माइक्रोवेव सेटअप लगा हुआ है केजे का। बॉल अच्छी है पर स्पैम लगेगा, थोड़ा बहुत डैमेज जरूर दिया है ड्रैगन ने रॉफ्यूल और अजीज को। साइड का कंट्रोल मिला है, टैप करके थोड़े से शॉट्स वेट आउट कराना चाह रहे हैं पर रिकॉन नहीं तोड़ा किसी ने। अजीज हो गए स्कैन और उनको पूरी तरीके से एलिमिनेट किया गया। और ये स्पाइक 15 सेकंड बचे हुए और बिल्कुल साइड के बीच में ड्रॉप्ड है। और मिनिमाइज शटडाउन करके आरबी को भी ये राउंड तो गया, ये नहीं निकलने वाला यहाँ से। टीम फ्लैश का शिकार हुए लेकिन अभी फ्रैग निकल रहे हैं। 4 सेकंड ऑन द क्लॉक, आखिरी फ्रैग निकालना जरूरी है रॉफिल के लिए, लेकिन टाइम यहाँ पे बैट बाय कर लेंगे एंड स्पाइक को भी प्लान नहीं कर पाएंगे सिर्फ टाइम लिमिटेशन के चलते। तो राउंड हारता हुआ नजर आएगा, ऑल्दो क्लीन अप जरूर कर दिया गया लेकिन वो राउंड सिक्योर नहीं कर पाए। फिर से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जी के ये अजीज का रिकॉन तोड़ा नहीं गया। अजीज ऊपर से ओपन प्लांट कर रहे थे। अब ये प्रॉब्लम है जब आप एस्ट्रा खिलाते हो, ये नीचे जो वन में सा बन रहा है ना, ये प्लांट नहीं करने देगा आपको जब तक प्लेयर जिंदा है, क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट बॉक्स पे प्लांट करने की कोशिश करोगे तो स्पैम आएगा, अंदर वाले बॉक्स पे प्लांट करने की कोशिश करोगे तो सामने वाली टीम की तरफ से यूटिल आएगी। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। इस वजह से आपको ना अगर बी साइड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो मे बी मिड कंट्रोल चाहिए होता है। और ये लीजिए फिर से ये इको राउंड शुरू जरूर हुआ था, बट अब वो जी अगर अकेले ऐसे इन्फो प्लेस के लिए जाएगी और पनिश होती रहेगी तो फिर डिफेंसिव हाफ ये बॉन्कर्स का काफी स्ट्रांग हो जाएगा। ये लाइक अगेन इंडिविजुअल पिक्स पिछले राउंड में भी एंटीडोट की तरफ से देखने को मिले थे, इस बार भी वही चीजें वापस रिपीट होती हुई नजर आए टेसरैक्ट के ऊपर से। बट अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अजीज के पास हम कह सकते हैं एक हीरो वैंडल है, जरूर वैल्यू निकालना चाहेंगे। रॉफ्यूल विद दैट ब्लेड स्टॉर्म कहीं ना कहीं राउंड का जो हम विन कंडीशन है वो इन्हीं के हाथों में रिलाई करता है, लेकिन रॉफ्यूल स्पॉट नहीं करेंगे एंड लीव यहाँ पे शट डाउन करते हुए नजर आएंगे उन्हें। ये राउंड भी ओरंगुटान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। फिर स्मोक लेट आया और उसके बाद कॉल नहीं आ पाई। लिए एंटी ए कॉन्सोलेशन फ्रैग मिला है, इससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं क्रिएट कर सकते राउंड के अंदर। 22 एचपी खुद बची है उनके पास। सो या दैट शुड बी द राउंड। फ्लैश के साथ सेटअप करने की कोशिश है पर एक ही तो चाकू चाहिए ल्यू का और वो भी परफेक्टली लगा है। बॉन्कर्स शुरुआत भी ल्यू की, खात्मा भी उनका और तीसरा आ गया बॉन्कर्स के लिए। अटैकिंग मैप है ये, स्पार्टस जिस तरीके का कॉम्प ओरंगुटान खेलती है इस मैप के ऊपर, और जो 7 से 8 राउंड नहीं निकाले इन्होंने, डिफेंस में फिर से बहुत मुश्किल समय रहेगा इनके लिए। एग्जैक्टली एंड अभी भी जिस तरीके से हम पे अप्रोच और ओरंगुटान का ये इतना वर्थ इट नहीं नजर आ रहा है, वो अब पूरा जो पोटेंशियल आपके डबल डिजिट्स का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एंड अगेन ये चीजें जो है इंडिविजुअल फ्रैग, स्मोक्स की टाइमिंग, एक प्रॉपर मिस कम्युनिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है उनकी तरफ से। लेकिन इस बार रश डाउन करने के जा रहे हैं बी साइड के, लेकिन बॉन्कर्स ऑलरेडी रेडी एंड ल्यू के तो क्या ही कहने, वापस से इनिशियल फ्रैग निकाल के देंगे। The trade is not there. 3K ल्यू ने पूरी तरीके से राउंड अपने हाथों में ले लिया और पांचों के पांचों प्लेयर्स को वापस से भेजा है स्पॉन में। ल्यू द वन मैन आर्मी, और ये जो अग्रेशन था इसके लिए रेडी थी नहीं हो जी। अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब आपके पास इनिशिएटर रहता है टेसरैक्ट जैसा, क्योंकि ये फ्लैश डाल के इन्फॉर्मेशन तो बता सकते हैं कि कोई प्लेयर क्लोज है, बट ये प्लेज आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। पहला प्ले निकला था स्मोक के पीछे, आपके खुद के एस्ट्रा के रिकॉल के पीछे था वो प्ले, बट उसके बाद तो ल्यू का सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा है स्पार्टस।
एम डुअल्स वापस एंड इवन बॉन्कर्स जिस तरीके से रेडी था, 3 प्लेयर्स टुवर्ड्स द बी साइड, वो भी अर्ली एग्रेशन के लिए, और ओरंगुटान को एक किताब की तरह पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ओजी ने जो चीज़ें सोची थी कि एक फास्ट बी हिट को कमिट कर सकते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे एंटिसिपेट करते हुए नजर आए बॉन्कर्स के प्लेयर्स, एंड एक कंप्लीट शटडाउन देखने को मिला है। ओरंगुटान पर्ल ऑल दो उनका मैप पिक नहीं है, बट एक स्ट्रॉन्ग मैप है जरूर ओरंगुटान के लिए। एंड अजीज रॉफ्यूल जिस तरीके से लाइक एटलीस्ट इंडिया रीजन में जिस तरीके से यहाँ पे साइड एग्जीक्यूट्स करते नजर आ रहे थे, अभी तक तो बिल्कुल लैग कर रहा है। अभी तक तो बिल्कुल लैग कर रहा है, पर मैं कहूँगा अभी तो ल्यू डिफ बना हुआ है। मतलब वो जो थर्ड राउंड आया था उसके अंदर ल्यू का एक 3K आया था, 3K था 4K था, यहाँ एस मार दिया है। थोड़ा सा ओजी को डिफॉल्टिंग करनी पड़ेगी अराउंड द मैप। अभी भी आइडियाज भी एग्जैक्टली सेम है जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, बट इंडिविजुअल डुअल जो ले रहे हैं वो जीत नहीं पा रहे हैं। जहाँ पर एज अ टीम गए, यहाँ पर भी ल्यू आ गए, और उन्होंने जिस तरीके से एंगल मैनेजमेंट किया है, हर फाइट में 1v1 था वो स्पार्टस अगर आप देखें, और वो बहुत ब्रिलियंस के साथ लिया है उन्होंने। पहला स्मोक के थ्रू गए, मारा, और उसके बाद जिस तरीके से उस डब्बे को, अब जो स्पैम नहीं हो सकता है वो पर्टिकुलर डब्बा बी मेन से, उसके अराउंड जिस तरीके से खेला है, पीछे से ज़रूर बॉन्कर्स के प्लेयर्स का भी सपोर्ट था जो ट्रेड हो रहे थे, बट मैन ल्यू इस प्लेयर ने पूरी तरीके से धाराशाही किया। अब फिर से एक शीको राउंड है ओजी का। एंटी अकेले बी मेन देखना चाह रहे हैं अपने टरेट के, नहीं टरेट मिड वेल पे लगा रखी है, ऑल तो प्लेयर्स वहीं पर गए हुए हैं। आई थिंक कोई भी प्लेयर अगर वॉक करता है डबल डोर के थ्रू और बैकटैप करने की कोशिश करता है तो एक प्रॉब्लम रह सकती थी, बट ये फिर से फंस गए सेट प्ले में, बहुत बुरा फंस गए सेट प्ले के अंदर। वो पैरानोया आया कॉन्टैक्ट के ऊपर, और जैसे ही वो पैरानोया आया सारे प्लेयर्स थे ब्लाइंड, किसी को कुछ दिखा नहीं, और उसी टाइम पे गलत समय पे अजीज ने एक्स दबाया, अल्टीमेट चार्ज करी अपनी, और वो जी अल्टीमेट तो खोया ही खोया, पर राउंड के अंदर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, ज्यादा डैमेज दे नहीं पाए बॉन्कर्स को। एग्जैक्टली, एंड अगेन बॉन्कर्स ने पिछला राउंड भी बहुत अच्छे से रीड आउट किया था कि जो एग्जीक्यूट है यहाँ पे ओरंगुटान का वो किस तरीके से आ सकता है। इस राउंड में बिल्कुल सिमिलर चीजें होती हुई, जो सेटअप लगाया था आर्ट्स के रीजन में विद दैट पैरानोया एंड किलजॉय कॉन्टैक्ट पे खेल रहे थे उसके, बॉन्कर्स जिस तरीके से यहाँ पे रीड कर रहा है ओजी के गेम प्लान को, और ओरंगुटान को कुछ नया यहाँ पे इन्वेंट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक तो वो जिस भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हैं बॉन्कर्स ऑलरेडी रेडी है उस चीज के लिए, उन्हें सप्रेस कर देता हर बार। I still want to see that B rush स्पार्टस। मैं कहीं ना कहीं वो अभी भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि एक राउंड चलिए लू का इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ गया, उस वजह से आपके हाथ से चला गया, बट ये बी साइड अभी भी वीक तो है, और अब तो सिर्फ एक प्लेयर डिफेंड कर रहा है, दैट इज ड्रैगन। ये बात वैसे हमें पता है, ओजी को भी अभी फिगर आउट करने की जरूरत रहेगी, पर देखिए उनका काउंटर प्ले क्या है बॉन्कर्स का, वो ऑलरेडी एम इन कंट्रोल लेके अपना ऑपर सेट कर चुके हैं, तो अब इसके बेसिस पे वो अर्ली रोटेशन करवा सकते हैं। हाँ मे बी 8 का कंट्रोल ना रहे उनके पास, बट दे आर हैप्पी टू टेक दैट गैम्बल। लॉकडाउन के साथ साथ ओजी साइड के अंदर बढ़ेगी, एंड दे विल बी एबल टू मे बी गेट दैट प्लान, बट रीटेक के लिए 5 की 5 अल्टीमेट्स है स्पार्टस यहाँ पर बॉन्कर्स के पास। Exactly, and ये पहला अल्टीमेट कमिट भी कर देंगे, उसके बाद हंटर फ्यूरी भी है आपके पास पिलर्स क्लियर करने के लिए, एंड हर एक तरीके से यहाँ पे डैमेज दिया जाता है फ्रॉम द शैडोज करके। एलेक्स नर्क एंगल पे गए जरूर है, लेकिन क्या यहाँ पे एंड्रॉइड एंटिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें देखा नहीं गया, एंड रॉ फ्यूल गेट शट डाउन, एंड ये राउंड तो पूरे अल्टीमेट की डिपेंडेंसी के ऊपर ही निकालते हुए नजर आने वाले, स्टिक भी कर दिया जाएगा, एंड ओरंगुटान के पास कोई मौका नहीं है पोस्ट पॉइंट को होल्ड कर पाने का। एक और बहुत अच्छा राउंड बॉन्कर्स अपना नाम करते हुए नजर आएगी, एंड ओरंगुटान सिर्फ अपना पिस्टल एंड एंटाई को जीते थे, उसके बाद लगातार एक विन स्ट्रीक चल रही है बॉन्कर्स की। आई कैन नॉट सी द आइडिया स्पार्टस, ये ओजी कैसे खेलना चाह रही है मैं आइडिया समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर हम ये चीज़ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि लॉकडाउन अवेलेबल है, तो ओजी क्यों नहीं कर पा रही है, और उसके बाद ये प्लेयर इतना ज़्यादा तितर बितर कैसे है। जब लॉकडाउन लगता है आपके पास 2 चॉइसेस रहते हैं, या तो आप पीछे लॉकडाउन को रिस्पेक्ट करो, या तो आप लॉकडाउन को फाइट करो। अब लॉकडाउन ऐसी जगह लगा बी हेवन के अंदर जिसको फाइट अकेले आप कर नहीं सकते। रॉफ्यूल डिसाइडेड टू स्टिक, उनको किसी तरीके का सपोर्ट नहीं था, वो थे 1 एंड डन वाले प्लेयर, उनको फ्रैग नहीं मिला कोई बात नहीं, बट बाकी प्लेयर्स फिर क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे भागना बिलोंग के ऊपर हाथ में चाकू लेके, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और उसके बाद रीटेक के अंदर ना मुझे मॉलीज दिख रही थी स्पाइक के ऊपर, और फिर एस्ट्रा पोल तो खत्म ही हो गया था क्योंकि वो किक ऑफ हो गए थे। यहाँ पर फिर से एक बहुत अच्छा पैरानोया डाला, और वॉट ने ओजी के प्लेयर्स को बिल्कुल रीड किया। अर्ली डुअल उनके फेवर में, ऑल दो टेसरैक्ट शरीफ के साथ अच्छा शॉट मारा है, फ्रैग जरूर निकाला है, बट वॉट अब इनका शाइन करने का टाइम है। ये बॉन्कर्स की टीम सुपरस्टार से भरी हुई है,
जब जो प्लेयर चाहिए होता है वो बिल्कुल परफेक्टली आंसर बैक कर रहा है इस समय ओजी को। डेफिनेटली हर एक सेट प्ले में कहीं ना कहीं यहाँ पे ओमन का जो इस्तेमाल हमें जनरली देखने को नहीं मिलता ऑन द मैप ऑफ पर्ल, बट पैरानोया के साथ जो वैल्यूज निकाल रहे हैं यहाँ पे बॉट, इस बार भी इनिशियल पैरानोया ट्रिपल प्लेयर्स पुशिंग करना चाहते थे, डबल डोज को उन्हें शट डाउन किया एंड देन वॉट अपने एंगल्स के अंदर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ओरंगुटान फिर से वो सेट पेस का शिकार हो रही है। हर राउंड में अगर आप सेट पेस का शिकार ही हो रहे हैं, देन अगेन बॉन्कर्स का जो प्रिपरेशन है प्री मैच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अभी तक तो जी नहीं तोड़ पाए हैं ओजी वाले उस प्रेप को। लेट्स सी डू दे हैव अ गेम प्लान फॉर दिस पर्टिकुलर राउंड। इट्स अनदर बी हिट। इस बार एज सच कोई अल्टीमेट्स भी नहीं है दोनों टीम्स के पास जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। सो हैज़ टू बी अ ब्रॉल ऑफ यूटिलिटी एंड ब्रॉल ऑफ वेपन्स ओवर हियर, और बिल्कुल उसी के लिए जा रहे हैं। रॉफ्यूल एंट्री इनटू द साइड, बट ये नैनो स्वॉर्म के माइक्रोवेव सेटअप में फंसे ज़रूर है और ड्रैगन ने पहले रॉफ्यूल और उसके बाद अजीज। अब ये ट्रेड आया नहीं है, मुझे लग रहा है इस वन वे स्मोक के आसपास से सिटी से फिर से ये दोनों फ्रैग्स निकले हैं और अब की अजीज अपनी वो ब्लेज वॉल लगाना या तो मिस कर गए थे या तो भूल गए थे, और ड्रैगन ने यहाँ पर बस आग उगली है इस राउंड के अंदर। ये डिस्ट्रक्शन चल रहा है इस समय और ओरंगुटान के प्लेयर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो जो हम स्मोक्स की बात कर रहे थे ना ओमन के कि आपको बी साइड के लिए वो वीकनेस आ सकती है, लेकिन ये जिस तरीके से डिप्लॉय कर रहे हैं ना उसे, वो एक स्मोक इनफ है प्लेयर्स को कंटेस्ट करने के लिए, देन उसके बाद पैरानोया को डबल अप कर देते हैं उस एबिलिटी के साथ एंड कॉन्टैक्ट पे खेलने के लिए पूरा यहाँ पे किलजॉय का सेटअप भी अवेलेबल है। सो ओरंगुटान का पूरा प्लान जो है वो सप्रेस होता नजर आता है। ऑल द फ्रैग्स यहाँ पे मिलेंगे जरूर एंटी को, एक 1v2 सिनेरियो है जरूर, लेकिन ड्रैगन यहाँ पे अपने अगेन क्या ही बोले इस प्लेयर के लिए 4K ऑलरेडी एंड साइड को प्रॉपर एंकर कर रहे हैं। स्पाइडर्स ये तो कुछ ऐसा गेम हो रहा है कि आप ए जा रहे हो तो ल्यू 4 मार रहे हैं, बी जा रहे हो तो ड्रैगन 4 मार रहे हैं। मिड गए थे एक राउंड, वहाँ वॉट ने 3 मार दिए। ये तो मतलब मैं अब क्या ही बोलूँ। ये अजीज, अब मैं समझ रहा हूँ उनका आइडिया था कि ट्रेड कर लेता हूँ मैं अपने प्लेयर को, बट अपने शॉट्स मतलब या तो लैंड नहीं करवा पाए या फिर से ड्रैगन उस एंगल में जस्ट बेटर थे। क्या ही तो राउंड्स निकाल रही है बॉन्कर्स। वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने पर्ल का मैप चूज करा है तो क्यों करा है। इनसेन प्रिपरेशन एंड पर्ल में जितने अपडेट्स आए थे ना, इसको प्रॉपर्ली यूज करें अपने फेवर के अंदर। पर्ल जनरली बी साइड बिल्कुल एक्सप्लॉइट होती थी उससे पहले, क्योंकि आपके पास क्रॉस फायर सेटअप करने के लिए कोई एंगल्स नहीं थे, लेकिन अब जिस तरीके का यहाँ पे वो जो एरिया छोटा हो गया है, आप एक ही स्मोक से उसको कंट्रोल भी कर रहे होते हैं, उस पर आप फ्लैश पॉइंट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हो विद दैट पैरानोया इन योर हैंड। हर एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से बॉन्कर इस्तेमाल करिए। फिर से एक एग्रेसिव कंट्रोल, इस बार ड्यू 2 मारते हुए नजर आने वाले हैं। हर राउंड सेम कहानी हो रही है ओरंगुटान के साथ। OG for now they are deep in trouble. एंटी अजीज पिक ऑफ हो गए हैं, मैप कंट्रोल है नहीं कहीं पे भी एक्सेप्ट फॉर वन दिस लिटिल प्लेयर ऑफ यू जो कि एक्सपेक्ट हो रहा है। तब पता है गैप्स एंड होल्स बॉन्कर्स को अपने कॉम्पोजिशन के और अपने मैप सेटअप के बहुत अच्छी तरीके से पता है। स्पॉन में रॉफ्यूल घूम रहे थे, निकले ज़रूर थे सीवर से, बट पूरी तरीके से चेक रखा गया उनके ऊपर और फ्रैग निकला। अभी बॉन्कर्स RDW एंगल पूरा फुल हार्टेडली चेक था। RDW ने पहली पीक ली, मिनिमाइज उन पे स्विंग किया। 9 और 2 ये फ्लैशबैक्स आ रहे हैं मुझे गेम के, जहाँ पर 10-2 खत्म किया था ओजी ने। ये आई थिंक 10-2 ही होने वाला है, क्योंकि अब तो अगले राउंड में बाइस भी नहीं होने वाले इनके पास। एंड अगेन ये ड्यू को एंटिसिपेट ना करना कि कोई प्लेयर ऑलरेडी क्रॉस कर चुका होगा, क्योंकि आप स्लो वॉक इन करते हुए आ रहे थे, टाइमिंग बिल्कुल यहाँ पे कैच कर रहे हैं। बॉन्कर्स वापस से एक 3K आया ड्यू के पास। हर एक राउंड में एक प्लेयर की तरफ से एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखने को नजर आ रही है। 3K तो बेयर मिनिमम यहाँ पे बॉन्कर्स हिट कर रही है। सिर्फ अगर स्कोर कार्ड भी देखे ना, जिस तरीके से ओरंगुटान प्ले करना चाहती है ना, उनके लिए ट्रेड्स निकल पा रहे हैं ना, वो साइड हिट को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। इस बार एक फास्ट लिंक के थ्रू जाना जरूर चाहते थे, लेकिन फिर से पैरानोया रुकता हुआ नजर आएगा उन्हें। ये डेस्परेट स्टेज है। अब ये जो आप 5 मैन रश करवाते हो ना, फिर ये डेस्परेशन दिखाता है। कोई आइडिया नहीं है इस पुश के पीछे, आप बस ये सोच रहे हो डुअल जीत जाओगे। चलिए अजीज ने वो आधा काम तो कर दिया है, 3 फ्रैग्स ओवरऑल राउंड के अंदर निकाल दिए। नाउ ओजी इज इन एन एडवांटेजियस पोजीशन। अंजी रिटेक थोड़ा सा मुश्किल रहेगा बॉन्कर्स के लिए। अल्टीमेट्स के नाम पे कुछ है नहीं और अजीज के पास अपना रन इट बैक तैयार है। स्पार्टस नो वे ओजी लूज दिस राउंड। पोस्ट प्लांट बहुत अच्छा आप सेटअप कर लिया है, बस इंडिविजुअल डुअल नहीं देने हैं।
हम अजीज देते हुए भी नजर आएंगे। लाइक अब अजीज यहाँ पे एस के लिए जा सकते हैं ना। ओके, इन्फॉर्मेशन भी एंड रन इट बैक का भी इस्तेमाल आएगा जरूर। लियो को शट डाउन जरूर करना चाहेंगे इस समय, बट द एस हैज बीन डिनाइड फॉर नाउ। अभी के लिए अगर देखें, लियो के पास एक मौका काफी अच्छा फाइट्स को आइसोलेट करने का, ऑलरेडी काफी जल्दी साइड में आ चुके हैं। तो एस्ट्रा की पोजीशनिंग काफी ज्यादा क्रूशियल रहेगी। वो छोटा सा एंगल फाइनली ओरंगुटान एक राउंड जीता हुआ नजर आएगा। 9-3 के स्वैप के साथ बॉन्कर्स खत्म करेगी अपने मैप पिक को। Thank God Aziz happened. Thank God he happened, क्योंकि तीसरा राउंड यहाँ पर ओजी को मिला है और ये अब कर्स एक्टिवेट करवा सकता है। पिस्टल फिर से एक बार बहुमूल्य रहने वाला है इस राउंड के अंदर। और चलिए मौका है अब, काफी इंपॉर्टेंट टीम फ्रैग यहाँ पर अजीज ने निकाले हैं ये राउंड को जीतने के लिए। और उसका ये चौथा तो मतलब सॉर्ट ऑफ फ्री था। फ्लैश अच्छा था, मिनिमाइज को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं और वो बस कोशिश कर रहे थे जंप हॉप एंड स्किप करके अजीज का एम थ्रो ऑफ करने की। But yes, that was not the case. And OG, they have at least got 3. और एक छोटा सा आप ट्रिविया देखिए, Profil is the only player to solely use Jet in the past 60 days. 60 दिन में जितने प्रोफेशनल Valorant गेम्स हुए हैं, स्पार्टा सिर्फ जेट खेला है Profil ने। जेट मेन बाय हार्ट, बिल्कुल भी एजेंट साफ नहीं हो रहा उनका। एंड ये काफी अच्छी चीज भी कह सकते हैं, बट अगेन सिर्फ इंडिविजुअल जेट खेल रहे हैं, लेकिन अगेन वो विक्ट्रीज जो चाहिए जेट के साथ वो बिल्कुल क्वेश्चन में नजर आ रही है। एंड बॉन्कर्स ने वॉकआउट के टाइम भी जो 4-0 दिखाया था, अभी तो लग रहा है उसको सच करने वाले हैं। हाँ देखिए, इनके मैप पिक में तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है, बट अभी भी हमको देखना पड़ेगा ओजी किस तरीके से हेवन पे खेलती है। क्योंकि काफ़ी अच्छा जब ये हेवन पे लास्ट खेले हैं, तो उसी तरीके के परफॉर्मेंस की अब उम्मीद रहने वाली है। डी प्लस किया के साथ वो गेम था, हेवन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे थे और आज भी मुझे लग रहा है वो स्ट्रेंथ वापस लानी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर पिस्टल हारे तो ये 3 मैप अफेयर बन जाएगा स्पार्टस। वो फाइनल गेम ऑफ स्प्लिट पहली बार खेलना पड़ेगा इस टूर्नामेंट के अंदर और जीतना पड़ेगा ताकि एक विक्ट्री हासिल हो। बट अभी तो चलिए लंबा डायरेक्शन है उस तक। पहले तो हेवन का मैप भी और अभी ये 4 राउंड्स रोकने हैं। पहला फ्लैग यहाँ निकालेंगे, दूसरा भी शटडाउन करेंगे। तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, जैसे डिंग करा ड्यू को। हालांकि जरूरत है कि वो अभी भी डिसेंट सर्वाइव कर रहे हैं, बट अपना काम बखूबी यहाँ पे कर चुके हैं। ऑफ एंगल है जरूर आरवीके के पास, उनको भी यहाँ पे फ्लैग मिलेगा। पिस्टल राउंड जिसकी सबसे ज्यादा दरकार रहती है उस कर्स को एक्टिवेट करने के लिए, वो तो ओरंगुटान की झोली में आता हुआ नजर आ रहा है। ये राउंड इजी आना चाहिए। RDW 20 HP बचे, वो सिर्फ वॉट की बात कर जाए, ही इज द हेल्दी प्लेयर, बट आरवीको को एक्सपेक्ट कर नहीं दिया और वो उन्होंने भी डिंक मार दिया है। अब दोनों की कंबाइंड HP 34 है। बॉन्कर्स दे विल गेट द प्लांट, तो 300 वो एक्स्ट्रा क्रेडिट्स आप अपने लिए जरूर उठाओगे, बट राउंड तो मुझे नहीं लग रहा अब आएगा बॉन्कर्स के पास। वॉट ऑफ एंगल खेलना चाह रहे हैं आरवीके, उसको भी चेक करेंगे एंड ऑल फॉल्स डाउन टू RDW। स्पैम हर डायरेक्शन से, प्लेयर स्पॉट जरूर हुए, बट RDW गेट्स ट्रेडेड आउट एसेंशियली एंड OG जरूरी पिस्टल राउंड जीता है उन्होंने। बहुत ज्यादा जरूरत थी इस पिस्टल राउंड की। अब अगला रहेगा इनके लिए काफी ज्यादा एडवांटेजेस राउंड, और ओरंगुटान अभी तक तो अपने एंटी ईगोस के अंदर थ्रिफ्टेड होती हुई नजर नहीं आई है। सो अगेन काफी एक एडवांटेज रह सकता है इस चीज का उनके पास, बट इट इज अगेंस्ट बॉन्कर्स एट द एंड ऑफ द डे। लियो जिस तरीके से फ्रैग आउट निकाल रहे हैं, ओरंगुटान बिल्कुल भी लूज आउट नहीं कर सकते अपने कंसंट्रेशन लेवल्स को। हल्की सी भी गलती एंड बॉन्कर्स बिल्कुल उस पर कैपिटलाइज करता हुआ नजर आ सकता है। सो उन्हें हर एक राउंड एक डू और डाई सिचुएशन वाला खेलना पड़ेगा। तो हैव टू गिव देयर बेस्ट, क्योंकि यहाँ से गलतियां आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ओजी की तरफ से। देखिए पिछले राउंड के अंदर क्योंकि प्लांट आया था, तो थोड़ी बहुत पिस्टल्स तो अपग्रेड देखने को बनती भी थी। तो 2 शेरिफ आई है और एक आई है फ्रेंजी फॉर लियो, तो ये एक फास्ट बीट रहने वाला है बाय द वेपन्स दैट वी कैन जज। और इसको रोकने के लिए पोजीशनड तो हैं ओजी के प्लेयर्स। देखिए एंटी के पास पूरा माइक्रोवेव सेटअप अपना तैयार है, आइसोलेट कर दिया है प्लेयर्स को, और अब एक करके डुअल देने की ज़रूरत है। ड्रैगन ने एंटी को पहले पिक ऑफ किया है, अब ये फ्रेंजी तो लॉन्ग रेंज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। और चलिए जितने प्लेयर साइड के अंदर आए थे उनके साथ तो डील कर लिया है। लियो इज द ओनली लास्ट वन स्टैंडिंग एंड ही विल बी स्वंग फ्रॉम 2 डिफरेंट एंगल्स। अजीज विद 3K, ये हेल्प करेगा, ओवरऑल हेल्प करेगा ये to get that run it back very quickly but minimize। ये 2 शरे शॉट के साथ राउंड को एक बार फिर से कंटेंशन में डाला जरूर था, बट RVK gets this frag। स्पाइक बिल्कुल उनकी झोली में और टेसरैक का फ्लैंक बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड है नहीं। ये राउंड फिर से करीब जरूर आया और ओजी की मुट्ठी में ही आया।
एक्सपेंसिव बहुत गया, लाइक 3 वेपन्स ड्रॉप हो जाना आपके एंटाइको में, ये बहुत ज्यादा भारी पड़ा, खासकर मिनिमाइज जिस तरीके से 2 यहाँ पे फ्रैग्स निकाले विद दैट शेरिफ। एक पल के लिए लगा जरूर था कि शायद यहाँ से कुछ दिक्कत ना हो जाए ओरंगुटान को, बट इन द एंड वो आखिरी फ्रैग फ्रॉम दैट आरवीके वो कहीं ना कहीं इनफ था टू सिक्योर दैट राउंड। बट नाउ अब बारी है ओजी के बोनस राउंड की एंड फुल बाय राउंड ऑन द साइड ऑफ बॉन्कर्स। अगर ये बोनस कुछ भी करे कन्वर्ट कर देते हैं, कीपिंग इन माइंड कि अजीज सिर्फ 1 पॉइंट दूर है फॉर दैट रन इट बैक, अगर यहाँ पे उसको रन इट बैक फार्म करने में कामयाबी मिलती है तो डेफिनेटली बॉन्कर्स के लिए दिक्कतें पड़ सकती है। एंड कंटेस्ट भी कर रहे हैं वो एम इन ऑर्ब को, तो अगेन बॉन्कर्स भी काफी ज्यादा उस चीज के ऊपर आई वुड से रिलाई कर रही होगी। एक फ्लैग जरूर निकाला है बट लियू को इतना क्लोज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऑल्दो अजीज गुड प्लेड बाय द गाय, तो स्टिल वो नंबर्स को बराबर रखा हुआ है। मैं तो कहूँगा एक ज़्यादा ही किया हुआ है बिकॉज ऑफ दिस रन इट बैक। अब यहाँ पर निकलना चाह रहे थे पर मौली का शिकार हो जाएंगे। मिनिमाइज ये पुश जबरदस्ती का है पर आरवीके को पकड़ा जाएगा उस पुश पे। नेसेसरी फ्रैग टू बी फाउंड और उसके बाद एक और फ्रैग मिलेगा अजीज को अपनी मौली के साथ। मिनिमाइज को ट्रेड किया जाएगा एंड फाइनली ओजी ये बोनस राउंड जीत के उम्मीद की एक छोटी सी किरण जरूर दिखाई है स्पार्टस। डेफिनेटली एंड बहुत अच्छे तरीके से पूरा राउंड पेल अप करते हुए नजर आए, खासकर जो इनिशियल फ्रैग्स यहाँ पे मिले थे ओजी को, उसके बाद तो बिल्कुल उन्होंने कुछ रुकने ही नहीं दिया। ऑल्दो इन द मिड मिनिमाइज का ये स्पॉन पुश करना वैल्यूएबल था जरूर उनके लिए, लेकिन यहाँ पे एंड्रॉइड का डबल स्विंग एंड देन अजीज बीइंग दैट की प्लेयर इन दिस राउंड अपने हॉट हैंड्स के साथ ही वो फ्रैग निकालते हुए नजर आए। एंड जो टाइमिंग थी हर एक यूटिल एंड फ्लड आउट करने की वो बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। ओरंगुटान 9-3 स्वैप से डाउन जरूर थे बट आई गेस जो पैसिफिक का कर्स है वो एक्टिवेट कर दिया गया है क्योंकि 3 राउंड लगातार लेके अब स्कोर लाइन को काफी ज्यादा क्लोज लेके आ चुके हैं। अगेन अगर यहाँ पे देखा जाए सो अब टेसरैक्ट सिर्फ 1 अल्ट पॉइंट दूर रहने वाले फॉर दैट सीकर्स जो रीटेक में बहुत ज्यादा कारगर रहेंगे। वहीं अगर बाय की बात की जाए ऑन द साइड ऑफ बॉन्कर्स, मार्शल, स्पेक्टर्स एंड स्ट्रिंगर्स में नजर आ रहे हैं। देखिए एज कम्पेयर टू राइफल्स ये थोड़ी सी हार्मलेस बाय जरूर रहेगी बट आप अभी भी इनको काउंट आउट नहीं कर सकते। वो RDW और ड्रैगन की मार्शल जो है वो 1 शॉट कैपेबिलिटी रखती है, तो मुझे लगता है ये पोस्ट प्लांट देखना चाह रहे हैं किसी भी एक साइड के ऊपर और फिर कोशिश करेंगे कि रीटेक में परेशान किया जाए ओजी को, क्योंकि फास्ट एंट्री के लिए आपके पास वो SMGs हैं और उसके बाद लॉन्ग पे कवर देने के लिए वो मार्शल्स। इवन 101 के जो टैग्स है स्पार्टस वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखेंगे सबके अंदर। सो लेट्स सी हाउ डू दे want to start it right now and I think a timeout call किया गया है, probably a tactical timeout or is it a technical timeout? Hopefully जल्दी से जल्दी resolve हो जाएगा अगर एक technical timeout है। But as you pointed out, OG धीमे धीमे rounds control में ले रही है and are putting a little bit of a show or trying to get that comeback on this particular game. 3-2 फाइनली यहाँ स्टार्ट होता हुआ थोड़ी देर के लिए क्लॉक रुका जरूर था बट नाउ वी आर बैक इनटू द एक्शन एंड इस एक्शन को अगर देखा जाए बॉन्कर्स डोर्स के थ्रू काफी फास्ट भी एग्जीक्यूट करना जरूर चाहती है, लेकिन ड्रैगन विद दैट मार्शल रॉफिल को शट डाउन करने में कामयाब हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे अजीज की पोजीशन भी रिवील्ड है, लेकिन किस जगह पे अब वो पता नहीं था। अजीज आएंगे 2 फ्रैग्स निकालेंगे अपने लिए एंड अब देखते ही देखते पूरी बॉन्कर्स की टीम थारा शेवराज हो जाएगी शुरू। व्यू की बात की जाए 17 HP विद दैट स्पेक्टर पोजीशन भी होना है तो कुछ ज्यादा दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। 3K फॉर अजीज एंड फिर से रन इट बैक के 1 पॉइंट दूर है वो। हाँ that's how we get a comeback over here। अब ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी राउंड आएगा, बहुत ही मतलब दोनों ही टीम्स के लिए, और सारी फ्रैग जो अजीज ने निकाले हैं अगेन just pulling out a page out of Liu's book। लियू ने भी ऐसा ही एक एंगल पकड़ के परेशान किया था, वो थोड़ा और ज़्यादा अग्रेसिव था बट देन अगेन वो डिफरेंस आ जाता है एजेंट का रोल का। जेट खेल रहे लियू तो उनके पास वो एस्केपिंग कैपेबिलिटी थी, अजीज ने थोड़ा सा पैसिव एंगल लिया बट चलिए ओजी ने फोर्स किया है बॉन्कर्स को ये टाइम आउट बुलाने के लिए। और अब ये जो राउंड है बॉन्कर्स अगर हारी स्पार्टस बैक टू इको एंड देन द स्कोर लाइन कुड बी इक्वलाइज्ड। सो एक बहुत ज़रूरी राउंड है फॉर टीम बॉन्कर्स ओवर हियर टू स्टॉप दिस कमबैक फ्रॉम हैपनिंग। एग्जैक्टली एंड अभी खासकर जिस तरीके से ओरंगुटान खेल रही है
अटैकिंग साइड पे जितने वीक नजर आ रही थी ओजी की टीम, उतनी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है अपना डिफेंसिव हाफ पे, जो एक्चुअली पर्ल के मैप पे अपोजिट होता है। बिकॉज पर्ल बीइंग अटैकर साइडेड मैप, आपको बेनिफिट मिलता है अटैकर्स होने के बाद आप साइड के अंदर हिट एंड पोस्ट प्लांट खेल सकते हैं। बट ओरंगुटान जिस तरीके से अपने डिफेंसिव साइड को ऑर्केस्ट्रेट कर रही है, वो साइड में ही नहीं आने दे रहे बॉन्कर्स को। अब भी अगर इस राउंड की अगर बात की जाए, सबसे मेजर विन कंडीशन यहाँ अजीज ही रहने वाले हैं, जो एम इन ऑर्ब को फिर से कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ 1 पॉइंट दूर है फॉर दैट रन इट बैक। एंड अगर उस रन इट बैक को फार्म करने में कामयाब होते हैं, जो ऑल तो अभी तक तो प्लान नहीं लग रहा, ही इज ऑन द डबल डोज रीजन, बट वो रन इट बैक डेफिनेटली एक बहुत मेजर विन कंडीशन रहने वाले ओजी के लिए। उनको एक बंदे का भी साउंड आएगा तो वो तुरंत रन इट बैक डाल के वो फ्रैग निकालने की कोशिश करेंगे एज सून एज इट्स रेडी। सो मुझे लग रहा है ये एक सेट प्ले बनाने की कोशिश है टेसरैक के साथ मिलके टू शट डाउन एनी सॉर्ट ऑफ एन आर्ट अग्रेशन कमिंग इन। और एक्सपेक्ट करिए, देखिए ओजी दिलवा दिया उन्होंने रॉफ्यूल को ऑफ, और बिल्कुल उन पे भरोसा जता दिया है कि आप बी साइड अकेले हैंडल करो। मिड के लिए सिर्फ एक अलार्म बॉट है और ये 4 स्टैक है एसेंशियली टुवर्ड्स दिस ए साइड। हाँ, एंटी थोड़ा दूर जरूर है, बट वो पूरी तरीके से एंगल कवर करने के लिए 8 का आ जाएंगे, एक बार टर्रेट टूटेगा। तो ये सेटअप मुझे बहुत पसंद आ रहा है ओजी की तरफ से। एंड देखते हैं बॉन्कर्स क्या ये चीज़ रियलाइज़ करेगी। मुझे लग रहा है कि अर्ली इन्फॉर्मेशन या अर्ली गट फीलिंग के चलते रिवील कोई हुआ नहीं उस रिकॉन डार्ट से, और इस वजह से अपना आइडिया जो है वो शिफ्ट किया है। बिल्कुल प्रेजेंस अर्ली ऑन दिखाया नहीं था बॉन्कर्स ने टुवर्ड्स दिस बी साइड। रॉफ्यूल ने भी, अगर आप मिनी मैप पे देखिए तो एक थोड़ी सी पैसिव पोजीशन ले ली है जहाँ पर वो वन एंड डन ना हो, और ड्रोन से अगर स्पॉट हो गए तो थोड़ी सी परेशानी में पड़ सकते हैं। डॉज जरूर किया है बट ये रिकॉल लगेगा। अब किस तरीके से देखते हैं बॉन्कर्स अप्रोच करना चाहती है, स्मोक करके क्रॉस जरूर किया है, बट उसके बाद रॉफ्यूल रीपिक्स द एंगल, अ गट्सी प्ले, बड़े नेसेसरी वन, क्योंकि पिक ऑफ किया है मिनिमाइज को। अब उनको रेजरैक्ट बैकअप तो करवा लिया जाएगा, पर क्योंकि अब एक टाइम कंस्ट्रेंट है, एक बड़ा डिसीजन बनाना पड़ेगा बॉन्कर्स को कि वो फॉल बैक करेगी या फिर अपनी दूसरी साइड कमिट करना चाह रहे हैं। दे गोइंग टुवर्ड्स ए, ऑल बिकॉज़ ऑफ द लेट लॉक फ्रॉम ड्रैगन। और ड्रैगन यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइमिंग होती थी आरवीके के साथ, एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे सही कॉल था यहाँ पे आरवीके का, बट द टाइमिंग फ्रॉम ड्रैगन ये कहीं ना कहीं दिक्कत देते हुए। एंड बॉन्कर्स को अब एक फ्री साइड भी मिल जाएगा, एंड उसी के साथ एक देखा जाए उनके पास अब कंट्रोलर प्लेयर्स भी डाउन है, एंड ड्रैगन भी अगर यहाँ पे देखें ही हैज दैट मोलोटोव्स एज वेल। सो पोस्ट प्लांट में ओरंगुटान के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी, एंड बहुत मेजर चीज़ें डील करनी पड़ी। रॉफ्यूल ल्यू को जरूर ट्रेड आउट करा है, बट स्टिल ये जो रीटेक है ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ओरंगुटान के लिए। देखिए पोस्ट प्लांट के लिए मॉलीज है यहाँ पर ड्रैगन के पास, 2 शॉक डार्ट्स है आरडीडब्ल्यू के, तो अब ये रीटेक हल्का मुश्किल रहेगा, बट अजीज का इस फ्रैग के साथ रन इट बैक आ गया। अब ये भागेंगे ए में, हंटर फ्यूरी यूज जरूर हुई है, बट अजीज ने वॉट को पिक ऑफ किया है, रन इट डाउन, और दोनों प्लेयर्स को ऑलमोस्ट पिक ऑफ कर लिया था आरडीडब्ल्यू को शॉट में हुए, बट ड्रैगन ये प्लेयर अभी भी जिंदा है और सोच रहा है लॉकडाउन के बारे में। कैच किया स्पाइक को, बोथ द फ्रैग्स बोथ द अजीज में, पर टाइम नहीं बचा। बहुत उम्दा कोशिश, बट बॉन्कर्स नेसेसरी राउंड दे विल बी एबल टू विन इट आउट। काफी एक्सपेंसिव राउंड था जरूर यहाँ पे बॉन्कर्स के लिए, बट इवन इन द एंड अजीज एक रन इट बैक के साथ जो वैल्यू निकाल के दी अपनी टीम को, ऑलमोस्ट क्लच पे लेके आ चुके थे। एंड अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं वो हाफ स्टिक हो जाता फ्रॉम रॉफ्यूल साइड, अगर थोड़ी सी भी टाइमिंग उनके फेवर में रहती, दिस राउंड कुड हैव बीन इन ओरंगुटान्स फेवर, बट वो ऐसा कर नहीं पाए। काफी अच्छा राउंड जरूर, एंड कह सकते हैं काफी ज्यादा अल्टीमेट भी पुल आउट कराने में कामयाब हुए फ्रॉम साइड ऑफ बॉन्कर्स, लेकिन इन द एंड पहला अटैकिंग राउंड या बॉन्कर्स का नाम क्या है? जी हाँ, ये पहला अटैकिंग राउंड बॉन्कर्स का, और क्या इन्हें कोड मिला है अभी ग्लव्स के साथ डील करना पड़ेगा। टेसरैक क्लैशेस है, सब कुछ है, बावजूद उसके ड्राई पीक और पनिशमेंट दी है पूरी ल्यू ने इसके लिए। अजीज फिर से बिल्कुल मिड वॉकिंग करते गए एंड आरडीडब्ल्यू को आराम से शट डाउन। ये गुड लाइक अभी भी कह सकते हैं ओरंगुटान का जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखने को मिलता है। अजीज की तरफ से हमें कुछ ऐसे ही फ्रैग से इधर निकाल भी रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा ओवर एग्रेशन, इमीडिएटली उनको शट डाउन यहाँ पे किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं जो एडवांटेज क्रिएट करके दिया था अजीज ने, उसको खुद ही वापस ब्लो आउट करने हुए नजर आए। नाउ लॉकडाउन भी डिप्लॉय कर दिया गया ऑन द साइड, सो और ज्यादा दिक्कतें रहने वाली ओरंगुटान के लिए। बट ल्यू की ये पोजीशनिंग क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? कर जरूर रहे थे, बट ल्यू जिस तरीके से आज इस खिलाड़ी ने ब्लेड्स चलाए हैं, जस्ट हैज बीन अमेजिंग। और अब देखिए थोड़ा सा पैरानॉइड है, रॉफ्यूल को 2 एंगल्स एक साथ देखने पड़ेंगे, सीक्रेट और फ्लावर सपोर्ट कर नहीं सकते इस राउंड के अंदर। आरवी के ज़्यादा यूटिल बची नहीं है, तो एक सेव का कॉल आता हुआ ओजी का। बॉन्कर जैसा लग रहा है वो ए साइड की जो वीकनेस है वो उनको मिल गई है और अब उसे बार बार एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बट फिर से वही बात है,
टेसरैक्ट ने फर्स्ट ब्लड जो दिया वहीं से राउंड की स्थिति थोड़ी सी खराब होनी चालू हो गई थी स्पार्टस। एग्जैक्टली एंड वो भी ड्राई पीक करते हुए आपके पास अभी तो ये सेट पे चल रहे थे अजीज एंड टेसरैक्ट के, वो बिल्कुल यहाँ पे वर्क कर रहे थे फॉर ओरंगुटान टू गेन द स्पेस, बट यहाँ कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल बैटल लेना ओरंगुटान के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी अगर देखें तो इकोनॉमी जरूर इन चेक है उनके पास इनफ क्रेडिट्स रहने वाले हैं टू बाय अप फुली इन दिस राउंड, बट एक चीज़ ज़रूर है कि थोड़ा सा सेटअप को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, क्योंकि बॉन्कर्स अगर 2 बैक टू बैक राउंड लेके गई है वो भी ए साइड के ऊपर, थोड़ा वापस से हम कह सकते हैं रीवर्क की जरूरत पड़ने वाली है उन्हें। एंड अगेन जिस तरीके से बॉन्कर्स हिट कर रहे हैं कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, सीधा साइड हिट्स एंड वो फ्रैग्स की तलाश कर रहे हैं जो ओरंगुटान को देती हुई नजर आ रही है हाथों पर। ल्यू के ब्लेड जाएंगे तो थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा ओजी को, मुझे लगता है 2 डिफरेंट एंगल से पीक करना रहेगा। बट अभी भी देखिए ओजी ये 7 राउंड्स क्यों पहुंची है, अजीज ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला इस गेम के अंदर। 24/12 जा रहा है ये प्लेयर, शायद 5 या 6 बार तो ये रन इट बैक यूज़ कर चुका है। तो ओजी थोड़ा सा सपोर्ट तो ज़रूर यहाँ पर करना पड़ेगा अजीज़ को, वो अर्ली डुअल्स जो है वो अजीज़ को लेने दीजिए रादर देन एनी अदर प्लेयर। अब ये बात ऐसी लगेगी कि बहुत ज़्यादा गलत है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू नीड राउंड्स और एक प्लेयर है जो आपके लिए मेजर हैवी लिफ्टिंग कर रहा है, हर राउंड 2-2 3-3 फ्रैग निकाल के दे रहा है, तो उसको वो फर्स्ट ब्लड निकालने में हेल्प करिए एंड नॉट द अदर वे राउंड जहाँ पर आप पीक लेके पहला फ्रैग दे दो ओपोनेंट को। पिछले 2 राउंड में यही हुआ है और यही मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हुई है हल्की सी फॉर टीम ओजी। वो एक राउंड तो जहाँ पर लर्क करके ड्रैगन बिल्कुल स्पॉन पहुँच गए थे, ए सीक्रेट ए फ्लावर के आसपास पहुँच गए थे, ड्रैगन आरवीके को पिक ऑफ किया था, वो पहला ब्लड गया था, और अब इस राउंड के अंदर टेसरैक को पिक ऑफ कर लिया। मे बी अगर एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को पैचअप कर लियो जी, वी माइट हैव अनदर फ्लरी ऑफ राउंड्स फ्रॉम देम। अजीज पर इस बार देखिए नो शील्ड वैंडल खेल रहे हैं इस राउंड में। डेफिनेटली एंड एक बहुत गट्सी मूवी हो सकता है, क्योंकि आप जनरली एटलीस्ट चाहते ज़रूर है कि आपके पास एक लाइट शील्ड हो, बट अभी के लिए लेट्स सी क्या वैल्यू यहाँ पे मिलती है। एक फ्लैश है जरूर उनके पास, ए मेन को अर्ली क्लियर करना चाहते हैं, बट अभी के लिए आरवीके हैज सेट द बेट एंड ये बेट बहुत अच्छा था। फर्स्ट बेट यहाँ मिलेगा वो भी ड्रैगन के ऊपर जो अभी तक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे थे इस मैच में, बट नाउ अब उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पोस्ट माउंट पे 2 मॉल्टीज कम हो गई बॉन्कर्स के लिए, सो वो बिल्कुल एक चीज़ रहेगी, बट आरवीके के फ्रैग का जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। रॉ फ्यूल इंडिविजुअल फ्रैग, ऑल्दो उनका टेल बिन एक्टिवेटेड था लेकिन कुछ फायदा नहीं निकाल पाए। एक फ्रैग अगर एमेन पे निकला तो बॉक्सर्स ने ये ट्रेड बहुत अच्छे निकालिए, ये भी गया हाथ से राउंड। अननेसेसरी पीक्स आई है यहाँ पर ओजी की तरफ से। जब एमेन पे फ्रैग मिल गया तो बीमेन अग्रेशन का क्या पॉइंट है, और अगर कर रहे हो तो डबल पीक करो, एक एक करके क्या मतलब है। पहले रॉफ्यूल ने फ्रैग निकलवाया अपना, उसके बाद टेसरैक्ट ने ड्राई पीक ली। हाँ हेडशॉट आई थिंक जरूर दिया, मुझे बहुत कम एचपी मिनिमाइज दिख रहे थे, बट अगर वो फ्रैग नहीं निकलेगा यही तो फायदा होता है स्ट्रेंथ इन नंबर्स वाले गेम प्ले का, और बॉन्कर्स ने वही करके दिखाया है। 3 प्लेयर्स ने बीमेन पीक किया, एक ने रॉफ्यूल को मारा, बाकी दोनों ने मिलके पिक ऑफ कर लिया टेसरैक्ट को। रूकी मिस्टेक्स यहाँ पर ओजी की तरफ से, एंड ये जो हल्की सी कमबैक की उम्मीद बनी जरूर थी वो वापस से स्क्वॉश करती हुई नजर आई है बॉन्कर्स। एक्चुअली यानी जो टाइम आउट लिया गया था ना बॉन्कर्स के तरफ से, वो बिल्कुल यहाँ पे एडजस्टमेंट करी है वो परफेक्ट नजर आ रही है। ऑल्दो एंटीडोट 2 फ्रैग्स निकालने में कामयाब होंगे अपनी टीम के लिए, एंड वो लिंक का एंगल काफी अच्छा था। रॉ फ्यूल ऑल्दो वापस से एक फ्रैग निकालेंगे, एंड अब फाइनली ओरंगुटान के लिए वो डुअल्स जीतना इस राउंड में तो उनके फेवर में क्या जरूर है, लेकिन एस्केप करने से पहले ही ड्रैगन उनको फिर से शट डाउन करने में कामयाब होंगे। एक 4v2 का सिनेरियो है जरूर, ओरंगुटान के लिए दिक्कतें नहीं आनी चाहिए इस राउंड में। इन्फॉर्मेशन भी है आखिरी दोनों प्लेयर्स का, एंड एक काफी अच्छा क्रॉस फायर सेटअप भी लगा जरूर रखा है, बट ड्रैगन वापस इसको शट डाउन किया। ट्रेड्स आए हैं बट एक 1v2 है आरडीडब्ल्यू के लिए। सी इट्स स्टिल वेरी डूएबल फॉर आरडीडब्ल्यू। स्पाइक भी उन्हीं के पास है कंट्रोल में, और उनको पता चल गया है कि दोनों प्लेयर्स इधर ही है। मुझे लग रहा है आरवीके को बैक हॉल से स्विंग करते हुए इन्होंने देख लिया था, और आंटी ने तो फ्रैग ही निकाला है। आरडीडब्ल्यू हैज ऑल द इंफॉर्मेशन ही नीड्स टू वर्क दिस मैजिक आउट। अब ये लिंक दोबारा से क्लियर करेंगे, आठ जाएंगे। आठ जाने का डिसीजन, एकदम सही डिसीजन मेकिंग आ रही है यहाँ पर आरडीडब्ल्यू की तरफ से। बॉन्कर्स 1v2 पोस्ट प्लांट मिलेगा, अब वो खेलेंगे कैसे, दैट्स माय मेन क्वेश्चन। एंटी इफ नीडेड आप वो लॉकडाउन भी इन्वेस्ट कर दीजिएगा, बट ये राउंड नहीं जा सकता हाथ से, क्योंकि ये राउंड गया और ये मैप खत्म हो जाएगा।
Exactly. मैप पॉइंट है यहाँ पे एंड उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हम सबसे क्रूशियल चीज यही रहने वाली है कि आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा कि बॉन्कर्स किस तरीके से या मार्किंग करें। आरडीडब्ल्यू फिलहाल के लिए तो आर्ट्स पे गए जरूर है एंड एंटी की विन कंडीशन उनका लॉकडाउन ही रहने वाला है। अभी के लिए देखना पड़ेगा क्या एक लेट लर्क मर्डर होल के थ्रू ए साइड पे जाने वाले हैं, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं और ओरंगुटान को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उसके बाद। देखिए प्लांट है नहीं यहाँ पर आरडीडब्ल्यू का, इन्होंने बैक साइड का प्लांट दिया नहीं है तो ये डुअल स्मोक्स आउट करने पड़ेंगे और पहला वाला जीत लिया। बट दिस शुड बी द क्यू टू जस्ट डिफ्यूज। अब ये फुल स्टिक होना चाहिए, कोई चांस ही नहीं है कि आरडीडब्ल्यू टाइम से आके ये फ्रैग निकाल पाए। आरडीडब्ल्यू ने थिंक आउट नहीं किया इस पूरे प्ले को, तो फ्रैग भी नहीं निकाल पाएंगे। एंटी जस्ट बेटर इन दैट सिचुएशन। ये अगर इनको बैक साइड खेलना ही था तो थोड़ा बाहर का प्लांट दे देते, अगर मन में सोचा होता तो ये रीटेक पॉसिबल नहीं होता ओजी के लिए उस फ्रैग के बाद। पर वेल थॉट आउट था नहीं बॉन्कर्स की तरफ के, मतलब गलती तो क्या ही बोलिए, 2v5 का सिचुएशन आप यहाँ तक ले आए सैल्वेज करके, दाद तो आपकी उसमें देनी पड़ेगी। बट ओवरऑल एक अच्छा राउंड आता हुआ ओजी, बहुत कुछ लग गया इस राउंड के अंदर बावजूद एक लीड के। और चलिए कम से कम आ जरूर गया 8वां राउंड। डेफिनेटली होप स्टिल अलाइव है यहाँ पे एंड ओरंगुटान के लिए होप ही कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मैटर करती है इस पॉइंट पे, क्योंकि अब नहीं जाएंगे कि ओजी अपना पहला ही यहाँ पे मैप हारता हुआ नजर है। वी वांट देम टू विन दिस मैप बट फॉर नाउ वापस एक फास्ट बी हिट यहाँ देखने को मिला फ्रॉम साइड ऑफ बॉन्कर्स। अल्टीमेट्स यहाँ पे सिर्फ रन इट बैक है अजीज के पास, लेकिन उसको जब तक इस्तेमाल में लेके आएंगे उससे पहले ही साइड एंकर्स शट डाउन होते हुए नजर आएंगे। ल्यू फिर से यहाँ पे पूरी ओरंगुटान टीम को दिक्कतें दे रहे हैं। देखिए अर्ली फ्लैग निकाला है रॉफ्यूल के ऊपर, सेटअप उनको किया गया था मिनिमाइज की तरफ से उस फ्लैश के साथ। और अब अजीज कोशिश करेंगे रिटेक फैसिलिटेट करवाने का, बैक और किसी को तो देखना पड़ेगा। आरडीडब्ल्यू के पास ऑपरेटर और मुझे लग रहा है दैट्स इट, दिस कुड बी जस्ट इट। बॉट ने टेसरैक के ऊपर फ्लैग निकाला, गुड ट्रेड फ्रॉम आरवीके एंड एंटी, बट अब एंटी पड़ गया एक 1v3 में, एचपी है 58। क्या ल्यू के साथ वो बैटल जीत पाएंगे नहीं और बॉन्कर्स बिल्कुल बॉन्क किया यहाँ पर ओजी को इस मैप के ऊपर, और पर्ल अपने मैप पे को सुनिश्चित करने में कामयाब रही है। डेफिनेटली बहुत अच्छा मैचअप यहाँ देखने को मिला जरूर। एंड अगेन ओरंगुटान का जो कमबैक जैसे लग रहा था वो 9-3 से आपके पास शायद से यहाँ पे एक कमबैक देखने को मिल सकता है। एक यहाँ पे टाइम आउट आया फ्रॉम साइड ऑफ बॉन्कर्स एंड कहानी पलट दी पूरी गेम की। जी हाँ, आई मीन डॉक्टर के पास भी तो शायद एक बचा हुआ था स्पार्टस, आई एम नॉट श्योर, वो एक बार रीचेक करना पड़ेगा। बट चलिए वो टाइम आउट कॉल किया नहीं गया था। बट गुड अटेम्प्ट फ्रॉम ओजी ओपोनेंट के मैप पिक के ऊपर। शुरुआत तो अच्छी मिली थी, पिस्टल राउंड के यूजुअली लाले पड़े रहते हैं, पर आज तो वो भी आया था, या वो भी कहूँ या सिर्फ वो ही कहूँ, स्पार्टस ये नहीं समझ आया। ये लाइक अगेन ओरंगुटान ग्लिम्सेस जरूर मिले कि शायद मैप विक्टोरियस निकाल सकते हैं, शायद से आज वो दिन हो सकता है जहाँ पे 9-3 स्वैप के बाद ओरंगुटान जीतता हुआ नजर आए। बट इन दी एंड एक बहुत लंबी जर्नी थी जिसको आधा ही पूरा कर पाए एंड कुड नॉट वर्क वंडर्स। बट नाउ पर्ल का मैप था यहाँ पे बॉन्कर्स का, तो कहीं ना कहीं शायद ज्यादा बनता था उनका जीतना। बट जो स्टार्ट यहाँ पे मिला है ना, खासकर ड्रैगन एंड ल्यू का जो परफॉर्मेंस रहा है ये कहीं ना कहीं डरा रहा है ओरंगुटान की टीम को। स्टार प्लेस काफी है वो फर्स्ट हाफ के अंदर, हर प्लेयर मतलब 3-3 मार रहा है एक राउंड के अंदर। और ये मतलब ठीक है, एक राउंड हो सकता है, 2 राउंड हो सकता है, पर अगर हर राउंड हो रहा है ना तो ये कहीं ना कहीं कमी है ओजी की, जिसमें वो ट्रेड नहीं कर पा रहे प्लेयर को एसेंशियली। और अजीज वो बेचारे कितना ही करते, मुझे लग रहा है 24-25 फ्रैग ओवरऑल इस प्लेयर ने निकाला है। फीनिक्स की तो फुल वैल्यू दी है, वो टीम सपोर्ट थोड़ा सा लैकिंग था और रॉफ्यूल को भी शांत रखने में बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर बॉन्कर्स ने। सो अ वेल प्लेड गेम बाय द साइड ऑफ टीम बॉन्कर्स, जीत कर गए हैं। 2-0 चाहेंगे तो करना, बट मुझे लगता है ओजी के कुछ अलग प्लान्स रहेंगे। हेवन का मैप काफी स्ट्रॉन्ग सूट माना जाता है ओजी के लिए। एग्जैक्टली, बट नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से खेलते हैं। बट उससे पहले चलते हैं हमारे एक इंटरव्यू की तरफ। Now, I just want to ask you a few questions, of course. What's your overall impression of Ascension Pacific? Have you enjoyed your time? And also, give me your thoughts on the Omega group you're in. I've enjoyed my time in Thailand so far. It's been really fun seeing my team, getting to meet them. It's not pretty rare in OC that you get to actually go out and meet your team, so it's always fun to do that. Ascension, it's been really chaotic, I think. Bleed right now, the only team that haven't lost a game. All teams look vulnerable in one way or another. Super chaotic. You're seeing upsets, you're seeing all these games different ways. And as our group, I honestly think our group is the harder group. I think it's very top heavy. A lot of stacked teams like
D+, Bleed, Scars, they all look really, really good. But I think if we play like we did against D+, and we keep getting better, then we can make our way out of it. Okay, now talk to me about expectations from everyone back home, everyone in our region, of course. OS, it's a minor region. We don't get many international opportunities, as is the same with all the other regions here at Ascension Pacific. But does that add extra pressure? Do you ever think about it, or is it sort of just something in the back of your mind at the moment? Well, obviously, as a player, you're always going to have the expectation you're going to win the whole event. I think every player here probably has the confidence that they're going to come in and beat everyone. But I think in terms of pressure, we have no pressure on us right now. I think all the teams, all the people watching, they don't really have many expectations for us. And we say that to ourselves, between ourselves. We're like, we're here as the underdogs. No one really thinks we're going to win. Yeah. These guys got $10 billion org supporting them and have all the support. They've got everything to lose, you know. If they lose, they get made fun of. If we lose, it's all good. And you just say, no, we're just off on smoker, you know, back to work as so it be. Personally, are you happy with how things have been going for the team, for yourself in particular? Honestly, I think we've made great progress already. I think going into Scars, we were all very nervous. I think it was our first game on LAN for a lot of people. The time wasn't the best, but I think overall, even from that game, we managed to deal with the pressure. We've actually learned a lot, and we've actually improved a lot already in this short term we've been here, so really excited for what's coming up. Shout outs to Bleed for helping the boys get over, of course. Any message for all of the supporters back home? We know there's a lot out there. Bonk Stonks going crazy, hashtag bonk fighting, all that. Look, shout out to everyone that donated to us. It really meant a lot. We wouldn't be here without the support. Everyone in Australia, we're gonna do this for you boys. You heard it here first. That's been Minimized. That's been me. Good luck in your next games. Pearl, a great place to get Oceania their first dub in the series. Now, are they going to be able to continue this one on? Of course, you know, Pearl, it's underwater. Oceania, ocean, it just kind of makes sense, doesn't it? It was an easy one for Bonkers. Or do you think that OGS showed enough towards the end to warrant enough belief in the second map? It's crazy just to see, like, what strength Bonkers came out with at the beginning, right? Such a tear as soon as they managed to kind of get moving, but then Orangutan were able to come back, right? So there's definitely that life. They certainly haven't rollen over and let it slide, so to speak, right? You know, They still have that fight in them, and they desperately need to take this. Like, if this map doesn't go 3 maps, we've been robbed, basically. Yeah, going into Haven as well, right? I think it's a good neutral ground for both of the teams. Again, you got to remember, Bonkers haven't had to show much of their map pool here, so it does come down to scrims. It does come down to VOD reviews and history, and for the side of Orangutan, they have actually showed this map, so there's even more for Bonkers to learn against Orangutan here. Yeah, learning on the go is something that Bonkers need to do to just keep on pulling up this tirade. If they get this 2-0, if they lose a minimal amount of rounds, it gives them the best opportunity to make their way into playoffs. It's what we need to keep on remembering. But looking at this one, Aziz,
the only real member that showed up to the party, 24 and 15. The others started to fire up the engines in that second half, but unfortunately that was just a little bit too late. Lou as well, you expect him to lead the charge on the duelist, and he certainly did. Over a 2 KD is a great performance to kick off the series and really just fire up the beliefs of every fan back home. And you're looking at the stats here as well. Bonkers, yes, they lost the first kill. Only one of those rounds that they managed to pick up, but the rest of them, they had those first kills. They were solid in the post plants. They obviously, you know, lost a little bit of momentum at the end of the start of the second half, but as soon as they won that round off the back of those pistols again, it was just them locking round after round. The thing that I love the most, what Bonkers were bringing forward, is just the fact that they were happy to take space early, and that is obviously singing true inside those first bloods that we did manage to see. They were constantly going in pairs, and it seemed to work out the majority of the time. Yeah, a lot of trades from both sides accordingly as well, but I think one of the big problems is that Rawfuel wasn't getting too activated. It was not really with the pack. Tesseract was going in first a lot with the Sky Kit as well, and for Aziz, I mean, yeah, what do we even say about him? He was doing kind of what he needed to do in the series. Yeah. It was just his teammates were kind of lacking a little bit. Yeah, unfortunately, the trade game just wasn't there, and you need the trade game to pick up maps, pick up rounds, of course. But another stat I just quickly saw is Lou is so on point today. Yes, he got a great KD, but he got a 50% headshot percentage, which is very high for competitive Valorant. He got 26 kills, so that's 13 headshots, all in a relatively short game, only 21 rounds going down on Pearl. But let's start talking about Haven. We haven't seen Bonkers play this for a little while. It's been a month or so, and they've only played it once this year, I believe. They haven't played a whole lot of it. No. Yeah, it's definitely something that's in their wheelhouse effectively, right? Like, they are comfortable on it, but ultimately, as other teams locally have felt that level of comfort in the same line, they have kind of fallen away from it a little bit. So not really wanting to kind of, you know, try put out too many reps and give extra teams space who might have a much more narrow map pool. Yep, and of course the pick coming in now from the side of Orangutan. We know why. They got this one over the line against the side of D+ Kia, where they ultimately lose the series, of course, but that's one of the series that they actually managed to take a map. I actually had a chat with one of the members from D+ Kia not too long ago. Don't want to leak the whole interview, but I found out exactly why they had that rocky start. They seem to start slow in all these tournaments. They just have to get that first game out, get the nerves over with, and then you see them start to really hit their stride. So D+ Kia, of course, game not until tomorrow, but it is, of course, a factor because Orangutan took that map. D+ Kia, not a team to be taken lightly. Yeah. No, and of course, in that match as well, right, it was actually Tesseract again consistently fragging. Aziz was absent on that map when he plays Sky, so that's a shift we're expecting from a Phoenix where he's having so much impact onto a Sky. Yeah, now overall, I think just the way that this roster can be very diverse in the agents that they play and how it switches up between all the maps and everything like that. But again, I just have to continue to harp on it. We can't have a one-man show. We need the team to be synergized, to get on the plate, because as I mentioned at the start of this map of this series, is that we, locally, in Oceania, in India as well, we lack some cohesion. Orangutan versus Bonkers. पहला मैप पिक Bonkers का उनके खाते में जाता हुआ। अब यहाँ पे बारी है Orangutan के मैप पिक। हम बात कर रहे हैं Valorant Champions Tour Ascension Pacific की, जहाँ पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज के दिन के दूसरे मैच को देखने के लिए of Orangutan versus Bonkers, Fritz and Fritz। क्वेश्चन यही है, क्या ये Ascension का Orangutan के लिए आखिरी मैच होने वाला है? वो तो वैसे भी और ऐसे भी है। मुझे लगता है स्पार्टस असली क्वेश्चन ये है कि ये जीत पाएंगे यानी एक भी गेम, क्योंकि अभी तक का तो जो परफॉर्मेंस आया है that has not been optimal, that has not been to the mark. बट चलिए, हेवन स्ट्रॉन्ग सूट है, होपफुली एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी आएगा। और अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। अंतर क्या है, मिनिमाइज का ब्रीच और अजीज की स्काई, बस यही अंतर है। और बाकी आप देखिए रॉफ्यूल को अभी भी जेट के ऊपर ही पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। पिछले दिन तो रॉफ्यूल ने काफ़ी तहलका मचाया था अपने ऑपरेटर के साथ इस मैप के ऊपर D+ क्या अगेंस्ट। आज भी एक सिमिलर परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है इनसे। Exactly, बट एक चीज़ यहाँ पे अगेन वही रहने वाली है कि अभी तक Bonkers के लिए जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल प्लेयर साबित हुए हैं दैट इज ड्रैगन एंड ल्यू। इनके खिलाफ कुछ गेम प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओरांगुटान चाहे कितने स्ट्रैटेजिकल चेंजेस कर रही थी, लेकिन जब भी गन डुअल्स की बारी आ रही थी ल्यू एंड ड्रैगन हर बार उन्हें शट डाउन कर रहे थे। मतलब ये तो ऐसे प्लेयर निकल कर आए हैं जिनको आपको डील करना आना चाहिए।
जिनके साथ डील करना आना चाहिए। ल्यू का ही गेट इट, ही इज द जेट गाय जो एक लेके हमेशा एस्केप कर सकते हैं, बट 3 का कोई आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते स्पार्टस अगर वो 3-3 फ्रैग एक राउंड के अंदर निकाल रहे हैं। बहरहाल ड्रैगन की बात करूँ तो वो तो इंस्टेंट ट्रेड होने चाहिए, पर हुआ नहीं था पिछले गेम के अंदर। होपफुली दिस विल बी अ बेटर वन। यहाँ पर ओजी सोमी थोड़ी सी एक्स्ट्रा और ज़्यादा रहने वाली है। हेवन का मैप उनका खुद पे क्या ये, और काफ़ी अच्छी तरीके से जीत के आए थे D+ किया पे। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने डिफेंसिव हाफ के अंदर। 5 या 6 राउंड मिल जाते हैं तो मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा हाफ आया, क्योंकि हेवन अगेन बाई नेचर तो अटैकर्स ओरिएंटेड मैप है। एग्जैक्टली एंड ये कहीं ना कहीं ओजी को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर तरीके से खेलना पड़ेगा। इवन जो कॉम्पोजिशन है यहाँ पे ओरंगुटान का, उनका वही डिफॉल्ट कॉम्पोजिशन है विद दैट स्काई एंड सोवा, डबल इन्फॉर्मेशन एजेंट्स, हर एक चीज़ है। बट उसके बाद अगर बॉन्कर्स को देखें, जब भी आप ब्रीच को फेस करते हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि साइड पे जो फास्ट हिट्स रहते हैं उसको कोई भी प्लेयर एंकर डाउन नहीं कर सकता है। वो फॉर्ट लाइन एंड फ्लैश का जो कॉम्बिनेशन रहता है साइड में, वो हर बार आपको शट डाउन करता ही रहेगा। सो अगेन एक गेम प्लान बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि आप पहला डिफेंसिव साइड में स्टार्ट कर रहे हैं। उस चीज़ को कहीं ना कहीं ध्यान में ज़रूर लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहला हाफ ही वापस 9-3 की तरफ जाता है जो हमने पर्ल पे देखा था, दिक्कतें रहेंगी फिर वापस से। I don't think so. 9-3 थोड़ा सा मुश्किल रहेगा फॉर बॉन्कर्स टू अचीव इस मैप के अंदर। अभी तक मैंने इतना वैसे बॉन्कर्स को देखा नहीं है और ना ही स्टडी किया है इन टर्म्स ऑफ हेवन किस तरीके से वो खेलते हैं, बट आई थिंक सो वही रहेगा। ल्यू को पूरी फ्रीडम रहेगी टू मूव अराउंड द मैप। उनके अराउंड उनकी टीम खेलेगी, उनके अराउंड पूरी कॉलिंग होने वाली है, एंड लेट्स सी हाउ डज ल्यू परफॉर्म। हैज़ अ फ्रेंजी, ओके, मुझे लग रहा है ये एक फास्ट ए हिट रहेगा और ये ट्रेड्स निकालना चाहेंगे इन फ्रेंजीज के साथ। और ड्रैगन अकेले ने ले रखी है एक शेरिफ। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पिस्टल राउंड बाय है, और इनको काउंटर करने के लिए देखिए 2 प्लेयर लॉन्ग से पीक तो जरूर लेंगे, बट उनके सामने लगा हुआ है नेबुला। तो इफ रिक्वायर्ड या तो वो फेक होगा, या तो वो फेड अवे करवाया जाएगा नेबुला, या तो वो स्मोक पे कन्वर्ट करवा के बॉन्कर्स के जो प्लेयर्स हैं वो डिस्टेंस क्लोज इन करना चाहेंगे, ताकि वो एफिशिएंसी जो है फ्रेंजी की यूज करी जा सके। ऑल फॉर दैट फेक। अभी के लिए वापस से रिकॉल किया, वापस गए एंड अगेन इंफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा आई वुड से हाइड नहीं कर पाए, क्योंकि ओरंगुटान ऑलरेडी सी एंड गराज की तरफ रोटेट करना शुरू कर चुके हैं। ट्रे बेयर से जो हल्का डाउट भी रहेगा ए लॉबी कंटेशन का, वो भी क्लियर हो जाएगा। अब ये सी हिट जो करना चाहती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैग यहाँ पे आरवी के एंटीडोट सिक्योर करेंगे, एंड आई थिंक ये शट डाउन बहुत इजीली ओरंगुटान करने में कामयाब रहेगी। अकेले बचे ड्रैगन विद शेरिफ, ऑल्दो ही इज गुड फॉर 2, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, 2 फ्रैग तो बड़े अच्छे निकाले यहाँ पर, बट उसके बाद ओजी शट डाउन करने में कामयाब। बॉन्कर्स लूज द पिस्टल, रैट पोजीशन खेली और पूरी वैल्यू निकाली। मतलब ये पोजीशन ना कभी कभी ऐसी बन जाती है स्पार्टर्स, जहाँ पर सिर्फ एक एंगल आपको चाहिए होता है एक्स्ट्रा, ताकि पता रहे प्लेयर्स की बाकी पोजीशनिंग कैसी है। ये देखिए एक प्लेयर ने फ्रैग निकाला, बाकी तो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया, और उसके बाद ड्रैगन या मे बी ही वाज गुड फॉर 2, बट द ट्रेज वर एसेंशियली इमिनेंट। फिर से शेरिफ में इन्वेस्टमेंट। ड्रैगन इज लाइक इविल जेनेसिस में हम बूस्टियो को देखते थे, चाहे वो किलजॉय खेल रहे हो, चाहे कोई भी एजेंट उनके पास, वो शेरिफ का इस्तेमाल कर रहे थे। ड्रैगन भी कुछ वैसा ही यहाँ पे इस्तेमाल करते नजर आ रहा है, लेकिन टेसरैक्ट विद द शेरिफ कम्स आउट ऑन टॉप। पहला फ्रैग निकला है, लेकिन यही फॉल्ट लाइन की हम बातें कर रहे थे जो आपको हर बार फंसाते हुए नजर आ सकते हैं। क्लोज रेंज ल्यू उसका फायदा उठाएंगे, अजीज को शट डाउन करा जरूर, बट टेसरैक्ट शॉक डार्ट कर रहे थे एंड ड्यू आरडीडब्ल्यू उनको शट डाउन करने में कामयाब है। ऑल्दो द फ्रैग्स आर फॉलिंग एंड द ट्रेड्स हैव बीन देयर, एंड उसका फायदा बिल्कुल ओरंगुटान को मिलेगा। 11 HP बचे मिनिमाइज, और इस बार ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। बॉन्कर्स इजीली शट डाउन करी गई ओजी की तरफ से, और ये दूसरा राउंड ओजी ने अपने लिए बोर्ड पर डाला। अनएक्सपेक्टेड था, मतलब थोड़ा बहुत फ्रैग्स निकले जरूर उनके अगेंस्ट, बट इतना नहीं था कि राउंड जो है वो अपने हाथों में ले पाती बॉन्कर्स। बट अब है फुल बाय, खाली RDW के पास एक लाइट शील्ड है, अदरवाइज ऑल ऑफ दीस प्लेयर्स आर प्लेइंग दैट हेवी शील्ड, और वेपन्स भी आने वाले हैं फ्रॉम द साइड ऑफ टीम बॉन्कर्स। तो विल हैव टू सी हाउ डू दे एग्जीक्यूट नाउ, क्योंकि अभी तक तो पिस्टल राउंड और उसके बाद के राउंड से आप इतना जज कर नहीं सकते किसी भी अटैकिंग साइड को, बट नाउ इज द टाइम। मतलब एक डिफॉल्टिंग में थोड़ा मैप के राउंड देखना चाहूँगा। मुझे लग रहा है ल्यू फिर से वो सिर्फ फेक इन्फॉर्मेशन सेल करने आ रहे हैं, वो ओवर रोटेट करवाना चाह रहे हैं ओजी के खिलाड़ियों को दूसरी साइड की तरफ। और बाकी टाइम पे देखिए अगर आप, तो उनके टीममेट्स ड्रैगन वो स्पेस ले रहे हैं ग्रास का, और वो डुअल लेना चाह रहे हैं बी के किसी प्लेयर के साथ। उनको पता है वीकर वेपन्स है, तो अगर उनको एक स्पेक्टर वाला प्लेयर मिल गया तो वो प्रेशर पूरा क्रिएट करेंगे। और ये तो वैंडल वाले को पिक ऑफ कर लिया, 101 का टैग जरूर खाया है रिटर्न में, और यहाँ एंटी काउंटर पुश करके चलिए रेड निकाल लिया। 1 सेकंड के लिए
थोड़ा सा डर मुझे जरूर लगा था यहाँ पे स्पार्टर्स, बट वो ट्रेड आया है और एक 4v4 बैटल अच्छा स्मोक दिया यहाँ पर अजीज को हेल्प करने के लिए साइड के अंदर। अजीज बिल्कुल यहाँ पे वैल्यू भी निकालते नजर आएंगे। इंस्पेक्टर है तो क्लोज रेंज के अंदर डेफिनेटली बहुत मेजर एडवांटेज रहेगा उनके पास। 2 फ्रैग्स निकाले बट ल्यू दोनों साइड में ऑलरेडी थे, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था एंटीडोट के पास, लेकिन ये रीक्लियर के चक्कर में ना वो वापस से जो 3v2 था उसको गिव अप कर चुके हैं। वॉर्ड यहाँ भी कोई शटडाउन करेंगे एंड एक राउंड जो कन्वर्ट कर सकते थे ओरंगुटान। एंटीडोट का एक एग्रेसिव रीक्लियर, वो अननेसेसरी पुश दिक्कतें और ज्यादा बढ़ा देगा। एक बोनस राउंड अगर आ जाता अगेन ओरंगुटान के लिए बहुत ही चीज होती, बट बॉन्कर सिक्योर कर लेगा इस राउंड को। थोड़ा सा ओवर ईगर हो गए मुझे लग रहा है एंटी, पर चलिए कोई बात नहीं है। ऐसी पोजीशन में मे बी अगर पॉज कर लेते, मतलब जब 3v2 एकदम से बना था और साइड के अंदर बहुत डेस्परेटली ल्यू प्लेयर को हंट कर रहे थे, मे बी पॉज किया जा सकता था वहाँ पर एंटी की तरफ से, हेवन की तरफ से जा सकते थे। देयर वर सम अदर अपॉर्चुनिटी, बट हाँ मुझे लग रहा है उन्होंने सोचा कि एक टाइमिंग मिल जाएगी, एक और फ्रैग मिल गया तो राउंड कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर तो चलिए रॉफ्यूल को पनिश किया गया है अग्रेशन के लिए, और तो डैश आउट करने में कामयाब हुए थे। और देखिए ल्यू के पास सिर्फ 30 HP बची है। अजीज रिवील नहीं होंगे, अच्छा होंगे जरूर, बट टाइमिंग लेके फ्रैग निकाल लिया। रॉफ्यूल ने लॉन्ग से रिपीट करके 2 प्लेयर्स का पिक निकाला है। अब ये मिनिमाइज स्टन है एस्ट्रा स्टार की वजह से, बट फ्लैश अच्छा था रॉफ्यूल, ये हो गए एक्टिवेट। पिछले गेम के अंदर कहीं खो से गए थे, पर ले पकड़ लिया हेवन के इस मैदान के अंदर। परफेक्ट रिटर्न एंड जैसे यहाँ पे फुल बाय राउंड मिला ओरंगुटान का, वो जो ओजी हम इंडियन रीजन में देखते आ रहे थे, जो यहाँ पे हर एक एंगल को चैलेंज करना चाहती है, जो गन डुअल्स में इतनी कंफर्टेबल है, वो फाइनली अभी के लिए देखने को नजर आती है। एंड अगेन ये जो यहाँ पे पिंग पोंग करा गया ना ए लॉबी के प्लेयर्स के साथ, रॉ फ्यूल का यहाँ पे स्विंग एंड वहाँ पे टेसरैक्ट पिक कर रहे थे एक अलग एंगल से, हर एक चीज को इतना बढ़िया तरीके से ऑर्केस्ट्रेट किया। बॉन्कर्स के पास कोई जवाब ही नहीं था उसका, एंड फाइनली अपना एक राउंड यहाँ पे जीतेंगे। एंड ये जो 3-1 की स्कोर लाइन है, अगेन पिछले मैप पर्ल में तो पूरा हाफ लग गया था 3 राउंड सिक्योर करने के लिए, बट इस बार एक काफी अच्छा स्टार्ट है, एक ऐसा स्टार्ट जिसकी ओरंगुटान दरकार थी, वो ऑलरेडी इनको मिल गया है। बिल्कुल अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट मिला इस हाफ को, प्लस ऑन डिफेंसिव साइड स्पार्टर्स, मतलब ये छोटी छोटी चीजें ओवरऑल ऐड अप करती हैं। तो अच्छा शुरुआत है ओजी के लिए, इको पे फोर्स किया है बॉन्कर्स को, हल्का सा ध्यान रखिए बस ल्यू के अगेंस्ट, उनका ब्लेडस्टॉर्म एक्यूरेसी कुछ इंसेनली हाई दिखा है पिछले गेम के अंदर, लेकिन उसी तरीके से फिर से वैल्यू निकाल पाते हैं। यानी अब की तो इनको स्पैम से काउंटर किया जा रहा है, उनको पता है नाइफ को तो स्पैम नहीं किया जा सकता, और ये विजय रॉफी ने वो एंट्री निकाली है। ड्रैगन प्लेट जरूर निकालना चाह रहे हैं, पर मिनिमाइज है, ये कहां से क्लासिक का फ्रैग निकाला है। फिर से एक बार ओजी मझधार में फंस गई ट्रेड्स के, और भले ये पहला वाला मिला जरूर था, पर बॉन्कर्स ने उल्टा यहाँ पर दांव खेल दिया ओजी के ऊपर और फंस गए ओजी वाले। क्लासिक्स एंड शेरिफ्स के फ्रैग, वो भी एक ऐसे साइड के ऊपर जहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हैं स्टैकअप था ओरंगुटान का, बट जो यहाँ पे शॉट्स हिट कर रहे हैं खासकर आरडीडब्ल्यू एंड मिनिमाइज ने कोई मौका ही नहीं, यानी ये स्पैम करते हुए पकड़े गए उस 1v2 के अंदर भी। बॉन्कर्स के लिए एक थ्रिफ्टी, एक रिवाइवल है अचानक, क्योंकि पिछला राउंड बहुत आई वुड से धाराशायी हुए थे एक ही एरिया में, बट नाउ एक थ्रिफ्टी सिक्योर किया है। और अगर अल्ट इकोनॉमी भी देखें, हंटर्स फ्यूरी, कॉस्मिक डिवाइड एंड लॉकडाउन, तीनों चीजें अटैकर साइड को चाहिए होती है, अवेलेबल है, लेकिन आरवी के जब स्पॉट करते पकड़ जाएंगे एंड बिना कोई अल्टीमेट का कमिटमेंट करे ही यहाँ पे पूरी साइड मिल जाएगी बॉन्कर्स को। स्पाइक प्लांटेड। आवी के अर्ली पिक ऑफ हो गए, दैट मींस रीटेक के लिए आपके पास स्मोक बचे नहीं है। अब ऐसा रीटेक अटेम्प्ट करना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल रह सकता है, कंसिडरिंग कि बॉन्कर्स के पास भी ना अल्टीमेट्स का भंडार सा है। लॉकडाउन है, पोस्ट प्लांट के लिए हंटर्स फ्यूरी है, रोलिंग थंडर है। भाई साहब यही राउंड नहीं सिर्फ स्पार्टर्स में, तो अगले राउंड के लिए भी हल्का सा डरा हुआ हूँ जी के लिए। इतने सारे अल्टीमेट देखिए, काउंटर में आपके पास है तो ज़रूर आपके खुद का लॉकडाउन, बट उसको काउंटर किया जाएगा आरडीडब्ल्यू की हंटर्स फ्यूरी की तरफ से। तो एसेंशियली अगर ट्रेड पोटेंशियल पे भी देखें अल्टीमेट्स के, तो स्टिल 2 अप। एक्जैक्टली, एंड वो भी उसमें से एक रोलिंग थंडर है, तो साइड हिट तो बहुत आराम से हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि लॉकडाउन आएगा, उसके बाद यहाँ पे रोलिंग थंडर को कमिट कर सकते हैं साथ ही साथ, और ओरंगुटान की टीम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगी। एंड ये एक बहुत बड़ा रिस्क रहने वाला है कि क्या आप वहाँ पे ब्रीच के रोलिंग थंडर का वेट करेंगे या नहीं, क्योंकि जनरली हम टीम्स को देखते हैं वो सिर्फ वेट आउट करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टीम्स जब भी ओपोनेंट ब्रीच के पास रोलिंग थंडर अवेलेबल होता है एक रीटेक पे खेल रहे होते हैं, एंड
टीम्स ओवर स्मार्ट कर जाती हैं उन्हें, रोलिंग थंडर को अटैकिंग साइड पे इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, पोस्ट प्लांट के लिए बचा लेते हैं। ये काफी बार प्ले जरूर करते हैं और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से अभी तक खेला है बॉन्कर्स ने, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं एंट्री के अंदर। उसके लिए कॉस्मिक डिवाइड का यूज जरूर किया, बट दिस ऑल इज अ फेक। मिनी मैप पे देखे स्पाइक ए पे अभी भी, और लेकिन रोटेशन सारी बुलवा ली गई है। यू को एक प्लेयर रिवील होता हुआ मिला है और उसको पनिश किया। ऑल्दो टेसरैक्ट ने ट्रेड निकाला है, पर जब ये धुआं छटेगा तो ओजी को पता चलेगा कि ये हिट आ ही नहीं रहा था इस साइड के ऊपर। ये तो एक ए हिट है और हम फंस गए हैं बॉन्कर्स के जाल में। पोस्ट प्लांट के लिए जैसा आपने कहा था, अब वो रोलिंग थंडर और हंटर सूरी यूज होने वाली है। ये राउंड है, अगर इस राउंड में भी देखें तो एक और लॉकडाउन भी है, हर एक यूटिल दोनों तरफ से कंबाइन की जाएगी। द लॉकडाउन हैज बीन एक्सचेंज एंड ओरंगुटान की जो सबसे बड़ी विन कंडीशन थी वो कुछ भी वैल्यू उनको नहीं देने वाली। एंड ये रोलिंग थंडर भी होल्ड कर रखा है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि आरडीडब्ल्यू हंटर सूरी को पूरा कनेक्ट करेंगे। अजीज को शट डाउन कर दिया गया एंड अब तो यहाँ पे सिर्फ फ्रैग का गेम प्ले यहाँ पर नजर आने वाला है। एंड रोलिंग थंडर हैज बीन कमिटेड। ये चीज अच्छी है कि एक ही राउंड में 4 अल्टीमेट्स लगवा लिए हैं ओरंगुटान ने, तो एटलीस्ट जो बैंक बैलेंस था बॉन्कर्स का वो कुछ हद तक कम होगा यहाँ। प्लस टेसरैक्ट को जो फ्रैग मिला उससे उनका भी फ्यूरी चार्ज हो गया है। तो ये दैट्स करेक्टली पॉइंटेड आउट ओवर देयर स्पार्टस। ये थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ थी एंड ओजी ने करवाए हैं, चारों अल्टीमेट्स का इस्तेमाल करवाया है। बट आई से ए बहुत अच्छा डिसीजन बॉन्कर्स की तरफ से भी। मैंने काफ़ी बार देखा है स्पार्टस कि टीम जो है वो चीप आउट करना चाहती है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे इन्वेस्ट इनटू अ राउंड और उस चक्कर में राउंड हार जाती है। बट बॉन्कर्स ने कहा जी नहीं, 4 अल्टीमेट लगती है, 4 अल्टीमेट लगे, पर हमें राउंड से मतलब है, ओवरऑल राउंड चाहिए। और एग्जैक्टली राउंड लेकर गए हैं। देखिए टेसरैक्ट ओवरऑल एक 3K जरूर निकाला राउंड के अंदर, बचाने में तो कामयाब नहीं हुए, पर कोई बात नहीं। आपने ओपोनेंट के इको पे भी हल्का बहुत डैमेज किया है, प्लस अल्टीमेट से कर रही है। ऑल दो अब ये ओजी का इको राउंड है और रॉकुल के पास नाइफ रहेंगे। ओके एंड नाउ ये कहीं ना कहीं आई गेस जो पिछले राउंड में 4 अल्टीमेट्स कमिट करे थे ना बॉन्कर्स ने, वो शायद यही इसी वजह से, क्योंकि उनको पता है कि ओरंगुटान का अगला सेव राउंड आएगा। अगर हम यहाँ जीत जाते हैं तो अगला फ्री राउंड ही ऑलमोस्ट होना चाहिए उनके लिए। सो बिल्कुल वो वैल्यू भी देता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि अभी अगर यहाँ देखा जाए टेसरैक्ट हीरो वैंडलर के साथ अनस्पॉटेड है, लेकिन इंस्टेंट ट्रेड आएगा मिनिमाइज का। अगर टेसरैक्ट एक और फ्रैग निकाले तो कहानी बदल सकती है, लेकिन यहाँ पे आउटडोर का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाएंगे आरडीडब्ल्यू, बट द ट्रेड्स आर फॉलिंग इन। वापस से बॉन्कर्स को फायदा मिलेगा एंड जो सबसे बड़ी कंडीशन थी दैट प्लेस टॉम ऑन रॉफिल तो ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। वैल्यू एंड अजीज इन अ 1v2 राइट नाउ। क्लचेबल पोजीशन है जरूर, मिड्स के थ्रू आ रहे हैं तो एक वैंडल भी रिकवर कर सकते हैं, बट चैलेंज बहुत बड़ा है। देखिए चैलेंज तो बहुत बड़ा है, बट समवन ऑन द ओजी रोस्टर कैन डू इट, इट इज अजीज। बट मुझे बहुत पसंद आई ये बॉन्कर्स की तरफ से पोस्ट प्लांट पोजीशन। उनको पता है वो वेपन रिट्रीव करने आ सकता है अजीज, इस वजह से सीटी का प्लांट देखे दोनों प्लेयर्स बिल्कुल सीटी खेल रहे हैं। वॉट के पास एक स्टार है तो पहले टैप पे कोई भी पीक नहीं करेगा, पहले टैप पे पुल किया जाएगा। अब अजीज एंगल क्लियर पहला वाला कर लिया बड़ी आसानी से। फ्लैश है इन्फॉर्मेशन के लिए, चाहे तो टैप किया स्पाइक को पुल आएगा, वॉट का पुल बेट आउट करा लिया। और अब अजीज को पता होना चाहिए ये प्लेयर या तो लॉन्ग है या तो सीटी है। फ्लैश गलत थोड़ा सा फटा है और अब अजीज मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ही शुड नो नाउ दिस प्लेयर इज स्टिल सीटी। स्पेस से तो कंफर्मेशन भी मिल जाएगी, फ्रैग जरूर मिला पर राउंड नहीं आ पाएगा। फिर से टाइम अच्छा, पर मतलब वेल थॉट आउट राउंड है ये बॉन्कर्स का। ये टाइम आप स्पार्टस कह नहीं सकते, क्योंकि काफी बार क्या होता है जैसे ही उन्होंने वो पहला पीक लिया था ना, उनको लगा होगा कि अजीज स्पाइक पे तो है नहीं, चलो मैं एंगल होल्ड कर लेता हूँ और जैसे ही अब वापस से टैप करना आएंगे मार दूंगा। पर भाई ब्यूटीफुल डिसिप्लिन है भाई वॉट का, ब्यूटीफुल डिसिप्लिन। सिर्फ चेक किया वापस आ गए, चेक किया वापस आ गए। ही नेवर कमिटेड टू अ फाइट। और क्लचेस रोकने के लिए आपको इरिटेट करना रहता है अपने ओपोनेंट को, और एग्जैक्टली वही करके राउंड जितवाया है। बहुत क्लीन राउंड है अगेन। अजीज प्ले आउट बहुत अच्छा करा है इन्होंने, हर एक चीज को प्रॉपर्ली आई वुड से मैनेज करते हुए नजर आए। खासकर जिसे कहते हैं गाइडिंग लाइट का इस्तेमाल किया टुवर्ड्स द एंड, बट वही चीज़ है कि छोटे छोटे जो यहाँ पे राउंड डिफरेंशियल्स हैं वो इस समय बॉन्कर के फेवर में जा रहे हैं। लेकिन इस राउंड में एक फास्ट वेट आएगा फ्रॉम देयर साइड, प्लांट भी बहुत आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं मिलने वाले। बट अंटिल द टेसरैक्ट हंटर फ्यूरी हिट डाउन देम, एक अच्छा फ्रैग निकाला जरूर है ना, एक फास्ट रीटेक फ्रॉम साइड ऑफ ओरंगुटान। आरवीके एंड अजीज मिलके ऑलमोस्ट वाइप आउट कर चुके हैं। लियू अब आखिरी प्लेयर बचे हैं, स्पाइक जरूर कंट्रोल में, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी है ओरंगुटान के पास। आउट रन कर रहे हैं टेसरैक्ट, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन एम डुअल जीतेंगे, राउंड भी जीतते हुए नजर आएंगे। ये आपने देखा स्पार्टस डुअल लिया किस तरीके से किया, टेसरैक्ट खड़े होकर नहीं लिया, उन्होंने हेडशॉट एम ही नहीं किया,
वो क्राउच स्पैम कर रहे थे और एडी की स्पैम कर रहे थे कि तुमको मेरा हेड मिलेगा ही नहीं। अब वो किस्मत हो जाएगी अगर हेडशॉट आप कनेक्ट कर लेते हो तो ये आइडिया अच्छा लगा। ये देखिए क्राउच स्पैम हो रहा है सिर्फ, और उसके बाद डी से अंदर भी जा रहे हैं कि एंगल भी ना मिल पाए उन्हें, और लेफ्ट क्लिक तो दबा के रखा ही हुआ है। अब ये छोटी छोटी डिटेल है जो मतलब मुझे एटलीस्ट इंपोर्ट्स में तो नज़र आ रही है ओजी के। अब बाकी प्लेयर्स का जरूर मैं देखना चाहूँगा इससे थोड़ा सा कैपिटलाइज करें इस इन्फॉर्मेशन को। बट ओजी चौथा राउंड निकाला है और फिर से एग्रेसिव स्टांस किया है ए लॉन्ग के ऊपर। एक कंट्रोल स्मोक रहता है यूजुअली और उसको डिसरिस्पेक्ट करके फ्रैग निकाला। अजीज ने दूसरा फ्रैग निकाला एंड दैट्स द राउंड डन एंड डस्टेड राइट देयर। अब तो यहाँ पे बॉन्कर्स करना किस तरीके से अप्रोच करना किस तरीके चाहिए इस राउंड को वो देखना पड़ेगा। 3v5 में आपके पास कोई मेजर अल्टीमेट भी नहीं है, यूटिलिटी के नाम पे आपके पास इस समय सिर्फ और सिर्फ फ्लैश पॉइंट एंड आउटडोन कह सकते हैं वो रहने वाला है। उसके साथ आपको रॉ फ्यूल की ऑपरेटर का सामना करना पड़ेगा जो और ज्यादा दिक्कत देने वाला है। ड्रैगन को शॉट मिस हुआ है, ये कहीं ना कहीं दिक्कतें होने वाली है। रॉ फ्यूल रीस्विंग करेंगे गैराज को एंड ड्रैगन वापस से फ्रैग निकालेंगे एंड लीजिए इक्वलाइज कर दिया गया राउंड को वापस से। I thought this round was done and dusted. Tesseract, Oh, Dragon. ऑफ हो जाएंगे और ड्रैगन ये फिर से आग उगल रहा है। बॉन्कर्स क्या राउंड निकाल रही है ये टीम। मिनिमाइज इजी शॉट 3v5। ओह माय गॉड, ओजी के हाथों से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ यहाँ पे स्पार्टन, बहुत बड़ा ब्लंडर। एक ऑपरेटर शॉट मिस करने की कीमत यहाँ पे पूरी टीम को चुकानी पड़ी क्योंकि वो ऑपरेटर मिस हुआ, रीस्विंग करा उन्होंने एंड देन ड्रैगन का एक पिक एंड ओरंगुटान के लिए फिर से वही चीजें जो पर्ल में हो रही थी। ड्रैगन 3k to 4k सिक्योर कर रहे हैं बिना किसी रिपोजिशन के। आप इंडिविजुअली कितनी फाइट्स देंगे उन्हें, हर बार एक 1v1 के अंदर चैलेंज कर रहे थे वो भी खुद वाइट स्विंग करने के बाद। तो ड्रैगन को आपने जो उनके लिए चाहिए था क्लच करने की पोजीशन उसमें लाके खड़ा कर दिया एंड देन ड्रैगन का गन डुअल तो हम देख ही रहे हैं। पिछले मैप में भी ऐसा ही था, इस बार भी डिस्ट्रक्शन मचा रहे हैं और कुछ बहुत इनसेन नहीं कर रहे स्पार्टस। हमने काफी सारे प्लेयर्स देखे जो बहुत फ्लिकी बहुत फ्लैशी प्लेस करके अपने लिए फ्रैग्स निकालते हैं। यहाँ सिर्फ बेसिक क्रॉस एयर प्लेसमेंट है, कभी भी अपने शॉट्स को बिल्कुल रश नहीं करवा रहे, बड़ा काम एम बड़े आराम से वो सिर्फ हेड टैप कर रहे दैट से। तो भाई ओजी कब समझेगी ये सारी गलतियां अफोर्ड नहीं हो सकती हैं। जब ऑपर ने शॉट मिस कर दिया है, जब वो फ्रैग मिल गया है, आरवी के बैक साइड खड़े में है, वहाँ पर आरवीके ने भी फाइट हारी, वो ट्रेड खराब गया। सीटी से टेसरैक्ट ने एक प्लेयर को जैसे ही पिक किया वैसे ही तुरंत स्विंग आना चाहिए था दूसरे प्लेयर का। वो 1x1 आए और 1x1 गए, बड़े ही आराम से बॉन्कर्स ने वो राउंड निकाल लिया। जबकि अर्ली लीड आपको दिलवा के दी थी ओजी के खिलाड़ियों ने। 3v5 हाथ से जाता है ना तो वो मोर देन राउंड की चोट, वो मेंटल चोट बहुत ज़्यादा पहुंचाता है स्पार्टस। एग्जैक्टली, वो भी 3v5 जब आपके जेट प्लेयर ने ऑपरेटर के साथ गैराज को मार्क इन कर रहे हैं। हर एक एडवांटेज जो आप डिफेंस साइड पे चाहते हैं वो आपके फेवर में है, बट फिर वहां से राउंड हार जाना डेफिनेटली एक मेंटल चीज तो है। बट अभी के लिए अगर देखें इस राउंड के अंदर अजीज एंड आरबी के ऑन दैट शेरिफ एंड आरबी के विद दैट शेरिफ मैं जरूर देखना चाहूंगा वापस से वही करिश्मा दिखाते हुए जो उन्होंने ऑन द मैप ऑफ एसेंट दिखाया था। वो 4K टैप्स देखने को नजर आए थे। अगर ऐसा ही कुछ हो जाता है तो बिल्कुल मजा सा आ जाएगा इस राउंड में। देखिए 3 राइफल्स है इस राउंड के अप्रोच के लिए। और देखिए टेसरैक्ट को अच्छा एंगल मिल गया है। हाँ प्लेयर टक इन कर गया, पर चलिए वापस बाहर आएंगे तो ड्रैगन को इस बार तो कुछ नहीं करने दिया जाएगा। इस बार पर काट रही है इस ड्रैगन के, पर ये साइड हिट जो है ये थोड़ा सा और तेज हो गई है। एंट्री ली जाएगी, रॉफ्यूल अकेले शॉट के स्मोक के अंदर बैठे तो हुए हैं और कोई उन्हें चेक नहीं कर रहा है। निकल के फ्री फ्रैग है रॉफ्यूल के लिए, पर वो ना स्कैन पे फ्रैग मिला और अभी भी नहीं देख रहे प्लेयर पीछे। ये आइडिया कैसे नहीं है बॉन्कर्स की खिलाड़ियों को कि रॉफ्यूल इनके बैकलाइंस के अंदर है। चलिए डील किया जाएगा उनके साथ और एक 2v2 बनाया है। अजीज प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है और उसी के चलते ये फ्रैग मिला है। और वैसे तो क्लीन हेडशॉट और वॉट ने राउंड क्लोज किया। इतना बड़ा एडवांटेज मिला था ओजी को, फिर से पता था नहीं कि रॉफ्यूल शॉट के अंदर बचे हुए हैं जबकि उन्होंने शॉट्स भी लिए थे। बट ओजी स्टिल आर नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट एडवांटेज। प्रॉब्लम हुई और बॉन्कर्स ने 7वां राउंड निकाल दिया। स्कैनिंग अहेड, टेसरैक्ट हर राउंड के अंदर एक फर्स्ट ब्लड निकाल के दे रहा है। बीइंग ऑन दैट सोवा ए साइड के ऊपर हर बार जो फर्स्ट फ्रैग है वो टेसरैक्ट के हाथ में जा रहा है, लेकिन फिर वो 4v5 के ऊपर होने के बावजूद यहाँ पे बॉन्कर्स राउंड को सिक्योर करके निकाल रहे हैं। ओरंगुटान को ये चीज़ें बिल्कुल फिक्स करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप अगर
इतना जल्दी राउंड को गिव अप कर देंगे? आपके पास एडवांटेज है, आपके पास साइड का पूरा कंट्रोल है, लेकिन उसके बाद भी राउंड नहीं मिल रहा है, देन दिक्कतें हैं जरूर। इस बार तो अल्टीमेट कमिटमेंट आएगा, ऑल्दो एंकर कर जरूर रहे प्लेयर्स, एक अर्ली एग्रेशन उनकी तरफ से बना हुआ है। तो बॉन्कर्स को ए साइड पूरी तो अभी तक नहीं मिली है, बट काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। अब ये शॉक डार्ट के साथ ड्रैगन के ऊपर फ्रैग मिल सकता है और बिल्कुल मिलेगा टेस्ट रैक को, बट नाउ यू हैव टू रिस्पेक्ट द लॉकडाउन। अब आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। पर फिर से देखिए ये ट्रेड्स आए और ये बॉन्कर्स कोई फेवर करेंगे। 3v3 बन गई है ये सिचुएशन। आरवीके के पास अपना एक खुद का कॉस्मिक डिवाइड है तो जरूर, पर ल्यू की ये पोजीशनिंग क्लियर करना बहुत मुश्किल रहेगी, क्योंकि ये कॉस्मिक डिवाइड कुछ ऐसा पड़ा है कि 2 एंगल मिलता है ल्यू को खेलने के लिए। और एंटी कोशिश अच्छी थी, वो फ्रैग मिलेगा नहीं। लॉकडाउन का जो उम्मीद थी इस राउंड के अंदर वो भी गई। और अब ये जो 3v2 बना है, एक प्लेयर सिटी एक प्लेयर लॉग के लिए तो तैयार है, और इवन सिटी के लिए तैयार है ये टीम। तो बड़े ही आसानी से साइड का कंट्रोल लिया। बहुत ही उम्दा पोस्ट प्लांट का जो आइडिया था वो रहा, और उसके अंदर सारे फ्रैग्स भी वेंट द बॉन्कर्स वे। 8-4 9-3 ना सही, 8-4 का स्वैप। सिर्फ एक राउंड का डिफरेंशियल आया है पर्ल के मैप से भी कंपेयर करें तो। अगेन फर्स्ट हाफ की डोमिनेंस है बॉन्कर्स की, वो अभी भी बन रही है। एंड फिर से अगर आप हीरोज ऑफ द मैच कहें, वो ल्यू एंड ड्रैगन ही रहने वाले, क्योंकि ड्रैगन ने वो जो 4K निकाला था सिक्योरिंग दैट राउंड, एंड ल्यू तो हर राउंड के अंदर ही अपनी टीम को एडवांटेज दिलाने में कामयाब हो रहा है। सो जिस तरीके का गेम प्लान यहाँ पे ओरंगुटान रन डाउन करना चाहती थी, डिफेंसिव साइड पे तो बिल्कुल नहीं हो पाया। एंड सरप्राइजिंगली रॉफिल के ऑपरेटर भी कुछ वैल्यू ज्यादा निकाल के दे नहीं पाई, बट इट इज टाइम फॉर देयर अटैक। हेवन के ऊपर अटैकर साइड को डेफिनेटली फायदा मिलता है, देखते हैं क्या उस फायदा ओरंगुटान उठा पाती है। The chosen one अपना पर्सनल बेस्ट इन्होंने D+ के अगेंस्ट हिट किया था 295 का ECS, और आज जिस तरीके से परफॉर्मेंस आ रहा है इनका स्पार्टस, लग तो रहा है ले जाएंगे इस स्लॉट, और वो भी 2-0 फैशन में ले जा सकते हैं इस समय जिस हिसाब से फर्स्ट हाफ गया है 8-4 का इनके फेवर में। और ये 2-0 फैशन बहुत ज्यादा मदद भी करेगा इन्हें, क्योंकि अगेन जो अगर आपका इक्वलाइजर होता है ग्रुप स्टैंडिंग्स के अंदर, देन आपका मैप डिफरेंशियल कहीं ना कहीं प्ले में आता है ना। वो मैप डिफरेंशियल अगर +2 का मिल जाए उससे बेटर और क्या ही हो सकता है, क्योंकि अभी इनसे ऊपर सिर्फ ब्लीड की टीम है जिसका राउंड मैप डिफरेंशियल 0 का है। सो अगर बॉन्कर्स यहाँ पे 2-0 करती है तो वो बहुत ईजिली ऊपर बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। सो अगेन ये चीजें जरूर रहेंगी उनके लिए कि ओरंगुटान को क्लीन स्वीप किया जाए। एंड वापस से जो वॉकआउट में जो इमोट दिखाया गया था फ्रॉम द साइड ऑफ बॉन्कर्स, वो कहीं ना कहीं सच कर रहे हैं उस चीज को। ओहो, ये सारी बातें अभी मत लाइए स्पार्टस आप ऊपर, क्योंकि अभी पिस्टल राउंड है। ये अगर पिस्टल जीता तो ओजी के पास उम्मीद रहेगी। बॉन्कर्स सेटअप उनका बहुत यूजुअल है, बी साइड के ऊपर 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं। केजे पूरी तरीके से सी और गराज का एरिया होल्ड करेगी, एंड ए को ल्यू भरोसे छोड़ा है, और ल्यू ने बहुत अग्रेसिवली ए लॉबी का कंट्रोल ले लिया है। अब बस उनके रास्ते में एक अलार्म बॉट और एक एंटीडोट बचे हैं। रीक्लियर कैसा आता है ओजी का, क्या ड्राई पिक करेंगे? अगर करेंगे तो पनिश हो सकते हैं। देखिए रॉफिल को शोल्डर शॉट दिया है, और ल्यू ने दूसरा शॉट लेके एस्केप करने का डिसीजन ले लिया। कोई फॉलो अप ना कर पाए उसके लिए आ गया ट्रेवर। अब ल्यू अभी भी लेकिन एंगल देके छोड़ नहीं रहे हैं, और एक फास्ट फ्लैग की कोशिश है आरडीडब्ल्यू की तरफ से। इंफॉर्मेशन है जरूर, आई गेस यहाँ पे कहीं ना कहीं अब प्रेडिक्ट करना चाहिए ओरंगुटान को, क्योंकि अभी भी ओके प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं, एंटीडोट क्राउस भी करते हुए आने वाले हैं। आराम से क्राउस स्पैम का फायदा भी मिलेगा। क्लासिक के साथ वो पिक, पहला पिक वापस है ओजी के पास गया जरूर है हर राउंड की तरह, लेकिन बॉन्कर्स का जो परफॉर्मेंस रहा है वो 4v5 पे कन्वर्ट कर जरूर सकता है। बट अजीज फाइनली एक और यहाँ पे पिक निकालते हुए नजर आने वाले हैं। स्पेशल राउंड एज पर द रिजीम फिर से ओरंगुटान की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए थैंक गॉड आरवीके विद द ट्रेड टेस्ट रैक्ट ने निकाला वॉट को मिनिमाइज कर दीजिए अभी गेम को, क्योंकि ये राउंड तो शायद नहीं निकलेगा। 1v4 एक शॉट तो अच्छा मारा, बड़ा एंटी दा का आएगा ट्रेड, और ओजी को मिलेगा 5वां राउंड। उम्मीद पे बाकी उम्मीद अभी भी जारी है, क्योंकि अगेन पिस्टल राउंड के अंदर तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ओरंगुटान काफी ज्यादा डोमिनेट नजर आ रही है। एंड पर्ल में भी पिस्टल राउंड सिक्योर कर रहे थे, हेवन के ऊपर भी सिमिलर कहानी चल रही है उनकी। तो पिस्टल में तो ओजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जरूर, बट अब इतने स्ट्रॉन्गनेस इनको बाय राउंड के अंदर भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपका मैप पे इस तरीके डोमिनेट हो रहा हो। ऑल्दो ये राउंड तो काफी ज्यादा क्लीन होना चाहिए, कीपिंग इन माइंड के अटैकर्स हैं, देन उसके पास बाय करने का भी ऑप्शन है। बट इस बार देखा जाए सो कोई भी मेजर राइफल में इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ फुल शील्ड एंड स्पेक्टर्स नजर आ रहे हैं। अजीज
ट्राई पीक करेंगे मिड विंडो से, 2 फ्रैग्स निकालने में कामयाब एंड उसके बाद तीसरा पिक भी बहुत आराम से मिलता हुआ नजर आएगा उन्हें। यार अजीज सीकर स्वाम कर रहे हैं एक तरीके से अपने लिए। हाँ वही बात है, एग्जैक्टली सीकर स्वाम हो गए और उनको प्लांट भी दिया गया इसी कारण। एंटी वो फाइनल फ्रैग निकालेंगे और एक फ्लॉलेस विक्ट्री। दैट मींस आप नेक्स्ट राउंड के अंदर 2 बुलडॉग कैरी कर रहे हो स्पार्टस। दिस कुड रियली हेल्प देयर चांसेस इन दिस बोनस राउंड। एंड अगर एक बार बोनस आएगा फिर तो वो 8 बराबर स्कोर लाइन देखने को मिल सकती है बॉन्कर्स के लिए। डेफिनेटली अगेन बोनस राउंड भी पिछली बार भी फर्स्ट हाफ में भी ओरंगुटान का काफी ज्यादा क्लोज गया था, इस बार भी उम्मीदें जरूर रहेंगी उनसे। एंड चीज यही है कि आपके पास सबसे मेजर अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन का वो सीकर्स भी ऑनलाइन आ जाएगा, सिर्फ एक अल्ट पॉइंट दूर है, सो उसको भी बहुत आराम से फार्म किया जा सकता है। बट अभी के लिए अगर देखें तो वापस से ग्रास एंड मिड विंडो के अंदर फाइट लेना चाहता है ओरंगुटान के प्लेयर्स। एम इन के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, जो पूरा सेटअप है बॉन्कर्स का वो एक पैसिव ए अप्रोच और सी अप्रोच के लिए नजर आ रहा है, रेडी है शायद उस गैराज टेक के लिए। एंड ये जो साइड रेट आया है मिनिमाइज के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा रहेंगी क्योंकि रॉ फ्यूल ऊपर से उनको चार्ज नहीं करके जा रहे हैं, बट ही इज राइट एज अ बैड राइट नाउ। इतने सारे यूटिल टर्म होने के बावजूद मिनिमाइज एक पिक निकालने में कामयाब रहेंगे। और ये मतलब ये थोड़ा सा ओजी की तरफ से भी प्रॉब्लम था क्योंकि पहला फ्लैश जो था वो स्काई की तरफ से था और उसके बाद आरवी के कमजोर वेपन का शिकार हो गए। या नॉट मच कैन बी डन इन दिस सिचुएशन नाउ। दैट्स इट, दैट्स द राउंड फॉर टीम बॉन्कर्स। 9th राउंड निकाला है अपने लिए इन्होंने बोर्ड के ऊपर। काफी अच्छा राउंड लगा, खासकर मिनिमाइज ने जितना देर तक स्टॉल करके रखा ना बैक साइड डोंग के रीजन से वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा क्योंकि बॉन्कर्स के लिए कहीं ना कहीं अगर बी साइड जल्दी कॉम्प्रोमाइज हो जाती बिना फ्रैग लिए देन ओरंगुटान डेफिनेटली काफ़ी अच्छे पोस्ट प्लांट में जा सकता था। बट वहाँ पे मिनिमाइज बीइंग दैट ब्रीच, एक तो फॉर्ट लाइन आपको इतना ज़्यादा टाइम बाय करके देती है, ऊपर से 2 फ्लैश अलग रहते हैं आपके पास, सो वो ब्रीच के साथ जो वैल्यू है ना वो बिल्कुल यहाँ पे निकलती नजर आ रही है। बट नाउ दोनों टीमों का फुल बाय राउंड है, अजीज के पास उनके सीकर्स अवेलेबल है, लेकिन अगर यहाँ सामने बात की जाए तो बॉन्कर्स के पास कोई मेजर अल्टीमेट अगले 1-2 राउंड तक तो नहीं आने वाला है। सो ओरंगुटान एटलीस्ट रीटेक के सिनेरियोस के अंदर भी खेल सकते हैं सीकर्स के साथ, क्योंकि अभी तक तो साइड एंकर अटैकिंग साइड में जिस तरीके से खेल रहे हैं साइड एंकर ज्यादा नहीं कर रहे हैं बॉन्कर्स के प्लेयर्स। दे आर गोइंग एग्रेसिव एंड उसका फायदा एंटीडोट उठाएंगे। ऑपरेटर के साथ पहला फ्रैग मिल गया है, ओपनिंग डुअल जीता है यहाँ पर एंटी ने और एक बहुत जरूरी प्लेयर को पिक ऑफ किया है ल्यू। यूजुअली इनके लिए अगर ग्रास पूरा ए ग्रास कंट्रोल ले लेते थे ना तो प्रॉब्लम हो जाती थी बाकी डिफेंसिव स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पर वॉट को ट्रेड आउट किया जाएगा, दैट्स ग्रेट। टेस्ट ट्रैक पिक ऑफ हुए पर वो अपनी यूटिलिटी डाल चुके हैं। डिफेंसिव के स्पैम आ रहा है पर ड्रैगन क्या फिर से ये क्या कर रहे हैं ड्रैगन? एक स्पैम ने फ्रैग मिला, दूसरे प्लेयर को भी पिक ऑफ किया, चीथड़े उड़ा दिए इस अटैकिंग हाफ के, इस अटैकिंग राउंड के। ओह नॉट अगेन, फिर से यहाँ पे जो फ्रैग मिला वो एंटीडोट को मिला ऑपरेटर के साथ। वो कुछ वैसे ही सीन्स जो हमें डिफेंसिव साइड पे मिल रहे थे जब पहला पिक टेसरैक्ट निकाल रहे थे। बॉन्कर्स बीइंग इन दैट 4v5 राउंड में सिक्योर करी गई है और फिर से यहाँ पे की प्लेयर, स्टार प्लेयर, मेजर प्लेयर रहेंगे यही ड्रैगन। इनकी फुंकार के आगे ओरंगुटान नहीं टिक पा रही है। 3K तो इतना कॉमन कर दिया इस खिलाड़ी ने कि ओजी को समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली डील कैसे किया जाए इनसे। ये चलिए अच्छा सेट भी जरूर यहाँ पर निकाला है ल्यू ने और ये तो इको फार्म हो रहे हैं हर एक प्लेयर की तरफ से। इको फार्मिंग चल रही है, ये आ गया 11वां राउंड, शुभ नंबर 11 अचीव्ड। बॉन्कर्स ये असेंड हो रहे हैं, मुझे लग रहा है स्पार्टस ये जा रहे हैं प्लेऑफ्स के अंदर। 11-6 कम बैक की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा कम। ये जिस तरीके से आज ड्रैगन की किस्मत ही कहूँगा मैं पिछले राउंड में चली है और उसके बाद हर एक परफेक्ट कॉल आ रही है। ये देखिए सब स्टंड है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता और ऊपर से यूं तो नाइफ अपने मिस करते ही नहीं है। बॉन्कर्स दे आर जस्ट बोइंकिंग ऑन टू ओजी राइट नाउ। यहाँ से तो मुझे नहीं लगता अब कोई भी उम्मीद भी बची है, क्योंकि अभी तक सिर्फ उम्मीद पे ओरंगुटान जिंदा थे, बट वो भी कहीं ना कहीं अब खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि काइंड ऑफ आखिरी राउंड ही हो सकता है इस गेम का, इस हाफ का। एंड वो फ्रैग फिर से ल्यू को मिलेगा, ऑल दो ट्रेड आया जिसकी तरफ से 1 for 1 यहाँ पे वैल्यू जरूर निकाली गई है, बट एंटीडोट के पास अब यहाँ पे एक लॉकडाउन अवेलेबल है जरूर, जिसका इस्तेमाल करें कहीं ना कहीं एटलीस्ट साइड हिट तो कंटेस्ट कर जरूर सकते हैं। बट अभी के लिए ट्रेल ब्लेजर को पहले इस्तेमाल करेंगे, स्पॉट किया जाएगा प्लेयर को क्लोज एंगल में एंड वॉट शॉट ही है उनके पास, बट फाइनली अजीज को फ्रैग मिलेगा। देखिए फिर से थोड़ा सा रिस्की मूव था, कराज वाले प्लेयर को वहाँ पिक करना चाहिए था। बैक साइड अभी तक क्लियर नहीं हुई है
RDW हाँ ले लो बारी लगा लो बॉन्कर वालों स्टार ले बनने की। ये 3 और ये 4 ये अकेला खिलाड़ी था स्पार्टस जिसने अभी तक शायद एक 4K नहीं निकाला था पर्ल के मैप पे। उन्होंने कहा कोई नहीं कसर हम हेवन पे पूरी कर देते हैं। और ओरंगुटान फिर से वही चीजें करता हुआ किश्तों में आ रहे हैं और किश्तों में जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ये दिक्कतें हैं। एग्जैक्टली ये नहीं होना चाहिए आपके साथ। एक फ्रैग काफी अच्छा है लॉन्ग के ऊपर, देन बैक साइड पे आप बीइंग अ स्काई डायरेक्ट एंटर कर रहे हैं, आपके गैराज कंट्रोल नहीं हुआ है, प्लेयर्स एक एक करके आए जा रहे हैं, एंटीडोट भी सिमिलर गलतियां, इतने रूकी मिस्टेक्स ऑन द स्टेज। ये मैप तो यहाँ खत्म हो चुका है। और डॉक्टर ने आप अगर नोटिस करें तो टाइम आउट भी नहीं बुलाया स्पार्टस। आई थिंक फेट एक्सेप्ट कर चुकी है ओजी या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि जब 2 ही राउंड आए थे लगातार बॉन्कर्स के तभी आ जाना चाहिए था वो टाइम आउट। और अब बहुत ज़्यादा देर नहीं हो गई है स्पार्टस। 6 राउंड का एक लंबा कमबैक इस तरीके के मेंटल के साथ मुश्किल ही लग रहा है मेरे को तो। एग्जैक्टली बहुत बॉन्कर्स ने बुलाया है, बॉन्कर्स ने बुलाया है। तो ओजी तो कह रही है ठीक है खत्म कर सकते हो आप इस समय, बट बॉन्कर्स थोड़ा टाइम और बिताना चाहती है अभी स्टेज पे। हाँ मतलब उम्मीद खो दी है ऐसा लग रहा है सारे प्लेयर्स ने। एंड ये सबसे खराब चीज़ होती है कि लॉस के साथ आप इस तरीके से डील कर रहे हो, ना ज़्यादा कोई बात हो रही है आपस में प्लेयर्स की। मुझे लग रहा है बस अब फॉर्मेलिटी के लिए राउंड खेला जाएगा, ख़त्म करके बॉन्कर्स जीत जाएगी इस पूरे सीरीज़ को 2-0। और अब देखें तो D+ की और बॉन्कर्स जो लास्ट 2 गेम रहे हैं ओजी के लिए यही सबसे खतरनाक रहे हैं। और इसी के अंदर सबसे ज़्यादा इनका मेंटल टेस्ट हुआ है और ओजी की तरफ से ज़्यादा कुछ आउटपुट आया नहीं है ओवरऑल। एंड अगर इस राउंड में बायस देखें तो ओके एटलीस्ट फुल बाय है जरूर। एंड 3 मेजर अल्टीमेट्स भी हम कह सकते हैं। रॉफ्यूल के पास ब्लेज स्टॉर्म है तो स्पेक्टर के साथ भी बिल्कुल खेलते नजर आने वाले हैं। बट ब्लेज स्टॉर्म का क्या फायदा मिलने वाला है, क्योंकि कुछ राउंड्स अगर छोड़ दें तो रॉफ्यूल भी कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं कर पाए। लेकिन अगर बॉन्कर्स की बात की जाए एक एग्रेसिव प्रोएक्टिव डिफेंस देखने को मिलेगा। ए लॉबी का पूरा कंट्रोल अपने एस्टैब्लिश कर चुके हैं, ल्यू शट डाउन करेंगे रॉफ्यूल को। एक और फ्रैग यहाँ पे उनके नाम जाता है ना, अब तो सिर्फ कह सकते हैं कि सही में सिर्फ फॉर्मेलिटीज रह चुकी है। फिर से ल्यू पोजीशन है यहाँ पर, देखिए आप DW RDW टैग जरूर हुआ है बट मुझे लगता है ये डुअल लेंगे आंटी के साथ तो जीत भी सकते हैं इस समय जिस तरीके का इनका किस्मत चल रहा है। लॉकडाउन डाला है पर दैट इज ऑल बिकॉज दे वांटेड गराज कंट्रोल। और अब की तो चलिए यूटिलिटी अच्छी यूज करी गई है, रिवील हो जरूर रहे ड्रैगन पर इसको फोल्ड बैक किया है RDW का सपोर्ट। और ये देखिए एंटी में फ्लैग ही नहीं स्लो भी कर दिया था इसको RDW ने पिक ऑफ किया टेसराक्ट को एंड दैट्स द फाइनल शॉट दैट RDW shot to RVK। That is it, that was the run that OG had। बट क्या खेली है बॉन्कर्स, क्या खेली है। जिस तरीके से इन्होंने कमबैक किया है स्कार्स के उस डिफीट से, मेंटल ब्लॉकेड होता है वो स्पार्टस। 5-0 से आप अप हो और उसके बाद सीरीज आ रहा हो आपको 2-0, वहां से वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। D+ किया को हराया और अब ओजी को हरा के प्लेऑफ का स्लॉट ऑलमोस्ट गारंटी सही कर लिया है। Exactly. And अगर इनके ग्रुप की बात करें ना तो जिस ग्रुप में अभी यहाँ पे बॉन्कर नजर आ रही है सबसे ज्यादा क्लोज कंपटीशन बॉन्कर्स एंड ब्लीड के बीच में ही है कि कौन आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। एंड कल के दिन जो बॉन्कर्स का मुकाबला है वो ब्लीड के खिलाफ ही होने वाला है। सो जो जीतेगा उस मुकाबले के अंदर वो कंटेस्ट करेगा टुवर्ड्स द प्ले ऑफ स्पॉट। बिल्कुल ये चीज रहने वाले। तो बॉन्कर्स को जो आज मस्ट विन डे था उनका, उसमें तो 2-0 के साथ बिल्कुल धूल चटा दी ओरंगुटान को। पिछली बार स्टेज पे एक बार रेकनिंग ने भी किया था कि आज 3-0 हराएंगे ग्रैंड फाइनल्स के अंदर। वहाँ एक क्लोज तो गया था गेम पर जीत के ओजी ही आई थी। पर बॉन्कर्स वालों ने कहा जी नहीं, हम जो बोलते हैं हम वही करते हैं। 4-0 बोला था इस टीम को एग्जिट करवाएंगे और 4-0 ही एग्जिट भी करवाया है। क्या ही टीम ये निकल कर, क्योंकि बॉन्कर्स को हमने ज्यादा कभी खेलते हुए भी नहीं देखा है, कोई प्लेयर्स की हिस्ट्री भी कुछ ज्यादा यहाँ पे वेल नोन नहीं थी। बट द वे दिस टीम प्लेड, जो कोऑर्डिनेशन है, जो यहाँ पे यूटिलिटी की टाइमिंग्स है इनकी, एंड देन उसके बाद तो ड्रैगन एंड ल्यू के तो क्या ही कहने। कुछ ऐसे राउंड जहाँ पे लगता है कि हाँ ओरंगुटान जीत जाएगा, अब तो 3v5 है, 5v2 है, वहाँ ड्रैगन 4K निकाल लेते हैं। और अगर ड्रैगन सप्रेस हो जाते हैं देन मिनिमाइज 4K निकाल के दे देते हैं। और अगर मिनिमाइज नहीं करे तो ड्यू ने निकाल दिए। इंडिविजुअल ब्रिलियंस लेवल जो है ना टीम का वो बहुत ज्यादा सुप्रीम है।
Oh, sure. I mean, जिस तरीके से खेला है इस टीम ने, that has just been insane. और जो परफॉर्मेंस आया है बॉन्कर्स का, भाई साहब स्टार प्लेयर भरे हुए हैं इसमें. एक प्लेयर का मैंने बस इनपुट नहीं देखा था, वो थे RDW. लास्ट 2 राउंड में उनका भी देख लिया. ड्रैगन ने तो बिल्कुल सुपड़ा साफ करके रखा हुआ था ओजी वालों का, दोनों ही मैप के अंदर, चाहे वो पर्ल की बी साइड रही हो, चाहे वो हेवन की सी साइड रही हो. बी आ रहे थे तो RDW से मिल रहे थे, सी आ रहे थे तो ड्रैगन और RDW के कॉम्बिनेशन से मिल रहे थे. भैया पार पा ही नहीं पाई ओजी किसी भी राउंड के अंदर इस कॉम्बिनेशन के. Exactly, and like even Orangutan की अगर खुद की भी बात करें तो वो जिस तरीके से यहाँ पे स्विंग आउट करे थे, वो एक एक करके आना, जैसा ओशन भाई भी कहते हैं, किश्तों में आओगे तो किश्तों में जाओगे, वही चीज़ें Orangutan के साथ होती हुई नजर आई. क्योंकि आप इस लेवल पे तो इंडिविजुअल बैटल्स नहीं दे सकते हैं, वो भी खासकर ऐसे प्लेयर्स को जिसको आप जितनी बार भी इंडिविजुअली फोर्स करोगे वो हर बार गंडुअल जीतते हुए नजर आएंगे. गंडुअल जीता है और सीरीज भी ओवरऑल जीती है 2-0. मतलब हेवन का गेम हम लोग इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ देख रहे थे, शुरुआत भी बहुत अच्छी मिली थी, बट समवेयर इन द मिड स्टेजेस, समवेयर इन द मिड राउंड्स, ओजी लॉस्ट देयर वे. मतलब ऐसा ही लगा वो पर्ल का रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिला स्पार्टर्स, जहाँ पर कमबैक शुरू हुआ था, राउंड्स आपके लिए निकल रहे थे, लीड आपने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी थी, एक टाइम आउट आया, वहाँ से गलतियों का पहाड़ बिल्कुल ऐसे गया. और यहाँ पर भी युवा पिस्टल जीता, उसके बाद राउंड जीता, बोनस भी जीता, और उसके बाद गलतियों का पहाड़ फिर से एक बार बहुत ज़्यादा सर टूट के गिरा ओजी के, और हाथ से सीरीज गई है 2-0. ओवरऑल असेंशन के इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर 4-0 रहने वाली मुझे लगता है अकेली टीम रहेगी ओजी. एग्जैक्टली, बिना एक भी मैप जीते हुए ओरांगुटान का तो जर्नी अब यहाँ पे खत्म हो चुका है. बट नाउ अब चलते हैं हमारे इंग्लिश डेस्क की तरफ, देखते हैं उनका क्या कहना है इस मैच के बारे में. For chance with the remaining games that they don't make it the playoffs, but it relies heavily on many things, including them losing. So if they want to seal their fate in the group all the way towards that top side, they need to get a dub tomorrow, and then it'll just be interesting. But let's just touch back on the stats. Lou, 21-13. It was a spectacular affair from him, from Dragon. It was strength by committee. And of course, I had so much fun watching them, not because Bonkers was winning, but you saw how they were playing. They were playing like it was a pug. They were disrespecting the hell out of Orangutan and just having fun with it. How many times do we see it, Mac? We get to see the Aussie team go overseas. It's like, all right, let's get up at 3 in the morning and support them. And then all of a sudden, they don't want to push anything. It's the complete opposite in this competition that we've seen. You know, and look at that. What a stat, 12 opening kills. Jesus. That just goes to show, even though, look, OGS was able to get 12 of those opening frags, Bonkers still had an answer to get back into the rounds, what's that, 6 times? I mean, those 2 versus 5s, those 2 versus 4s, when you've got 4Ks and 3Ks galore, these are the rounds that Bonkers should not have a right in getting back in. These are the rounds that, with an advantage as a team, you should be closing. But for Orangutan here, I don't know what the missing ingredient was for them, but Bonkers, they had one of the most sensational fraggers in this one again. And who other? That is Lou, the MVP too, where, look, he's almost hit 50 kills over the course of 2 maps as well. And that is absolute insanity. So much action at the start of the rounds with 9 entry kills over the 2 maps and over 300 ACS overall. That is that is a top-tier performance and should be able to jump him up the table as well. Well, he's in the head-to-head, right? You know, it was that focus. He's been such an instrumental part of Bonkers' success into this. But this time round, this series, we got to see everyone do their part. You know, Minimize, he was the quiet one, but that's what he needs to be. He needs to be the voice, the vocal for his team in the in-game leader. And he's throwing those flashes, getting it supported anyway. But every single player, and that's why we saw the success in their way. And it's all about celebrating those wins as well. We were talking to the Bonkers boys the other day. They were super loud in their last game that they took the dub in, and they did the exact same thing again today. They were all screaming at the computers. They were all having such a good time. And when there is no pressure on their shoulders, you have now seen exactly what Bonkers can do. But they still have one big game against Bleed coming up, and let's hear from the players what their thoughts were on the game. Out cap home, and hello again, everybody. Today has been really interesting. But anyways, we are now with our winner today, and of course, could be anyone else but Lou from Bonkers. So what so what he Oh, so I don't have to speak in English.
I'm just joking นะครับก็มาอยู่กับลูนะครับจาก Bonkers ของเราเมื่อกี้นี้คือเล่นได้ดีมากๆเนาะเพราะฉะนั้นนะครับคำถามเนี่ยไม่มีอะไรมากเพราะว่าการที่เขาชนะในเกมเมื่อกี้นะครับทำให้ทางรังตังเนี่ยนะฮะก็แทบจะหมดสิทธิ์แล้วนะครับผมในการไปต่อแต่เส้นทางของเขายังไม่จบครับเพราะฉะนั้นอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้สติสตังค์ของเขาเนี่ยนะฮะจะไปอยู่ที่ไหนนะครับเนื่องจากรู้ว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหใกล้กันมากดูเดือดมากนะครับ so first question knowing that this group has been real like the score has been really close to each other and it's been really competitive like how do you and your team plan on maintaining that pressure so that you guys are ready for the next match to be honest like we came here with nothing we've got nothing to lose so we don't really feel any pressure we know we're probably better than everyone here to be honest yeah we don't really feel any pressure ดีมากนะครับก็ง่ายๆนะครับบอกว่ามันไม่ได้รับแรงกดดันอะไรมากนะครับเพราะว่าเรามาที่นี่โดยที่เราไม่มีอะไรต้องเสียเรามาเล่นอย่างเต็มที่ก็เพียงพอแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับคือเขานะครับเชื่อว่าทีมของเราเนี่ยก็สู้ทุกคนได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้มีแรงกดดันอะไรมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นดีเนาะเป็น mindset ที่ดีมากๆเลยนะครับ and of course keeping the hope of Oceania alive is there anything that you would want to say to your teammates or your fans back at home that's cheering for you guys I love my team and I love the fans and I love everyone yeah come on team นะครับก็มีอะไรฝากถึงแฟนๆหรือเปล่านะครับก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับรักทีมรักแฟนๆทุกคนขอบคุณที่เชียร์นะครับแล้วเดี๋ยวไปต่อกันนะครับผมแต่สำหรับคำถามสุดท้ายครับนะครับเหมือนเดิมครับคิดว่าใครในกลุ่มนั้นน่ากลัวที่สุดนะครับ so final question for the day there's a couple of teams that's up ahead so which team for you in your opinion is gonna be your biggest obstacle Bleed but I don't know okay. So we verse Bleed right next so that's the only obstacle left and hopefully we win I mean makes perfect sense right สำหรับทีมที่กลัวที่สุดนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจาก Bleed นะครับเพราะว่านะก็เจอมาหมดแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องกลัวใครอีกนะครับแต่อย่างที่เขาบอกไปไม่มีอะไรจะต้องเสียอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับบอกเลยว่าต้องติดตามชมทีมนี้ครับไม่ธรรมดาจริงๆครับ and of course guys that will be it today thank you so much Liu for your time and congratulations for the win hope to see you here again soon แต่สำหรับตอนนี้ครับเราขอไปพักกันสักครู่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมา and of course guys we are still not done we still have the final match left today so we'll take a moment for the break and we'll come back right after for game number 3
Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day.
Welcome back to VCT Ascension Pacific, where things are getting spicy, but it has yet again been a fast day. Have these guys brought us a bunch of 2-0s yet again? They have a curse. It's just the fast day at the office. You're not going to be here for too much longer. At least my curse of predicting against Bonkers, or rather for them this time, didn't net them an L, so I go with that. We just can't keep getting away with this at this point in time. I've literally been begging for a 3-map series. Everyone has been getting their predictions correct today, so I'm happy. Well, maybe not me. I got that. I went for one team earlier, which was, you know, it was a bit of a loves an underdog story, doesn't he? It was the 10% chance, but I was invested. Now, speaking of underdogs, Zerxia, they started at the bottom and now they are here. It is going to be Zerxia and Boom for this third series of the day, and Boom have just not been performing up to expectations. But of course, Zerxia, we need to talk about where they started. In stage 1 this year of their VCT, they came in 6th. They didn't even make playoffs. And then they managed to evolve, to grow, and then to make it all the way through Split 2 and qualify here. People at home, people here in Thailand are saying, damn, they're not even the best team. They're not going to be our best representative. But they have managed to prove everyone wrong so far, and today is all or nothing because of the implications. If Boom win, they go through, and Zerxia don't. But if Zerxia win, they're going to be at the top of the food chain. And as you mentioned, right, Zerxia had to take down absolute powerhouses during the course of their split to be able to get here, right? So the fact that they've done that, the fact that they've come here, they haven't looked like incredible, like top of the pack or anything like that, but at least they've looked solid, and I think they're going to really be a pest for Boom today. Yeah, it's the case of, you know, made in Thailand in full sense, looking like that they were the better formed teams throughout the whole course of this year, in fact. But then Zerxia, they do what they need to do, they stick it to the man, they get the job done, they're here, and now they're not, you know, in a situation like Orangutan that we saw before where they are out. They have the chance to get to the finals. Yeah, they've defied all expectations so far, and they're looking to make it in front of that home crowd in the arena next week, or this weekend actually. I forgot what day it was. But look, Boom, this team, I had a chat with Blaze King yesterday. You heard the interview earlier, and they are a little bit down on their performances, understandably so. But we need to be looking at Famous. He needs to be popping off. We need Berserks as well to show up to the party. But the thing about that interview as well, Mac, is he said, bugger the money, who cares? We want the glory, we want the wins, and that's a very important thing to take into this game, right? These guys are going to be fighting gloves off. And I think one of the stark differences in this roster as well is just the difference in age as well. When we look at the previous series, you mentioned the Dragon as a team. Well, we've got Severine on this roster, the oldest guy here, still putting in the hard yakka in this game. And it's not like this game they played yesterday wasn't close. They took it all the way to the end. And Naos even had to pull a huge comeback and really keep us believing for the Philippines. But there is still a chance for both these teams to make it. Of course, Naos, they've secured themselves a playoff spot now, and Boom is looking to join them, to represent Indonesia, to represent them, and take down Thailand. They will be the villains today. You know, here at home in Thailand in the arena, everyone is going to be against Boom. Absolutely, and they've always been the villains, Boom, right? They love to get a little bit of razz up for these people on the way through. They are the antagonists, right? They love to get fired up. They love to get in your face, and I definitely don't think that's going to change at all here today. No, but remember, there's always a nicety in a villain story as well, because when they do come out of swinging, there's always going to be those people that want to try and play with the villain. They can, you know, align themselves with them as well, and I think for Boom here, they themselves have found themselves in a bit of a rocky situation, because we look at this, the teams that Boom have beat so far in Fancy is the one that Zerxia couldn't beat, and you look at the other two teams and it's flipped the other way. It feels like it's been a while since we've seen Zerxia get to play, right? I think they've only had one day off, but it's just been like staggered. There's the day off here, the day off there, but they've had a consistent pattern throughout the course of the 6 days that we're up to now. But stylistically, Boom, of course, they love a bit of aggression, especially on that defense. They love to keep it fast and explosive, living up to their namesake. But we got to talk about Zerxia as well, and these 5 individuals want to do it for the homeland, want to do it for Thailand. They want to make it to the arena. Alert has been popping off as of late. LBY as well, calling up a storm. The only name here that I feel like that has been underperforming at the moment is Rolex, but he had a huge hand in getting him here. That's what I was going to say. Like, he was literally
one of the sole reasons, and to be able to do it from like your Killjoy and things like that is an incredible statistic to put behind you. So the fact that he kind of hasn't showed up is a little bit worrying, but you know, maybe he's just a late bloomer, right? Maybe he's only going to show up once we get to sort of that playoff stage, but they've got to get there first, Komodo. Yeah, absolutely. And I mean, it's always going to be a case of in this game, it doesn't matter about your previous matches that you have played. Yes, they've led you up into this situation, but the here and now is going to be the fact that these 5 players need to band together through all of the trials that they've had to overcome, not just in this tournament already, but the whole, you know, split. Now is the time, Zerxia, the homegrown heroes, to prove to everyone that they can get to the playoffs. Yeah, they will truly be the ones taking their place. And they did that as much up against Naos earlier on in the group. Naos, of course, maybe not quite taking Zerxia as seriously as they should have, but Zerxia played a damn good game, especially here at Bind 2. One enemy remaining. And of course, they just have firepower for days. You've got Exi, who has been just a solid part, very consistent across the course. Hasn't really carried, so to speak, but you're looking at your Seraphop, you're looking at the boys to make it happen, and so far, they have. 2-1 and potential to take out the top position in the groups. Not even have to play on the Friday, jump straight into the semi. Yeah, that's a crazy sort of thing here. And that's, I guess, what has led us into this really, really weird space over the last couple of days is who the hell is going to get where at the results of these, right? So Zerxia, not only do they need to win, they need to win it strong, they need to win it well, because if they're going to prove to us that they've got what it takes to light up the arena, right, which is going to be absolutely incredible, Mac, they have to do it here and now. Yeah, absolutely. And I mean, we're looking at Alpha versus Omega, and we're thinking one of them is going to be the group of death, but the other one just comes out, guns are blazing, and change. And, you know, we look to this. At the start of today, in this group, there was a world which we could have had a 5-way tiebreaker. That shows how close the competition is here. But it didn't happen. It didn't happen. We didn't get team It almost happened. It almost happened, which was why it was so crucial for it to not happen, or we could have been lost. Now, the thing I love about this, right, is typically you're not seeing kind of that reliance on your controller a lot of the time. You know, sure, they're going to be throwing down. They're going to be giving you that cover to get into where you need to. But these guys have been absolutely pivotal in their last couple of games to get here in those wins, to find themselves into this position where it's ultimate qualifying moment, right? So Blaze King, he's always liked to get fired up. He's really sort of been looking strong on that Viper, picking up the Omen here and there. And Exi, who's sort of more, you know, flexing between the Astra and the Omen, also doing big things as well. But overall, 2 standout players that I think I really need to see further impact from them continue consistently. Is that a 43.1% headshot percentage I'm seeing? That's ridiculous. That is insane here at the tournament. He's coming in second with 39%. The only player with a higher headshot percentage than him is Nizzy. This man's sharp, so keep your eye on him today. Yeah, you definitely have to. And I mean, he can be one of the underdogs potentially for this roster to get Zerxia over the line. You look towards Blaze King. He was the guy that tried to push through things, everything in their previous series against Naos. You know, all of the maps going to double digits in both teams. But him on the fragging element, it's not just him providing the space for his team to get in. He's getting in and picking up after them. I think the thing for me, for Boom in particular, is the pressure is at an all-time high. They haven't performed up to their standard. You heard it from Blaze King, and you've heard it as well. We've chatted to the players out back. They know they have more in the tank. We've seen one big win, and for me, all I'm thinking is we saw that off the back of a loss, a very crucial loss. When they first came out, they started strong on split, then got reverse swept. They didn't like that. They then came out, got a huge 2-0 win where Famous tore everyone a new one. And now insane. I'm expecting a very similar thing. They will have lost yesterday. They will think, nah, there is no chance that we're not making it to the arena. We've been working for this for so long. It needs to happen now. And they've got so much to prove, I think, as well, because the roster, obviously, the core 3 has been together for quite a while now, and they've got that fan base behind them. They have performed. You know, think back to LCQ last year where they qualified through the champs, and they definitely stirred the pot there as well, right? But then, obviously, it was the pillaging of the scene, pulling apart some of these players, taking them from team to team, and, you know, losing, obviously, like players like Flipsjitter did kind of make it a little bit rough for them for a short time, but now they are starting to recover, they're starting to move forward, and they're getting stronger as they move along. What was that name you said? It's Flipsjitter. Flipsjitter. No, it's not Cider. Yes. Oh, just checking. Yes. Anyway, correct. Now, of course, let's start moving this conversation over more towards our predictions and where we think this game's going to go. Dion, I'm going to start with you first. What do you think is going to happen?
I even forgot my predictions. That's how close fine. this one is right now. I think I said boom. Make a new one. I think I said boom, and I kind of want to still stick to them because there was enough that I saw in that Naos game from them that is just going to excite them to get this game done even more. Similar scenario for Zerxia, I guess, in the fact that, you know, they had players that they want to go back and see on that international stage as well. But I think when it comes to boom, they have just gone through their own trials, through their own local region as well, and they have had a little bit of an underperformance here at VCT Ascension Pacific. So I think that for them is going to be more of a drive. Now, what's selling you? What's risen you up right now? Who are you going for? Oh, look, I'm just following the story, right? Like, I feel like we really do need that heroes versus villains arc to continue in the heroes of Zerxia, I think, right? Okay. It would make sense to see them in the arena, in the playoffs. I think, obviously, that's what everyone's really super excited for. I definitely think Boom has more than what it takes to take them down. Again, they haven't looked the most fantastic Zerxia the entire time of this competition, so I really do hope it's just a close one, but I'm going to tip the cap to Zerxia. I also forgot what my prediction is, so let's bring him up and have a look and see which of the two storylines I was more sold on, because I've got storylines. I did I'm say going Zerxia. through for Zerxia, and look, Boom almost had me. I'm the villain. I'm super sold on the storyline of the statistics, right? Look, if they've bounced back super hard before, I almost thought they're going to do it again. But what would this event be without a homegrown team making it to the arena? I want Zerxia to go all the way, baby. Yeah, you can already see the crowd filling in. I think that's the main sort of narrative around this, right? It's been electric every single time Zerxia has been playing, but who can contest with the Zerxia crowd? It's Boom, baby. Yeah, that's absolutely correct. And I think one of the things as well is we've already seen an absence of a team at a local hero event, right? When we look towards Masters, we were missing the Japanese team. Yeah. So for here, is it, you know, to make it more exciting in the crowd to have a local home team, or do we, you know, play the villain arc and then the crowd is going to be split between the rest of the teams here? Yeah, and who will they then go for? Because That's it, I don't right? know if they're going to go for Boom. They're going to say, hey, they're the ones that knocked out our team. What do we do here? So, yeah, Boom, if they do make it to the arena, that's another talking point. They're going to have a lot of people not really liking this team. Yeah, definitely. And I think they really lean into that, as we sort of mentioned before, right? They don't care. They don't need any of this. They don't need to be gassed up. They'll do it themselves. And I think they've kind of earned that over the course of their years playing anyway inside the region here of Valorant. So irrespective, this is going to be, you know, one of the most depth-defying matches of the competition, I think. Like, it's just insane that we've ended up here. You know, there was the possibility, but we kind of looked onto each group and was like, yeah, this should happen. Yeah, this should happen. But nothing correct has happened. And it's been wild the entire time. The seas have been choppy. Now, I want to touch on as well the players that need to perform today. Alert has been a rock solid for Zerxia so far, and if he doesn't perform, I'm getting a little bit worried. Yes, there has been moments where other players have picked up the pieces, but then I'm looking at Boom, and in terms of the stats, the most consistent player has been Berserks, but when Boom lost yesterday, he had the worst game so far here at Ascension Pacific, so you're really looking at him to pick it up and win this for Indonesia today. Yeah, I think we need to see Berserks come back to what we've seen throughout the course of this tournament. But for me as well, it's going to have to be Famous. If he's set up to succeed here in this series, I think that's going to be one of the pivotal factors for them. The only thing for me, though, is when he played well yesterday, he played really well yesterday. It still wasn't enough. Now it's found an answer. No, absolutely. They were able to finally sort of get their way back. And that's what I loved about Naos throughout this entire competition as well. They have, you know, stood up to adversity quite well, right? So they don't feel the pressure. So that's something that Zerxia need to prove to themselves, that they're not going to feel that same level of pressure that Boom can bring off. Mate, it's so hard to feel any pressure when we're on the desk when we got these steel case chairs, man. They're just molding to my spine. I'm just chilling. We got the headsets. Pure comfort, baby. Ergonomics, baby. Oh, sorry, we're still on the desk. Now let's start talking. It's been a long week, Matt. It's been a long week for me, mate. I've worked hours, but I've loved every second of Ascension Pacific. And we still got another day to go. Oh, the implications are crazy. But look, let's start talking about the maps. Where do we see this one going? It's so hard for me on where it is because we've seen a lot actually play between the course of these two. You know, I would kind of like to see an Ascent. We see a lot of teams still in the SEA region be able to pick that up. We saw that reason in the previous series why Bonkers got rid of it, right? They wanted to try and float up Pearl successfully, I might add. Naos, you know, a 13-11 scoreline against Boom when it did come to Ascent, so there's a lot that could be picked apart from that on Zerxia's side of things.
So I think I would like to see an Ascent, but I would also like to just see it be something completely, unexpected. I think that would be spicy. I would love something unexpected. We've had a bit of that today, people pulling out the pocket picks for the Vetos, but it is time for the third and final series of the day. Let's not waste any more time. It's time for Ascension Pacific, baby. All right, we'll now begin the map veto process for today's third match. Team A is Zerxia and Boom is Team B. So we'll begin with Zerxia banning your first map. Ban Pearl. Zerxia bans Pearl. Boom, will you ban a map? We ban Fracture. Boom bans Fracture. Zerxia, you may not pick the first map. Lotus. Zerxia picks Lotus. Boom, first side. Defense. Boom plays defense. Boom, you may not pick the second map. Split. Boom will play split. Side for Zerxia. Attack. Zerxia will play attack. Zerxia, you may now ban another map. You have Ascent, Haven, and Bind. Ban Haven. Zerxia bans Haven. Boom, will you ban a map? We ban Bind. Boom bans Bind. Final decider map will be Ascent. Side for Zerxia. Attack. Zerxia will play attack. I'll have a quick recap. Zerxia bans Pearl. Boom bans Fracture. Zerxia picks Lotus. Boom plays defense. Boom picks split. Zerxia plays attack. Zerxia bans Haven. Boom bans Bind. Final map will be Zerxia playing attack on Ascent. We good? Correct. All right then. Good luck and have fun. Good luck. Fun. देवी और सज्जनों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का VCT Ascension Pacific के अंदर। मेरा नाम है फ्रिट्स और इस तीसरे और आखिरी BO3 के लिए मेरे साथ आज जुड़ने वाली है वापस से एडन जर्शिया वर्सेस बूम स्पोर्ट। मैच मजेदार रहने वाला है। क्वालिफिकेशन लगी हुई है लाइन पे। क्या लगता है किसका परिणाम भारी है इस सीरीज के अंदर? वेल दोनों ही टीम्स बहुत ही ज्यादा टक्कर की टीम्स रहने वाली है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस पर्टिकुलर मैचअप बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं जर्शिया एंड बूम स्पोर्ट्स दोनों ही ऐसी टीम्स हैं जो कि अपने अपने रीजन में पहले तो अपर फाइनल्स में हारी, लोअर फाइनल्स तक पहुंची एंड देन लोअर फाइनल्स से जीत के ग्रैंड फाइनल्स में क्वालिफाई करने के बाद दोबारा से अपने आप को जीत हासिल करवाकर यहाँ तक पहुंची है। दोनों ही टीम्स बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला यहाँ पर एक दूसरे के सामने पोस्ट करने वाली है। दोनों को W गेमिंग कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो एक काफी अग्रेसिव मैच भी हमें देखने को मिलने वाला है। प्लस जर्शिया बीइंग द होम ग्राउंड टीम, थाईलैंड की टीम है, थाईलैंड में ही मैचेस अभी हो रहे हैं, हैज अ लॉट टू स्टैंड अप फॉर। तो ऑब्वियसली बूम को यहाँ पर थोड़ा सा ऑडियंस सपोर्ट कम मिलने वाला है, बट वी हैव सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर। वी हैव सीन फनाटिक वर्सेस लाउड ड्यूरिंग लॉक-इन, जिसमें ये सेम चीज होती हुई दिखाई दी थी। And we literally saw Fnatic take advantage of not having audience support. क्या आज वही होने वाला है या नहीं is something that I'm looking forward to. नॉकआउट्स हो गए हैं, रशिया बूम दोनों आ चुकी है एंड हमने मैप वीटो भी देख लिया है। पहला मैप रहेगा लोटस का। अब ये लोटस काफी इंटरेस्टिंग सा मैप बन के आया है। काफी डिफरेंट सेज देख लिया हमने लोटस के ऊपर देखने की। मुझे तो आदत नहीं है एटलीस्ट, तो इतना वैल्यू निकाल पाई नहीं वो सेज पर। हाँ वियर्डनेस की बात कर रहे तो जरूर वो बहुत वियर्ड लगा था मुझे। तुमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है स्प्लिट का मैप। अब ये स्प्लिट पे जर्शिया किस तरीके से खेलेगी दैट इज अगेन अनदर थिंग दैट विल हैव टू सी। पर फाइनल मैप ऑफ द डे की अगर बात करी जाए, अगर ये 3 मैप सीरीज बनती है तो असेंट के मुकाबले पे बात आ जाएगी यहाँ ना। Exactly, and I feel like ये 3 मैप सीरीज डेफिनेटली बनने वाली है बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों टीम्स का जिस तरह का कैलिबर है काफी ज्यादा मैचअप करती है, काफी ज्यादा इक्वल स्टैंडिंग पे है एंड दोनों के लिए क्वालिफिकेशन का सवाल है। यहाँ पर कंफर्ट जोन किसी के लिए बिल्डअप नहीं हुआ है अभी तक, तो दोनों ही टीम्स की तरफ से एक बहुत कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हम तीसरे मैप तक जाने वाले हैं। रही बात इस फर्स्ट मैप की विच इज गोना बी ऑन लोटस, दोनों ही टीम्स एक बहुत ही ज्यादा डिफॉल्ट सा कॉम्पोजिशन यहाँ पर यूज करती हुई नजर आती है। मिरर कॉम्पोजिशन इनका रहता है। दे ऑलवेज हैव ब्रीच एंड स्काई एज देयर इनिशिएटर्स। इनके पास सेंटिनल में हमेशा किल जॉय मौजूद होती है, डुअलिस्ट में जेट को प्रेफर करते हैं एंड साथ ही साथ इनके पास कंट्रोलर में ओमन देखने को मिलता है। दोनों ही टीम्स सिमिलर तरह का यहाँ पर कॉम्पोजिशन रन करती हुई नजर आती है एंड उसके चलते इनकी अटैक स्ट्रैटेजीज भी अभी तक जितने मैचेस हुए उनमें काफी सिमिलर रही है। हाउएवर डिफेंस पे चीजें बदलती है, सो विल फाइंड आउट कि डिफेंस किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है बिकॉज द अटैकिंग साइड इज प्रिटी सिमिलर फॉर बोथ ऑफ देम। हाउएवर ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है यहाँ पर मुझे लगता है कि जर्शिया के पास एक अपर हैंड रहने वाला है एंड आई थिंक जर्शिया को भी वही लगता है। दैट्स व्हाई दे हैव गॉन अहेड विद द पिक, क्योंकि बूम स्पोर्ट्स ने ये मैच अभी तक
इस पर्टिकुलर स्टेज में खेला नहीं है. They haven't played Lotus coming into VCT Ascension Pacific. चलिए देखते हैं आज प्रदर्शन किस तरीके का रहता है. दर्शा ने तो वो बुली लाइनअप उठाया है, बट एक चीज देख के मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ यहाँ पर. आहाना रेज नहीं है यहाँ पर कॉम्प में दोनों ही. तो ये थोड़ा सा अचंभित करने वाली बात मेरे को लग जरूर रही है. तो देखते हैं बूम और जर्शिया किस तरीके से मैनेज करते हैं इस चीज को बिना रेज के खेलना. वो रबल कंट्रोल में मैं कहूँगा हल्का सा पलड़ा जो है वो डिफेंडर टीम का ज्यादा भारी रहेगा, क्योंकि मिरर कॉम्प है. वो फ्लैशेज वो स्टन्स तो दोनों तरफ से आने वाले हैं. अब ये रबल की फाइट ए के बाहर, दैट इज समथिंग दैट विल डिफाइन द होल गेम फॉर मी. एब्सोल्युटली ए के बाहर जो रबल का कंट्रोल होता है उसके लिए कई बार रेज एज वेल एज कई बार हम वाइपर का भी यूज देखते हैं. स्पेसिफिकली फ्रॉम द डिफेंसिव साइड वो जनरली कोशिश करते हैं कि रबल का जो एंट्री पॉइंट है उसके बाहर ही एक बार के लिए अपनी मॉलीज डाली जाए एंड थोड़ा सा पुशबैक किया जाए अटैकिंग टीम को. वो चीज़ करने की एबिलिटी दोनों ही टीम्स के पास नहीं रहने वाली है. किलजॉय है जरूर, बट किलजॉय को इतना फ्रंटल कोई खिलाता नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस. इट्स द सेंटिनल, यू वांट हर टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर टाइम एंड उनकी सारी एबिलिटीज उनके जिंदा रहने पर डिपेंड करती है. सो यू डेफिनेटली कैन नॉट रूल दैट आउट. सो येस, दैट इज समथिंग जो कि इन दोनों के ही अटैकिंग स्ट्रैटेजीज को एक्चुअली अफेक्ट नहीं करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दोनों सिमिलर अटैकिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर यूज करते हुए दिखाई देते हैं. बट लेट्स फाइंड आउट कि इस पर्टिकुलर मैच में क्या होने वाला है, बिकॉज अगेन रेस का ना होना थोड़ा दुखद तो है, बट वेल दोनों ही टीम्स प्रेफर करती है इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के साथ जाना. इट्स अ मिरर कॉम्पोजिशन एंड वी माइट सी द डिफरेंस इन लग रहा है वो जो जेट उठाई गई है दैट इज टू यूज दैट ऑपरेटर इन डिफेंस. और डिफेंस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी होती है इस मैप के ऊपर. बहुत अटैकर्स ओरिएंटेड मैप है, तो दोनों ही टीम चाहेंगे कि अपने आप को एक एज दे उस डिफेंसिव हाफ के अंदर, ताकि क्लोज करने में आसानी रहे. अब वैसे तो मैप पे के जर्शिया का है, तो अगर गेम प्लान उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है तो आई वुडंट बी सरप्राइज. पर तैयार तो ये भी रहेगी टीम. एग्जैक्टली, बट द फैक्ट इज कि क्योंकि इस स्टेज पे बूम ने अभी तक लोटस खेला नहीं है, दे माइट बी कमिंग इन विद सम सरप्राइज फैक्टर्स, क्योंकि ये तो उन्हें भी स्टार्टिंग से पता था कि उनका जर्शिया के साथ एंड में मैच होने वाला है. ये भी पता था कि सिमिलर कॉम्प दोनों यूज करते हैं. देन कहीं ना कहीं आई फील लाइक अपने डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में कोई सरप्राइज बूम की तरफ से आता हुआ दिखाई जरूर दे सकता है. एंड आई थिंक दैट्स द रीजन वो डिफेंस फर्स्ट जाते हुए नजर आ रहे हैं. स्टार्टिंग से प्रेशर क्रिएट करने का यहाँ पर उद्देश्य रहने वाला है बूम स्पोर्ट्स का. स्टार्टिंग से प्रेशर, लेट्स सी. पिस्टल राउंड ज़रूरी राउंड रहता है, मैं कहूँगा डिफेंसिव हाफ के लिए, मतलब बूम के लिए ज़रूरी राउंड है. अगर पिस्टल निकलता है तो कुछ एक्स्ट्रा राउंड वो अपने डिफेंस में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं. जरूरी ये राउंड रहने वाला है. लेट्स सी बूम किस तरीके से अप्रोच करेगी इस पर्टिकुलर राउंड को. जर्शिया ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो एक बहुत बेसिक सा सेटअप है उनकी तरफ से. ए साइड पे लगा दिया है टर्रेट, किसी भी अर्ली अग्रेशन का इंतजार करेंगे. बी पे डबल फेस दिखाएंगे केजे और ओमन, ताकि अगर बी से अग्रेशन आता तो उसको भी चैलेंज किया जाए. पर मेजर कंट्रोल की जो कोशिश है वो इस सी और सी माउंट के एरिया के आसपास रहेगी. एग्जैक्टली, जर्शिया ने ये सेम स्ट्रैट एक्चुअली सिमिलर स्ट्रैट नाओस के अगेंस्ट यूज किया था, बट तब जल्दी से उनके प्लेयर्स डाउन हो गए थे ऑन द सी साइड एंड उन्हें साइड ए पे रोटेट करना पड़ा था. उन्होंने तब टर्रेट साइड बी के लिए लगाई थी एंड साइड ए की तरफ ओमन एंड किलजॉय को खिला रहे थे. बट इस बार प्लान्स थोड़े चेंज किए हैं, बिकॉज अगेन सेम चीज का शिकार नहीं बनना चाहते. अर्ली 2 राउंड्स लूज करना मतलब आप स्टार्टिंग इटसेल्फ में सामने वाली टीम को लीड दे रहे हैं. सो वांट टू अवॉइड दैट डेफिनेटली. एंड उसी के चलते यहाँ पर सी साइड पे कमिट करने की पूरी कोशिश रहने वाली है. ज्यादा प्रेजेंस नहीं था यहाँ बूमी स्पोर्ट्स का, तो काफी अच्छे से यहाँ पर एक क्लीन एंट्री मिल जाएगी एंड एक फास्ट एग्जीक्यूट भी होता हुआ नजर आएगा. रीटेक के ऊपर बूमी स्पोर्ट्स को यहाँ खेलना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी अपने कंट्रोलर को लूज कर चुके हैं. ये स्टन बहुत अच्छा था, पर आपने अलर्ट को बिल्कुल भी काउंट नहीं किया था इस पूरी सिचुएशन के अंदर. प्लांटर को स्टन करके मारना चाह रहे थे. अब पीछे से फेमस के पास अगर क्लाउड बर्स्ट रहता, वो एंगल काट देते अलर्ट का, तो बात अलग थी. नन ऑफ दोज थिंग्स हैपेंड. और अलर्ट ने वो दोनों प्लेयर्स जो रशिंग करना चाह रहे थे सिटी से, उनको पिक ऑफ करके ये राउंड जो है जर्शिया का कंफर्म करवा दिया है. एग्जैक्टली, एंड ये लीजिए आखिरी किल भी यहाँ पर अलर्ट को मिल जाएगा. 3 फ्रैग्स के साथ अलर्ट पहला राउंड यहाँ पर सील करते हुए दिखाई देंगे. बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंट्री यहाँ पर जर्शिया को मिल गई. पिछली बार काफ़ी ज़्यादा इनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था साइड सी के ऊपर, एंड दैट्स व्हाई दे चेंज देयर कंप्लीट अटैकिंग स्ट्रैट, जो कि हमेशा से जर्शिया का ए एंड सी पे दबाव बना के चला है एंड बी के ऊपर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टर्रेट प्लेस किए. जनरली इस बार भी स्टार्टिंग में टर्रेट प्लेस की जरूरत थी वहाँ पर, बट बहुत जल्दी टर्रेट को रिप्लेस कर दिया गया टुवर्ड साइड ए एंड इट वर्कड आउट प्रीटी वेल. सो आई गेस दोबारा से सेम मूव के साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे. Oh, okay. This time they're
फॉलोइंग बैक टू देयर ओरिजिनल स्ट्रैट। यहाँ पर साइड बी के लिए एक काफी दूर टर्रेट लगाई गई है ऑल द वे ऑन टू द अटैकिंग स्पॉन, एंड साथ ही साथ जो इनका स्प्लिट जनरली होता है, दे जनरली हैव ब्रीच अलोंगसाइड स्काई एंड जेट गोइंग टुवर्ड्स साइड सी, बट इस बार इनके ब्रीच साइड ए की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। बहुत टर्रेट है वो, रोटेट टर्न, बहुत टर्रेट है वो, कहीं का भी फ्लैग बता देगा आपको। और देखिए ये और कंट्रोल की हल्की बहुत लड़ाई थी, हो सकता है और मिला ज़रूर है, बट सेवरीन अब स्पॉटेड है। तो एक गैम्बल आप रोटेट करवा रहे थे ए साइड के ऊपर कि भाई सी पे कुछ भी नहीं है, उसमें थोड़ा सा मात खाई है, और ये साइड अब सिर्फ सेवरीन के हाथों में है। और वैसे भी मतलब ये राउंड का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं बूम से, इको राउंड है, सिर्फ एक शेरिफ है शीरो के पास, मुझे लगता नहीं इस राउंड में ज़्यादा कुछ आप ले सकते हैं बूम के हाथों से। एग्जैक्टली यहाँ पर बूम ने हल्का सा फेक करने की कोशिश जरूर की, रोटेटिंग डोर्स को यहाँ पर ट्रिगर किया, जिसके चलते ब्रीच ने अपने आप को रिपोजिशन कर लिया। तो अब साइड के अंदर एंट्री और ज़्यादा इजी होगी, ये समझ के ज़र्शिया के प्लेयर्स अंदर एंटर करे जरूर, बूम विल रिटेलिएट राइट वेल। 2 प्लेयर्स पिक ऑफ जरूर किए, तो बोनस राउंड जो होने वाला था उसके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट हाथ में लग ही जाएगा। बट नाउ इट्स ब्लेज़किंग सर्वाइविंग अलोन अगेन वन मोर टाइम, जस्ट द सोल सर्वाइवर फ्रॉम द साइड ऑफ बूम। इको राउंड नथिंग मच कैन बी एक्सपेक्टेड। हाँ थोड़ा सा स्कैरी जरूर हुआ था जब वो 2 फ्रैग्स मिले थे, बट वही है यूटिलिटी डंप आया हल्का लेट था, तो वो 2 फ्रैग्स की आपको ओपनिंग मिल गई थी, बट उसके ऊपर आप कैपिटलाइज नहीं कर पाए। एक बार एंट्री हो जाती है तो मुश्किल रहता है। तो ज़र्शिया दूसरा राउंड निकालेगी अपने लिए, और थोड़ा सा क्लीन रखते, मे बी अगर बाकी राइफल्स भी बचा लेते तो बेहतर रह सकता था इस बोनस राउंड के लिए। बट यस अच्छा काम किया 2 फ्रैग्स निकालने का। तो बूम ने बट ओवरऑल अ गुड राउंड फ्रॉम टीम ज़र्शिया। डिफॉल्टिंग उनकी काफ़ी सिंपल सी, काफ़ी सिमिलर टू व्हाट दे डिड इन द प्रीवियस मैप वैसी ही नज़र आ रही है। एंड लेट्स सी बूम अब इसको तोड़ने के लिए जब गन्स आ जाएंगे हाथ में तो किस तरीके से खेलती है ये राउंड को। जनरली जब भी बोनस राउंड आता है ज़र्शिया के पास में, तो वो कम्प्लीटली साइड ए पे हिट करने की कोशिश करते हैं एंड बैक स्टेप वॉच करते हुए दिखाई देते हैं रोलेक्स, एंड वही आज भी होता हुआ नजर आएगा। रोलेक्स बीइंग वन ऑफ द प्लेयर्स जिनका फिलहाल के लिए ज़्यादा हमें एक्शन देखने को मिला नहीं है इन दिस पर्टिकुलर स्टेज। लेट्स फाइंड आउट हाउ ही कैन होल्ड दिस फोर्थ। अभी के लिए तो साइड ए के ऊपर ऑलरेडी एक फ्रैग मिल चुका है, फेमस को शट डाउन किया है, विच मीन्स कि जो मोबिलिटी है वो कम्प्लीटली जा चुकी है बूम के हाथों में से। अब ये एंट्री फ्रैग ये रबल वाली फाइट हुई तो इस बार, पर बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं था बूम का इसके पीछे। वो वन ऑन वन ट्रेड लिया है और एक स्मोक जो कंट्रोल स्मोक ड्रॉप किया है बूम ने, उसको यूज करके ज़र्शिया पिवट करना चाह रही है इस बी साइड की तरफ। अब तैयार तो है, देखिए शीरो अभी भी इसी बी साइड के ऊपर है, थोड़ा बहुत किल जॉय यूटिल भी और रोटेशन भी मंगवा लेंगे अगर एक भी फ्रैग मिलता है तो, पर ये डुअल और ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक ही नहीं दोनों को ले जाएंगे तो शीरो तीसरा भी आ जाता, पर एलबीवाई ने ट्रेड करके थोड़ा सा मौका और दिया है ज़र्शिया को इस राउंड के अंदर। ऑल्दो रोलेक्स ये सेवरीन जो एक छोटा सा प्ले बनाने की कोशिश कर रहे थे उसको पनिश करके 12 से 2 का सिचुएशन बनाएंगे। स्पाइक गिर चुका है, दैट्स द बिग क्वेश्चन। ठीक है रिकवर हो जाएगा काफी जल्दी। यहाँ पर बर्सर्क्स के पास मौका अच्छा था टू एक्चुअली कैच अ बॉम्ब, लेकिन शायद अंदाजा नहीं लग पाया था, बट वेल ब्लेज़किंग यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं एंड क्लोज ऑफ करेंगे इस राउंड को। काफी अच्छा एक कन्वर्जन यहाँ पर अपने बाय राउंड का करा है बूम ने, एंड ये जरूरी भी था। कल की अगर मैं बात करूँ तो बूम बड़ी ही अच्छी लगी थी एक एज अ टीम, और स्पेशली ब्लेज किंग उन्होंने अगर मतलब ओवरऑल सीरीज के अंदर 40 फ्रैग मारे होंगे तो उनमें 20 तो थे वॉल बैंक के या स्पैम के किल, कोई भी ऐसा फ्रैग नहीं था जिसमें उन्होंने डुअल लिया हो हेड ऑन। बहुत ही कम ऐसे उन्होंने डुअल दिए थे। बहुत दिमाग से खेलना प्रेफर करता है ये खिलाड़ी, पसंद आया था मेरे को कल ब्लेज किंग का परफॉर्मेंस। आज भी देखते रेप्लिकेट कर पाते हैं यानी बूम ने एक ज़रूरी राउंड निकाला है, जो बोनस रहता है उसको रोकना ज़रूरी होता है, एग्जैक्टली वही किया है। बट इस बार ये सी साइड हिट देखते हैं किस तरीके से रोकते हैं। स्टन को तो आराम से डॉज कर लिया बट छोड़ दिया साइड, रीटेक पे खेलना चाहेंगे अपने टीममेट के साथ। एग्जैक्टली एंड प्लांट करने के लिए जो डिफॉल्ट लोकेशन होता है वहाँ पर नैनो स्वॉर्म्स रहने वाले, तो अभी तक के लिए तो प्लांट करने का भी ओकेजन नहीं हासिल हुआ है ज़र्शिया को, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी ज़रूर। ये लीजिए रोलिंग थंडर का इस्तेमाल करके एलबीवाई ने थोड़ा सा और डिले कर दिया है डिफेंस का मूव, एंड अब अपने आप के लिए प्लांटिंग पोजीशन जरूर से बना लेंगे। हाउएवर बर्सर्क्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूजफुल रहने वाली है। वॉटरफॉल एक ऐसा एरिया है जो कंटेस्ट करना चाह रहे हैं ज़र्शिया के प्लेयर्स, जो रोलिंग थंडर में इन्वेस्ट हुआ था, पर रीटेक सीक्वेंस में देखना चाहूँगा यहाँ पर बूम का फ्लैश अच्छा है पर ट्रेज अच्छा है। ब्लेज किंग को वो पहला फ्रैग मिला और अलर्ट, he was able to get 1 or 2 famous but the trades were imminent। अब यहाँ पर तू मार मैं पिक करता हूँ वाला सिस्टम चलेगा और एक एक करके
ये उसको पिक ऑफ किया जाएगा। काफी अच्छा इस्तेमाल यहाँ पर शाउडेड स्टेप्स का सेवरीन के द्वारा एंड एक अच्छी क्लोजिंग राउंड को मिल चुकी है। काफी देर तक सेवरीन यहाँ पर जो रोटेटिंग डोर्स थे उसके पास में खड़े रहे, रोटेटिंग डोर्स को ट्रिगर करने के बाद जस्ट टू मेक श्योर कि जर्शिया के जो प्लेयर्स है उनको कॉन्स्टेंटली एक भय बना रहे कि पीछे से कोई आ सकता है। बट देन उनका मूव बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेट हो गया बिकॉज जो आखिरी के 2 पिक्स जर्शिया निकाल चुकी थी उसके बाद में चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो गई थी सेवरीन के लिए। लेकिन जो शाउडेड स्टेप्स था उनका काफ़ी अच्छा यूज़ किया यहाँ पर एंड आखिरी किल को भी निकाला अपनी टीम के लिए। एक और राउंड लाकर इक्वलाइजर पे बूम स्पोर्ट्स को खड़ा कर चुके हैं। देखिए जर्शिया के लिए परेशानी ये है कि पैसों में आई है कमी। 2 बुलडॉग और 1 प्लेयर तो लिटिल नाइस पे खेल रहा है, तो ये राउंड अगर इनके हाथों से गया तो होगी प्रॉब्लम वाली एक बात। अभी देखिए सेवरीन एक ऑफ एंगल लेकर बैठे हुए थे और अलर्ट को ऑलरेडी 5 HP पे छोड़ा है सिर्फ। डैश यूज करने पे फोर्स कर दिया सेवरीन ने। अब ये जो अर्ली ब्रॉल ऑफ यूटिल हुआ है आउटसाइड सी माउंट, इस पे जीत जरूर हुई है बूमजे को, भगाने में कामयाब हो गए ये जर्शिया को इस सी साइड से। एग्जैक्टली एंड जर्शिया जब भी सी साइड पे ऐसा रेजिस्टेंस फेस करती है तो साइड ए की तरफ मूव इन करती है। साइड ए की तरफ इनका जो मूव रहता है दैट इज जनरली टू क्लोज ऑफ द ए स्टेयर्स यूजिंग द डार्क कवर एंड उसके बाद में अपने आप को डिस्प्लेस करते हुए दिखाई देते हैं इनटू द साइड। लेकिन इस बार डार्क कवर अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ है, फाइनली गेट्स डिप्लॉयड एट द राइट एग्जैक्ट पोजीशन एंड के अंदर एंट्री एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। नंबर्स का इनके पास फिलहाल एडवांटेज रहेगा इनटू द साइड एग्जैक्टली, बट पीछे से जो एक बैक स्टेप है जो कि जल्दी ही स्टार्ट हो सकता है फ्रॉम द साइड ऑफ फेमस, उसको वॉच करने के लिए इनके पास ज्यादा कुछ अभी है नहीं। बहुत अच्छा सपोर्ट आया, बहुत अच्छा सपोर्ट आया साइड के अंदर, क्योंकि अर्ली शॉट स्विप कर दिए थे बजर्क्स ने जेट के ऊपर, पर पीछे से जिस तरीके से सपोर्ट किया है उनको डगआउट से प्लेयर ने, बहुत ज्यादा नेसेसरी वो फ्लैग अच्छा मिला। एग्जैक्टली यहाँ पर जो टर्रेट प्लेसमेंट था रोलेक्स की तरफ से वो काफी ज्यादा आगे आकर था, तो अगर टर्रेट को शट डाउन करने के बाद थोड़ी देर के लिए वेट भी करना पड़ा है यहाँ पे फेमस को, तो इट्स नॉट गॉन टू वेस्ट। अब लेकिन सिचुएशन 2v2 पर आ चुकी है। श्राउडेड फ्रॉम द शैडोज का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा बाय सेवरीन, अपने आप को रिलोकेट करेंगे इनटू द साइड। लेकिन ये जो लॉकडाउन आ रहा है रोलेक्स की तरफ से दैट इज गोइंग टू फोर्स द प्लेयर्स टू बी पुश्ड बैक आउट। हाउएवर फेमस के पास पोजीशन अच्छी है, लॉकडाउन को यहाँ पर ट्रैश किया जा सकता है, लेकिन XZE will be the one winning the fights, making it another round for Zerxia. Lead कायम रहेगी। ये कैसे निकाल लिया इतने डेफिसिट पे होने के बाद भी जर्शिया ने राउंड। इतना अच्छा अर्ली होल्ड आया था बट उसके बाद कम्बल कराया टीम ने, ये थोड़ी सी परेशानी हुई है इस टीम के लिए। किस तरीके से किया जाता है इनकी तरफ से ओवरऑल गेम को, मुझे लग रहा है टाइम आउट बुला लेना चाहिए यहाँ पर। आया नहीं है एक इको राउंड पे, शेरिफ्स बाय करी है, बजर्क्स के पास सिर्फ एक एग्जैक्टली वही शेरिफ है। लेट्स सी किस तरीके से बूम कंटिन्यू करते हैं इस राउंड को। यहाँ पर विनिंग अपॉर्चुनिटी अगर बूम को क्रिएट करनी है तो उन्हें फेमस के ब्लेड स्टॉर्म से थोड़ी सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अ कपल ऑफ फ्रैग्स नीड टू बी टेकन बाय हिम एंड देन उनके साथ अपग्रेड करके अपने वेपन्स को एक बेटर पोजीशन अपनी टीम के लिए क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल फेमस बहुत ज़्यादा पीछे खेल रहे हैं, सो आई डोंट थिंक दैट्स द प्लान दैट दे आर स्टिकिंग बाय। पैसिव खेलना पसंद करेंगे एंड पिक्स के ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे बिकॉज दे विल बी होल्डिंग एंगल्स ऑल थ्रू एंड जैसे ही एक आध पिक मिलेगा अपने आप को अपग्रेड करके अपने आप को एक बेटर पोजीशन में लाने की कोशिश की जाएगी। इस बार भी ज़्यादा यूटिल ज़्यादा रिस्क करने नहीं थे तो बूम को डबल डोर एंट्री मिलेगी यहाँ पर। अलर्ट पीछे पीछे जाएंगे अब ट्रेल ब्लेजर के, इस साइड एंट्री शुड भी सुपर इजी। साथ में यूटिल भी जो दी गई है, अलर्ट को पहला फ्रैग निकालने में तो परेशानी नहीं होगी, पर फेमस पीछे से एक दो आया तीसरा, क्या चौथा भी आएगा? ये तो बूम ने मचा दिया है, बूम ने नहीं फेमस ने मचा दिया है ये तो अकेले। ये नाइस को आप हल्के में ले नहीं सकते और डील कर रही पाई जर्शिया इनके साथ। अब अकेले बच गए रोलेक्स, इस सिचुएशन से तो मुझे नहीं लग रहा ये वापस आ पाएगा खिलाड़ी। ब्लेज किंग इटसेल्फ इनको निपटा देंगे, क्लोन किलजॉय को यहाँ पर पनिश करते हुए नजर आएंगे। ही इज प्रिपेयर्ड फॉर द फाइट एंड ही विल टेक दैट डाउन। एक सिंगल शेरिफ शॉट से यहाँ पर खात्मा करते हुए दिखाई देंगे रोलेक्स का एंड दैट्स गोना बी अनदर राउंड फॉर बूम ई-स्पोर्ट्स। एक काफी ज्यादा बिग ब्रेन गेम प्ले हमें फेमस की तरफ से देखने को मिला। ही प्लेड वेरी मच एट द बैक, काफी पैसिव गेम प्ले यहाँ पर दिखाया एंड
बीइंग द टीम ऑन द लोअर इकोनॉमी एंड कहीं ना कहीं जर्शिया को ये फील करवाया कि आप आ जाइए, हम यहाँ पर ज्यादा कुछ एक्शन नहीं करने वाले हैं। एंड देन फेमस जस्ट स्विचेस ऑन टू हिज ब्लेड स्टॉर्म एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर 4 फ्रैग्स एक के बाद एक लगातार निकालते हैं एंड साइड के अंदर का जो पूरा प्रेजेंस यहाँ पर जर्शिया ने एक्वायर किया था उसको तुरंत नलिफाई करता है, व्हिच इज अमेजिंग। इस बार इनके पास जी सारे वेपन्स रहने वाले हैं। नाउ दे आल्सो हैव अ लॉकडाउन, इफ नीडेड वो बी साइड के बाहर डाला जा सकता है और आराम से वो फिर साइड के अंदर एंटर कर जाएंगे। बट लेट्स सी इफ दैट्स द केस और नॉट। जर्शिया की अगर बात करी जाए तो आराम से बैठे हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं बूम की तरफ से किसी भी तरीके का पुश आएगा तो हम उसको काउंटर करेंगे। बट जर्शिया बूम गिविंग देम नथिंग टिल नाउ। फेमस ने ये एक फाइट दी हुई है पर उनके पास तो डैश रहेगा, वो पहला फ्रैग निकाल के अगर फ्रैग मिलता है तो सही, नहीं तो डैमेज डील करके निकल जाएंगे और एग्जैक्टली वही किया है। बस ये अर्ली जो फ्रैग्स है वो देने नहीं होते हैं। ये रीपीक बिहाइंड द फ्लैश वाज ब्यूटीफुल, वाओ बहुत अच्छा रीपीक आया और फेमस को अर्ली नंबर एडवांटेज मिलेगा। रैंडम स्पैम खाएंगे स्मोक के अंदर अलर्ट और एक एक करके जर्शिया फिर से प्लेयर्स खोते हुए। बहुत ही शानदार गेम प्ले यहाँ पर फेमस की तरफ से। क्लाउड बर्स्ट डाला एंड देन उसको पुश किया एंड बाद में एक फ्लैश के थ्रू पिक भी निकाला, उसके बाद में वापस से फॉल बैक करके एक और पिक निकालते हुए नजर आए। काफी अच्छे से यहाँ पर नंबर्स एडवांटेज दिया एंड उसको मेंटेन भी किया, खुद को कहीं भी एक्सपोज नहीं करते हुए नजर आए, लेकिन अब कर देंगे एंड एक्सी विल बी एबल टू शट हिम डाउन। नाउ इट्स अ 4v1, अकेले एक्सी बचे हैं एंड ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर शीरो के हाथों बलि चढ़ जाएंगे एंड दैट्स गोना बी अनदर राउंड फॉर बूमी स्पोर्ट्स। लीड अब इनके हाथों आ चुकी है एंड उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। फर्स्ट हाफ में अगर एक अच्छा पोजीशन अपने लिए बूमी स्पोर्ट्स बनाने में कामयाब होती है तो सेकंड हाफ तो काफी इजी रहने वाला है बिकॉज अटैकिंग स्टार्ट्स अगेन दोनों टीम से काफी सिमिलर। अभी तक तो जिस तरीके से खेली उन्होंने जर्शिया को बिल्कुल कंट्रोल लेने दिया नहीं है इस मैप का। एंड कंसिडरिंग कि इस मैप इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, मतलब यू लिटरली जस्ट चूज अ साइट और आप एग्जीक्यूट करते हो साइट के ऊपर। पर अभी तक वो अर्ली कंट्रोल में ही फाइट में प्लेयर्स हो रही है जर्शिया, वो यूटिल प्रॉपरली आ नहीं पा रहा। और ये देखिए ये रीपीक पे कभी फ्रैग नहीं मिलना चाहिए जेट को, क्योंकि आपको 3 प्लेयर देख रहे हो उस डायरेक्शन में, एक तो हेडशॉट लगाएगा, एक तो लगाएगा पर वो भी नहीं हुआ और फिर से डे लाइट रॉबरी करके फेमस भाग गए एक फ्रैग की। एग्जैक्टली फेमस काफी अच्छे से अर्ली नंबर्स एडवांटेज दिलाने में कामयाब हो रहे हैं बूमी स्पोर्ट्स को टाइम एंड अगेन। एंड इस बार स्विच करना पड़ सकता है बिकॉज अब फाइट्स क्लोज क्वार्टर की हो चुकी हैं तो अब ऑपरेटर इतना साथ नहीं निभाएगी। वेट अ सेकंड, स्टिल गोज फॉर द ऑपरेटर एंड मिसेस हिज शॉट। यहाँ पर उनको धराशायी किया जाएगा एंड नाउ प्लेस के अपनी कमान संभालते हुए नंबर्स एडवांटेज अभी भी मेंटेन करा हुआ है एंड इसके ऊपर कैपिटलाइज करके बर्सर्क्स पूरे के पूरे राउंड को यहाँ क्लोज डाउन करते हुए नजर आएंगे। एक और विन यहाँ पर बूमी स्पोर्ट्स अपने लिए एकत्रित करती हुई। स्टार्टिंग जर्शिया ने बहुत अच्छी की थी लेकिन उसके बाद जो जवाबी हमला आया है बूमी स्पोर्ट्स की तरफ से उसके लिए कोई तोड़ मिल नहीं रहा है जर्शिया को भी। वो ब्लेज किंग बर्सर्क्स, ये जो साइट होल्ड आया है इन दोनों खिलाड़ियों की तरफ से बहुत ही बढ़िया। यूजुअली क्या होता है किलजॉय ट्रेड आउट हो जाती है बट अभी तो ब्लेज किंग किसी तरीके से रोलिंग थंडर का इफेक्ट खाए थे सिटी में शायद या बच गए थे। बट व्हाटएवर द रीजन इज वो स्मोक से पुश किया ब्लेज किंग ने, बॉली ऑन करके साइट के अंदर घुसे एंड ही इज स्टिल एबल टू फाइंड 2। दैट इज जस्ट अब्सर्ड। जर्शिया बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं नजर आ रही है इस मैप के लिए, एटलीस्ट इन द वेरी फर्स्ट हाफ। और ऐसा लग रहा है बूम के पास पूरा का पूरा कंट्रोल है, बूम के पास हर एक रीड है। इस रीटेक में भी अगर आप देखें तो 4 प्लेयर्स आ गए थे साइड पे जिससे पहले प्लांट भी हुआ होता। बर्सर्क्स ने 2 निकाले, ब्लेज किंग ने 2 निकाले और स्टार्टिंग के राउंड में एक तो पहले ही आपको फेमस से निकाल के दे दिया था ऑपरेटर के साथ और वही राउंड खत्म हो गया। फिर से मुझे लगता है जर्शिया के पास शेरिस और स्टिंगर्स और स्पेक्टर्स देखने को मिलेगी ओवरऑल। Yup, and that's not gonna be a very optimal situation because Zerxia को यहाँ से अपने आप को पिक बैक अप करने की ज़रूरत ऑलरेडी आ चुकी है। डिफेंसिव साइड ऑलरेडी लोटस में थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज अटैकिंग साइड को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू कीप रोटेटिंग बिटवीन साइड्स एंड कभी भी मन पड़े उस साइड पे जहाँ पर ज़्यादा अच्छी एंट्री मिल गई वहाँ पर सीधे प्लांट करके एग्जीक्यूट करते हुए नजर आ सकते हैं। बट देन दैट्स द प्रॉब्लम, अटैकिंग साइड पे होने के बावजूद जर्शिया अभी तक जूसी नजर आ रही है एंड बूमी स्पोर्ट्स एक और राउंड अगर निकालती है तो उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल स्वॉप होने वाला है बिकॉज डिफेंस में आधे राउंड्स भी निकाल लेना आपके लिए लोटस के मैप पे एक बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा।
5 ब्रेकफास्ट पीस है स्टिंगर्स और शेयर्स के साथ अब यही एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखिए एंट्री तो मिली ज़रूर है बट ब्लेज किंग ने फिर से ये डिसरिस्पेक्ट किया है स्मोक को और देखा कि सिर्फ अलर्ट ही आए थे, ये तो सब फेक है। और ऐसे प्लेस तभी बन सकते हैं ना जब आपको कॉन्फिडेंस हो ये 5 राउंड का। अगर यूजुअल नॉर्मली आप अगर ये प्ले करते हो और ये पूरी साइड हिट होती तो प्लेयर आपको एक्सपेक्ट करता है वो आप एक साथ ट्रेड हो जाते उसके बाद। बट यहाँ पर किया अलर्ट अकेले थे, वो फ्रैग मिला और उसके बाद सारा का सारा सिचुएशन पता चल गया क्या चल रहा था। ज़र्शिया फिर कुछ नहीं कर पाई इस राउंड के। सिरापॉप के पास बहुत ही अच्छी एक पोजीशन थी यहाँ पर। सी के जो डोर्स हैं उनके सी के डबल रोटेटिंग डोर्स के पीछे खड़े हुए थे एंड ही हैड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर थोड़ा और पेशेंटली होल्ड किया होता तो उसी डोर के थ्रू रोटेट करते हुए दिखाई दिए थे सेवरीन एंड ही कुड हैव एक्चुअली मैनेज द फ्रैग। लेकिन वेल काफ़ी जल्दी वहाँ से मूव आउट हो गए एंड फिर जो फ्रैग की उम्मीद थी उन्हें वो भी नहीं मिला। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता था बट उसको भी यहाँ पर लूज करते हुए नजर आए। इन एनी केस 6-3 खुद के मैप पिक पर ज़र्शिया कमज़ोर होती नजर आ रही है। ऑप इधर देखिए सीकर्स हैं और प्रॉब्लम ज़र्शिया को आई है अभी तक एंट्री करने में साइड की जी। उस प्लान तो ज़्यादा देख ही नहीं पाए हम इनकी तरफ से, एक ही देखा था मुझे लगता है जो शुरू में पिस्टल राउंड हुआ था बस। यप। पर उसके बाद से तो ज़्यादा मौका मिला नहीं है तो मे बी ये ट्रेल ब्लेजर से जब आपको रबल कंट्रोल पता चल जाएगा कि रबल पूरा खाली छोड़ा हुआ है टीम ने, उसके बाद साइड के अंदर एंट्री के लिए सीकर्स यूज़ कर रहे हो ताकि थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा हेल्प हो जाए। ये फ्लैश आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि प्लेयर्स अभी भी इस ए साइड पे कमिट करना चाह रही है और बूम का बहुत ही सिंपल फंडा है, जहाँ होगे वहाँ हम आपको बेस तो देंगे बट उसके बाद फास्ट रीटेक चालू करेंगे। और ये देखिए तुरंत लॉकडाउन इन्वेस्ट कर दिया है, अब यूटिलिटी का बराज फेंका जा रहा है और ये अलर्ट अकेले आए हैं। सपोर्टिंग यूटिल का है वो ट्रेमर आप नहीं मान सकते एक सपोर्टिंग यूटिल, वहाँ फ्लैश चाहिए होता है वैसे एंगल पे और पीछे से फ्लैग करते हुए रूलेक्स से पकड़ लिया। ये तो एक एक करके प्लेयर्स अब सिर्फ फॉल कर रहे हैं। बूम स्पोर्ट्स के हाथ से एक और राउंड जाएगा क्योंकि ये पोस्ट प्लांट अब पहुंचे जरूर पर साइड तक तो पहुंच ही नहीं पाए। नाइसली डन। फेमस फिर से एक राउंड क्लोज कर देंगे विद दैट ऑपरेटर एंड देन विद द ब्लेड स्टॉर्म्स इन हिज हैंड्स। काफी पेशेंटली यहाँ पर खेलते हुए नजर आए एंड काफी अच्छे से राउंड को सील ऑफ भी किया। लेकिन वेल उसके पहले ही ये राउंड हार चुकी थी ज़र्शिया इन द अर्ली स्टेजेस इटसेल्फ, जब उन्होंने पहली बार अलर्ट को खोया एंड उसके बाद में रोलेक्स को खोया। ये 2 लॉसेस के बाद में गेम ऑलरेडी पलट चुका था उनके हाथों से एंड देयर वाज नो वे टू होल्ड ऑन टू द पोस्ट प्लांट सिचुएशन। ज़र्शिया के लिए चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी होती हुई नहीं नजर आ रही। 2 मात्र राउंड बचे हैं इस हाफ के एंड इफ दे डोंट गेट दीज 2 they get nothing। ये राउंड भी हाथ में नहीं आने वाला, बहुत ही ब्रोकन बाय रहने वाला है ज़र्शिया के पास में। एंड ये देखिए एक फास्ट हिट आएगा बी साइड के ऊपर। रेड सॉन्ग जरूर है बट आई डोंट थिंक ज्यादा वैल्यू यहाँ पर बाकी कोई निकाल पाएगा। फिर से मुझे लगता है स्मोक पुश करने वाले हैं प्लेयर्स, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आपको ट्रेल ब्लेजर से कोई प्लेयर मिला है तो ब्लेज के भी सोच रहे हैं कि एक एंगल पकड़ लेता हूँ मैं और अगर कोई प्लेयर उस एंगल में आएगा तो उसको पनिश करूंगा। ये देखिए नाइस के साथ पीक लिया और ने पनिश किया। अभी ट्रेड अच्छा आया है सीरा की तरफ से, फ्लैश प्लान हुआ था पर बजॉक्स को भी पिक ऑफ किया जाएगा। XZE ने दूसरी तरफ सेवरीन को टेक डाउन कर दिया। फ्रेंडली गुड फॉर 1 बट फेमस को भी पिक ऑफ किया है। 1v3 पे डाले गए पर ये जो पेस चेंज आया ये फास्ट हिट एक साथ आया, इसने कहीं ना कहीं शायद राउंड दिलवा दिया ज़र्शिया को। अभी भी 1v2 का सिचुएशन रहने वाला है, बहुत ही अच्छी क्रॉस फायर रहेगी। एक पिक तो निकाल पाएंगे लेकिन XZE के हाथों यहाँ पर बली हो जाएंगे एंड दैट्स गोना क्लोज डाउन शीरो एंड अ राउंड इन द फेवर ऑफ। स्टार्टिंग इटसेल्फ में ऐसा लगा था कि इतनी ब्रोकन बाई के साथ में शायद यहाँ पर अलर्ट अकेले होंगे जो कुछ कैपिटलाइजेशन निकाल पाए, लेकिन अलर्ट को ही कोई भी फ्रैग्स नहीं मिले। पहला पिक बने वो खुद ही, ही वाज द फर्स्ट ब्लड टू बी ड्रॉन एंड उसके बाद में बाकी की टीम कहीं ना कहीं से छीन कर इस राउंड को अपने पास ले जरूर आई। दैट वाज प्रीटी वेल एग्जीक्यूटेड एंड टीम वर्क की ज़र्शिया की यहाँ थोड़ी सी दाद देना चाहूँगी। हिट किया उसके लिए तैयार थे नहीं, वही जहाँ ट्रेल ब्लेजर काटा था ना LBY को वहाँ पर पीक करना था, बूम का बनता था। हाँ माना वहाँ पर मल्टीपल प्लेयर्स थे बट वो एक फ्रैग अगर मिल जाता और ट्रेड भी होते जी, एडवांटेज आपके फेवर में रहता, वो वेपन रिट्रीवेबल पोजीशन पे नहीं होती। और कोई बात नहीं, चलिए बूम मुझे लगता है 7 राउंड तो बहुत होते ही है। अभी ये राउंड वैसे तो कंटेंशन में चल रहा है पर हारते भी हैं तो मुझे लगता नहीं बिल्कुल भी नाराज होना चाहिए इस हाफ से। 7-4 इज अ वेरी गुड स्कोर टू हैव। बट व्हाट इज डबल ऑपरेटर सेटअप डूइंग हियर? ऐसा है कुछ भी करो
पैसा है कुछ भी करो ठीक है, ये मान लेती 5 हूँ मैं देखी है आपकी हमने बात। है ना कल, मैं बता रहा हूँ, मैंने और नेक्रो ने 5 ऑपरेटर देखी है ओजी के खिलाफ फाइनल राउंड के अंदर। ऑल राइट, ठीक है, ये भी ठीक है, बट वेल आई गेस कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दोनों ही टीम्स के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सवाल बना हुआ है, प्रश्न चिन्ह आके खड़ा हुआ है, आई वुड एक्सपेक्ट समथिंग डिफरेंट, बट जी बिल्कुल यहाँ पर अपने लिए एक एक्स्ट्रा वेपन भी रखा हुआ था फेमस एंड बर्जर्स ने, तो ये देख लीजिए वहाँ पर स्विच ऑफ करेंगे अब अपने असॉल्ट राइफल्स के ऊपर एंड बहुत अच्छे से यहाँ पर कैपिटलाइज करते हुए जाएंगे शीरो, क्रिएटिंग ग्रेट वैल्यू फॉर द टीम। फिर से जो आपने पेमेंट करने की कोशिश करी जब आपका एक प्लेयर पिक ऑफ हो गया बी साइड के अंदर रोलिंग थंडर के साथ, ये काउंटर पड़ा आपको और आप जवाब नहीं पाए, ये रहा फायरिंग स्क्वाड, 4 में से 3 गुट बना के बैठ गए। आओ जी पीक तो दो, बताते हम तुमको। और एग्जैक्टली वही हुआ, एक साथ सारे प्लेयर्स ने शूट करना शुरू किया और जर्शिया के पल्ले नहीं पड़ा ये इनके साथ हुआ क्या ये पहले हाफ के अंदर। एक राउंड जिसमें बी फास्ट किया था वही काम आया, पर वो भी इसलिए आया क्योंकि बूम के पास उस राउंड के अंदर कोई अल्टी था नहीं। यहाँ तो रोलिंग थंडर था, यहाँ से तो आप बच के नहीं निकल रहे थे। हर बार थोड़े काम करेगी एक स्ट्रैट जो एक बार सरप्राइज ओपोनेंट को पकड़ लेती है तो। एग्जैक्टली, ये आखिरी राउंड तो लिटरली अंधा पैसा लेकिन चौकन्ना गेम प्ले, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से फॉर द साइड ऑफ बूम स्पोर्ट्स। काफी शानदार गेम प्ले देखने को मिला, मैं काफी घबरा गई थी स्टार्टिंग में 2 ऑपरेटर्स देख के, बट देन दे हैड एक्स्ट्रा वेपन्स विद देम एंड स्विच अप करके भी काफी अच्छी वैल्यू निकाली। ऑपरेटर से भी एक फ्रैग मिला था बर्सर्क्स को एंड बाद में वैंडल से भी एक फ्रैग यहाँ पर निकाल पाए थे हमारे प्यारे जेट, सो वेंट वेल फॉर देम। ये वैसे तो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक्सडी और के सबसे ज्यादा शॉट परसेंटेज है जरूर जी, पर इस गेम के अंदर तो दे रहे हैं अपना फ्रैग दे रहे हैं किसी और को, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। जर्शिया के खुद के मैप पिक पे उनकी पहली हाफ के अंदर तो बड़ी तेज कुटाई हुई है, अब ये सेकेंड हाफ के अंदर ये फेवर रिटर्न बैक करवा पाएंगे या फिर जिस मोमेंटम के साथ बूम खेल रही है इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करेगी बूम और ये गेम एक बहुत ही वन साइडेड फैशन में अपने फेवर में ले जाएगी। ये सारी चीजें इस पिस्टल राउंड पे डिपेंड करती है हाना। एग्जैक्टली, क्योंकि पिस्टल राउंड एंड एंटी ई को अगर बूम स्पोर्ट्स के हक में आ जाता है तो लिटरली अपने आप को डबल डिजिट्स तक पहुंचा चुके होंगे, विच इज गोना बी अ ग्रेट स्टार्ट फॉर देम। बट अगर हिस्ट्री पे डिपेंड करें तो जर्शिया ऑलरेडी पिस्टल राउंड एंड एंटी ई को निकाल चुकी थी फर्स्ट हाफ में, तो उनके ऊपर थोड़ी सी उम्मीद रखी जा सकती है। बट देन अगेन एक 3 साइडेड मैप पे अटैकिंग साइड हमेशा नंबर्स एडवांटेज के साथ चलती हुई नजर आएगी, तो पिस्टल राउंड्स को एक्वायर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑल राइट, इस बार अटैक स्ट्रैट में काफी ज्यादा चेंज है फ्रॉम द साइड ऑफ बूम स्पोर्ट्स। पिस्टल राउंड है तो इतना ज्यादा हेवीली फोकस भी नहीं कर सकते आप स्ट्रैट पे, लेकिन उसके बावजूद जनरली इनके ओमन साइड एक ही तरफ जाते हुए नजर आते हैं अलॉन्ग साइड द किलजॉय, बट इस बार थोड़ा सा अलग इरादा सेवरीन के मन में देखने को मिल रहा है एंड ही इज ट्राइंग टू पुश इन विद द स्काई। ओके, रोटेशन जैसा सोचा था वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, बट अकेले फेमस बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं। उनका काम बस मुझे लग रहा है यहाँ पर किलजॉय यूटिलिटी को मारना और प्लेयर्स को डिस्ट्रैक्ट करने का है, क्योंकि ये रोटेशन पुल ऑफ करेगा। अलर्ट वैसे तो अभी भी एंगल पकड़ के बैठे हुए हैं, 1 सेकंड के लिए सोए थे, 1 सेकंड के लिए सोए जरूर थे, बट उसके बाद 2 प्लेयर सुला दिए इस खिलाड़ी ने, तीसरे को भी ऑलमोस्ट कर ही दिया था एलिमिनेट। तो चलिए ये राउंड तो आ जाना चाहिए हाथ में जर्शिया के। एलबी भाई प्लेयर आ रहा है पीछे से सपोर्ट करने के लिए, डुअल मत लीजिए फेमस, ये फ्रैग जीत गए और उसके बाद सीरा फॉप को भी टेक डाउन कर लिया। अब यही होता है जब आप इंडिविजुअल डुअल दे दोगे, रीग्रोथ से फेमस को वापस से 100 HP कर दिया और ये फ्रेश 2v2 का बैटल बन गया है। अब यहाँ पर दिक्कत हो गई बहुत ही बड़ी, काफी ज्यादा लीवे दे दिया आपने फेमस को, डुअल्स नहीं फोर्स करने चाहिए थे। कहीं ना कहीं जर्शिया को लगा कि इनके सेवरीन जा चुके हैं, विच मींस के एंट्री साइड ए में ऑलरेडी मुश्किल हो जाएगी बिकॉज ए स्टेयर्स को क्लोज ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो शायद ये डुअल्स जीतने के मौके बन जाए। बट वेल गन गेम तो गन गेम होता है। ये लीजिए बर्सर्क्स एक और पिक ऑफ करेंगे एंड नाउ इट्स अ 2v1 जहां पर रोलेक्स अटके हुए हैं इन अ रीटेक सिनेरियो। 2 बनाम 5 था, अब 1 बनाम 2 हो गया है। ये जर्शिया की कमी है और ये हारेगी भी राउंड जर्शिया। बहुत बड़ा थ्रो हुआ ये राउंड। Exactly. आपको पहले प्लेयर को पीक लेने की जरूरत नहीं थी, दूसरे प्लेयर पे तो मैंने लिटरल पॉइंट आउट किया, पीछे से प्लेयर आ रहा है उसका इंतजार कर लो, मत लो पीक अभी फेमस के ऊपर। आधा फ्लैश था फेमस, पूरा तो फ्लैश भी नहीं था। ये देखिए अलर्ट ने क्या शुरुआत दिलाई है राउंड की। उसके बाद ये बजर्क्स का ट्रेड आया, ये फ्लैश अच्छा था, देखिए आधे फ्लैश हुए बट एलबीवाई ने शॉट्स मिस कर दिए और उसके बाद स्काई को सीरा को पहले ही देख लिया था डैश करते हुए। एक्सजेडी को पता नहीं चला गोली कहां से पड़ी
और ये आखिरी जर्शिया का प्लेयर डुअल जीत नहीं पाया। ये 2v5 ब्रेकडाउन हो नहीं सकता क्योंकि ये थाली में परोस के दिया गया है बूम को जीतने के लिए। आपने पूरा ब्रेकडाउन करने के बाद कह दिया कि ब्रेकडाउन हो नहीं सकता। आई लाइक दैट। बट वेल, इन एनी केस अब आ चुका है दोबारा से बूम के पास में एक ऐसा राउंड जहाँ पे वेपनरी एडवांटेज के साथ वो रोल इन करने वाले हैं। सो आई थिंक ये एक काफी ज्यादा अच्छी सिचुएशन उनके लिए बनने वाली है। एक अग्रेसिव स्टांस यहाँ पे था जरूर सिरापॉप का, जानते थे कि ए साइड पे एक अग्रेसिव हिट आ सकता है, रोटेटिंग डोर्स का इस्तेमाल, लेकिन स्वागत करने के लिए यहाँ पर सेवरीन मौजूद रहने वाले हैं। आपने इतनी ज्यादा सुंदर तरीके से अपने सारे प्लेयर्स खो दिए हैं कि अब तो कुछ बचता ही नहीं। वापस पहुंच जाइए, डिसाइड करिए करना क्या है इस बाय राउंड के अंदर, क्योंकि इसमें भी एडवांटेज में तो मूवी रहेगी। सारे गन बचा लिए, मुझे लग रहा है ब्लेज किंग को कहा जाएगा कि भाई आप तो पूरा वैंडल ही बाय कर लो अगले राउंड के अंदर, उसके बाद भी बाय रहेगा आपके पास। तो ये तो जिस तरीके से राउंड जा रहे हैं ये दर्शक के लिए बहुत मुश्किल वाला चीज है। एग्जैक्टली ना सिर्फ सारे वेपन्स बनाए बचाए, यहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स की शील्ड्स भी पूरी की पूरी इंटैक्ट रहने वाली है। सो बिल्कुल नो इन्वेस्टमेंट राउंड रहने वाला है ये, इसको कंप्लीट बोनस कह सकते हैं आप। बट वेल, बूम स्पोर्ट्स गार्डियन पे स्विच करवाया गया है बेस किंग को, उनसे वैंडल नहीं खरीद पाएगी। ये भी ठीक है, देखते हैं हाउ मच वैल्यू दैट कैन प्रोवाइड। एंड सबसे आगे पायनियर की तरह किलजॉय को भेजा जा रहा है, ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लगा मुझे। बट वेल ओके, अब स्मोक आ चुका है तो काफी ज्यादा एंट्री के लिए क्लियरेंस मिल जाएगा। एंड इन द मीनवाइल फेमस यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फ्रैग निकालते हुए आएंगे। अलर्ट को यहाँ पर धराशायी कर दिया गया है। आपका डुअलिस्ट आपके पास नहीं है अब डिफेंसिव साइड पे रह के, सो जो एक लंबे एंगल्स को होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी थी वो यहाँ से नलिफाई होती है। एंड सिर्फ ऑफ साइड पर है जरूर, लेकिन कहीं जा नहीं पाएंगे बिकॉज दो साइड पूरी खाली कर दी गई है प्लांट के लिए। आराम से प्लांट आएगा और जर्शिया में पड़ेगी। ये सीकर यूज किया गया एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए। अपने इसकी बस रुकी मिस्टेक्स नहीं करनी है, वो 1v1 नहीं देना है। सीरा को ये फ्री फ्रैग मिलना चाहिए अगर वो पिक कर देते हैं तो। चलिए आधा सेकंड लेट किया पर वो गार्डियन का 65 का डैमेज अभी भी काम करेगा। हाफ शील्ड पे थे और अर्ली सीरा जब जंपिंग कर रहे थे तब एक गोली खाई, अब एक खाली। एक्जेडी एक फ्रैग जरूर मिला है, बट ये क्या बड़ा वेफ आया है, बहुत बड़ा वेफ आया है। बट उससे पहले ही मुझे लगता है राउंड समाप्त हो गया था। बूम, बोनस भी जीत गए, पिस्टल भी जीत गए। अब बस गेम जीतने के लिए बचा है बूम के पास। ये तो 13-4 लग रहा है मुझे गेम। 13-4 हो सकता है, काफी अच्छे से हो सकता है बिकॉज अभी तो इकोनॉमी आई थी, वो भी पूरी की पूरी चली गई है। सो दोबारा से सेव पे पुश हो जाएंगे एंड दैट्स गोना गिव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर बूम स्पोर्ट्स टू मूव फॉरवर्ड विद। तो ये 12-4 तो पक्के से हो गया एंड उसके बाद तो जो दबाव बढ़ जाता है उसके बीच में जर्शिया कैसे सांस लेगी, that's unimaginable. But this is way too one-sided. Brits जैसे स्टार्ट हुआ था, again considering the fact कि दोनों ही टीम्स काफी ज्यादा अच्छी एंड जर्शिया में तो उनके कोर मेंबर्स भी अभी तक मौजूद है। 3 कोर मेंबर्स अभी तक खेलते हुए नजर आ रहे हैं एंड it's still not looking as good as it's supposed to. इस समय बिल्कुल अपनी मुंह के बल गिरा हुआ है, जो करना चाह रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहा है। फेमस ऐसे फ्रैग निकाल के जा रहे हैं जो उनका बिल्कुल बिजनेस बनता ही नहीं है, जो उनका हक बनता ही नहीं है निकालना। क्या हो रही है और बूम उसको पनिश कर रही है बड़ी आसानी से। टाइम आउट यहाँ पर जर्शिया के कोच ने बनाया जरूर है पर मुझे लगता नहीं है इस टाइम आउट से ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा माहौल तो गर्मा गर्मी का बना हुआ है जर्शिया के लिए बिकॉज इन दी एंड इनके पास में ज़्यादा कुछ बचा है नहीं इस राउंड में। इकॉनमी अच्छी नहीं रहने वाली है, अल्टीमेट्स ज़्यादा नहीं है इनके पास में, सो दे आर नॉट लुकिंग गुड राइट नाउ, एटलीस्ट नॉट फॉर दिस राउंड। बट देन अगर इस राउंड में थोड़ा कुछ भी कर पाते हैं देन एटलीस्ट अलर्ट के पास में ब्लेड स्टॉर्म आ पाएगा जिससे थोड़ी बहुत वैल्यू अगले राउंड में निकाल पाए एंड इसको थोड़ा और डिले कर पाए बिकॉज अगर ये राउंड हाथ से गया तो फिर 13-4 होने से तो नहीं रोक सकते बिकॉज बीइंग ऑन द डिफेंसिव साइड जब भी एक प्लांट हो जाता है आपको रीटेक के लिए अपने अल्टीमेट्स की जरूरत पड़ती है। इनका कोई भी अल्टीमेट अभी तक फार्म हुआ ही नहीं है, दे हैव नो अल्टीमेट्स दैट कैन कम ऑनलाइन एंड सपोर्ट देम राइट नाउ। सो अगर प्लांट हो जाता है अगले राउंड में तो फिर गेम कम्प्लीटली लाइक समाप्त ही समझिए। बट वेल अभी के लिए अटैकिंग टीम पे थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश, न्यूट्रल डंप आएगा यहाँ पर सी साइड के सामने, बट उसके बावजूद जो एम डुअल्स हैं उनपे यहाँ पर जो शेरिफ्स हैं वो वैंडल्स को मात देती हुई नजर आएंगी। ये मैं क्या देख रही हूँ, कंप्लीटली विनेबल राउंड्स यहाँ पर जर्शिया ने अपने हाथ से गवा दिए
बट इस बार एक सरप्राइज अग्रेशन देके बहुत अच्छी पोजीशन अपने लिए बना ली है। 1v4 में फेमस को फंसा दिया है और 3 प्लेयर्स एक साथ यहाँ से निकलने वाले हैं अपग्रेडेड वेपन के साथ में। एक्जी शट डाउन करेंगे फेमस को। 4 प्लेयर्स बचते हैं एंड उनके चारों के पास में वेपन्स भी अपग्रेड हो जाने वाले हैं। जर्शिया धीरे धीरे टाइम आउट का फायदा तो उठा रही है, बट विल फाइंड आउट कि कितनी दूर तक खींच पाएंगे मैप को, क्योंकि अभी भी 6 और राउंड्स चाहिए टू इवन इक्वलाइज द स्कोर लाइन। एंड ये 6 राउंड्स निकालना थोड़ा मुश्किल तो रहने वाला है, बिकॉज बूम ई स्पोर्ट्स अभी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है। एंड अगेन एज आई वाज सेइंग बिफोर, प्लांट अगर निकल जाता है बूम ई स्पोर्ट्स का इस राउंड में, तो रीटेक करने के लिए जर्शिया के पास में अल्टीमेट्स नहीं है। एक ये ट्रिपल राउंड निकाला है जर्शिया ने, क्या ये वो रास्ता है जिस पे वापस से भागा जा सकता है जर्शिया की तरफ से? 6 राउंड का डेफिसिट है और डिफेंसिव हाफ पे राउंड निकाल पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। अब ये ट्रेल ब्लेजर के पीछे पीछे फेमस घुस तो गए डैश अप ड्राफ्ट करके, और ये पकड़ लिया है एक्जेडी को। वो श्राउडेड स्टेप यूज करके सीटी भागना चाह रहे थे फेमस ने कहा इधर आओ, कहीं नहीं जा रहे आप। और रीटेक में अगर एक्जेडी पिक ऑफ हो गए और यहाँ पर फेमस को एक और फ्रैग मिला oh, no. तो हो गया जी ये रीटेक। अब ड्राफ्ट करके एक और प्लेयर का इंफॉर्मेशन मिला है, बट गुड फॉर सीरा को फ्रैग निकला। पर अब देखिए सारे प्लेयर साइड के बाहर भाग जाएंगे, माउंट से खेलेंगे क्योंकि स्मोक्स तो बचे ही नहीं है जर्शिया के पास रीटेक के लिए। एग्जैक्टली एंड साथ ही साथ यहाँ पर रोलिंग थंडर भी रहने वाला है शीरो के पास में, जो कि वो यूज़ कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि यहाँ पर टैप किया जा रहा है डिफ्यूजल के लिए। ये लीजिए, जैसे ही टैप की आवाज़ आई वैसे ही यहाँ पर रोलिंग थंडर इस्तेमाल कर लिया एंड और थोड़ा सा टाइम यहाँ पर बाय करते हुए नजर आएंगे अपनी टीम के लिए। 3v3 का सिचुएशन है एंड अब तो डिफ्यूज करने की ओकेजन नहीं बची है, वेपन सेव करने का कॉल आएगा एंड जर्शिया यहाँ से चंपत होगी, पुटिंग बूम ई-स्पोर्ट्स इन द एडवांटेज ऑन द मैच पॉइंट। ये बस इंश्योरेंस पॉलिसी थी आपका रोलिंग थंडर, और वो स्पैम हो गया। मतलब मुझे लग रहा है सेवरीन को उन्होंने छोड़ा हुआ था, आप स्मोक के आसपास खेलते रहो, फ्रैग मिलता है तो हम रोलिंग थंडर भी नहीं डालेंगे, वो भी बचा लेंगे। और वो स्पैम हो गए सेवरीन, या शायद हाथ देखा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसे रहा, ये स्पैम ही हुए हैं और उस वजह से रोलिंग थंडर इन्वेस्ट हुआ। पर मुझे लगता नहीं किसी भी तरीके का मलाल रहेगा, पर ये थोड़ा टीपी भी मिसप्लेस हुआ था इनसे। फ्लैश थे, स्टन थे, तो ज़्यादा आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते। बट वो इनकी तो सिर्फ सराहना करी जा सकती है जिस तरीके से खेले हैं। ये 12 राउंड तक अपने आप को पहुंचा लिया है और मोस्ट प्रॉब्ली आखिरी राउंड भी इनके हाथ में आ सकता है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से पुश बैक यूटिलिटी का यूज हुआ है, प्लेयर कॉर्नर में फंसे हुए हैं। अब ये सीरा यहाँ से क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, दुनिया भर का स्पैम आएगा शीरो और बजर्क्स का। शीरो और अलर्ट को कह दीजिए राउंड से टाटा बाय बाय, मुझे लग रहा है मैप से ही कह दीजिए, क्योंकि अब तो LBY बिल्कुल ही अकेले बच गए हैं। Spike planted. Exactly, and अब रीटेक की सिचुएशन और भी ज्यादा दिक्कत भरी रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ 3v5, सेकंड ऑफ ऑल आपके पास अल्टीमेट्स है नहीं एंड अब आप ऑर्ब्स उठा नहीं सकते बिकॉज प्लांट हो चुका है। एंड थर्ड ऑफ ऑल आपके एंट्री पॉइंट्स जो है उनको ऑलरेडी चोक ऑफ कर दिया गया है। स्पैम जरूर कर रहे हैं स्मोक के अंदर, लेकिन शीरो को देखिए बड़े आराम से लेशन यहाँ से बाहर निकल जाने वाले हैं, विल नॉट टेक मच डैमेज एंड अपने आप को अभी भी जीवित रखेंगे इनटू द गेम एंड स्मोक पुश करके 2 फ्रैग्स भी निकाल लेंगे। क्या ही कहने इस प्लेयर की। तो एक घड़ी कोशिश अच्छी थी, मैं कहूँगा इतनी नहीं थी कि इनको गेम दिला के जा पाए। 13-5 एक हाईवे पे भागते हुए गई है यहाँ पर, और जैसा मैं कहता हूँ मेरठ 3 घंटे में पहुँचाते इन्होंने 3 मिनट में पूरा का पूरा गेम खत्म कर दिया ऐसा लगा। बहुत ओके, that's a heartbreak that you can see right in the players. काफी शानदार गेम थे यहाँ पर बूम ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, ये बात तो जरूर से कहनी पड़ेगी बिकॉज बहुत ही शानदार यहाँ पर रिजल्ट अपने लिए लेके आए हैं। जर्शिया के खुद के पिक पे उनको लिटरली भगा के मारा है। 13-5 की क्या स्कोर लाइन थी, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। ये तब है हालत जब आपका मैप पिक था, अब एग्जैक्टली स्प्लिट पे क्या होने वाला है पानी, पता नहीं स्प्लिट पे किस तरीके से ये टीम खेलना चाहेगी। मेंटल कैसे रीसेट होगा इतनी ज़्यादा जल्दी जर्शिया का, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि बूम ने यहाँ पर मैप की तो चोट दी है पर दिमागी भी ज़रूर रही होगी कि 5 और इस तरीके से मारा गया है, हर एक प्लेयर को चांस नहीं दिया है। एग्जैक्टली यहाँ पर कोई भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं छोड़ी गई जर्शिया के लिए एंड दिस जस्ट डज नॉट लुक वेरी गुड फॉर जर्शिया, क्योंकि आने वाला मैप पिक भी बूम का रहने वाला है। तो जो कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ है यहाँ पे
वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दर्दनाक रहने वाला है। ये बजॉक्स देखिए यहाँ पर यूजुअली प्लेयर वन टैप खाता है, बजॉक्स को इतना टाइम मिल गया वो स्प्रे करने में, मतलब दोनों ही प्लेयर्स बहुत लेबर्ड के मार रहे थे, बट बजॉक्स ने किया उसके अंदर, और यहाँ पर तो बेचारे एक्जेडी अकेले से ही पड़ गए थे। इनसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, मतलब 1v3 में थे, उसको 1v2 तक लेकर आए थे, बट एसेंशियली जैसी फेमस को पीक किया, जीजी हो गया। बड़ा ठीक, मतलब अच्छा गेम आया बूम के लिए, जर्सिया के लिए बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली उनके कोच साहब जो है वो टाइम आउट में पॉइंट आउट ज़रूर करेंगे, बट आई थिंक सेकंड गेम जो रहेगा वो भी जाएगा बूम के फेवर में। जिस तरीके से बूम ने अपनी लैब पकड़ लिया, मुझे नहीं लग रहा ये रुक रहे हैं, और मैप रहेगा स्प्लिट का, जाएंगे उसको भी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, बट अभी देते प्लेयर्स और कोचेस को थोड़ा सा टाइम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए। चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के उस पर मैप ऑफ स्प्लिट। देख तू कैसे मैं लड़ूं, तुम लोगों से ऐसे मैं डरूं, करूं मैं जैसे मैं तरुण, पानी पे चलूं मैं जैसे मैं वरुण, चाहे मैं जीऊं या मरूं, जो करना चाहूं मैं वही तो करूं, आता है तू ना करीब, तू बेटे चीप, जब तक कटे ना तेरी ये जीप, better believe you're gonna bleed, pick up a seat, get your team, I'm the king of kings, brother in arms in a battle, you all gonna die if you act like a vandal, bring the realms to reality from every angle. This is the public service announcement from Mumbai to the rest of the world. I am a Raja. I am the Raja. भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना, तू मेरी तरफ आना, आ गया तो होगा फिर तनाजा ना, ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना, 'cause I am the Raja. 'Cause I am the Raja. I am the 'Cause I am the Raja. I am the 'Cause I am the Raja. Look in my eyes, what do you see? I'm more than an average man. I'm a maverick, I can grow flowers on a barren land. Break a mountain with my bare hands and step back and cause a literal avalanche. Should've been about traveling. अष्टभुजाएं मेरी जैसे मैं tarantula, ना है कोई तोड़ मेरा जब से पूर्वजों का ज्ञान मिला। मेरे जैसा मिलेगा कोई ना, तू और चाहे जो भी था सबकी कबर मैंने खोदी। क्या तुम लगाओगे बोलियां, कम पड़े गोलियां, चंद्रगुप्त ने मौर्य या किला तू लोरिया। Come to me and you just gonna die, that's really a given. I am invincible and you are invisible. See, that's really a difference. Get out of my way or leave the world, the choice is yours. I don't kill my enemies, I play with them, that's what the toys are for. From Mumbai to the rest of the world, I am the Raja. भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना, तू मेरी तरफ आना, आ गया तो होगा फिर तनाजा ना, ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना, 'cause I am the Raja. 'Cause I am the Raja. I am the 'Cause I am the Raja. Put your back down on your knees, would you just surrender? Put your back down on your knees, would you? I am the Put your back down on your knees, would you just surrender? 'Cause I am the Raja. I am the 'Cause I am the Raja. I am the 'Cause I am the Raja. What a coinky dink Zerxia find themselves in, but I think there's a bit of relief from some individuals in the arena. Now, Boom finally came to play. We had
Famous turning up. We had Berserks turning up. We had Shiro turning up. We had Blaze King turning up. And we didn't even need Severine to turn up. But even on the 5 kills that he did bring, he was finding rounds. He was finding clutches. He was still good. But now I want to touch on one thing briefly before we get into this next map, right? We've been here 6 series, and it may very well be 6 2-0s, right? Which is terrifying me at this point in time. But quickly, they've been good. That's the thing. The maps have not been crap. Yeah, that was insane. Look, Famous, his performance, he's here today, but so is everyone else. That's what I was trying to get at. And that looks really good. But everyone came in that first series that they played, and then they got reverse swept. So what I want you to think about is that is still a possibility, and you saw the raw emotion coming out of Xe, coming out of Zerxia, that test glam in the player cams right at the end, man. That is anger, but that can be harnessed. That can be brought into the second series. They realize their position right now. There is one map between Zerxia's hope of going out on the top spot of the group or going home. Yeah, and you just look towards the performance that we actually get from majority of the members over on Boom as well. It was such a great recipe for them to succeed in that map. Just time after time, everybody getting into the action, good layering of utility, good fundamentals of rotations as well. The amount of times that we see Zerxia just get locked out at the beginning of their attackers' rounds, and then when you flipped it over as well, Boom, we're just being ever so explosive, unpredictable, and I don't see why that's going to change going into Split. Not at all. Rolex turned up. You mentioned that as well for a couple of those rounds, but Alert was a little bit sleepy. Alert was a little bit slow, and you're looking at the stats. What's making you giggle, Mitch? How 14 first kills, man. It was murder on the dance floor, but the dance floor being C-site here, right? Famous was just absolutely juking them around, and the fact that Zerxia, they just kept pushing back. Yeah, and it just felt like Boom, they were more ready. This is the Boom I expected to come out. This is what I was saying in the pre-match, right? They came in, they're coming in off a loss yesterday, and they are not happy about it, and they are punishing Zerxia for something they didn't even do. Yeah, and I mean, a way to answer back, right? Yeah. When you do come back with a loss, you want to make a statement, and they do it with a little bit of pizzazz. When you've got Famous just getting kill after kill in the sky with those blades, making our jaw drops, making even the Zerxia fans jaw drops, that's something. Yeah, everyone was silenced on that side of the arena, I'll tell you. Walking in here, there was a lot of sighs, a lot of awes, and not a lot of niceness. But look, Split is going to be that second map of the series, and we've seen Boom have pretty good results on this before, but we haven't seen too much of it from Zerxia so far. So what do you think they've been saving up their sleeves for us here? I don't really know if we've got anything from Zerxia that we didn't see against the game in Fancy United, because that was the one where Fancy kind of was slapping them around time and time again. Locking out LBY was such a problem for Zerxia to try and get some success into that game, and that was actually the one that we did see Xe get some good performance actually happening on what he was trying to get into the action. Remember, he was the one that just slammed his desk. So I want to see him get reset in towards a map that he seemingly feels comfortable in. Yeah, and I'm looking at these as well. Boom have so many reps. Yes. So many reps on this map, man. It's going to be extremely hard for Zerxia to have counter-stratted this one. And as you mentioned, that desk slam, maybe Zerxia were thinking, all right, we got the veto that we wanted. We'll take that first map easily. Yeah, we'll take that third map easily. I don't know if they're going to make it to the third map. You got these two on the desk. There's no hope of a third map. That's all I'm saying. Did they read the script that was given out beforehand? Clearly not. Apparently they just want to go against the grain or something like that. But overall, look, if it's now the time, like I feel like if Zerxia pull it through, then at least they'll be like, okay, all right, they do deserve this playoff spot now because they were able to go down in a moment of adversity and really, really fight back. Because all I'm hearing is Zerxia, Susu. I need to hear it again and more. And look, I am a little bit fearful in that sort of veto, as you mentioned, right? You know, not taking away Lotus is pretty dicey. That's ballsy. Yeah, look, Split, it's going to be doable, maybe. I'm looking at the stats, and I'm really not liking what I'm seeing from Zerxia. They played it a few times, and the last time they won it handsomely was 3 and a little bit months ago. So every other series that they have won, it's either been in OT or close to OT, and it's not looking nice. The statistics are putting them up against the ropes, and I hope that they can prove the stats wrong, can prove everyone wrong, and make us take it all the way to the third map. But I don't know, man. I'm running out of hope.
Well, now is definitely the time to show us something new for them, right? If you have an agent lineup that you've been prepping and preparing and you haven't displayed that just yet, you're on the face of an elimination where you won't even get a chance to try and now make it into the international stage because it's do or die in this series. If you are feeling comfortable enough to try something new when you are a map down to catch your opponents off guard, now probably is the best time for that. And the scariest thing is as well is the fact that I know we see Boom a little bit more comfortable going into Ascent as the final map of the series too, right? So even if we get there, even if they make it through Split, it's like, oh geez, there's another spicy boy around the corner. Yeah, I'm hoping we really get all the way to 3 and get to see that Ascent, but as you mentioned, Boom, maybe there's a world, this is the only thing, I'm grabbing at straws here. Give it to me. The only world I'm seeing Zerxia win this one is if Boom just get overconfident about what just happened on Lotus. They don't calm themselves down, things start to go wrong and they just don't know how to pull it back. Whereas Zerxia, we've seen them pull multiple comebacks here in Ascension Pacific. They've done it before, they can do it again. It's just the stats aren't on their side right now. Exactly, they just need to have that composure because it is so hard to do it, especially like going away, making sure you reset effectively. Because what do you even do? What do you even talk about in those times, right? You've just got to basically scrap the previous map. That's where the coach is the most important person, the leader as well, to try and just make sure that everyone's on the same page and they can just take this one like it's a fresh series. Now talk to me about when you guys get really, really angry, how do you get it out? Because I know every time I've stubbed my toe, whacked my elbow, got my finger caught in a drawer or something like that, I scream super loud and everything's fine after I scream, right? So is that what we were seeing from Exy? He got that desk slam out. That's all the frustration, and then it's back to business. I'm the exact same. It's usually just an immediate shriek at whatever's happened at you. Call it something stupid, call it a deck of cards or a bottle of water or whatever and be done with it. But you have to just let it out and let it go and cool off immediately. Yeah, whatever it works for him, right? Whatever he needs to do to reset his mentality to get back into this game needs to be done in the short time they've got between these two maps. I'm looking towards Rolex as well to just help him out potentially coming into this next map because Rolex was, previously yesterday having a bit of a rough performance. He's turned that around and did, some pretty good things in that series. So he's figured out what he needed to do to at least get in the right mindset to get back into this series. And now you're together as a team. You're together at the moment as a family. And you really need to band together to try and get over the line here. Because remember, this is one of the most pressure-felt situations for Zerxia that they will feel for quite a while. Oh yeah. Now let's start talking about agents, of course. I'm looking at Boom. They're going with that double duelist. They're going with that double controller. And then the flashes with the Sky. But over on the other side of things, we got Zerxia. They're still running Sage comps here on Split, which can be powerful, but it just feels like it's not the go-to worldwide at the moment. It definitely feels like when we've seen a Sage in this tournament as well, it's kind of been a little bit underwhelming. Unless you wit. Unless you wit. We'll give him that. Yeah, we'll give him that. Yeah, I was more looking to let you crazy guys and stuff. We're kind of questioning a little bit on, Sage isn't generally the meta at the moment. So when you steer away from the meta, you have to do things a little bit differently, right? You need new strategies. You need counter strategies. You need full theories to go in on how to better your opponents, but also play into your strengths when you're going in for an agent like Sage. Because you have to remember at the end of the day, meta agent comps are meta for a reason. When you go outside of them, you're taking away a potential player on a strong agent to put him on Sage. Yeah, and generally... Alright guys, छोटे से ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का स्वागत है VCT Ascension Pacific के अंदर। गेम नंबर 2 की बारी है अब आना। पहला मैप बिल्कुल वन साइडेड, भूमि स्पोर्ट्स बहुत तेजी से लिया था। ज़र्शिया 2 चैलेंजेस है अब इनके लिए, एक तो मेंटली रीसेट करना और एक तो ओवरऑल स्कोर लाइन को रीसेट करना इस गेम के अंदर। जी काफी मुश्किल रहने वाला है बिकॉज बूम यहाँ पर डबल कंट्रोलर अलोंग साइड डबल डुअलिस्ट खेलती हुई नजर आती है। काफी अच्छे से इनका गेम प्ले यहाँ पर जाता है विद द सेटअप। बट अगर बात की जाए ज़र्शिया की तो ज़र्शिया यहाँ पर हमें दिखाई दे सकती है विद द सेम एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन। जनरली ज़र्शिया प्रेफर करती है कि सेज लेकर आए इंस्टेड ऑफ जेट, बट इस बार उन्होंने जेट प्रेफर किया है ओवर सेज एंड मिरर कॉम्प यहाँ पर यूज करते हुए नजर आने वाले हैं। Will they be able to pull through with this? क्योंकि इस composition के साथ ज़र्शिया कम खेली है compared to the Sage composition. एक बार सेज वाला खेला, अब दूसरी बार मुझे लग रहा है ये ले लिया है। और अगर आप देखें तो बूम बहुत ही कंफर्टेबल है भाई। तो अब ये प्रॉब्लम रहेगी दोनों ही टीम्स के लिए कि आप मिड किस तरीके से होल्ड डाउन करने वाले हो, क्योंकि आपके पास कोई सेंटिनल है नहीं।
माना यूटिलिटी बहुत है, मे बी वाइपर वॉल यूज़ होती है या मे बी पॉइजन क्लाउड यूज़ होता है वहाँ उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर। अब ये सारी चॉइसेस जो है ये बूम और जर्शिया दोनों के पास रहने वाली है। कौन प्रॉपरली चूज करके एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज समथिंग आईड लाइक टू सी। बूम की अगर आप बात करें तो देखिए 60% विन रेट है इनका डिफेंस के अंदर। इसका मतलब है मेजॉरिटी ऑफ द राउंड, मोर देन 6 राउंड, 7 से 8 राउंड हर गेम के अंदर बूम निकाल लेती है इस मैप के ऊपर। एग्जैक्टली एंड बूम अपने नाम की ही तरह काफ़ी एक्सप्लोसिव खेलते हुए नजर आती है ऑन टू दिस मैप। फिलहाल के लिए तो डिफेंस फर्स्ट जाने वाले हैं, सो लेट्स सी किस तरह से इनका मूव रहने वाला है, बिकॉज काफ़ी टीम्स हमने देखी है जो डबल डुएलिस्ट डबल कंट्रोलर खेलते हैं, काफ़ी अग्रेसिव आ जाते हैं स्प्लिट के मैप में भी एंड मिड के कंट्रोल पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। हाउएवर दिस माइट बी अ प्लेस वेर यू हैव टू चेंज अ लिटिल बिट, क्योंकि जर्शिया मिड के थ्रू एंटर करना पसंद करती है जनरली। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ इट गोज। बट अभी के लिए तो जर्शिया को काफ़ी चीज़ें मद्देनजर रखनी होगी, बिकॉज अगर सर्वाइव करना है तो ये मैप तो पक्के से निकालना पड़ेगा एंड फिर अगले मैप पे कोई अपॉर्चुनिटी बने। लेट्स सी, ये मैप ही तो निकालना मुझे मुश्किल लग रहा है फॉर द साइड ऑफ जर्शिया, क्योंकि बूम के लिए ब्रेड एंड बटर टाइप का मैप है ये। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा खेला होगी जी। बूम का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस मैप में, सो लेट्स सी कि वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जर्शिया को इस बात का भी एज देने वाला है कि बूम की जो भी स्ट्रैट्स हैं उनके बारे में जर्शिया के पास काफ़ी अच्छी रीड रहने वाली है एंड जर्शिया माइट बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट। बट अदर देन दैट पिछला मैप बूम ने बिल्कुल ही नहीं खेला था, उस पर जीत हासिल की। ये मैप बहुत ज़्यादा खेला है, क्या इस पर हासिल कर पाएंगे जीत या नहीं, दैट्स गोना बी द क्वेश्चन। Oh, that's definitely going to be the question and let's see क्या आंसर यहाँ पर ओवरऑल दे के आ पाती है ये टीम। मैं तो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि किस तरीके से ओवरऑल इनकी तरफ से प्रदर्शन आता है। दैट्स जस्ट व्हाट आई वांट। मतलब अगर ना भी अच्छा खेले जर्शिया के प्लेयर्स तो एटलीस्ट गेम को क्लोज ले जाए, ना भी जीत पाए पर क्लोज ले जाए, अच्छा वैलोरेंट दिखाए। दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। एंड नाउ लेट्स सी, पिस्टल राउंड है, ज़रूरी राउंड है फॉर बोथ दीज टीम्स। स्टार्टअप की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा मिड प्रेजेंस ज़रूर दिखा रही है जर्शिया। ब्लेज किंग इन्फॉर्मेशन इस बारे में ज़रूर उनको मिली है और तुरंत पॉइजन क्लाउड डाल के डिले करवाया जा रहा है और मुझे लग रहा है जर्शिया वेट कर रही है पॉइजन क्लाउड हटेगा तब हम ट्रेल ब्लेजर के साथ मिड को रिक्लियर करके कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली स्टेयर्स के ऊपर एक चोक पॉइंट क्लोज ऑफ कर दिया है जर्शिया ने काफ़ी अच्छे तरीके से एंड साथ ही साथ यहाँ पर बर्जर्क्स को पिक ऑफ करते हुए नजर आएंगे, विच मीन्स दैट मिड का जो कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर जर्शिया अपने हाथ में ले पाएगी। मेल रूम के थ्रू नेविगेट करने वाले हैं एक प्लेयर एंड बाकी के चारों मेन के थ्रू हिट करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी ऑफ एंगल पे हैं जी। दिस कुड बी अ रियली गुड थिंग, ऑल्दो अलर्ट किसी को नहीं पता अलर्ट यहाँ पर है, पर अलर्ट को ये नहीं पता है कि ब्लेज किंग उस पोजीशन पे है। बिकॉज ऑफ दिस वॉल्स ये टाइमिंग मिली अलर्ट को, ही इज गुड फॉर वन, बट क्योंकि ब्लेज किंग ने एक फ्रैग निकाला है अब थोड़ा सा प्रेशर में फंसेंगे। फेमस ने यहाँ पर अलर्ट को पिक ऑफ किया पर सीरा फॉप भागने की कोशिश कर रहे थे ब्लेज किंग, पनिश करके उनको भी पिक ऑफ किया गया। सो ये एक 3v2 बना जरूर है, बट आप एचपी बार देखिए जर्शिया के ऊपर 45 फॉर सीरा, 46 फॉर ओलेक्स, 70 एचपी पे बचे एक्सजेडी। सारे प्लेयर साइट में बिल्कुल हाथ पकड़ के खेलने वाले हैं और ये राउंड मैं कह रहा हूँ अभी भी डुएबल है फॉर टीम बूम स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली बूम स्पोर्ट्स के पास यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन जर्शिया को यहाँ से ड्रेन आउट करवाना मुश्किल रहने वाला है बिकॉज अगेन जैसा आपने कहा तीनों प्लेयर्स स्टैक करके खेलने वाले हैं, तो इसीलिए फाइट को आइसोलेट करने के लिए यहाँ पर बट ये बूम बॉट उनकी पोजीशन भी थोड़ी सी अब जाम तक पहुंचाना एक मुश्किल बात रहने वाली। फ्रेंजी का इस्तेमाल अच्छे से किया जा सकता था, स्पैम कर सकते थे, लेकिन फ्रेंजी बहुत पहले ही आउट हो जाएगी एंड फिर शीरो 2 मात्र पिक्स निकल पाएंगे एंड सीरा पॉप के हाथों हो जाएगा इस राउंड का सत्यानाश, जो जर्शिया के लिए कल्याण कहलाएगा। जर्शिया ने अच्छी तरीके से रोक के रखा इस पुश को आने से। मतलब जब इतनी यूटिल आ रही होती है साइड के अंदर तो बड़ा नेचुरल होता है कि अगर आप जल्दी पीक करके अपनी जान दे दो, बट ऐसा था नहीं। और ये देखिए ये मैं कहूँगा यहाँ लकी हो गए सीरा, ये जो फ्रैग मिला ना उनको और यही राउंड बदल गया और उसके बाद फेमस के ऊपर 1 टैप। अब देखिए शीरो ने दोनों को पिक ऑफ किया था क्योंकि दोनों प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा लो थे, पर एल्बो से आए डिफरेंट एंगल यहाँ पर निकाला सीरा फॉप ने और वो फ्रैग निकाला है। यूजुअली सीरा फॉप खेलते नहीं है रेस, इनिशिएटर प्लेयर है ये इनका, पर आज डुएलिस्ट पे अभी तक तो एक राउंड में तो ठीक ठाक खेल के गया है।
वेल विल फाइंड आउट कितनी देर तक कंटिन्यू कर पाते हैं अपनी ट्रेल को. अभी तो वेपनरी एडवांटेज के ऊपर इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा एक बेटर पोजीशन जर्शिया अपने लिए बना सकती है. ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वो अटैकिंग साइड पे खेल रहे हैं, उन्हें एक और एडवांटेज मिलेगा विच इज़ द नंबर्स. बट देन अगेन डिफेंस साइडेड मैप है तो डिफेंस के पास में अपॉर्चुनिटी हमेशा ही रहती है. ऑल राइट, एक कंप्लीट ए हिट. सारे के सारे प्लेयर्स ए साइड की तरफ मूव इन कर चुके हैं. अपग्रेडेड अगर आप पिस्टल्स की बात करो तो सिर्फ बजर्क्स पे एक शॉट ही है और दूसरी तरफ शीरो के पास एक शेरिफ है. अब इस सबको यूज़ करने के लिए, शॉर्टी को तो स्पेशली यूज़ करने के लिए तो क्लोज रेंज में आना पड़ेगा. तुरंत जैसी ट्रेल ब्लेजर देखा है, मॉली ड्रॉप कर दी, एंट्री ताकि रोकी जा सके. ज़र्शिया क्या कमिट करेगी इसके थ्रू? बजर्क्स क्लोज में है ज़रूर और ये मार दी शॉटी. स्पेक्टर रिट्रीव करी है और सेवरीन ने भी हेवन से जंप करके सीरा को टेक डाउन कर लिया. पकड़ लिया बूम के प्लेयर ने इस चोक पॉइंट को. अब देखते हैं बजर्क्स. ये फ्रैग जरूरी था, ये फ्रैग निकालते तो शायद राउंड आ जाता, पर अब फेमस की भी लोकेशन नोन है और ज़र्शिया शुड इजीली बी एबल टू क्लीन अप द रिमेनिंग 2 प्लेयर्स. हेवन एंड साथ ही साथ साइड से एक एंगल यहाँ पर बनाने की कोशिश थी. शीरो ने अपने आप को रिलोकेट किया. 1v2 में पहुंचे हुए हैं. काफी लो एचपी एलबीवाई पे रहने वाली है, उस पे कैपिटलाइज कर सकते थे लेकिन क्या ही विफ किया है. यहाँ पर सीधे एलबीवाई के शॉट से तबाह होंगे एंड दैट्स गोना बी अनदर राउंड फॉर ज़र्शिया. एंटाई को था जीतने का यहाँ पर पूरी संभावना थी ज़र्शिया के पास में, बट 3 वेपन्स ड्रॉप हुए हैं. दैट्स अ लॉट ऑफ डैमेज टू टेक ऑन योर एंटाई, क्योंकि फिर आपका बोनस नहीं रहता. हाँ, अब आपका बोनस नहीं रहेगा. अब वो आपको शेरिफ्स और अपग्रेडेड पिस्टल्स के साथ खेलना पड़ेगा. Exactly. And we do also have some Sira Fob supporters in the chat or in the crowd I should say. Chat का हमारा खत्म हो गया, अब lands हो रहे हैं. Yes. तो सीरा परफॉर्मेंस तो अच्छा चाहिए रहेगा आज इनसे. अब देखिए इस राउंड के अंदर एक वैंडल जरूर है उनके पास, बट 2 प्लेयर्स रोलेक्स और एलबीवाई खेलने वाले. शेरिफ पे बुलडॉग रहेगी, एक्सडी के पास अलर्ट जस्ट एज एक्सपेक्टेड टू वर्क विद. पर वैसे तो सीरा ने एंट्री दिलवा दी है. ये बजर्क्स के ऊपर जो फ्रैग मिला है, दैट मींस इट्स अ 4v5 फॉर द एंटायर राउंड नाउ. एग्जैक्टली ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए स्मोक ऑफ करके एंगल को टाइम तो बाय कर लेंगे यहाँ पर. एंड आई गेस टाइम के ऊपर खेला जा भी सकता है, बट अभी तो बहुत सारा वक्त बचा हुआ है ऑन द क्लॉक. बीइंग ऑन डिफेंस आप कोशिश करते हैं कि आपके पास बेटर पोजीशंस बनी रहे, बट देखिए अब आपने मौका बहुत दे दिया. वेपन्स अपग्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं फ्रॉम द साइड ऑफ ज़र्शिया. एक इकलौती शेरिफ है, बाकी प्लेयर्स के पास में डुएबल वेपन्स रहने वाले फॉर दिस फाइट. एंड ये लीजिए क्लोज रेंज में आने वाले शीरो के हाथों यहाँ पर एक फ्रैग निकल सकता है, बट ट्रेल ब्लेजर इन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा एंड अलर्ट को पिक ऑफ करने में कामयाब रहेंगे. देखिए फेमस को राउंड बचाने की उम्मीद है, पर वो भी उसमें भी खड़े नहीं उतर पाएंगे. ब्लेज किंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग. 1v3 वेपन बचाएंगे कि अटेम्प्ट करेंगे, वो क्वेश्चन है. ये डबल पिक आएगा और ज़र्शिया बोनस भी कन्वर्ट कर देगी. चलिए स्टार्ट तो बहुत ही पॉजिटिव मिल गया ज़र्शिया को इस गेम का. 3-0 की लीड है, वो भी एक ऐसे मैप के अंदर जो थोड़ा सा डिफेंस को ज्यादा फेवर करता है. उसमें अटैक में रह के 3 राउंड निकाल लिए ज़र्शिया ने और मोस्ट प्रोबेबली चौथा भी आ ही जाएगा. ज़र्शिया काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली परफॉर्मेंस अभी तो दिखा रहा है, बट देन अगेन इफ़ यू रिमेंबर द स्कोर लाइन ऑन द फर्स्ट मैप, स्टार्ट काफ़ी स्ट्रांग हुआ था टीम का, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर धीरे धीरे करके इनके पत्ते बिखरते हुए नजर आए थे. इस बार देखते हैं क्या कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या अपने राउंड्स की लीड को फॉलो अप कर पाएंगे, बिकॉज दैट्स गोना बी द बिगेस्ट टास्क फॉर ज़र्शिया. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट लेकिन ज़रूर आया होगा, क्योंकि बोनस को यहाँ पर कन्वर्ट कर पाना बहुत मुश्किल था इनके लिए. ज़्यादा वेपनरी अच्छी नहीं थी एंड बोनस में 2 प्लेयर्स शेरिफ पे चल रहे थे. उसके बावजूद वो राउंड निकाल लिया एंड कहीं ना कहीं अपने आप को एक मोरल बूस्ट भी दे दिया, जो कि पिछली हार के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. अब ये मिड का सेटअप लेट्स सी किस तरीके से वर्क करता है. एक्सडी ने एक फ्रैग निकाल दिया, बी मेन वाला जो प्लेयर था कर रहा था, और यहाँ पर शेरिफ शॉट लगेगा फेमस का, पर पीछे से अलर्ट निकलेंगे, बोलेंगे सरप्राइज ब्लेज किंग और फेमस. और जल्दी से एक आपने उम्मीद लगाई थी कि ये शेरिफ शॉट की वजह से मुझे राउंड मिल जाएगा, वो होगा नहीं. ज़र्शिया चौथा कन्वर्ट करेगी इस राउंड के बाद. एग्जैक्टली अब ये जो लीड आ रही है ज़र्शिया के पास, ये काफ़ी ज़्यादा बुलंद होती चली जा रही है. विद एवरी सिंगल राउंड फ्लैश करेंगे, यहाँ पे पहला फ्रैग निकालेंगे. दूसरे की कोशिश थी लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाए. दोबारा से हल्का सा शॉट्स को मिस करते हुए नजर आए एंड इसी के साथ में बजर्क्स को भी पिक ऑफ किया जाएगा एंड द राउंड क्लोजेस डाउन इन अनदर फेवर फॉर ज़र्शिया एज एक्सपेक्टेड. काफ़ी अच्छा वेपनरी एडवांटेज था, लेकिन ज़्यादा पिक्स भी नहीं मिले हैं इस बार फॉर द साइड ऑफ बूम ई स्पोर्ट्स. ना ही इकोनॉमी को डैमेज कर पा रहे हैं, ना ही खुद के लिए अल्ट्स फार्म कर पा रहे हैं.
हाँ ये देखिए, ये तैयार ही नहीं थे बूम के प्लेयर। एक और प्लेयर निकल सकता है वहाँ से, और मतलब ठीक है, सेट प्लेस में इको राउंड्स के अंदर अगर ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं भी करते तो चलता। आपने गैम्बल लिया एक पार्ट ऑफ द मैप के ऊपर और आपने ट्राई किया राउंड को उसके ऊपर बदलने के लिए। दैट वॉज नॉट द केस, पर अब यहाँ पर मुझे लग रहा है पहली बार बूम ने हल्का सा फोर्स होकर टाइम आउट बुलाया है, और उनके कोच काफ़ी ज़्यादा वोकल भी है, बताना चाह रहे हैं कि क्या गलतियाँ हो रही है और उनको किस तरीके से एडजस्ट करना है डिफेंस के अंदर। 6 राउंड तो मुझे लगता है बेयर मिनिमम चाहिए होते हैं जब आप डिफेंड कर रहे होते हो स्प्लिट के ऊपर, टू मेक इट अ कॉम्पिटिटिव गेम। एग्जैक्टली, एंड दैट्स द बेयर मिनिमम एज यू सेड। काफी अच्छे स्टैटिस्टिक्स दिखाई दिए थे बूम के हमें स्टार्ट ऑफ द मैच में। They had a great win percentage on the map and they had an absolutely amazing win percentage on the defensive rounds. लेकिन वो चीज़ अभी तो स्कोर लाइन में बिल्कुल नहीं झलक रही है। कम से कम 7-5 का स्वैप यहाँ पर आना चाहिए था, बट अब तो ऐसा लग रहा है कि जर्शिया काफ़ी तेज़ी से अपने आप को एक बेटर पोजीशन में पहुंचा देगी। जो एडवांटेज यहाँ से बूम को लेके वॉक इन करना चाहिए था सेकेंड हाफ में, वो यहाँ पर जर्शिया कमाती हुई नजर आ रही है फिलहाल। ओह यस, जर्शिया जिस तरीके का मोमेंटम लेके आई है, जिस तरीके के राउंड्स अभी तक जीत के रही है, दोज हैव बीन वेरी वेरी गुड, एंड लेट्स सी क्या ये कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि देखिए इस राउंड को भी जीतने के लिए सीरा फॉप के पास वो शो स्टॉपर है, एंट्री तो दिला सकते हैं, बट उसके बाद फिर पोस्ट प्लान किस तरीके से खेलेगी जर्शिया, दैट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आई से फेमस को भी अगर एक भी फ्रैग मिलता है तो उनका भी शो स्टॉपर एक्टिवेट हो जाएगा, सेम गोस फॉर सेवरीन एज वेल। तो बूम भी कहीं ज़्यादा दूर है नहीं इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। अर्ली नेट डाला है ताकि किसी भी तरीके का अग्रेशन रोका जा सके, और ट्रेल ब्लेजर से कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, और LBY 70 HP छोड़े गए सिर्फ। वो नेट ने वैल्यू तो दी है अर्ली ऑन, और ये ट्रेल ब्लेजर से 3 प्लेयर का इन्फॉर्मेशन मिला है। अब यहाँ पर ये आया शो स्टॉपर, आप एंटर करना चाह रहे हैं पर ये साइड तो आपको थाली पे दी हुई है, कोई भी परेशानी होगी नहीं आपको इस साइड को लेने के लिए। नाउ बूम इज प्लेइंग कंप्लीट रीटेक ऑन दिस साइड, एंड लेट्स सी किस तरीके से रीटेक आता है बूम की तरफ से। ये लीजिए, ऑलरेडी पोस्ट प्लान सिनेरियो में पहुंचा जरूर दिया है जर्शिया ने, बट इट्स अ 5v5 सिनेरियो, कभी भी पासा कहीं भी पलटता हुआ नजर आ सकता है। जो एंगल्स यहाँ पर बूम के पास में मौजूद है ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, ज़्यादा इनटू द साइड नहीं है। यहाँ पर स्नेक बाइट का इस्तेमाल करके वल्नरेबल करेंगे प्लेयर्स को, एंड सेवरीन की थाली में परोसे जाएंगे। विद दैट सैचल मूवमेंट के साथ एक काफ़ी अच्छी पोजीशन फेमस भी एक्वायर करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से अपने रीटेक को यहाँ होल्ड कर रहे हैं। कर दिया रीटेक। यप, बूम, ये इन्होंने लगाया था कॉस्मिक डिवाइड, साइड को काटा था 2 हिस्सों में, और जो 2 प्लेयर्स इमेज से बिल्कुल बाहर खेल रहे थे सपोर्टिंग रोल, वो कभी एक्टिवेट ही नहीं हो पाए। डबल सैचल ऐसा किया यहाँ पर फेमस ने कि प्लेयर को पता ही नहीं चला कब वो बगल में था, और उसके बाद ऑपर ने भी सीरा को टेक डाउन किया। ये देखिए क्या सैचल किया है LBY, नो आइडिया, नो क्लू कि ये प्लेयर यहाँ पहुंचा हुआ है। और उसके बाद बूम बड़े ही आसानी से साइड में घुसे, डिफ्यूज किया क्योंकि वो वॉल थी, स्पैम आ नहीं सकता था, और ओवरऑल एक अच्छा राउंड आया बूम का। एग्जैक्टली, यहाँ पर सीरा पॉप का पूरा शो स्टॉपर भी डिप्लॉय किया गया है, एंड इतने बड़े अल्टी डिप्लॉयमेंट के बावजूद आपके पास में अगर कोई वैल्यू नहीं आई है, राउंड भी आपके हाथ में नहीं आया है, तो फिर डेफिनेटली एक थोड़ी सी दर्दनाक सिचुएशन बन जाती है। काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग अल्टीमेट रहता है वो, बट उसके साथ जो वैल्यू एक्सपेक्टेड थी वो नहीं निकल पाई। एंड ये लीजिए, स्मोक के थ्रू स्पैम करके ही पहला फ्रैग निकाल लेंगे। डुअलिस्ट को शट डाउन किया गया है, मतलब एंट्री में यहाँ पर दिक्कत ज़्यादा आने वाली है। अभी भी खैर जेट मौजूद है जर्शिया के पास, बट दैट्स ओके। ब्लेज किंग, ये क्लासिक ब्लेज किंग है। कल भी इसने यही किया था, स्मोक के थ्रू स्पैम, दीवार के थ्रू स्पैम, दुनिया भर के स्पैम से फ्रैग निकाले थे, इतने से इफेक्टिव नहीं होता। देखिए 35 गोलियां बची है इनकी फैंटम में सिर्फ, और अभी भी स्पैम के लिए सोच जरूर रहे होंगे। एंगल यहाँ पर प्रॉपरली क्लियर किया नहीं XZD ने, और उनको भी चटका दिया गया। बजर्क से अलर्ट को टेक डाउन किया, और बूम का दूसरा राउंड दिलवा दिया यहाँ पर। LBY की HP देखिए, 10 मात्र HP बची है, फाइट ऑफ करना मुश्किल रहने वाला है इनके लिए। 4v2 का सिचुएशन है, अभी भी प्लांट करने के लिए चेष्टा तो जरूर रहने वाली है इनकी। 30 सेकंड की तरफ से मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं रोलेक्स एंड LBY, और रोलेक्स को कोई अंदाजा नहीं था यहाँ पर ब्लेज की पोजीशन का, लेकिन सेवरीन के साथ साथ उस पोजीशनिंग का अंदाजा हुआ है, और उसको कैप्टलाइज भी करते हुए नजर आए। जोशिया टाइम नहीं बचा है, 10 सेकंड बचे सिर्फ स्पाइक प्लांट के लिए, और उनको पता है शीरो इनके पीछे आ रहे हैं। शीरो को टाइमिंग मिल जाएगी तो ये राउंड हाथ से जाएगा। बजर्क से ऑफ से फ्रैग निकाला है, LBY पे वैसी HP नहीं बची है, अब इनको रन डाउन कर देंगे। अरे भाई ये फिर से थोड़ा क्लोज गया था, वो हेवन पे हल्का जंप हो गया, मुझे लग रहा है वो जो स्क्रोल व्हील था
उस पे बाइंडेड है जी। जंप, और जैसे ही प्लेयर देखा लेफ्ट क्लिक की जगह वो हल्का सा स्क्रॉल व्हील टैप हो गया, प्लेयर जंप कर गए इंस्टेड ऑफ फायरिंग, और वो एक और फ्रैग दे बैठे। रीग्रोथ से एक प्लेयर को रीसेट जरूर किया था, बट गुड फॉर बजर्क्स कि उन्होंने वो ऑफ शॉट मार के राउंड कंट्रोल में रखा। ये थोड़ा महंगा हो गया, जहां चारों राइफल बचनी चाहिए थी वहां बची सिर्फ 2। जी, राउंड महंगा ज़रूर था लेकिन फेवर में आया, तो कहीं ना कहीं उस बात की खुशी ज़रूर मना रहे होंगे बूम स्पोर्ट्स के प्लेयर्स, बिकॉज अगेन दे रियली नीड द राउंड्स। अभी के लिए फॉल बैक पे चल रहे हैं, दे नीड अ कपल मोर राउंड्स टू एक्चुअली मेक इट इनटू द इक्वलाइजर एंड क्रिएट अ लीड फ्रॉम देयर। ये लीजिए ब्लेड स्टॉर्म लेके अलर्ट काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली यहाँ पर ऑलरेडी हेवन कंट्रोल की कोशिश कर ज़रूर रहे हैं, टावर तक आ चुके हैं एंड अब रोप्स से आना पॉसिबल नहीं रहने वाला है फॉर द साइड ऑफ बूम स्पोर्ट्स अंटिल फेमस गोज अहेड एंड डज समथिंग मैजिकल। ओह नाइस, ये बजर्क्स की बहुत अच्छा ऑफ शॉट, ऑल्दो अलर्ट ने अपने नाइस के साथ बराबर किया है, और ये पड़ा सेवरीन को शॉट डैश किया है, ऊपर से निकल रहे थे बजर्क्स ने कहा रुको जेट डिप दिखाता हूँ कैसे होता है। एक्सडी ने लेकिन बेस किंग को पिक ऑफ करके नंबर फिर से अपने फेवर में डाल। प्लांट आएगा, ये 2v3 का पोस्ट प्लांट बनेगा, एक्सडी का अच्छा एंगल, एक और फ्लैग। अब बजर्क्स को एस चाहिए अगर ये राउंड में कंटेस्ट करना है तो। यप, एंड वाइपर स्पिट भी कमिट हो चुकी है, तो यहाँ पे फाइट ऑफ करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है। अपने ऑपरेटर बचाएंगे या फिर वेपन स्विच करके इस फाइट में दोबारा घुस जाएंगे। ओके, ही हैज़ अ शॉटी, तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है इनसाइड द पिट ईदर, बट काफ़ी संभल के कदम रखने पड़ेंगे, वक्त से भी बचना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर डिफ्यूज़ करने के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। विल फॉल बैक, सेव द ऑपरेटर। हाँ वही एग्जिट ढूंढ रहे थे, लगता है चौथा फ्रैग भी मिलेगा और एस भी मिलेगा इस प्लेयर को। एलबीवाई के पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, या तो गन छोड़नी पड़ेगी इन्हें। सारे के सारे प्लेयर्स को टेक डाउन जरूर किया है बजर्क्स ने यहाँ पर राउंड एट द एंड ज़र्शिया को जाएगा। वो जो मिड पे आपने पिट डाली लेकिन उसका काउंटर ज़र्शिया को बड़ा अच्छा मिला। ए हेवन को सीधा कंट्रोल में लिया और उसके बाद साइड पे एक्सप्लोड किया। नाइफ जिस तरीके से चलाया अलर्ट ने वो बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड बन के आया और ओवरऑल राउंड दिला के गया है ज़र्शिया को। एग्जैक्टली, अलर्ट के नाइफ्स एंड देन इन द एंड जो ब्लेड स्टॉर्म यहाँ पर सॉरी वाइपर स्पिट यहाँ पर इस्तेमाल हुई थी फ्रॉम द साइड ऑफ ज़र्शिया, वो दोनों ही यहाँ पर विनिंग फैक्टर बनते हुए नजर आए इस पर्टिकुलर राउंड के अंदर। बट अब वो दोनों अब अल्टीमेट्स ड्रेन आउट हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉस्मिक डिवाइड के बल में यहाँ पर ज़र्शिया को चलना पड़ेगा। एंड ऑन द अदर साइड यहाँ पर ज़्यादा कोई अच्छी हालत बूम स्पोर्ट्स की भी नहीं है, वो भी यहाँ पर शो स्टॉपर के साथ चल रहे हैं। देखिए ये अगर आप जा रहे हैं मिड पे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ये स्पैम आएगा और इसको काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेंशन डाल के सोच रहे एंगल क्लियर है, ये रीपुश नहीं आना चाहिए था यार। ब्लेज को इतना अच्छा फ्लैग निकालते और उसके बाद साइड वाले प्लेयर्स नहीं होल्ड कर पा रहे इस समय डिफेंस के अंदर। ज़र्शिया इज क्रैकिंग थ्रू बूम राइट नाउ। ओह नो, ये लीजिए यहाँ पर शो स्टॉपर भी आएगा, उसकी भी वैल्यू मिलेगी। 1v2 में सिचुएशन को कन्वर्ट तो किया है, एज भी बहुत कम है, दोनों ही प्लेयर्स थे। कोलैटरल में ले जाएंगे एंड ये लीजिए 4 किल्स के साथ फेमस इस राउंड को शट डाउन करते हुए नजर आएंगे। विद दैट द डिफ्यूजल गोज इन एंड बूम स्पोर्ट्स एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल राउंड को अपने हित में कन्वर्ट करते हुए नजर आएंगे। ये क्या राउंड निकाला है फेमस ने, वो मिड एयर सेकेंड सैचल जो यूज हुआ उससे प्लेयर्स को लगा कि वो राइट साइड से आएंगे, पर ये जो छोटा एडजस्टमेंट था फेमस का बहुत ही बढ़िया। ऐसी सिचुएशन में 1v3 में कोई शो स्टॉपर निकालता भी नहीं है, पर यहाँ पर दोनों प्लेयर्स को चकमा दिया फेमस ने और दोनों हेडशॉट कनेक्ट करे। ये रीटेक पॉसिबल होना नहीं चाहिए था प्रैक्टिकली, पर करके दिखाया है फेमस ने। बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड फ्लैशी गेम प्ले के साथ यहाँ पर तीसरा राउंड अपने लिए बूम स्पोर्ट्स ने हासिल किया है। बार बार ज़र्शिया को प्लांट करने का मौका मिल रहा है लेकिन कुछ बार ही होल्ड कर पा रहे हैं, होल्ड कर पाने में थोड़ी सी कमी आ जरूर रही है एंड अब धीरे धीरे बूम स्पोर्ट्स अपनी लय ताल पकड़ चुकी है। हाउएवर दोबारा से फर्स्ट ट्रैक गवा बैठे हैं लेकिन बदला ले चुके हैं, दोनों ही तरफ से गेट्स ऑफ बोर्ड है। But then again, शो स्टॉपर आ सकते हैं यहाँ पे सीधा पॉप के लिए, जो कि थोड़ा दिक्कतमंद रहेगा। लेट्स सी दो रिक्लियर करना चाह रहे हैं वेंस को फेमस। अच्छा ये तो पता चला है वेंस के अंदर कोई नहीं ड्रॉप किया है,
बट दूसरी तरफ तो हो ही सकता है। सेवरीन ऑफ एंगल है, ये यूजुअली क्लियर होता नहीं है कंप्लीटली, पर क्योंकि एक्जेडी के हाथ में ऑफ है, मैं कहूँगा ये थोड़े से ज़्यादा फेवर्ड रहेंगे इस एंगल के ऊपर। अब वो देख रहे हैं अभी बीमेन के आसपास कि भाई बीमेन पे कोई प्लेयर तो मैं उसको पिक ऑफ करूँ, पर ये एंगल अच्छा था, हेडशॉट दे दिया और वो 115 लगाए। अब यहाँ पर सेवरीन को फ्लैश ऑफ किया जाएगा और एक्जेडी को वो फ्रैग मिलेगा। साइड के अंदर ड्रॉप करते हुए एलबीवाई, उनको तो पकड़ा जरूर सिर्फ ऑफ ने, पर शीरो ने निकाला है ट्रेड। और फिर से एक ऐसा इको राउंड शायद इनके हाथ में आ जाए जर्शिया के। क्या फेमस फिर से कुछ जादू ही करिश्मा कर सकते हैं, शुरुआत तो कर दी है और सिर्फ ऑफ बचे 10 HP। बीमेन से अगर प्लेयर आते हैं ब्लेज किंग थोड़ा सा और लेट और एक्जेडी को वो फ्रैग नहीं मिला तो बहुत ज्यादा परेशानी बन जाएगी। ऑफ है यहाँ पर हाथ में एक्जेडी के और रिक्लियर कर रहे हैं वो बीमेन को, और जैसे ही अनस्कोप किया वैसे ही ब्लेज किंग आ गए। उसके बाद सीरा तो बचे ही 10 HP थे। तो चलिए कंट्रोल कर लिया डैमेज को बूम ने और फिर से एक और इम्पोर्टेंट राउंड जीत कर गई है बूमी स्पोर्ट्स। शानदार राउंड एंड शानदार कन्वर्जन। पहला जो लॉस हुआ है यहाँ पर बर्जर्क्स का वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ा है बूमी स्पोर्ट्स को, क्योंकि उसके चलते जो ऑपरेटर थी वो आ गई जर्शिया के हाथों में एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाल यहाँ पर दिखाना चालू कर दिया था। एक्जेडी विद दैट ऑपरेटर काफ़ी वैल्यू निकालने लग गए थे, नंबर्स एडवांटेज टीम को दिला चुके थे एंड प्लांट करने की पोजीशन भी बना चुके थे। बट देन बूमी स्पोर्ट्स जस्ट वॉक्ड इन एंड सेड नो। शट डाउन किया गया यहाँ पर एक्जेडी को एंड उसके बाद में आखिरी जो फ्रैग बचा था उसके लिए क्रॉस फायर तो क्रिएटेड था ही, बट साथ ही साथ यहाँ पर जो पोजीशनिंग थी उसका पूरा फायदा ब्लेज किंग अकेले ही उठा गए, तो क्रॉस फायर की जरूरत पड़ी ही नहीं। बट वेल ब्यूटिफुली डन टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अब जो पोजीशन है उसमें सिमिलर सिचुएशन दोबारा से आ चुकी है। यहाँ पर ब्लेड स्टॉर्म ऑनलाइन है एंड कॉस्मिक डिवाइड आ सकता है इन द अदर हाफ। अगर जर्शिया की बात की जाए तो कॉस्मिक डिवाइड एंड शो स्टॉपर दोनों ऑनलाइन रहने वाले हैं। ये डिनाई कर दिया इन्होंने शो स्टॉपर को और अभी भी पोजीशन है, बस उनको जरूरत पड़ेगी हेल्प करने की। शीरो ने एक फ्रैग जरूर निकाला है और ये एक्जेडी साइड स्टेप, मजाक सो गए आधे सेकंड के लिए, वो शूट कर नहीं पाए और उसी एक सेकंड की जरूरत थी। हमें पेंशन से थोड़ा बहुत चीप डैमेज तो जरूर मिलेगा, बट ये 3v3 रीटेक एक बार फिर से ब्लेज किंग और फेमस को कुछ तो नया करना पड़ेगा। लेट लर्क जो है ब्लेज किंग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिड से, पर रोल है जस्ट बेटर इन दैट एंगल, वाज एबल टू विन द डुअल। और अब फेमस को अकेले ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि उनके जो सेकंड प्लेयर है वो सिर्फ कवर दे सकते हैं इस समय सेवरीन। वेल यहाँ पर रुकने के लिए ये पुल रोकने के लिए है ग्रेविटी वेल, अगर रुकेगा तो प्लेयर उठे क्यों सेवरीन? इतना अच्छा सेट प्ले बनाया था आप दोनों ने मिलके, पर उठे क्यों? पुल आया नहीं, मॉल ही था वो, सिर्फ उठने की जरूरत थी नहीं। पर जर्शिया लकी स्टार्स है इनके साथ आज, अदरवाइज ये राउंड तो नहीं आ रहा था अगर उठते नहीं वहां पे तो। एग्जैक्टली एक बहुत ज्यादा मेहनत कर अपने आप को डिफ्यूजल पॉइंट तक पहुंचाया बूमी स्पोर्ट्स ने एंड उसके बाद गलत समय पर डिफ्यूज छोड़ दिया। दिस डिड नॉट वर्क आउट फॉर देम एंड अगेन जैसा आपने कहा जर्शिया काफ़ी ज़्यादा लकी रही इस राउंड के अंदर। बट वेल 2 और राउंड बचते हैं इस हाफ में एंड इस बार देखिए डिफेंस का जो सेटअप है फ्रॉम द साइड ऑफ बूमी स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है। साइड बी को छोड़ दिया है खाली, साइड ए के ऊपर करना चाहते हैं पिंच। 4 प्लेयर्स का एक साथ यहाँ पर बैक स्टेप आ रहा है, लेकिन सीवर्स के थ्रू जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड वहाँ पर काफ़ी देर तक तो एक्जेडी मौजूद थे, उन्होंने अपने आप को हिलाया ही नहीं था उस पोजीशन से, पर अब उस पोजीशन को छोड़ चुके हैं। बैक स्टेप बहुत जरूर कर रहे हैं, अंदाजा मिल चुका है एंड यहाँ पर 2 फ्रैग्स निकाल भी लेंगे। फेमस ने तीसरा उठाया जरूर, बट अपनी शेरिफ से कितनी वैल्यू स्क्वीज कर पाएंगे? शोस्टॉपर भी है, शोस्टॉपर भी है एंड अब वेपन भी अपग्रेड कर चुके हैं। ये इवेंट के लिए देख रहे हैं प्लेयर, पर चलिए शीरो वो कुछ नहीं कर पाए इस पोजीशन के अंदर। और अब फेमस 5 HP अकेला खिलाड़ी कुछ भी नहीं ले पाएगा। वाइड भी करने का डिसीजन था और वो गलत साबित करवाया है जर्शिया ने। इस अटैकिंग हाफ के अंदर जो कंट्रोल रहा है जर्शिया का, दैट हैज बीन अमेजिंग और चाहेंगे इसको 8-4 क्लोज करना। एब्सोल्युटली, आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि डिफेंसिव साइड पे रहने के बावजूद अगर आप स्प्लिट में 6 राउंड एटलीस्ट नहीं ले पाते हैं तो फिर आपके लिए सिचुएशन यहाँ पर बिगड़ सकती है। एंड ये लीजिए 7वां राउंड आता है जर्शिया के लिए, विच मीन्स फर्स्ट हाफ में 6 राउंड का सपना तो अब बूमी स्पोर्ट्स छोड़ ही दे। 5 कन्वर्ट करने का मौका रह सकता है, बट देन अगेन उसके लिए वाइपर्स पिट एज वेल एज सीकर्स को ऑनलाइन आना पड़ेगा, बिकॉज रीटेक के लिए आपको अपने अल्टीमेट्स पे काफ़ी डिपेंड होना पड़ सकता है। कॉस्मिक डिवाइड अवेलेबल रहेगी जर्शिया के पास टू डिनाई अ लॉट ऑफ मूव्स, लेकिन हमने पिछले ही मैच में देखा था
कि बहुत ही शानदार तरीके से कॉस्मिक डिवाइड एंड वाइपर स्पिट का यूज़ करके बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी अपने लिए टीम बनाती हुई नजर आई थी। बट लेट्स सी क्या इस बार सेम चीज़ हो पाई, क्योंकि अगर अटैकर्स अपनी कॉस्मिक डिवाइड लगाते हैं और उसके एवज में एक वाइपर स्पिट आती है तो अपॉर्चुनिटी ज़रूर बनेगी बूम स्पोर्ट्स के लिए। अभी तो बीमेन पे ऑफ लगा के बैठे हुए हैं बजर्क्स, और यॉक को क्लियर करने के लिए यूटिलिटी ज़रूरी है। एलबी वाइस सही डिसीजन है, पहले ट्रेल ब्लेजर भेजा है, प्लेयर को एंगल से पुश बैक किया और अब बजर्क्स को चाहिए होगा सपोर्ट के लिए। ब्लास्ट आएगा, स्मोक थोड़ा खराब हो गया अलर्ट का, तो क्लाउड बर्स्ट जरूरी था और बजर्क्स ने उस चीज पे पनिश किया है, दूसरा फ्रैग भी निकाला है। एलबीवाई यहाँ स्पैम हो सकते हैं, ये स्पैमेबल एंगल है, शो स्टॉपर दोनों फटे। अब अकेले एलबीवाई बचे स्मोक के पीछे, स्मोक छटा, दुर्घटना घटी और एक क्लाउड बर्स्ट, एक मिड फेस क्लाउड बर्स्ट किस तरीके से राउंड निकलवा सकता है आपके हाथों से, ये देखिए। That was very beautifully executed. Starting itself में यहाँ पर पहला फ्रैग निकाला एंड उसी के साथ दूसरा फ्रैग भी यहाँ पर लेकर चले गए। जैसा कि आप बता रहे थे क्लाउड बर्स्ट यहाँ पर मिसप्लेस हुआ है एंड उसके बाद में जो वैल्यू यहाँ पर शो स्टॉपर से निकाली वो भी काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ थी। नंबर्स ऑलमोस्ट इक्वलाइज हो चुके थे, शो स्टॉपर्स की मदद से यहाँ पे उसको 3v1 में कन्वर्ट किया गया एंड देन आखिरी फ्रैग यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से निकल गया फॉर द साइड ऑफ बूम ई स्पोर्ट्स। बट अब अटैकिंग साइड में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बूम ई स्पोर्ट्स के पास रहने वाली है। हाँ, बिग फ्लेक्स तो है ये ज़रूर। बजर्क्स ने ओवरऑल 3 डिफरेंट रोल और 5 अलग अलग एजेंट खेले हैं। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर हैं, सीख लेनी चाहिए काफ़ी लोगों को इनसे, कि इतना ज़्यादा अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो टीम को तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये ओवरऑल। सो लेट्स सी, अभी वैल्यू तो प्रोवाइड करी है पर ये 7-5 का जो हाफ आया ये आपके फेवर में आया नहीं है। बूम क्या वापसी कर पाएगी या जर्शिया हमें थर्ड मैप की तरफ लेकर जा रही है, ये हाफ टाइम के बाद पता चलने वाला है अब हमें। एग्जैक्टली यहाँ से जर्शिया को अपनी लीड को कायम रखना पड़ेगा, पिस्टल राउंड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपने आप को 9-5 तक पहुंचाना पड़ेगा एंड उसके बाद में एक राउंड हाथ से फिसलता हुआ नजर आ सकता है। बट देन अगेन अगर कैपिटलाइज करना चाहें तो अपने आप को बहुत अच्छी एडवांटेज में रख सकते हैं बूम ई स्पोर्ट्स को। लेकिन अगर मौका दे दिया तो फिर 2-0 क्लोज डाउन हो सकता है, तो मौका बिल्कुल भी नहीं देना है यहाँ पर। चलिए, मौका तो नहीं देना है यहाँ पर ब्लीड को, पर अब अटैकिंग हाफ के अंदर मोमेंटम तो ब्लीड ही डिक्टेट करेगी। प्लस कंसिडरिंग एक मिरर कॉम्प है तो ब्लीड को भी पता होगा कैसे अटैक करना है इस मैप के ऊपर। लेट्स सी उसको रोकने में क्या कामयाब रहेगी या नहीं जर्शिया। पिस्टल राउंड से सारी बात शुरू होगी और ये एक बहुत फास्ट ए रश है बूम का। साइड के अंदर जाएंगे, मुझे लगता है सारे के सारे प्लेयर्स। हेवन को थोड़ा सा कम उसमें रखा जाएगा इंपॉर्टेंस में, या फिर हेवन भी जा सकते हैं और फिर साइड स्प्लिट करेंगे। डिसीजन देखते डबल सैचल डायरेक्टली टू ए हेवन। कंट्रोल ले लिया पूरी तरीके से ए हेवन का, और अंदर नहीं घुस पाए थे क्योंकि ये मॉली आ गई और ये मॉली थोड़ा सा और टाइम बर्बाद करेगी। रोलेक्स ऑल दो कंफर्टेबली तो नहीं ले सकते ये पोजीशन को अब, तो ए हेवन तो आपके हाथ से गया। और अब ये सीटी स्प्लिट जा रहा है ए साइड के लिए। स्मोक देखे कितना डीप किया है और अब प्लेयर्स फंसेंगे। अब ये कहाँ से अटैक आ रहा है इन्हें खुद नहीं पता है। ब्लेज किंग घुसे हैं एंट्री लेते हुए, अलर्ट को पिक ऑफ किया। एलबीवाई के लिए चीकी कॉर्नर है, पर पता है भाई ये बॉल हम भी यूज करते हैं वाइपर होके, तो हमें भी पता है बूम पिस्टल राउंड को जीतने के एक स्टेप और करीब। जर्शिया के सिर्फ 3 प्लेयर्स बचे हैं एंड उनके पास भी यूटिल के नाम पे कुछ ज्यादा रहने नहीं वाला है। पोटेंशियल्स दोनों ही यूज नहीं किए जा सकते इस पर्टिकुलर पोजीशन में एंड ये लीजिए 1v4 में आकर फंस गए हैं एंड यहाँ से तबाह हो जाएंगे। फ्लॉलेस डिनाई किया एंड दैट्स द ओनली थिंग जर्शिया कुड डू, क्योंकि ये राउंड तो बूम स्पोर्ट्स के नाम से लिखा हुआ है। बहुत मज़ेदार स्टार्ट था ये, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार। आपने पहले ए हेवन का कंट्रोल लिया और उसके बाद आपने जो सीटी से रोटेशन डाला है, बहुत मज़ेदार राउंड। ये यूनिक स्टार्ट है, ये मैंने आज तक पहले इससे एग्जीक्यूट होती हुई एटलीस्ट पिस्टल राउंड में तो नहीं देखी। स्मोक डाला सीटी का ऐसा कि बी साइड से कोई स्पैम ना कर पाए, और उसके बाद पूरा रैप अराउंड कर दिया साइड के अंदर एल्बो से। तो जो आप 2 प्लेयर समझ रहे थे साइड के अंदर, वो 2 प्लेयर की जगह आइसोलेटेड 1v1s बन गए। और यही तो चाहिए होता है पिस्टल के अंदर, आपको एक एडवांटेज मिल जाए और फिर फ्रेंजी जो बर्र जाती है वो नहीं रुकती है।
यहाँ पर एक फास्ट हिट साइड बी की तरफ आ जरूर सकता है, मिड से कंट्रोल लेने की कोशिश रहती है जनरली एंटी इको राउंड्स में बूम स्पोर्ट्स की, लेकिन इस बार अपने खुद के स्टैक के कंप्लीटली विपरीत जा रहे हैं। मिड पे कंप्लीट स्टैक यहाँ पर आ गया था जर्शिया की तरफ से, रीड काफी अच्छी थी, लेकिन अपने प्लान्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करने वाली बूमी स्पोर्ट्स अलग तरह से घुसेंगे एंड इस बार कंप्लीट कंट्रोल लेने के बाद में अपने आप को प्लांट पोजीशन पे पहुंचा दिया है, रीटेक पर पुश कर दिया गया है जर्शिया को एंड ये नीचे दो इकलौते जो एंगल्स थे यहाँ पर जर्शिया के पास में उनको कंप्लीटली अपनी निगरानी में रखेगी। ओह नो, अलर्ट, जस्ट बीइंग एन अमेजिंग एक्सप्लोसिव प्लेयर राइट हियर। अब ये प्लांट आपका बीमेन का है नहीं, ये मॉली वॉली तो आप डाल लो सब ठीक है, पर डिफ्यूज रोकोगे कैसे? यहाँ वेपन्स अभी तक रिट्रीव करे नहीं है, पर जितना है उतना काफी है और ये जर्शिया ने छीन लिया राउंड। आई डोंट नो हाउ ये क्लासिक के हेडशॉट्स ओवरऑल पड़े हैं, पर ये एंटी इको राउंड बूम निकालने में नाकामयाब। ये बहुत बड़ा झटका लगेगा बूम को इस राउंड के बाद। ये एक जीता जिताया राउंड होना था बूम के लिए। प्लांट की पोजीशन नहीं थी गराज से खेलने वाली, फिर भी गराज में पहुंच गए। अपने आप के लिए साइड के बैक पे जो एक पोजीशन है वहां पर अपने आप को होल्ड करना चाहिए था, लेकिन वो पोजीशन कंप्लीटली गिव अवे कर दी एंड नॉर्मल से डुअल्स यहाँ पे हारते हुए नजर आए, क्लासिक के सामने अपनी स्पेक्टर्स से हारते हुए नजर आए। ये क्या किया बूम ने? उल्टा मैं कहूँगा जर्शिया का बहुत अच्छा रीटेक सीक्वेंस आया, दो मॉली पड़ी कॉमन स्पॉट्स के ऊपर और एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन किया। यहाँ तो ये जो आई जस्ट वाना रोली करना चाह रहे थे वो किया है और दिखाया है कि स्पैम सिर्फ आप ही रिप्लेसिंग मैं भी मार सकता हूँ। अब शीरो का अटेम्प्ट है यहाँ पर एक वन टैप मारने का, ये तो नहीं कनेक्ट हो रहा अभी। जिस तरीके से जो एंगल एक्जेडी खेल रहे बहुत बड़ा ऑफ एंगल है, ये बॉक्स स्पैम करके एक्जेडी मेकिंग श्योर की एंट्री ना हुई हो इस बी साइड के अंदर। अब देखिए ब्लेज किंग उनके स्पॉन पहुंच चुके हैं, ब्लेज किंग इनका ए लर्कर है ये और ये पहुंचेंगे अभी बी हेवन। अब यहाँ पर इनको सिर्फ एक फ्रैग मिलेगा और उसके बाद मुझे लग रहा है ट्रेड हो जाएंगे ये। दैट्स व्हाट विल हैपन ओवर हियर। और अगर टाइमिंग अच्छी रही तो एक भी ना मिले, एक को तो स्पॉट किया है एक्जेडी को, उनका पिक निकला है। अब पता चला तुरंत सीरा को कि ये कोई ना कोई प्लेयर इधर है, थोड़ा डर रही है स्पेक्टर के साथ और मिड पे शीरो ने अपनी प्रेजेंस दिखाई और उनको रन डाउन किया जा रहा है। ये आइसोलेट करना चाह रहे डुअल्स को। ब्लेज किंग वो धीमे धीमे स्पेस दे रहे हैं, अगर शीरो को एक भी फ्लैग मिला तो ये परेशानी बन सकती है, पर ब्लेज किंग उन्होंने शॉट्स अपने कनेक्ट करवाए नहीं और रोलेक्स ने ओवरऑल एक 4K मार के जर्शिया के लिए राउंड सिक्योर किया। 3 राउंड की लीड पर जर्शिया आकर खड़ी हो चुकी है एंड अपने लिए बहुत अच्छी पोजीशन बनाकर रखी हुई है एंड कायम कर रखा है अपनी लीड को। काफी शानदार एग्जीक्यूशन यहाँ पर जर्शिया की तरफ से। I mean, एक ऐसा राउंड जहाँ पर बहुत अच्छी सिचुएशन बन सकती थी फॉर द साइड ऑफ बूम ई-स्पोर्ट्स, वो कम्प्लीटली यहाँ पर तबाह करते हुए नजर आए एंड अपने लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन जर्शिया ने कायम रखी है। हाउएवर नाउ बूम ई-स्पोर्ट्स गेट्स टू बाय। पिछली बार तो वेपनरी का हल्का डिसएडवांटेज था, लेकिन इस बार भी सामना आसान नहीं होगा बिकॉज देखिए अलर्ट यहाँ पर ऑपरेटर लेके एक बहुत शानदार एंगल साइड ए के एंट्री पॉइंट पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। लेट्स सी इस बार बाय तो है बूम के पास, पर किस तरीके से यूज करते हैं दैट्स व्हाट आई वांट टू सी राइट नाउ। मिड कंट्रोल क्या कंटेस्ट करेंगे या एसेंशियली वही B8 में खत्म करा जाएगा बूम की तरफ से। दैट्स वन ऑफ दीज डिसीजंस हैज टू बी मेड ओवर हियर। और अगर बी खत्म करते तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है इस बी साइड के ऊपर, 2 एंकर्स है, ऊपर से मॉली रेन करेगी रोलेक्स की। अभी अलर्ट की और पहला फ्रैग निकालेगी ब्लेज किंग के ऊपर। सब कुछ गलत होना फिर से एक बार बूम के लिए चालू हो गया है। एंट्री लिए डैश करके यहाँ पर वजॉक्स ने, और अब पीछे से सपोर्ट है नहीं और ये एक्जेडी और सीरा फॉप मिलके ये हिट भी डिनाई करेंगे। बूम को कुछ नहीं मिल रहा है इस समय अटैकिंग हाफ के अंदर अपने आना। एग्जैक्टली एक जगह जहाँ पे उन्हें मौका मिला था अपने आप को कन्वर्ट करके एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचाने का, वहां पर एंटी ई को हारते हुए नजर आए एंड उसके बाद में कदम जो थरथराए हैं बूम 30 seconds left. They haven't been able to secure a single round after the pistol in the second half. अब बस वेपन सेव करेंगे बिकॉज इकोनॉमी देखिए कितनी कम हो चुकी है। 300 क्रेडिट्स बचते हैं सेवरीन पे एंड 500 शीरो पे। वेपनरी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे एंड ब्लेज किंग अकेले हैं जिनके पास शायद एक वेपन खरीदने जितने क्रेडिट्स आ जाएं, बट देन न शील्ड ले पाएंगे ना कोई 10 seconds left. ये भी राउंड हाथ से गया। अब बूम का मुझे लगता है एक और टाइम आउट बुला लेना बिल्कुल लाजमी रहेगा।
2 वेपन आपने सेव ज़रूर किए हैं और ब्लेज किंग क्योंकि लॉस बोनस इतना चल रहा है मुझे लगता है ये तो पूरी ही टीम बाय करेगी। बट द क्वेश्चन इज जब वो ए साइड हिट अगर आपके लिए एक बार काम किया है तो एक बार दोबारा ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये ट्राई करिए, आपके पास डॉग है, डॉग करिए ए मेन या ए हेवन जहाँ पर भी आपको कंट्रोल लेना है उस एरिया का। और उसके बाद वो जो डबल डाइव आपके पास पावर है फेमस और बजर्क्स की उसको यूज़ करके साइड कंट्रोल लीजिए। बाय तो नहीं आया यहाँ पर, सेव ही किया जा रहा है बूम की तरफ से। स्पेक्टर्स और स्टिंगर्स ऑल अराउंड द बोर्ड। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स आउट और नॉट। दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द राउंड्स जहाँ पर बूम चीज़ें टर्न अराउंड करे, बिकॉज ये अगर फिसलता है तो हाथ से एक और राउंड इसके बाद में फिसलता हुआ नजर आएगा। ब्रोकन बाय रहने वाली है दोबारा से, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू लुक गुड फॉर द साइड ऑफ बूम ई स्पोर्ट्स। दूसरा टाइम आउट भी यहाँ पर कॉल करते हुए अपने आप को नजदीक तो लाए हैं स्कोर लाइन के, लेकिन दैट्स नॉट गोना बी क्लोज इनफ। अभी भी 4 राउंड्स की दरकार रहेगी इक्वलाइजर के लिए, एंड उससे कम 3 राउंड्स में यहाँ पर विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आएंगे ज़र्शिया के प्लेयर्स। लेट्स सी ज़र्शिया अभी तो अपने आप को परेशानी से निकाल लिया है। वो दिखा रहे हैं स्प्लिट के अंदर डिफेंस किस तरीके का होना चाहिए, एंड द वे दैट दे हैव बीन प्लेइंग देयर हाफ, द वे दैट दे हैव बीन गेटिंग देयर फ्रैग्स, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर देम। क्या कंटिन्यू रख पाएंगे इस टाइम आउट के बाद भी? आखिरी टाइम आउट है ये बूम का, इसके बाद कोई टाइम आउट बचे नहीं है। तो ये कमबैक अगर ऑर्केस्ट्रेट करना है तो उसकी शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली एंड इसके बाद में धीरे धीरे इकोनॉमी भी जितना बड़ा डेंट लेने वाली है वो और भी ज़्यादा दिक्कत भरी सिचुएशन बूम के लिए बना देगा। कभी भी फुल शील्ड्स में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाएगी इनके पास में। शो स्टॉपर अवेलेबल रहेगा फॉर द साइड ऑफ ज़र्शिया, जिससे काफ़ी वैल्यू निकाली जा सकती है, एंड अर्ली फ्रैग्स अगर आपको मिलते तो नंबर्स एडवांटेज पे पूरे गेम को ज़र्शिया कन्वर्ट करने की ताकत रखती है। और अभी एक फिर से यहाँ पर मिड कंटेंशन की तरफ बढ़ रही है बूम। तो लग रहा है आपकी फाइट करना चाह रहे हैं ये रोलेक्स का ऑर्ब गिरेगा और उसके बाद स्लोली एंड स्टडीली दे ट्राई टू टेक मिड कंट्रोल। डॉग है उनके पास वेंट्स क्लियर करने के लिए, अल्टीमेट शायद सच कोई बड़ी है नहीं अभी, और ये कंप्लीट बाय तो नहीं है, ये आधा अधूरा सा बाय है। एक फ्रेंजी मुझे दिख रही है सेवरीन के पास, ब्लेज किंग सिर्फ एक शरीफ के साथ, तो ये राउंड तो निकालना भी वैसे मुश्किल रहने वाला है बूम के लिए। व्हाट इज़ द आइडिया? थोड़ा मिड प्रेजेंस दिखा के मे बी गोइंग बैक टू ए, बट ए पे इंतजार कर रहे हैं अब आपके लिए दो प्लेयर्स। तो ट्रेल ब्लेजर से मुझे लगता है एक प्लेयर का तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा और ब्लेज किंग की जंप पीक को जो है वो डिनाई करेंगे। अलर्ट कह रहे थे इन्फॉर्मेशन चाहिए, लो आपको मार के दूंगा, यहाँ ऑफ प्रेजेंट है। ओह नो नो नो, बूम स्पोर्ट्स जिस तरह के बोलबाले के साथ पहला मैप निकाला था उतनी ही बुरी तरह से यहाँ पर धुलते हुए नजर आ रहे हैं सेकंड मैप के अंदर। ये लीजिए शो स्टॉपर भी कमिट कर दिया गया है, कोई वैल्यू फिलहाल तो निकलने नहीं वाली। ये ओके नेवर माइंड, शीरो सीधे के सीधे शो स्टॉपर के अंदर खुद ही वॉक इन कर जाएंगे। सेवरीन की भी पोजीशन का अंदाजा यहाँ हो चुका है। वो चेस कर रहे थे, उन्हें लगा उनको स्पॉट नहीं किया गया है। ऑल्दो फेमस ने जंप करके रोलेक्स के ऊपर फ्रैग जरूर निकाला है, पर अभी ऑपरेटर यहाँ आ गई। अलर्ट, इस समय एम लैब्स खेल रहे हैं, उनको जो प्लेयर दिख रहा है उसको मार रहे हैं। अब ये बी साइड पे डाइव जरूर करेंगे और अलर्ट अकेले एंकर है, इनको पिक ऑफ के बिना मुश्किल रहने वाला है ये पोस्ट प्लांट खेल पाना, और ये तो नहीं हो रहे पिक ऑफ आज के दिन पे। LBY वो फाइनल फ्रैग निकालेंगे और बूम को एक बार फिर से राउंड डिनाई किया जाएगा। Oh no 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 no, this is not looking good for Boom at all. Zerxia जिस तरह से इस मैप पे खेल रही है लग ही नहीं रहा कि Zerxia पिछले मैप में रेडी भी थी गेम के लिए, because they are not the same team। जिस तरह से इनकी गेम प्ले में इम्प्रूवमेंट आया है, जिस तरह से Boom के पसीने छुड़ाए जा रहे हैं अभी, Zerxia is looking very on point अभी भी, लेकिन 2 और राउंड्स Zerxia को एक्वायर करने बाकी है। हाउएवर उसके एवरेज में अगर बात की जाए बूम स्पोर्ट्स की 5 राउंड इन्हें यहाँ जीतने होंगे लगातार टू गेट इक्वलाइजर। एंट्री तो यहाँ पर सिक्योर कर ली है बर्जर्क्स ने, अलर्ट को शटडाउन भी करेंगे, ऑपरेटर को ऑफलाइन करेंगे, लेकिन रोलेक्स को पिकअप करना यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रोलेक्स के साथ अगर एक भी फ्रैग आया तो फिर अपनी वाइपर स्पिड कमिट करते हुए नजर आ सकते हैं इस राउंड को कन्वर्ट करके। अब देखिए सीक्वेंस ने ये तो बता दिया ए साइड पे कोई भी नहीं है, लिटरल खाली ए साइड है इस समय। जो प्लेयर्स है वो ए हेवन पे है, बट ये जो कॉल है ये भी अच्छा है कि बी रिक्लियर करेंगे, मिड रिक्लियर करेंगे और बी एंड करेंगे। रेल ब्लेजर डाला है, बी हेवन तक पूरा खाली मिला है सब कुछ एरिया। शो स्टॉपर यहाँ पर फेमस ने अर्ली एक्टिवेट कर लिया क्योंकि बी मेन का ज़्यादा कंट्रोल था नहीं। तो अब ये बैक साइड डाला जाएगा क्या?
बिल्कुल डाला तो गया है पर डैमेज हुआ है, प्लेयर नहीं पिक ऑफ हुआ है। और ये एंगल चलिए फुल चेक कर लिया और उसके बाद एलबी भाई लंबा पिक कर रहे थे बट सीरो और रोलेक्स से एक फ्रैग निकाल के राउंड बराबर किया है। रोलेक्स अभी भी स्टिल गोइंग ऑन 1v1। ये 51 एचपी पे बच के क्या फेमस क्लच निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे। रोलेक्स विद 3K, इतनी अच्छी एंट्रीज मिली बावजूद उसके साइड में जब हिट की बारी आई तो हेवन से सारे फ्रैग्स मिले और जर्शिया को 12वां राउंड मिला है। जर्शिया को अब 13वां राउंड भी मिल जाएगा बिकॉज इकोनॉमी देखिए यहाँ पर कितनी टूट चुकी है बूम स्पोर्ट्स के लिए। बहुत ही शानदार क्लोजिंग इस राउंड की जर्शिया ने अपने लिए एक्वायर की है। 1v1 तक पहुंचा चुके थे फेमस, लेकिन उसके बावजूद आखिरी जो फाइट थी उसमें यहाँ पर दम तोड़ते हुए दिखाई दिए। एक अग्रेसिव ए हिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है बूम स्पोर्ट्स की तरफ से फास्ट हिट के लिए जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन दिस इज डेफिनेटली टर्निंग इनटू अ 1-1 स्कोर लाइन। यहाँ से तो नहीं बनती अपॉर्चुनिटी एंड ये लीजिए उसी बात पे मोहर लगाने के लिए अलर्ट जाएंगे, पहला पिक उठाएंगे एंड एलबी भाई दूसरे पिक के साथ में अपने इस अफर्मेशन को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से सील ऑफ करते हुए नजर आएंगे। शीर हो गया, कुछ शीरो एक सेकंड के अंदर बाकी है। या वे खुद ही का स्मोक है और साइड के अंदर 3 प्लेयर्स बैठे हुए हैं। यहाँ तो ए साइड जाना इस समय दुर्बर रहेगा। एक्सएडी सिटी स्पॉन से एंगल देखते हुए इजी फ्रैग शीरो के ऊपर, इजी फ्रैग प्लेस किंग के ऊपर और सेवरीन एक ट्रेड जरूर निकालेंगे। स्पाइक इन्हीं के हाथों में है तो चाहे तो बी जा सकते हैं और 1v3 के अंदर ये डिसीजन मेकिंग ला पाना बहुत तेजी से ये थोड़ा मुश्किल भी रहता है। लेट्स सी सेवरीन डिसाइड। इरादे तो लग रहे हैं इनके साइड बी की तरफ जाने के, लेकिन इन्फॉर्मेशन अभी तक इन्हें ज्यादा मिली नहीं है, सो ही मे और मे नॉट गो फॉर द मूव। ओह नो, साइड ए की तरफ अगर कमिट करते तो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। ये लीजिए ऑपरेटर का शॉट आएगा, थोड़ा सा इनको डराएगा घबराएगा, लेकिन अभी भी भयभीत से ये सेवरीन फुल एचपी मेंटेन जरूर कर रहे हैं। कैन ही क्लच दिस राउंड एंड गिव बूम अनदर फाइटिंग चांस? देखिए प्लान तो मिल जाएगा सेवरीन को। एग्जैक्टली प्लान तो मिल जाएगा बट जीत पॉसिबल नहीं लग रही। अब उसमें अग्रेसिव खेलेंगे ये और जो एक्सपेक्ट करेगी मुझे लगता है डेफिनेटली ज़र्शिया। 10 seconds left. चलिए स्पाइक टैप कर दिया है, मतलब क्लोज होस्ट तो सब खाली है। अब एलबीवाई के पास 2 फ्लैशेस भी है खेलने के लिए। प्लांट कुछ ऐसा दिया है जो मुझे लग रहा है बी मेन दिखा रहा है प्लांट के हिसाब से, बट ये खेल सिटी रहे हैं। और दो अलर्ट ने ऑफ के साथ होल्ड किया हुआ और एक फ्लैश इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर देगा, अलर्ट का शॉट कनेक्ट होगा और जर्शिया को ये राउंड भी मिल जाएगा। 13वां राउंड जर्शिया ने निकाला है। जितनी खराब हार पहले गेम के अंदर मिली थी, सूट समेत वापस दिया है यहाँ पर बूम को, सूट समेत। एग्जैक्टली यहाँ पर बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब जर्शिया की तरफ से आता हुआ। होम ग्राउंड टीम अपने होम क्राउड को यहाँ पर फुल्ली हैप्पी करते हुए एंड उनकी खुशियों पे 4 चांद लगाते हुए अब एक फाइटिंग चांस बन चुका है जर्शिया के लिए भी। आखिरी मैप बचेगा, विल सी कौन यहाँ पर जीत हासिल करता है उसके ऊपर। आखिरी मैप अब और भी ज़्यादा ज़रूरी ये बात आप पहुँचिए ऑन द मैप, आई थिंक असेंट ये रहेगा आखिरी गेम। अब बात आप पहुँचिए एक बहुत ही डिफ़ॉल्ट से मैप के ऊपर। अब बूम यूजुअली तो यार बहुत कंफर्टेबल लगती है असेंट पे, तो देखने वाली बात रहेगी कि असेंट के ऊपर किस तरीके का प्रदर्शन आता है इस टीम का। और जर्शिया भाई ये तो जिस तरीके से इन्होंने स्प्लिट को खेला है ऐसा लगा इन्होंने गलत मैप पिक कर लिया या हमारी प्रोडक्शन की तरफ से गलती हुई है, अलग अलग मैप दिखा दिया इन्होंने। might very well be the case, but yes, Zerxia ने जिस तरह से यहाँ पर खेला, I mean, I cannot believe these are the same exact teams. पिछले मैप में जिस तरह का परफॉर्मेंस बूम का था उस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ जर्शिया दिखाती रही एंड जिस तरह का परफॉर्मेंस जर्शिया का था वैसा सा यहाँ पर बूम का देखने को मिला। बट देन अगेन एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, फर्स्ट मैप में भी जर्शिया की तरफ से बहुत ज्यादा कमियां नहीं दिखाई दी थी, बूम वाज जस्ट बेटर। लेकिन सेकंड मैप में बूम की तरफ से बहुत सारी कमियां देखने को मिली है। इफ दे डोंट कवर इट अप देन तीसरा मैप भी यहाँ जर्शिया ले जाके अपने आप को एक रिवर्स क्लीन स्वीप के साथ में विक्ट्री दिला सकती है। I mean, might very well be, काफ़ी पॉसिबिलिटीज है इस चीज़ के होने के एंड अगर ये रिवर्स स्वीप होता है तो बिल्कुल खुश नहीं रहेगी यहाँ पर बूम की टीम। क्वालिफिकेशन दाव पर है तो जर्शिया को क्यों मौका दिया जाए। वैसे तो जर्शिया ने अब अपना कंटेंशन दिखा दिया है कि भाई हम भी खेलने ही आए हैं, आपने एक आधा मैप निकाल लिया खुश हो जाओ, पर इतना नहीं कि आप हमें बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दो।
तो ये बहुत अच्छा मैप निकाला है स्प्लिट का इन्होंने। अब बात आ पहुंची है फाइनल गेम ऑफ असेंट की। देंगे फिर से कोचेज और प्लेयर्स को थोड़ा सा टाइम, लेते हैं एक ब्रेक के उस पार द मैप ऑफ असेंट। Nesta casa não tem porta nem morada, as janelas são fechadas, guardam tudo o que restou. What you need to understand in this day and age is actions still have consequences, and that's exactly what they found out, didn't they? Boom, of course, trying to put the wristwatch on the wrist, but unfortunately it tore a couple of hairs out. Rolex showed up, Rolex grew teeth, and Rolex did it for Thailand and brought Zerxia back into the game. It was an interesting affair, but Split, even though with the recent results from Boom, they looked clean on it. Unfortunately, today was not the day, and we're going all the way to 3, so I've got no complaints. Absolutely, and the best part about it, right, it wasn't just Rolex. Like, every single player stepped up to the plate, and the amount of crazy plays that Boom still brought to the forefront of that map, and they were still unsuccessful. I think that is a massive, massive performance behind Zerxia to be able to keep that resilience and keep on fighting. And I don't think it's a case of Boom letting off the gas a little bit, right? I think
think it's much more of a case that for the side of Zerxia, they stepped on it, and they stepped on it hard as well. So many rounds where we're looking at them be at a deficit, they bring it back. Yeah, they bring it back, and they do it in style. Zerxia with a 7-round dub, and that might be one of the cleanest wins we've seen from them in recent history on Split, and in fact it is. But looking at that as well, Sirifop turned up, Alert turned up, Rolex leading by example and doing it with 248 ACS, which is why he's the MVP here. But as you can see, in terms of the kills, it was an effort by committee. Over on the other side as well, Famous, a huge individual performance on specific rounds. Some crazy, crazy clutches coming out of him. Probably some of the best we've ever seen. Yeah, that was a crazy 1v4 at some point, defending the, retaking the B site rather. So. Yeah. And for me as well, the thing is, what we were talking about in the pre-match rather is Famous and Berserks. They needed to show up, and they did. Shiro and Blaze King also showed up, at least in the first map. But even though everyone's showing up, Zerxia came out with a game plan and came out prepared for Split and made it look good. And that's why we're back to a best-of-1 scenario now. It just feels like they were rewarded with their patience on the defensive side as well. You know, the onus was definitely on Boom to try and get up close and personal, to get something happening, to better themselves in that map. But time and time again, it was shut down, right? When we see Alert get on that operator, almost an immovable object, and then you've got the rest of the squad as well. Time ticking away so far in so many rounds for Boom. They let it go too deep in those ones, and they had no time to recover. Just the way that Split plays out with that composition was so intricate, so interesting. But Ascent is going to be even more so, and it's the map that is just so even. You're talking about defender side, you're talking about attacker side. It's literally just the play style at the end of the day. And it will be the final map for Group Alpha. You said it before, and I couldn't have asked for a better battlefield to play for everything, to play for all the marbles. Zerxia so far this tournament, they've played it 2 times and won both times. And Boom, they've got a solid Ascent as well. They didn't win it yesterday against Naos, but they've still got that sting. So we'll see if that's going to power them up today. Just blessed. Third map. Thank you very much. It's been brilliant, you know, to be able to get here for the finish of the competition. It's just been such a titan of events here in Bangkok, Thailand, obviously, for the course of it. And these teams, they finally sort of, it seems like they've understood how much it means, not only to be here, but to perform, and how well they need to perform to be able to get away with these victories, right? So now we've had stomps on either side. Is Ascent going to split the wickets and be straight down the middle, or is it going to be another one-sided affair? I don't know. That's a question I don't have the answer to. And I don't want the answer to, because I don't want to be throwing out statements. The Zerxia crowd was so loud. I think we were like 1 round in, they won pistol. I was trying to leave, just trying to go talk to someone quickly. And I just got blasted. They were cheering the hell out of that side of the room. Yeah. And over on this side, of course, Gary from Boom. He can be louder than the whole Zerxia crowd in one go, basically, it's right? One man versus the country of Thailand. That's what's going on in the crowd behind us here. And I dare say it's going to be the exact same thing moving into a set. But let's start talking shop. Let's start looking at some agent compositions. Where do we see this one going? Are we going to see the tried and tested, the tried and true, the meta picks, or are we going to see something fancy come through? Well, we know on the side of Boom that they steer into the meta as well, and we know that they've been rewarded once in this tournament so far, right? The game against Fancy United, 13-3, such a big scoreline. One of the biggest scoreline differences I think we've had in this whole thing. But then you look at the other 2 times that they actually played that, they lose to Naos 11-13, such a brilliant one, but their first opening series, and I'm going to throw this up to first series woes, where they dropped to one team 13-6. Yeah, there you go. So I think it's just, again, it's been such a staple for so long, as said. Everyone knows what to do. Everyone has had it in their map pool at some point in time, because once upon a time, there was no map pool. There was the tried and tested, as we sort of spoke about, right? And only changing up with the Killjoy, with the KO. They're the only agents that have come into the fray. Then we still go back, you know, to the Jets, to the Omens. It's just... it works. If it ain't broke, don't fix it. If it ain't broke, don't fix it. And look, in terms of performance overall, it feels like Boom, they're just gathering around and trying to fire up Famous, who's gone 40 kills so far throughout the series. He's been the linchpin behind Boom, and he needs to be the linchpin on Ascent. He needs to do it again. Oh,
ऑलराइट गाइस, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है VCT Ascension पैसिफिक के अंदर। हम लोग Zerxia वर्सेस बूम स्पोर्ट्स का मैच देख रहे हैं। एक्सपेक्टेड नहीं था कि Zerxia इस तरीके का एक कमबैक दिखाएगा, बट हियर वी आर एक्सपेक्टिंग, रियलाइजिंग दैट द अनएक्सपेक्टेड हैज हैपेंड एंड 1-1 की स्कोर लाइन हो चुकी है। बात आ चुकी है एसेंट के मैप के ऊपर और फिर से वही बोरिंग सा एजेंट कॉम्प, मेटा कॉम्प दोनों ही टीम की तरफ से उठा लिया गया। एग्जैक्टली ये दोनों ही टीम्स बिल्कुल मेटाकॉम के ऊपर चलती हुई नजर आती है, लेकिन काफी एक्सप्लोसिव इनका गेम प्ले रहता है। दोनों ही टीम्स बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली इस मैप को खेलना पसंद करती है। सो विल वेरी सून फाइंड आउट कि कौन यहाँ पर अपने अग्रेशन पे ज्यादा अच्छा कंट्रोल रख पाता है। एंड अगेन असेंट बीइंग द मैप जो कि डिफेंस को थोड़ा ज्यादा फेवर करता है, बूम स्पोर्ट्स को दोबारा से फर्स्ट हाफ में एक अच्छा लीड यहाँ पर अपने लिए बनाना जरूरी हो जाएगा। हाँ, देखते हैं ये फर्स्ट हाफ आपकी टीम के फेवर में जाता है, क्योंकि अगर ट्रेंड की बात करिए तो पिछले गेम में जिस टीम ने पहला हाफ अच्छा खेला वही टीम पूरा गेम क्लोज करके गई है। That's true. उस हिसाब से असेंट का जो मैप है ये है भी बहुत ही बराबर टाइप का मैप, जहाँ पर अटैक और डिफेंस उस पर डिपेंड करता है कि आप अपना कॉम्प जो है वो किस तरीके का पहले तो लेकर आते हो और उसके बाद कैसा खेलते हो। और ये कॉम्प अगर प्रॉपर्ली खेला जाए तो ये हल्का सा अटैकर्स ओरिएंटेड रहता है। लेट्स सी अगर रीसेंट रिजल्ट्स की बात की जाए तो Zerxia ने जो अपना रीसेंट मैच खेला था असेंट के ऊपर, उसमें Zerxia जीतती हुई निकली थी, लेकिन बूम को हार का सामना करना पड़ा था। सो इट्स स्लाइटली लुकिंग Zerxia फेवर्ड, बट विल डेफिनेटली फाइंड आउट सून इनफ कि यहाँ पर क्या रिजल्टेंट इन टीम्स को यहाँ मिलने वाला है। लेट्स सी दो अब किस तरीके से ये गेम खेलने वाली है Zerxia। रेडी तो रहना चाहिए। पिस्टल राउंड अगेन, ये जो पिस्टल राउंड होते हैं इनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हाईलाइट करी जाती है, बट मुझे लगता है बहुत सिग्निफिकेंट रहती है। एक राउंड से आप ओवरऑल 4 राउंड जीत सकते हो अगर आपने पिस्टल मास्टर कर लिया तो। इस वजह से मुझे लगता है पिस्टल खेलना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी रहता है। और असेंट के अंदर फ्रेंजी वगैरह तो अभी तक ज़्यादा देखने को मिली नहीं है। मुझे तो लगता है ये क्लासिक्स के ऊपर और घोस्ट वगैरह के ऊपर ही यहाँ पर ये रिलाई करेगी दोनों की दोनों टीमें। बट असेंट में किसका बड़ा भारी रहेगा अगर आप मेरे से पूछोगे? मतलब बूम वैसे तो अच्छा खेलती है, बट स्प्लिट में जिस तरीके का प्रदर्शन आया है उसके हिसाब से तो मैं कहूँगा Zerxia कमिंग इनटू द गेम फेवरेट्स हो जाएगी अब एकदम से। Absolutely, Zerxia का जिस तरह का परफॉर्मेंस है, I would also try to lean in towards them, and कहीं ना कहीं हो सकता है कि Zerxia यहाँ से अपने लिए एक रिवर्स क्लीन स्वीप बना सके। अदरवाइज जो सारी मेहनत Zerxia ने छोंकी थी सेकंड मैप के अंदर, वो पूरी नलिफाई हो जाएगी यहाँ पे। ऑलराइट, लेट्स सी ये गेम किसके फेवर में जाता है। बात करूँ तो यहाँ पर बूम जो डिफेंस कर रही है, उन्होंने तो बिल्कुल अपना जो बिलीफ है वो दिखाया है लॉन्ग रेंज सुप्रीमेसी में। तो ये लंबी फाइट्स भी लेना प्रेफर करेंगे। और बाय द लुक्स ऑफ इट ये देखिए पांचों के पांचों प्लेयर्स मिड फाइट करेंगे। शॉर्ट से कुछ प्लेयर मिड, पिज्जा से कोई भी साइड नहीं खेल रहा है। बी साइड पे खेल जाओ, यूटिल जरूर है पर साइड पे कोई नहीं है। और मुझे लग रहा है अगर ए आता है तो हैवी रीटेक खेलना चाहिए यहाँ पर बूम स्पोर्ट्स। Might very well be the case। यहाँ पर स्टार्टिंग इटसेल्फ में एक अल्टॉप फार्म करने की कोशिश रहेगी फ्रॉम द साइड ऑफ Zerxia, बट अगेन अंदाजा नहीं है रोलेक्स की पोजीशन का। स्टिल वहाँ पर रोलेक्स को पिक करने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी के बचे हुए प्लेयर्स ने यहाँ पर धराशायी कर दिया बूम के प्लेयर्स को। नाउ इट्स अ 1v2। सेवरीन अकेले बचे हुए हैं। He is also playing on a ghost and पहला फ्रैग आता हुआ, दूसरा फ्रैग भी यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकते थे, लेकिन LBY will just be better on the shot। 47 HP पे बचे हुए थे, लेकिन that's gonna be enough for Zerxia to get the first round। उधर जो 3 फ्रैग एकदम से निकल गए ना, वो परेशानी क्रिएट कर दिया बूम के लिए। ये देखिए पहला जरूर आपको मिला था पर एकदम से फ्लैश टर्न हुआ और उसके बाद XZE ने वो फ्रैग भी निकाला। यहाँ पर जरूरी था एक हेडशॉट लैंड करना और बिल्कुल वो हेडशॉट लगा भी है। तो एक अच्छा राउंड आया, पिस्टल राउंड Zerxia के खेमे में गया। ऐसे लगा तो इस राउंड में ऐसा कि बूम अटैक कर रही है, पर बहरहाल इस राउंड के अंदर शीरो एक शेरिफ के साथ है, बाकी सारे प्लेयर्स क्लासिक। ये फिर से एक हिट भी आ रहा है Zerxia के लिए। अलर्ट, पहला फ्रैग निकाला, उसके बाद ये जो 1-2 सेटअप था इसको आइडेंटिफाई किया है और थोड़ा सा पॉज लिया है Zerxia ने हिट करने से पहले। Zerxia यहाँ पे हल्का सा इंतजार जरूर करती हुई नजर आएगी। आउट रूट का इस्तेमाल करेंगे, पहले पूरी साइड को यहाँ पर स्मोक आउट किया जाएगा, इंटेल कलेक्ट किया जाएगा। एंड ये लीजिए क्लाउड बस आया, एंट्री एक्वायर किया एंड अब पोजीशन
चल चुकी है, फेमस को भी शट डाउन करेंगे, नंबर्स एडवांटेज के फेवर में रहने वाला है एंड उसके ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से कैपिटलाइज भी करते नजर आ रहे हैं। शीरो के पास ज़्यादा स्किन अब बची नहीं है गेम में, लेकिन पहला फ्रैग निकाला, दूसरे की कोशिश के बीच में ही रोलेक्स के हाथों बली होते हुए दिखाई दिए। गुड शॉट्स फ्रॉम रोलेक्स। आई मीन बुलडॉग थी तो ये लॉन्ग रेंज फाइट लेना बनता भी था, टर्रेट भी साथ साथ मार रही थी तो रिस्की था, पर चलिए रिस्क ने बिल्कुल पे ऑफ किया, रिवॉर्ड दिया है। अब जर्शिया 2 राउंड निकाल लिए हैं, इतना क्लीन रख नहीं पाई है इस बोनस राउंड को, इस वजह से बाय करना तो थोड़ा सा मैं कहूँगा मुश्किल रहेगा, पर देखते हैं कि मतलब ये बोनस राउंड में भी क्या वैल्यू निकाल के जा पाती है या नहीं जर्शिया। देखिए बोनस राउंड में यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया गया, लेकिन जो प्लेयर्स की वेपन्स यहाँ पर गिरे थे उनको यहाँ पर स्टिंगर स्पेक्टर्स एंड बुलडॉग्स में ही सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। फेमस को देखिए अपने वेपन एडवांटेज का क्या ही शानदार यहाँ पर उपयोग करते हुए नजर आने वाले हैं। He's gonna be able to make the round much more favorable for the side of Zerxia. हाँ 4v3 और ये एंट्री तो आपको मिली है, पर अभी तक प्लान नहीं कर सकते आप, सिर्फ फ्लैश हुए, ट्रेड भी नहीं, ये तो 2 HP पे छोड़ दिया फेमस को, और अब रोलेक्स और XZ ही क्या हाथों में आ जाती है मेजर हेवी लिफ्टिंग, ये स्विंग का ही रोलेक्स ने मिस कर दिया, स्पैम से वो पकड़े जाएंगे और साइड के अंदर बचे अकेले XZ ही, बुलडॉग है, एंगल आइसोलेट भी किया पर फ्रैग वो भी नहीं निकाल पाए, प्लेयर्स लो हुए हैं, पिक ऑफ नहीं, इसलिए बूम के लिए क्लीन राउंड आ जाएगा ये। एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ सेवरीन के घाटे पर पूरा का पूरा राउंड निकाल कर ले जा चुके हैं एंड काफ़ी अच्छे तरीके से स्प्लिट होकर साइड के अंदर मूव इन करने की कोशिश की गई। 2 प्लेयर्स स्टेयर्स से है, 2 प्लेयर्स मेन से है एंड दे वर एबल टू कंप्लीटली टेक कंट्रोल ऑफ द साइड। एक प्लेयर के ऊपर 4 प्लेयर जब ऐसे बिखरे हुए घुसेंगे तो डेफिनेटली फाइट कंफ्यूजिंग तो रहने वाली है एंड उसी कंफ्यूजन के चलते यहाँ पर XZ पिक ऑफ हो गए विदाउट मेकिंग एनी कैजुअलिटीज towards the side of Boom Esports. फेमस का गेम प्ले लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कारगर रहा, द वे ही पिक्ड आउट फ्रैग्स, नंबर्स एडवांटेज दिलाया एंड उस नंबर्स एडवांटेज पे टीम को कैपिटलाइज करने का मौका भी दिया। चलिए 2 राउंड निकाल लिए जर्शिया ने यहाँ पे, पर आंसर बैक किया है बूम ने, पिछली बार ये आंसर बैक रह सा गया था थोड़ा जी, तो इस बार उस मामले में तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है। अब देखिए ए साइड पे ये बहुत एक यूजुअल सा सेटअप लगा रखा है बजर्क्स, अगर थोड़ी देर तक और फुटस्टेप वगैरह या किसी और पार्ट ऑफ द मैप के ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो तुरंत ही नाइफ डाल दिया जाएगा ए मेन के बाहर टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन। ये आया नाइफ लेकिन इसको डॉज कर दिया, जर्शिया बिल्कुल इंटरेस्टेड थी नहीं अर्ली ए लॉबी कंट्रोल में, और बजर्क्स वो भी हल्का सा पिवट अवे ही कर रहे हैं, यहाँ से काइट अवे कर रहे हैं इस ए साइड से, तो एसेंशियली साइट अब खाली है टेकिंग के लिए। एग्जैक्टली जर्शिया ने काफ़ी अच्छे से नाइफ को डॉज किया, अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर छुपा के रखा एंड अब साइड के अंदर मूव इन करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बना ली। चोक पॉइंट्स को यहाँ पर स्मोक ऑफ करेंगे एंड साइड के अंदर एंट्री की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। ये लीजिए एंट्री मिल भी गई, कंट्रोल भी यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे से यहाँ पर मूव इन आ रहा है रोलेक्स का। नंबर्स डिसएडवांटेज अगर आता है तो उनका मूव इन यहाँ पर लेट हो जाएगा। ओ यहाँ पर पिक ऑफ हो जाता है भी सेवरीन, पर बजर्क्स को वो थोड़ी सी इंक्लिंग थी कि कोई ना कोई प्लेयर तो है यहाँ जो स्पैम मार रहा है, और वो इंक्लिंग बिल्कुल सही थी, वो प्लेयर पकड़ा है। अब देखिए XZ फ्लैश है, पूरी तरीके से पिक ऑफ किए जाएंगे बजर्क्स, फ्रैग निकाला है, ट्रेड आउट हुए, ब्लेज किंग ट्रेड आउट हुए, नेवर माइंड बजर्क्स स्टिल सर्वाइविंग 3v2। रोलेक्स मेन से पूरी तरीके से लॉकड आउट है साइड पे, स्पैम के अलावा कुछ कर नहीं सकते, काउंटर स्पैम शीरो का बहुत ज़्यादा बेहतरीन, और अब एलबी भाई सिर्फ गन बचाए क्योंकि राउंड तो हाथ से गयो, राउंड भी गयो एंड LB वाई भी गए क्योंकि इनके लिए तो यहाँ पर नहीं हुई कोई भी अपॉर्चुनिटी वेपन सेव की एंड ये लीजिए सेव पर पुश कर दिया गया है पूरी की पूरी टीम को। नाउ देयर इज नो हीरो वेपन्स, देयर इज नो इकोनॉमी एंड उसके साथ साथ एक और राउंड आपके हाथ से छिपता हुआ नजर आ सकता है। बूम ई-स्पोर्ट्स अपने लिए एक लीड कायम करने की मौके पे पहुंच चुकी है। लीड तो ले सकते हैं यहाँ पर बूम के खिलाड़ी, और बिल्कुल लेनी भी चाहिए। देखिए बाय जो जर्शिया का है उसमें एक स्पेक्टर है सिर्फ जो थ्रेटनिंग वेपन, अब वो शेरिफ को भी मैं मान ही लेता हूँ यार, इतने सारे इको राउंड हारते हुए मेरे टीम्स को देख लिया है ना कि हल्का सा खौफ हो गया मुझे भी शेरिफ का। मेरे से तो नहीं लगता यार, लेकिन जैसे क्लीन टैप ये लोग मारते हैं ना, और अलॉट के पास ब्लेड्स भी है और अब तो और मुश्किल है। अरे हाई लो सेटअप है ना, ये एक्सपेक्ट किया नहीं BME के प्लेयर्स के अगेंस्ट जर्शिया ने, और वही 2 प्लेयर ने पूरी टीम निपटा दी। एग्जैक्टली 2v5 का यहाँ पर सिचुएशन हो चुका है एंड ये जो पोजीशन है यहाँ से तो
कुछ भी हो नहीं सकता जर्शिया के लिए। सेव करने लायक कोई वेपन भी नहीं है इनके पास, तो फाइट में इन्वेस्ट जरूर करेंगे, एक आध वेपन ड्रॉप कराने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सामने भी इतनी ज़्यादा बुलंद इकोनॉमी नहीं है। So let's see. स्पाइक तो कंट्रोल में ले लिया, हो सकता है कि रोटेट कर जाएं, लेकिन ये लीजिए रोलेक्स भी यहाँ पर पिक ऑफ हो गए। अब अकेले बचे हैं, इनको पिंच करने की कोशिश की जाएगी दोनों तरफ से, जो कि क्या ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पकड़े जाएंगे। ये लीजिए फ्लैश किया, अपने आप को अपड्राफ्ट करके एक अच्छे एंगल पे फेमस ने पहुंचाया एंड पिक भी निकाल दिया। तीसरा राउंड कुछ कर नहीं पाए बेचारे सीरा जी, तो क्या ही करते हैं, वैसे भी रिकॉन कुछ पिंग विंग होता है, इससे पहले ही मर गए थे। तो ये क्या सेटअप था, क्या बढ़िया सेटअप था यहाँ पर। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, दोनों प्लेयर जिन्होंने पीक ली वो थोड़े से चौकन्ना हो गए कि भाई ये मारूं तो मारूं किसे, ये एंगल तो पहली बार देख रहे हैं। और बिल्कुल दिखाया है बूम ने कि उनको स्टडी इस मैप का भी है, भले ही पिक ना किया हो बट एक रीज़न की वजह से यहाँ तक छोड़ा है मैप पूल के अंदर इस मैप को। ज़र्शिया ऑन द अदर हैंड इस राउंड के अंदर बाय है, एक नल कमांड अवेलेबल है LBY का। तो यूजुअली क्या होता है, एक बी फास्ट हिट होता है, बट इस बार फिर से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली पॉलिसी यूज करने की कोशिश है ज़र्शिया की तरफ से। एग्जैक्टली बट अगर बूम ई स्पोर्ट्स की तरफ एक बार आप देखें तो 4 अल्टीमेट्स इनके पास ऑनलाइन आ चुके हैं, जिनमें से सेवरीन का लॉकडाउन काफी अच्छी तरीके से रीटेक सिचुएशंस में इनको एक एडवांटेज दिला सकता है। पर वेल लेट्स सी नंबर्स कितने बचते हैं किसके पास, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लॉकडाउन यहाँ पर रिड्यूस किया भी जाएगा या नहीं। बट ये जो सप्रेशन है काफी ज्यादा इंटेल दे बैठेगा बूम ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को। पर्सन्स यहाँ पर ये देखिए एक रिवॉल्व ऑलरेडी निकाल चुका है जी, स्पैम फ्रैग है एंड यहाँ पर स्मोक्स आ नहीं सकते हैं क्योंकि XZD के पास सिर्फ एक स्मोक बचा है। सीटी डाला था उन्होंने, पर जैसे ही देखा कि ये पुश तो तितर बितर हो गया है, दूसरा स्मोक बचा सा लिया इन्होंने। अब ये पिवट करना चाह रहे हैं मिड टू ए की तरफ, और अगर आप देखें तो ए साइड पे तो किल जॉय इंतजार कर रहा है, टाइमिंग नहीं होगी और आसानी से फ्रैग मिलेगा ब्लेज किंग को। और बूम स्पोर्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द 4th राउंड विक्ट्री। अपने आप को अपने ही स्मोक के अंदर प्लेस करके काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी ब्लेज किंग ने बना ली है एंड बहुत अच्छे से वहां पर फ्रैग भी निकाल लिया। नंबर्स एडवांटेज कंप्लीटली मेंटेन करके रखा है, साइड का कंट्रोल मेंटेन करके रखा है एंड अभी तक कोई भी एंट्री मिली नहीं है ज़र्शिया के प्लेयर्स को। अब ये देखिए फेमस की पोजीशन बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाली है, एंगल चेक करेंगे तो भी यहाँ पर हार सकते हैं एंड ये नीचे हारते हुए दिखाई भी देंगे। LBY यहाँ पर फेमस को रिट्रेड कर जरूर लेंगे, लेकिन अभी भी जो नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं एंड टाइम भी हाथ पे है। ये लीजिए समाप्त किया जाएगा। ये ड्रॉप कर रहे थे साइड के अंदर, बस यही उम्मीद थी कि भाई कोई बैक साइड प्लेयर निकल ना जाए, और उन्होंने दूसरा एंगल चूज किया, वो फ्रैग निकाला। स्पाइक के लिए टाइम वैसे भी नहीं बचा था तो साइड के अंदर ड्रॉप करते आपको प्लांट करना था। बहुत अच्छी तरीके से BME ने फाइनली कंट्रोल भी किया। और ये देखिए जब आपको पता है पांचों प्लेयर सप्रेस्ड है, उस नाइस से इन्फॉर्मेशन मिली है तो क्यों ना स्पैम मारा जाए उस स्मोक के अंदर, और वही काम किया। स्मोक के अंदर स्पैम आया, सडनली नंबर्स एडवांटेज मिला और एक एक करके बाकी प्लेयर्स को भी टेक डाउन किया गया। तो ये बूम ई स्पोर्ट्स का चौथा आया है और 5वें की नींव बिछाई है। लुकिंग ब्यूटीफुल सो फार। ज़र्शिया को टाइम आउट लेना पड़ गया है अपना, चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, रफ्तार बदलनी पड़ेगी, अपने जो मूव्स हैं उनमें थोड़ी सी और सटीकता लानी पड़ेगी। काफ़ी मेहनत करके अपने आप को 3rd मैप तक पहुंचाया है, अब अगर जीत हासिल नहीं करी तो फिर उस मेहनत का काम ही क्या। 3rd मैप तक एज यू सेड पहुंचाया ज़रूर है, पर फिर तो हम यही कहेंगे 2-0 खत्म हो जाता। बूम को ही अगर जीतना था तो सीरीज को हम मिल भी फ्री हो जाते। पर ज़र्शिया एक अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है उनसे, क्योंकि जिस तरीके से ये रोल ओवर चल रहा है अभी तक, तो राइफल राउंड के अंदर कोई भी प्रॉमिसिंग स्ट्रैट या कोई भी प्रॉमिसिंग तरीका नहीं दिखाया ज़र्शिया ने अटैक करने का। एग्जैक्टली एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट इजियर फॉर बूम ई स्पोर्ट्स, क्योंकि अगर आपके पास एक एग्जैक्ट स्ट्रैट होता है तो आपके पास कैलकुलेशंस होते हैं एंड आपके पास में ऑप्शंस होते हैं कि अगर इस स्ट्रैट में ये चीज़ गलत जाती है तो हमने किस तरह से इसको बैकअप करना है। ऑन द फ्लाई थिंकिंग यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कतमंद सिचुएशन बना देती है। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं है सिचुएशंस के लिए तो उनको फेस ऑफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बार देखिए 2-3 के स्प्लिट में यहाँ से जाते हुए दिखाई देंगे ज़र्शिया के प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स बी की तरफ, 3 प्लेयर्स ए की तरफ एंड साइड ए पे जो होल्ड है वो रहने वाला है फ्लैशेस एंड स्मोक्स के बल पे फ्रॉम द साइड ऑफ ब्लेज किंग एंड बर्जर्स। सप्रेशन काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है। ओह नाइसली कैप्टलाइज्ड। फिर से स्मोक के थ्रू स्मोक क्रिमिनल बनता है ये प्लेयर।
ये खुद कंट्रोलर खेलते हैं और इनको पता है कि स्मोक के अंदर छुपना प्लेयर्स को कितना पसंद होता है, और जब कोई प्लेयर छुपता है तो उसको इसी तरीके से ब्लेसिंग पनिश करता है। ये इसी राउंड की बात नहीं है, अब तो ये मैंने पूरे टूर्नामेंट में होता हुआ हर एक गेम के अंदर देख लिया। और एक एंगल पकड़ के बैठे हुए हैं शीरो, यहाँ पर भी डबल पीक है। तो इन्होंने जो काउंटर ढूंढा है ना कि ये शरीफ के वन टैप मार के भाग जाते हैं प्लेयर, जिसको कैसे काउंटर करना है, वो बड़ा अच्छा ढूंढा है डबल पीक करने का हर एंगल के। एग्जैक्टली एंड बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर दोनों पोजीशंस रखते हैं ताकि काफ़ी अच्छे से उस क्रॉस फायर को यहाँ पर क्रिएट किया जा सके, कैपिटलाइज किया जा सके। लेकिन ये जो क्लाउडबर्स्ट है ये एंट्री ज़रूर दे देगा साइड के अंदर अलर्ट को, लेकिन वो वहाँ पर स्पाइक गिरा देंगे एंड अब गेम भी निपटाते हुए नजर आएंगे। एकमात्र पिक मिला है ज़र्शिया को एंड दैट वाज बर्सेक्स, बाकी कोई भी नुकसान बूमी स्पोर्ट्स का नहीं कर पाएगी। कोई नुकसान नहीं हुआ एज यू सेड एंड ब्लेज किंग। चलिए यहाँ तो थोड़ा सा परसेप्शन था कि प्लेयर कहाँ पर है, तो ये वाला दे सकते हैं कि ये स्पैम किल नहीं था, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशनल फ्रैग था और रीफ्रैगिंग पोटेंशियल कट गया उस स्मोक की वजह से। तो अच्छा राउंड बूम के लिए, सेफली एंड सिक्योरली निकाला है। फ्लॉलेस रहता तो और बेहतर रहता, बट कोई बात नहीं, एक ही प्लेयर का लॉस है, कोई ज़्यादा बड़ा लॉस है नहीं। पैसे से तो इस समय लेस है बूम। ज़र्शिया की ऑन द अदर हैंड बात करें तो ऐसा कुछ है नहीं, पैसे से भी लेस है। अल्टीमेट्स भी सारे के सारे ऑनलाइन आ चुके हैं बूम के लिए एंड ये राउंड जीतना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। ये राउंड जीत गए तो अगला राउंड भी फ्री में यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज इकोनॉमी नहीं रहेगी ज़र्शिया के पास में कैपिटलाइज करने के लिए। दिस इज डेवास्टेटिंग सिचुएशन फॉर ज़र्शिया। कैटवॉक का एरिया यहाँ से खाली कर देंगे, ज़्यादा यहाँ पर कंटेस्ट नहीं कर सकते फाइट्स को, तो एक बार साइड ए के ऊपर हिट करने की कोशिश रहने वाली है। पर उसमें अगर देखें तो जो एंगल्स यहाँ पर कॉन्स्टेंटली चेक किए जा रहे हैं फ्रॉम द साइड ऑफ ब्लेज किंग विद दैट जिगल पीक, यहाँ पर स्मोक भी कर सकते हैं, स्मोक के थ्रू स्पैम भी कर सकते हैं एंड साथ ही साथ एक काफ़ी अच्छा यूज पैरानोया का भी हो सकता है जो दो करते हुए दिखाई भी देंगे। अभी देखिए साइड के अंदर आए जरूर पर अकेले आए थे, इस वजह से कुछ कर नहीं पाए और फिर से ब्लेज किंग का वो स्पैम चालू। आपने साइड के अंदर आने की कोशिश करी, बस ज़र्क्स ने अपना नल कमांड डाल दिया और वहीं रुक गया आपका अटैक, क्योंकि जो आप सपोर्टिंग यूटिल डालना चाह रहे थे अलर्ट के लिए वो तो कभी आई नहीं। और एक एक करके जो प्लेयर्स आते हैं ऐसी सिचुएशंस के अंदर वही बहुत ज़्यादा मार खाते हैं। अलर्ट पहले प्लेयर बने, एक्सडी स्मोक में स्पैम का शिकार बने। बूमी स्पोर्ट्स आधा दर्जन राउंड अपने फेवर में लेके जा चुकी है। एग्जैक्टली यहाँ से क्योंकि कोई भी उम्मीद ज़र्शिया के लिए नहीं बची, ना ही वक्त बचा हुआ है। अपने वेपन्स को बस यहाँ पर सेव रखना चाहेंगे बिकॉज दैट्स समथिंग दे वांट टू कैपिटलाइज ऑन। ये क्या एलबी भाई यहाँ पर ठीक है, ओके वन ट्रैक डाउन बट बदले में खुद भी यहाँ पर कुर्बान हो जाएंगे। वन मोर वेपन डाउन फ्रॉम द साइड ऑफ ज़र्शिया। लाइक ब्लेज किंग के जाने का तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे बूमी स्पोर्ट्स को। 8450 क्रेडिट्स हैं इनके पास। आप बजर्स को देखिए, वो फाइनल फ्लैश जो उन्होंने डाला था है ना, वो उन्हीं को ब्लाइंड कर गया था, पर उसका कैमरे में रिएक्शन देखिएगा अगर रिप्ले में देखता है तो खुद ही आंख पे हाथ रख रहे थे कि ये क्या कर दिया, ये तो गलत कर दिया। ओह नो, बूमी स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है फिलहाल। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अल्टीमेट के डिप्लॉयमेंट के साथ में वो राउंड निकाल लिया एंड इस राउंड में देखिए ब्रोकन बाय के साथ में एंटर करना पड़ रहा है ज़र्शिया को। ब्रोकन बाय ज़रूर है ज़र्शिया के पास, पर मौका रहेगा क्योंकि हंटर सूर्य और लॉकडाउन अवेलेबल है। अब लॉकडाउन तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा वैल्यू देगा क्योंकि शीरो अपनी हंटर सूरी चला देंगे। बस एक लौता तरीका है, अगर सीरा पॉप उस हंटर सूरी पे अपनी हंटर सूरी चला के वो फ्रैग निकाल ले तो 3 अल्टीमेट्स लग जाएंगी, लेकिन एक फ्रैग के लिए। क्या इतना बड़ा रिस्क इस समय ज़र्शिया उठाने के लिए तैयार है? आई डोंट थिंक इतना बड़ा रिस्क ज़र्शिया यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी उसमें, क्योंकि रिवॉर्ड की फिर भी गारंटी यहाँ पर उनके पास नहीं रहने वाली है मार्केट के एरिया में। लेकिन यहाँ पर जो अलार्म बॉट रहने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेल प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन वहाँ पर कोई इंटेल आई नहीं है, तो उससे भी इंटेल मिल चुकी है क्योंकि आपका बॉट ट्रिगर नहीं हुआ। आपको पता है कि सारे के सारे प्लेयर्स एक साथ साइड के अंदर हिट करते हुए नजर आएंगे। ये लीजिए रिकॉर्ड डार्ट का भी इस्तेमाल कर लिया जाएगा एंड और भी अच्छे तरीके से जो मिली हुई इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार के लिए सॉलिडिफाई कर लिया जाएगा। ब्लेज किंग की पोजीशन दोबारा से क्रूशियल रहने वाली है। एक फाइट हारे जरूर यहाँ पर, बट देन जो सेवरीन का पिक था वो यहाँ पे घाटा दे गया। ब्लेज किंग की पोजीशन की जो वैल्यू थी वो नहीं निकल पाई। अभी भी सिचुएशन रहेगा, फुल एचपी दोनों ही प्लेयर्स पे है, लेकिन जो प्लेयर्स बूम ई स्पोर्ट्स के उनके पास फुल शील्ड रहेगी, तो फाइट के अंदर कैपिटलाइजेशन का मौका रहने वाला है। अभी तो बज़र्क्स उनके पास पूरी किट है अपनी यूटिल की,
सारे फ्लैशेस अवेलेबल है, तो ये दोनों फ्लैशेस को अब आप यूज कैसे करेंगे? सप्रेशन से ये पता चला है कि एक प्लेयर अभी भी फ्रंट साइड या क्लोज खेल रहा है, तो अब ये क्रॉस फायर का आइडिया लग जाना चाहिए। रिवील की नथिंग एट ऑल, द फ्लैशेस आर ब्यूटीफुल, और बजर्क्स का वो रैंडम शॉट और भी ज्यादा बेहतर। बूम स्पोर्ट्स एक और राउंड अपने बेल्ट के अंदर, 7वां राउंड लगाते हुए, और इस समय लग रहा है बिल्कुल ट्रेन की रफ्तार से भाग रही है राउंड्स के साथ। जर्शिया काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है, बिकॉज इट वॉज अ गुड इनफ अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से। यहाँ पर XZE अपने फ्रॉम द शेडोज़ का इस्तेमाल करके अपने आप को रिपोजिशन करके एक काफ़ी अच्छा भय बना सकते थे बूम स्पोर्ट्स के बचे हुए 2 प्लेयर्स के बीच में। 2v2 की सिचुएशन थी, अपने आप को रिपोजिशन करते तो एक बार बैकस्टैब में भी यहाँ पर पकड़ सकते थे एक आध प्लेयर को, लेकिन जो भय था यहाँ पर जर्शिया के ऊपर, उसके चलते ये रिस्क उठाई ही नहीं गई। इट वॉज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मूव, बट इसको कम्प्लीटली अवॉइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क इटसेल्फ। रिवॉर्ड के बारे में सोचा ही नहीं गया जर्शिया की तरफ से, एंड 7वां राउंड बूम स्पोर्ट्स ले गई। अब ये राउंड के अंदर बिल्कुल सीधा अप्रोच है। आपने हंटर्स फ्यूरी पिछली बार यूज कर ली थी, तो रोलेक्स ने यहाँ पर अपना लॉकडाउन डाला है इस साइड के अंदर एंटर करने के लिए। बड़े सबसे खराब साइड है इस रिस्पेक्ट में। अब आप एंटर करने की कोशिश करेंगे तो एक फ्लैश आएगा जो हिट करेगा ड्रोन को, कोई इन्फॉर्मेशन ड्रोन से नहीं मिलेगी, और आप प्लेयर्स डाइव इन कर सकते हैं साइड के अंदर रीटेक के लिए। ऑल्दो डिसीजन ये था नहीं, वो फ्लैश डाल के ब्लेज किंग सिर्फ एस्केप कर गए अपने श्राउडेड स्टेप के साथ। नल कमांड डाला यहाँ पर LBY ने, ताकि ये रीटेक जो है ये और थोड़ा धीमा करवाया जा सके। अल्टीमेट्स के बूते पे यहाँ पर राउंड निकालने की कोशिश रहने वाली है जर्शिया की, क्योंकि काफ़ी लंबी चढ़ाई है जो उन्होंने अभी भी चढ़नी बाकी है। बट देखिए शीरो यहाँ पर स्पैम लाएंगे ओडिन का। सोवा को देखा, ओडिन को नहीं देखा BME की तरफ से। अगर आपने असेंट के मैप पे तो फिर क्या ही देखा। काफ़ी अच्छा कैपिटलाइजेशन यहाँ पर। ओह नो, यहाँ पर पिक ऑफ होते हुए नजर आ सकते थे, लेकिन अपने आप को ब्लेज किंग ने बचा लिया। टाइमिंग का यहाँ पर उनके पास फायदा आया। 3 फ्रैग्स निकल जाएंगे, 4 फ्रैग्स निकल जाएंगे। रोलेक्स ने तो तख्ता ही पलट दिया पूरे के पूरे मैच का। ये बूम की तरफ से मिस कैलकुलेशन थी। उन्होंने देखा कि टाइम जब इतना कम बचा है, तो रादर देन सेविंग उन्होंने ये कोशिश करी कि एक प्लेयर हाफ करो, क्योंकि 2 हमेशा टिक लगता है हंटर्स फ्यूरी को मारने के लिए। एक प्लेयर हाफ करो, वो मर जाएगा, उसके बाद दूसरा प्लेयर बैठ जाएगा। बड़े सबके बीच में आपने ये नहीं एक्सपेक्ट किया कि अगर रोलेक्स ऐसा हीरोइक मूवमेंट निकाल देंगे तो आप क्या करोगे। ये जो 2 फ्रैग्स आए ईमेन के बाहर, जो प्लेयर्स बिल्कुल अनअवेयर थे, गलती इनकी थी। इनको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था इस तरीके का प्ले, किया नहीं और पनिशमेंट मिला है बिल्कुल। देखिए सिचुएशंस ऐसी बन चुकी है कि बूम स्पोर्ट्स को अभी तो प्लांट डिनायल पे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज उस प्लांट के सिनेरियो के लिए उनके पास ना तो अच्छी एबिलिटीज बची हैं, ना ही उनके पास अल्टीमेट्स रहने वाले हैं। सो दैट्स डेफिनेटली अ सिचुएशन जिसके ऊपर थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा। उसी पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बार एंटी डिनायल के लिए। दोनों चोक पॉइंट पे यहाँ पर स्मोक ऑफ किया जाएगा फ्रॉम दी साइड ऑफ ब्लेज किंग, एंड साइड A के ऊपर तो एंट्री अभी नहीं मिलती। रोटेट करते हुए जाएंगे, साइड B की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी किल जो एबिलिटीज डिप्लॉयड रहने वाली है। बस सेवरीन वक्त रहते पीछे हट जाए, क्योंकि इतना आगे खेले और अगर पिक ऑफ हो गए तो फिर वो एबिलिटीज भी किसी काम की नहीं रहेंगी। वेट अ सेकंड, ये देखते हैं। ओह माय गॉड, क्या शॉट मारा है सेवरीन ने। एक गोल ही निकाली है चेम्बर से और उसी ने खोपड़ी खोली है रोलेक्स की। व्हाट अ शॉट, ब्यूटीफुल शॉट बूमी स्पोर्ट्स। फिर इस राउंड के अंदर इनके पास 3 प्लेयर का एडवांटेज रहने वाला है, और ये शॉक डार्ट ने हल्का बहुत चिप डैमेज जरूर किया XZE के ऊपर। बट अभी भी देखिए ज़र्शिया समझ नहीं पा रही है एंटर करे ना करे, क्योंकि ऑफ सुनी थी और ये सोच रही है ऑफ अभी भी A पे है। 2 प्लेयर यहाँ पर सप्रेस हुए साइड के अंदर। ड्रोन करके एक का तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये जनरेटर के ऊपर प्लेयर है, और ऊपर से जो सपोर्ट आ रहा है उसका क्या। XZE हेवन पहुंच चुके हैं, फ्रैग जरूर आए, दो वो भी, और उसके बाद पूरी तरीके से शट डाउन करने में कामयाब हुई है बूम। अब यार टाइम वेस्ट कर रहे हैं फेमस, अब बस प्लांट नहीं करने देना चाह रहे हैं, और जब आप फाइट इनिशिएट करोगे मेरे साथ तो मैं कुछ इस तरीके से जीत जाऊंगा। सेवरीन बेचारे वो तो अभी भी शॉट से आ रहे थे, जरूरत ही नहीं पड़ी उनकी। बूमी स्पोर्ट्स आराम से 8वां राउंड निकाला है। बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री यहाँ पर बूमी स्पोर्ट्स अपने लिए एक्वायर करती हुई। एंड एक बार आप स्कोरबोर्ड पे नजर डालिए, पहले 2 राउंड हारे, फिर लगातार 7 राउंड जीते हैं इस टीम ने। उसके बाद दोबारा 1 राउंड हारा, लेकिन ज़्यादा देर तक हार को अपने ऊपर रहने नहीं दिया कहीं ना कहीं। लेकिन उस हार के साथ साथ यहाँ पर जर्शिया के लिए लॉस बोनस का जो कैप था वो भी हटा दिया। अब जर्शिया को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा लॉस बोनस में, तो ज़्यादा अच्छी इकॉनमी नहीं रहेगी।
अब तो फायदा ही क्या है, आखिरी राउंड है ये हाफ का, इसमें जी। या तो करो या तो मारो। 9-3 होगा मुझे तो लग रहा है ये बूम के फेवर में। नानो स्वॉर्म से अर्ली थोड़ा पुश तो रोका है आपने, पर मुझे लगता नहीं है आप ओवरऑल जो हिट आएगा साइड पे वो रोकने के लिए काबिल हो इस समय। आई फील लाइक यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा सिचुएशन बन सकता है बूम स्पोर्ट्स के लिए, बिकॉज अंदर एंटर होते ही अलार्म बॉट ट्रिगर हो जाएगा एंड साइड की एंट्री जो है उसको थोड़ा सा देर के लिए डिले करने का अपॉर्चुनिटी रहेगा। टैरेट से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड ये लीजिए रोटेशन भी आ चुका है, अब मार्केट का एरिया भी अंडर कंट्रोल है बूम स्पोर्ट्स के। तो यहाँ पर दिक्कत तो रहने वाली है, लीजिए टैरेट भी गया तो अब आने वाले बैक स्टेप्स को वॉच आउट करना मुश्किल रहने वाला है फॉर द साइड ऑफ ज़र्शिया, बट बैक स्टेप्स कोई आ ही नहीं रहे क्योंकि डिफेंडर स्पॉन की तरफ से ही मूव इन करते हुए नजर आ रहे हैं सारे के सारे प्लेयर्स बूम स्पोर्ट्स के। ऑलमोस्ट अलर्ट को भी पिक ऑफ कर लिया था पर शीरो ने हेल्प कर दी। 2v2 के अंदर ये सिचुएशन को लाके खड़ा कर दिया, लेन में पहला प्लेयर पिक ऑफ हुआ था और शीरो ये तो हेडशॉट छोड़ते ही नहीं है, हंटर्स फ्यूरी आ गई। अब ये प्रीएम्प्टिवली चला दी गई है कि साइड पे प्लेयर है, इसको अभी बुली करेंगे। टैप किया स्पाइक को सिर्फ आपने, दो तरफ से स्विंग आएगा मुझे लग रहा है, एक तो स्टेयर्स, अच्छा चलिए स्टेयर्स से कोई नहीं है, खुद ही जंप करके सिर्फ आप फ्रैग निकालने की कोशिश में थे। ब्लेज किंग ने कहा हेलो ब्रो हाउ डू यू डू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, काफी ज्यादा बुलिंग स्टेज पर पहुंच चुकी थी बूम स्पोर्ट्स, तो बस उस बुलिंग का अंत चाहते थे सिर्फ एंड ही हॉप्ड राइट ऑन टू द लेन, वहां से उनको तुरंत पिक ऑफ किया गया एंड ये लीजिए एक और राउंड यहाँ पर बूम स्पोर्ट्स के हाथ आया जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। 9-3 के स्कोर लाइन के साथ यहाँ पर स्वॉप आया है, सिचुएशन अच्छी नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी ज़र्शिया के लिए, लेकिन डिफेंसिव साइड पे आने वाले हैं ऑन अ डिफेंस फेवर्ड मैप, हो सकता है सिमिलर रन उनकी तरफ से भी देखने को मिल जाए क्योंकि काफी कमियां तो नहीं दिखाई थी ज़र्शिया ने पिछले मैप पे। अभी ये पिस्टल राउंड सब कुछ इस पे डिपेंड करता है, ये पिस्टल ज्यादा कैसे है ज़र्शिया के लिए। क्या वापसी करी जा सकती है पिस्टल जीतने, क्योंकि अगर पिस्टल हार गए तो फिर आप जीजी बोल सकते हैं पूरे गेम को। एब्सोल्युटली, काफी क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पर पिस्टल राउंड होते ही एंड इट माइट वेरी वेल बी दिस डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि यहाँ से कमबैक का ऑप्शन भी रहने वाला है या नहीं ज़र्शिया के लिए, वो वहाँ पर डिसाइड हो जाएगा। वेट कर रहे हैं, मतलब ज़र्शिया की तरफ से कॉलिंग भी क्या रहेगी गाइस, वी कैन स्टिल डू इट। मुश्किल है मैं तो अभी से कह रहा हूँ मुश्किल है ये सब बोल पाना भी कोच के लिए इस समय, जिस तरीके का आप कह सकते हैं ना डोमिनेशन दिखाया है बूम ने सेकंड मैप के अंदर, फर्स्ट हाफ में बिल्कुल घुसने ही नहीं दिया, दरवाजे बंद करके रखे हमेशा इनके लिए, और जब खोले तो वो जानबूझ के खोले कि हमने ना अंदर पानी भरा हुआ है, आप घुसो प्लांट करो डुबा के मारेंगे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ गेम प्ले दिखाया है बूम ने। अब रेप्लिकेट करना पड़ेगा ज़र्शिया को, खुद की फुटिंग ढूंढनी पड़ेगी कि डिफेंसिव साइड खेलेंगे कि अटैकिंग साइड खेलेंगे, डिफेंस के ऊपर रह के। दो अप्रोच होती है गेम की। किलजॉय का सेटअप तो पूरा लगा हुआ है ए के लिए, और हिट भी ज़र्शिया बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर रही है इस समय बूम का। एग्जैक्टली, बूम स्पोर्ट्स के प्लेयर्स 2 कोर्टयार्ड की तरफ से एंड 3 मेन की तरफ से जाएंगे, एक ही तरफ ही यहाँ पर ट्री एंड गार्डन का कंट्रोल ले लिया जाएगा बाय द जेट, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर किलजॉय एंड ओमन जाएंगे साइड ए की तरफ कंप्लीटली थ्रू द मेन। हाउएवर यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से नैनो स्वॉर्म्स एंड डार्क कवर का इस्तेमाल करके पुश को रोकने की कोशिश की, लेकिन टीम वाले प्लेयर्स कितनी जल्दी अंदर घुस गए ज़र्शिया को पता ही नहीं चला। अलर्ट ने स्मोक पुश करके फ्रैग निकाला है, बहुत ज्यादा जरूरी, और अब अंदर रेवन जाना चाह रहे हैं और एलबीवाई ने शॉट्स मिस कर दिए। अकेले बचे सेवरीन और इनको भी पूरी तरीके से जंप करके मारा जाएगा। ज़र्शिया एज अ टीम खेला, एज अ यूनिट खेला ये राउंड को, ट्रेड्स फोर्स किए, और जो कुछ प्लेयर छुप रहे थे ना बूम के, वही गलती हो गई, सबको मिलके फाइट करना था वहां पर, अंडर रेवन छुपना नहीं था, ये छोटी सी गलती हुई और उसके चलते ज़र्शिया के हाथ में राउंड आ गया। बहुत ही शानदार यहाँ पर राउंड ज़र्शिया के लिए हाथ में आता हुआ, बिकॉज बूमी स्पोर्ट्स लुक्ड लाइक यहाँ पर जीत हासिल कर लेंगे। बहुत जल्दी साइड का कंट्रोल हाथ में ले लिया था एंड बहुत जल्दी साइड को एग्जीक्यूट करने की उनके अंदर उत्तेजना दिखाई दे गई थी, लेकिन ज़र्शिया ने कहा नहीं, यहाँ पर हम अपने घर में तो आपको एंटर आज नहीं होने दे रहे। बहुत जल्द कंट्रोल वापस रीगेन किया एंड हेवन से आने वाले पुश ने काफ़ी ज़्यादा कमाल किया। हाउएवर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर राउंड, कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया गया है सेटअप को फ्रॉम दी साइड ऑफ ज़र्शिया। इस बार किलजॉय साइड बी पर खेलती हुई नजर आएगी अलॉन्ग साइड सोवा, जैसा कि हम जेनेरिक सेटअप देखते हैं ऑन द मैप ऑफ असेंट, एंड
जो केओ ओमन एंड जेट का सेटअप रहने वाला है वो रहेगा साइड ए पे, जो कि थोड़ा पीछे हटकर खेलने वाले हैं। नो अग्रेशन जस्ट येट। ओह नाइस स्टार्ट फ्रॉम अ अलर्ट को ओवररन करने की कोशिश है यहाँ पर, और सेवरीन ने एक्सडी के ऊपर फ्रैग भी निकाला है। सेवरीन एक और निकालेगी और उसके बाद ब्लेज किंग भी उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब एकदम से जज्बात बदल दिए। ऑल्दो एलबीवाई सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश है, बट सेवरीन ने स्पैम करके उनको भी पिक ऑफ किया है। रोलेक्स के पास दोनों प्लेयर्स बहुत वीक है, 30-30 एचपीएम मिला के 60 और रोलेक्स की 150, और खेल दोनों अंडर हेवन रहे हैं। गलत डायरेक्शन देखा रोलेक्स ने। अब पता चल जाना चाहिए कि दोनों शॉट खेल रहे हैं, दोनों अंडर हेवन खेल रहे हैं। स्मोक किया हुआ है तो मुझे लगता नहीं है इतना आसान रहने वाला है रोलेक्स के लिए। ये वेट आउट करना पड़ेगा स्मोक तो, क्योंकि घुसेंगे तो सरप्राइज ना हो जाए कहीं। 30 एचपी ऑन बोथ दीस प्लेयर्स रोलेक्स के लिए। अभी ये डबल राउंड रहेगा। ये लीजिए, पहला आइसोलेट किया और दूसरा भी मार लिया। अब ऐसी सिचुएशंस के अंदर डबल अप होना चाहिए था बूम को। हाई लो, एक बंदा क्राउच करता है, एक बंदा खड़ा रहता। भले ही एक एक गोली में फिर भी जाते, पर मौका अपने आप को ज्यादा देते। ऐसा किया नहीं और एक और राउंड निकाल के चली गई है ज़र्शिया। एग्जैक्टली, एंड साइड्स पे खड़े थे तो भी द पेनिट्रेबल प्लैंक, इसका इस्तेमाल करना चाहिए था। यहाँ से गोलियां बाहर आ सकती है। शुड हैव यूज्ड दैट अपॉर्चुनिटी एंड मे बी क्रिएटेड एटलीस्ट सम डैमेज, ताकि जो फाइट हो वो इक्वल एचपी पे हो एटलीस्ट। बट वेल, यहाँ पर एक काफी शानदार राउंड जो बूम स्पोर्ट्स के हाथ में आ सकता था उसको ज़र्शिया छीनती हुई दिखाई दी। एंड नाउ इट सीम्स लाइक एक कमबैक की स्टार्ट यहाँ पर आ सकती है। हाउएवर दिस पर्टिकुलर राउंड काफी अच्छा एडवांटेज रहने वाला है बूम स्पोर्ट्स के पास में वेपनरी के नाम पे। एंड ज़र्शिया जितना डैमेज इन्होंने झेला था, कंप्लीटली बोनस पर भी नहीं चल पा रहे हैं। सीरा के लिए एक एरिस, रोलेक्स नो शील्ड जज, फुल शील्ड जज, एलबीवाई शेरिफ, एक्सडी के पास एक बुलडॉग और अलर्ट के पास सिर्फ एक फ्रेंजी। तो ये वेपन्स तो अच्छे नहीं है वैसे इस काम के लिए। अब सिर्फ ऑफ अर्ली स्प्रे मारना चाह रहे हैं बी मेन पे, क्योंकि एक आउट ड्रोन भेजा गया था फ्रॉम द साइड ऑफ शीरो, और किलजॉय की नैनोसोल भी पॉप हो गए हैं। तो यू नो दैट देयर आर एटलीस्ट 2 प्लेयर्स ऑन दिस साइड। नाउ व्हाट इज द डिसीजन? डू यू स्प्लिट थ्रू मिड और यू डू एंड अप ए? मुझे लग रहा है ए साइड ही एंड करेंगे। साइड पे कोई ऐसा प्लेयर एंकर कर नहीं रहा है। एक प्लेयर हेवन है, एक प्लेयर शॉर्ट है। ओह नो, कवर गोइंग आउट। ओडियार्ड का जो ये एरिया होल्ड करा हुआ है अलर्ट ने, वो मेरे को फ्रेंजी के लिए कोई अच्छा एंगल तो लग नहीं रहा। बट ये फेमस अंदर घुसेंगे, एलबीवाई को पिक करेंगे एंड अब साइड का पूरा कंट्रोल इनके पास में आ जाएगा। तो जैसा आप बता रहे थे साइड के अंदर एक ही प्लेयर खेल रहा था, दूसरा प्लेयर हेवन पे था। अब हेवन वाले प्लेयर से भी डील कर लिया जाएगा। नाउ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। 2v5 का सीन बना हुआ है एंड इसमें तो कोई सीन ही नहीं बनता ज़र्शिया के लिए। गन भी तो नहीं है ना, मतलब एक एरिस और एक बुलडॉग। और आप प्लेयर्स भी देखें कितना अग्रेसिवली खेल रहे हैं बूम के। तो जो बोनस राउंड आपको जीतना चाहिए था वो आपके हाथ से जा रहा है। बज़र्क्स का रैंडम स्पैम लगेगा, एक और फ्रैग मिला है। अब आखिरी खिलाड़ी रोलेक्स बचे हैं, वो बस उम्मीद कर रहे हैं फ्लॉलेस डिनाई कर दूं मैं किसी तरीके से, और वो भी नहीं होगा। ब्लेज किंग दोबारा से स्मोक के थ्रू स्पैम मार के एक और फ्रैग निकाल लेंगे। बूमी स्पोर्ट्स डबल डिजिट दुगने राउंड ज़र्शिया के अगेंस्ट। एंड अब अपने रोल पे आती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज ज़र्शिया अभी भी काफ़ी अच्छी वेपनरी को लेकर आगे बढ़ पाए। ऐसी सिचुएशन ज़्यादा देर तक रहने नहीं वाली उनके पास। जिस तरह से बूम स्पोर्ट्स ने लगाम पकड़ी है अपने अटैकिंग हाफ में, अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके सीधे अपने आप को विक्ट्री की तरफ मार्च करते हुए नजर आएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे फ्रिट्स, या फिर शायद पहला, या फिर शायद पहला और आखिरी, जो भी है, एक सवाल आपसे फ्रिट्स, क्या दोबारा से हमें 13-6 देखने को मिलेगा? बिकॉज हम दोनों मैप्स पे 13-6 देखते हुए आ रहे हैं। लग तो रहा है क्योंकि ये देखिए ज़र्शिया को छठा राउंड शायद मिल जाए इसके पीछे। सेवरीन उन्होंने अलार्म अपने टरेट के पीछे पीक करने की एक गलत डिसीजन लिया, पनिश कर दिए गए। अब वैसे तो ये स्नीकिंग करना चाह रहे हैं ब्लेज किंग, टरेट जैसे डिस्ट्रॉय करेंगे पता चल जाएगा कि कोई ना कोई प्लेयर तो साइड के अंदर आ चुका है। अब ये कंट्रोल ले रहे हैं ब्लेज। हेवन स्मोक है नहीं तो उसको किसी तरीके से तो फिगर आउट करना पड़ेगा। सीरा ने इन द मीनवाइल यहाँ पर शीरो के ऊपर फ्रैग निकाल लिया, और रोलेक्स उन्हें पता था यहाँ पर निकलेंगे तो मर जाएंगे, कोई तो कवर दे रहा होगा। तो अच्छा डिसीजन था। एक्सडी ने एक और प्लेयर को चिप ऑफ किया और बूम के हाथों से छठा छीन लिया। ये लीजिए, अभी तो दाल गलने की सिचुएशन में है नहीं, प्लांट भी नहीं हो पाया है एंड सिनेरियो यहाँ पर 2v4 का रहने वाला है।
बूस्ट प्लान तक पुश कर देंगे, 300 एक्स्ट्रा क्रेडिट बटोर लेंगे, लेकिन ये लीजिए फेमस भी समाप्त होते हुए एंड बर्सर्क्स अकेले कितनी देर तक अंडर हेवन होल्ड कर पाते, उनको भी यहाँ पर एक्सटेडी पिक ऑफ करेंगे एंड ये लीजिए 6ठा राउंड जर्सिया के पास आ चुका है। अब 3 राउंड लगातार अगर बूम लाती है तो फिर सेम स्कोर लाइन हर एक मैप पे हमें देखने को मिलेगी। अच्छा खेलिए अभी तक तो, और ये राउंड ड्रॉप हुआ है। चलिए वो जो अर्ली फ्रैग था वो आपने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि इतनी अग्रेसिवली प्लेयर्स जो है वो बीमेन पुश कर देंगे जी, और इस वजह से आपके यहाँ से राउंड गया। मुझे लगता है आप थोड़ा ध्यान से खेलिएगा, बाकी तो अभी भी आप लीड नहीं है 4 राउंड की, और बेटर भी आप ही खेल रहे हैं। एग्जैक्टली डाला है ए मेन के बाहर कोई भी, लेकिन इसके पीछे है नहीं कोई प्लेयर है नहीं, जस्ट टू क्रिएट सॉर्ट ऑफ अ रूज, और बूम बाय कर रहा है उसे, पुश नहीं कर रहे ये लोग इस वन वे को। एब्सोल्युटली बूम के पास लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा विन फैक्टर रहने वाला है, दैट इज गोना बी दी लॉकडाउन, एंड लॉकडाउन का इस्तेमाल करके एक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी अपने लिए दोबारा से बना सकते हैं, बिकॉज ये वाला एक बाय राउंड रहने वाला है फ्रॉम द साइड ऑफ ज़र्शिया एज वेल, जिसको अगर डिनाई करते तो उनको सेफ की तरफ पुश किया जा सकता है। बट वेल फेम इज ऑलरेडी यहाँ पर अपनी गन का कमाल दिखाते हुए जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉकडाउन ऑलरेडी जो भी ऊपर पुश कर दिया गया है राउंड। अच्छे शॉट्स अच्छे फ्रैग निकाले यहाँ पर तरफ जर्शिया, ये परेशानी में पड़ गया। 22 HP बचे रोलेक्स के पास, ये स्पैम में एक फ्रैग जरूर निकालेंगे रोलेक्स। अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड पर ये देखिए स्पैम खुद हो गए, ऑल्दो सीरा दोनों प्लेयर्स को हेडशॉट देके 1v1 ले आए, लेकिन फेमस को एक्सपेक्ट नहीं किया इस पोजीशन में। ये राउंड वैसे तो कंफर्टेबली क्लोज होना चाहिए था, पर फर्क नहीं पड़ता जब तक बूम के पास आ रहा है। एग्जैक्टली काफ़ी अच्छी सिचुएशन बूम के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है, एंड इसी वजह से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या एक्सपेंस पे आप राउंड जीत रहे हैं, इस लॉन्ग एज आप जीत रहे हैं। सीरा ने बिल्कुल भी उस ऑफ एंगल पर एक्सपेक्ट नहीं किया यहाँ पर फेमस को, एंड फेमस ने उस बात का पूरा फ़ायदा उठाया, काफ़ी अनलाइकली एंगल पे खड़े रहे एंड सीरा को बहुत कंफर्टेबली यहाँ पिक ऑफ करते हुए नजर आए। उनके लोकेशन का अंदाज़ा ना होना सीरा को ऐसी पोजीशन में छोड़ गया था जहाँ पर ही लिटरली हैड टू स्कोप आउट द होल साइड, and famous just had to look at one single corner. ज़र्शिया टाइम आउट कॉल किया है, पर ऐसा क्या बता पाएंगे इनके कोच कि ये 2 राउंड रोक लेंगे बूम को निकालने से, क्वेश्चन तो यही रहेगा। तो लेट्स सी हाउ डू दे डिसाइड टू गो अबाउट इन द फॉलो अप राउंड। अभी अगर बात करी जाए तो कंट्रोल में पूरी तरीके से बूम है, द वे दैट देयर साइड हिट्स आर कमिंग, एडजस्ट करने में कामयाब हो ही नहीं है ज़र्शिया, प्लस गन डुअल में भी बेटर ही आ रही है बूम की टीम। अब मैं केओ के थोड़े से एडवांस मैकेनिक्स इस टीम से तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो ओवरहेड फ्लैशेस हर बार सही फटे और टीम को कॉल दिया जाए कि ओवरहेड फ्लैश कर रहा हूँ जब साइड के अंदर पुश आ रहा है, ताकि वो स्मोक पुश करके फ्रैग निकाले। अब ये मैकेनिक्स मतलब आने तो चाहिए वैसे इस लेवल ऑफ वैलोरेंट के अंदर, पर जब मैंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर किसी टीम को करते हुए नहीं देखा, तो अब यहाँ पर मैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मान रहा हूँ इस चीज़ को। जी बिल्कुल, बट वेल अगर इस पर्टिकुलर राउंड की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा एक चेंज यहाँ पर ज़र्शिया की तरफ से आया है। किलजॉय का सेटअप ऑल द वे बी के एंट्री पॉइंट पे रखा गया है एंड बी को कम्प्लीटली रीटेक पे खेलना चाह रहे हैं, सारे के सारे प्लेयर्स मिड से पुश करने वाले हैं। कुछ ऐसा ही सिमिलर हमने देखा था इन द फर्स्ट वेरी राउंड, बट वो पिस्टल राउंड था, वहाँ पर एक्सपेक्टेड था। ये तो काफ़ी ज़्यादा वेपनरी डिफरेंस वाला राउंड है, यहाँ पर इस चीज़ से कितनी वैल्यू स्क्वीज आउट हो पाएगी वो मेरी समझ से थोड़ा बाहर है, बट लेट्स सी हाउ दिस गोस। हाँ इको राउंड है, ज़र्शिया निकालना तो ज़रूरी है, नहीं तो 12-6 के बाद तो एक राउंड ऐसा आएगा ही आएगा जहाँ पर आप कोलैप्स करोगे या गलती करोगे और उस पर आपको पनिश किया जाएगा बूम की तरफ से, तो उस वजह से ये राउंड और ज़रूरी हो जाता है। बी साइड बिल्कुल खाली छोड़ के खेल रही है इसके अंदर ज़र्शिया की टीम, और अब ये जो पता चला है कि अलर्ट ने भी हल्का सा पुश किया हुआ है और अलर्ट ने अपना शॉट भी मिस किया है, रोटेशन बुलवाई गई है, बी साइड के ऊपर लॉकडाउन कमिट करवा दिया और इससे सारी रोटेशन जारी है। XZE ने तो फ्रॉम द शैडोज का इस्तेमाल कर लिया, ऑल्दो पता चला है कि ये फेक है। अभी भी ये साइड को होल्ड किया जा रहा है XZE की तरफ से, आप देखते हैं क्या यहाँ पर फ्रैग निकाल पाएंगे, वो बड़ा सवाल है। रोलेक्स ने पहला निकाल दिया फेमस के ऊपर, क्या ये अंत का शुरुआत है? बहुत अच्छा अंडर हैंड फ्लैश और उस पर आया कैपिटलाइजेशन, सारे प्लेयर्स को पिक ऑफ किया और ज़र्शिया जो सोच रही थी कि हम चोरी कर लेंगे इस राउंड को, जेल भेजा है उन्हें।
बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर बूम की तरफ से। अब ये आखिरी शेरिफ कितने वेपन्स डाउन करवाती है, दैट्स द ओनली क्वेश्चन दैट जर्शिया माइट बी हैविंग। यहाँ से जीतना तो नामुमकिन है। ये लीजिए, एक भी वेपन नहीं ड्रॉप करवा पाएंगे एंड देयर इट इज। फेमस अकेले के लॉस पे एक और राउंड बूम स्पोर्ट्स के हाथ में आता हुआ एंड मैच पॉइंट नॉनदलेस। हियर्स द थिंग, काफी अच्छा फेक यहाँ पर निकला जर्शिया बूमी स्पोर्ट्स की तरफ से। ए साइड की तरफ पहले प्रेजेंस दिखाया, फिर बी साइड की तरफ मूव करा, बी साइड के ऊपर लॉकडाउन लगाया एंड जब पता पड़ गया कि अलर्ट यहाँ पर मिड का कंट्रोल लेकर बैठे हुए हैं तो फिर अपने आप को दोबारा से ए साइड की तरफ रोटेट करवाने की कोशिश की गई। दोनों ही टीम्स एक दूसरे को डिल्यूजन में डाल रही थी, लेकिन इन दी एंड दोनों टीम्स सेम जगह पर पहुंची और वेपनरी एडवांटेज का पूरा एक्सप्लॉइटेशन बूमी स्पोर्ट्स करके पूरे के पूरे राउंड को अपने हक में ले गई। अच्छा राउंड आया यहाँ पर और ये देखिए बैक किया जा रहा है। इवन जाते जाते गार्डियन से थोड़ा बहुत प्यार भी दिया है यहाँ पर शीरो ने। 76 एचपी पे छोड़ा है सिर्फ अलर्ट को। ये परेशानी क्रिएट करेगा क्योंकि ऑपर को यूजुअली फुल एचपी चाहिए होती है ताकि वो कॉन्फिडेंटली पिक कर सके फालतू के फालतू एंगल्स को। ऐसा होगा नहीं, फिगर आउट किया है बूम ने कि ऑपर है बी पे, तो चलते हैं ए साइड की तरफ और एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि डिफेंडेड तो है 3 प्लेयर्स की तरफ से पर 2 खेल रहे हैं शॉट, एक खेल रहा है हेवन। अब ये साइड जब तक आप प्रॉपरली डिफेंड नहीं करोगे ना तब तक मुझे लगता नहीं है आपके लिए आसान रहेगा रीटेक में अपने लिए कुछ भी कर पाना। देखिए यहाँ पर रीटेक के लिए अपॉर्चुनिटी जरूर से बन सकती है जर्शिया की। बहुत सारे अल्टीमेट्स अवेलेबल है लेकिन उनके लिए काउंटर्स अवेलेबल है बूम के पास। एंड ये लीजिए, आपके अल्टीमेट्स को डिनाई करने के लिए ऑलरेडी अंदर घुस चुके हैं फेमस एंड दैट्स गोना बी अनदर वन गोइंग डाउन। नंबर्स इक्वलाइज हैं, बेटर पोजीशन पे वो अपने आप को पा रही है। साइड का कंट्रोल भी हथिया लिया है ऑलमोस्ट। अब ये कैजुअल क्लियर है, ये कैजुअल क्लियर है रोलेक्स की तरफ से, पता होना चाहिए था। अलर्ट ने ट्रेड आउट जरूर किया है बट अंडर हेवन। कितनी देर तक एलबीवाई बचते तो अलर्ट को अभी भी काउंट आउट नहीं कर सकते। ब्लेड स्टॉर्म है इनके पास, पता चल जाएगा कि एक प्लेयर एंगल पीक कर रहा है। और अभी भी देखिए 1v1 तक लेकर आ गए सेवरीन। स्पाइक नहीं है इस खिलाड़ी के हाथ में और समय कम हो रहा है धीमे धीमे। अब ये शॉट से घूम के आना चाह रहे हैं और बिल्कुल सही कॉल है। 5 सेकंड है क्लॉक पे, प्लांट करना ही पड़ेगा। और अलर्ट खाली रन डाउन किया, प्लांट से हटवाया और राउंड जीत लिया। ब्यूटिफुली डन फ्रॉम द साइड ऑफ अलर्ट। काफी बुरी तरह से यहाँ पर सेवरीन को कॉन्स्टेंटली चौकन्ना रहने पर मजबूर कर दिया गया। ही कुड नॉट रन बैक टू गेट द स्पाइक। उन्हें लगा कि हेवन की तरफ प्रेजेंस हो सकता है तो धीरे धीरे हेवन के ऊपर अपना क्रॉसहेड सेट करके उन्हें स्पाइक लेने जाना पड़ा, जिसमें काफ़ी सारा टाइम बाय हो गया फिर वहाँ पर अलर्ट के लिए। एंड फिर अलर्ट दोबारा से गए शॉट की तरफ से एंड वहाँ पर अपना क्लाउड बर्स्ट छोड़कर वापस आ गए तो चलते हुए प्लांट को बीच राह में रोक देना पड़ा। एंड दैट जस्ट डिड नॉट लुक गुड फॉर द साइड ऑफ सेवरीन। बूम के हाथ से एक और राउंड छीना गया, लेकिन कितनी देर तक ये चीज़ कंटिन्यू कर पाएंगे क्योंकि 5 और राउंड लगातार चाहिए जर्शिया को टू पुश दिस ऑन टू ओवर टाइम। वो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। अब देखिए अलर्ट फिर से आप लगा के बैठे तो है अभी मेन, पर शीरो इंटरेस्टेड है नहीं ड्रोन रिकॉन यूज करने में, इसलिए उन्होंने कहा मैं पीक ही नहीं कर रहा, जाए ये चूल्हे भाड़ में। मैं बैठा रहूंगा, तुम पीक करोगे तो 1 टैप दे दूंगा, यही कर सकता हूँ मैं। चलिए ऑफ शॉट वेट करवा लिया, वहाँ पर पता चल गया बी मेन पे प्लेयर प्रेजेंट है। अब फेमस ये स्मोक को डिसरिस्पेक्ट करेंगे या हाईलो में फंस सकते हैं और दोनों प्लेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लिया, ये अच्छा काम किया। और एक स्मोक डाल दिया है ए मेन के ऊपर ताकि ये लगवाया जा सके कि ये प्लेयर्स अभी भी एक ही बाहर है। पर ये शिफ्ट जो आया है बी की तरफ ये काफ़ी तेज़ी से लाया गया है। दरवाज़ा तोड़ेंगे बजाज पर ये ऑफ जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा और बिल्कुल रखा है। पिक्सल एंगल था अलर्ट को हिट करने के लिए, हुआ नहीं और बजाज की वैंडल बोली है। 4v5 अकेला एंकर एलबीवाई क्या कर सकता है। ये हंटर्स फ्यूरी बहुत अर्ली मंगवा ली और एक स्मोक भी आया एलबीवाई के लिए और सीधा पॉप ने फ्रैग निकाला है ब्लेज किंग के ऊपर। एलबीवाई स्मोक बहुत अच्छा खेला पर सेवरीन को रोक नहीं पाए। फ्रैग एक बार फिर से गए और बीएमई के खेमे में गए हैं। बूम स्मोक के हाथ में नंबर्स एडवांटेज। ये लीजिए यहाँ पर लॉकडाउन फोर्स आउट करवाया गया एंड उसको कम्प्लीटली डिनाई करने के लिए यहाँ पर हंटर्स फ्यूरी अवेलेबल थी ही तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं निकली। 3v2 पर सिनेरियो है, रोलेक्स की HP 23 है, यहाँ पर से तो आगे बात बनती नहीं अनलेस मैजिक हैपेंस, जो कि खैर बहुत कम होता है। पोजीशन बहुत अच्छी है, एक फ्रैग निकालेंगे, दूसरा फ्रैग निकालेंगे, 1v2 में कन्वर्ट कर लिया है XZD ने एंड ये लीजिए राउंड छीन कर ले गए नाक के नीचे से बूम स्पोर्ट्स की।
काफी अच्छा क्रॉसफायर सेटअप था, लेकिन सारे प्लेयर्स को यहाँ पर डिनाई किया गया XZD की तरफ से। क्या ही देख लिया मैंने। बहुत अच्छे शॉट्स मारे यहाँ पर XZD ने, और ये मैं नहीं समझ पाया कि ये जो प्लेयर्स ने आइसोलेट किया अपने आप को, बिल्कुल स्विंग ही नहीं किया एक दूसरे के ऊपर, ये क्यों? ये पहला फ्रैग निकला, स्मोक पुश कर रहे हैं, ये अंडर जो प्लेयर बैठा है इसका काम है ये एंगल निकालना। अब ऐसा हुआ नहीं और XZD ने बहुत ही अच्छा राउंड निकाला, और देखिए बूम को फोर्स कर दिया इको पे। ये गेम अब क्लोज जा रहा है। फेमस के पास नाइस है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कंप्लेसेंट नहीं होना है जर्शिया के प्लेयर्स को, पर बूम थोड़ी सी तो चिंता अब आई होगी इनके मन में। आनी भी चाहिए। जो गेम आप लिटरली 13-7 पर खत्म कर सकते थे, वो 12-8 तक पुश हो चुका है, एंड अब जर्शिया के पास 12-9 करने का भी पूरा मौका रहने वाला है। सो डेफिनेटली अ वेरी डिफिकल्ट वन फॉर बूम ई स्पोर्ट्स, एंड काफी क्लोज अब मैच आता जाएगा, एंड हर एक राउंड के साथ धड़कनें तेज होने वाली है यहाँ पर बूम ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की। अब शीरो का रिकॉर्ड और पता चल गया है यहाँ पर स्मोक के अंदर की प्लेयर है LBY को। सेवरीन ने वैसे तो एक फ्रैग निकाला, और ये हीरो राइफल है, ये स्पैम किया जा रहा है LBY को, और ये कुनाई सेव निकाल दिया फ्रैग फेमस ने। पर XZD ये जो अग्रेशन दिखाना चाह रहे थे प्लेयर्स की, उसको पनिश किया है। वेपन अभी भी सिर्फ एक ही हाथ में, बज़ॉक्स के पास सिर्फ एक शेरिफ है, और रीटेक सारा आने वाला है ए हेवन से। मेन पे आए ज़रूर है यहाँ पर फेमस, पर अपड्राफ्ट वगैरह कुछ है नहीं, तो ये स्मोक के अंदर रुक पाना थोड़ा मुश्किल सा ही रहेगा। अंडर हेवन ट्रांजिशन ज़रूर किया प्लेयर ने, पर ये जंप आएगा, और बज़ॉक्स ने ऑपरेटर रिसीव करी थी, उससे फ्रैग निकाल दिया। सेवरीन भी यहाँ पर रोलेक्स को पिक ऑफ करेंगे, और अब 1v2 सीरा के लिए। और यही बोला था कंप्लीशन नहीं होना है, बूम ने करके दिखा दिया। BO3 जीती है, क्वालिफिकेशन पक्का किया, और नाचना तो जरूर बनता है इसके ऊपर। एब्सोल्युटली एक थ्रिफ्टी के साथ में आखिरी राउंड यहाँ पर क्लोज रन किया। काफी अच्छी वेपनरी नहीं थी यहाँ पर बूम ई स्पोर्ट्स के पास में, उसके बावजूद यहाँ पर सिंगल वैंडल के साथ में बहुत अच्छी वैल्यू निकाल चुके हैं। खुशी ये दिखाती है, ये जताती है कि कितना ज्यादा जरूरी था ये BO3 इनके लिए। जर्शिया के प्लेयर्स के आंखों में आंसू, तो ये तो सिक्के के दो पहलू है, एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा। कुछ ऐसा ही है वैलोरेंट का ये गेम। जर्शिया कोशिश अच्छी थी, ये जीतते तो ये क्वालिफाई करते, पर ऐसा हो ना सका, और बूम ई स्पोर्ट्स इस जीत के साथ साथ अपने लिए प्लेऑफ्स क्वालिफाई किया। अच्छा प्रदर्शन रहा है जर्शिया की तरफ से, स्प्लिट पे बहुत अच्छा गेम था, और ओवरऑल दे वर नॉट एबल टू फिनिश आउट द टूर्नामेंट in the way that they wanted to. कहीं जीत तो कहीं हार, ऐसा ही है इस टूर्नामेंट का संसार। बट वेल, फिलहाल के लिए बूम ई स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, दे आर गोना बी मेकिंग इट ऑल द वे इनटू द प्लेऑफ्स। बट जर्शिया के लिए सेम नहीं कहा जा सकता, दे हैव बीन टेकन डाउन, द होम टीम लूजेस, एंड इस बात का बहुत बदला लिया जाएगा बूम ई स्पोर्ट्स से प्लेऑफ के टाइम पे। बहुत ज्यादा बूइंग होने वाली है उनके लिए। बूम ई स्पोर्ट्स जीत कर आए, और बिल्कुल सेलिब्रेट करने वाली बात है। और ये जिस फैशन में ख़त्म किया इस गेम को, ये थोड़ा और ज़्यादा मैं कहूँगा बढ़िया था। दर्दनाक तो था ही जर्शिया के लिए, पर बूम के लिए और बेहतर था। ग्रेट शोइंग बाय द टीम, एंड ये BO3 को ख़त्म किया है 2-1 अपने फेवर में। तो वो स्प्लिट पे ही ख़त्म कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर चलिए कोई बात नहीं, ख़त्म किया। यहाँ असेंट के मैप के ऊपर 13-8 की विक्ट्री हासिल करी है, और अब ये मुझे लगता है लड़ेंगे किसी ना किसी से, तो ग्रुप ओमेगा की टीम से। एब्सोल्युटली एक बहुत ही शानदार यहाँ पर पोजीशन बनी हुई है फॉर द साइड ऑफ बूम ई स्पोर्ट्स। दे हैव सिक्योर्ड देमसेल्व्स इनटू द प्लेऑफ्स, एंड प्लेऑफ्स के अंदर अब आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा, बिकॉज छठ के दोनों ग्रुप से 3 टॉप टीम्स आ चुकी हैं, एंड उनका जो मैच यहाँ पर रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो प्लेऑफ्स के लिए मैं ऑलरेडी एक्साइटेड हो चुकी हूँ। प्लेऑफ्स तो ज़रूर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। तो अभी भी एक दिन बचा है, अभी भी वो बाकी टीम बची है ग्रुप ओमेगा। हमें अभी भी नहीं पता कौन कौन क्वालिफाई करेगा। लीड्स कार्ड मुझे लगता है वो तो पता चल गया है, पर अभी भी डी प्लस और बॉन्कर्स के बीच में थोड़ा तो वो जद्दोजहद है कि क्वालिफाई कौन करने वाला है। तो ये तो अभी भी देखने में मज़ा आने वाला है। पर एक तो हमें फाइनलिस्ट मिल गया बूम ई स्पोर्ट्स, दूसरी भी शायद नाओस भी उधर से क्वालिफाई कर चुकी है। तो ग्रुप अल्फा तो मोर लाइकली मुझे लगता है हो चुका है कंफर्म कि कौन कौन क्वालिफाई करेगा।
और ओमेगा का ग्रुप के मैचेस कल अभी भी देखने के लिए मजा आने वाला है. एग्जैक्टली ग्रुप अल्फा में से नाओस, बूमी स्पोर्ट्स एंड फैंसी यूनाइटेड ये तीनों ही मेक इन कर okay. चुकी है इनटू द प्लेऑफ्स क्योंकि सारे मैचेस खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं इनके, लेकिन ओमेगा ग्रुप में अभी भी रिजल्ट्स थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. कल के दिन में होने वाले कुछ मैचेस जो कि डिसाइड करेंगे कि कौन सी तीन टीम्स विल मेक इट इनटू द प्लेऑफ्स. ऑलराइट, सो काफी इंटरेस्टिंग दिन. तीनों VO3s हमने देखे, 2-2-0 खत्म हुए. जो रिजल्ट चाहते थे वो आया नहीं ओजी वाले गेम के अंदर, पर यहाँ बूम और जर्शिया एक क्लोज एनकाउंटर 2-1 का ये सिलसिला रहा, खत्म हुआ है. और हमारी भी आज की जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म होती हुई. तो अभी चलते हैं इंग्लिश डेस्क की तरफ और देखते हैं हमारे कॉमरेड्स क्या कह रहे हैं. बट हम लोग आपको मिलेंगे कल सुबह 11:30 बजे से. सो स्टे ट्यून, डू नॉट स्टे ट्यून तो नहीं, वापस जरूर आइएगा कल सुबह हिंदी स्ट्रीम के ऊपर. Oh, but it just didn't get across the line, and now we have our 3 teams secured from Group Alpha, and they don't include Zerxia. Ascent certainly delivered, even though it didn't look that close. Sometimes, Mac, you need to experience heartbreak. We're getting a bit older now. Yeah. We've been there, right? It happens, and I think that's what's happened with Zerxia here. They have to carry this, wear their heart on their sleeves, which we've just saw, and work out what's the next step for them. You know, off-season's going to be coming up. There's going to be more things to play for. But, man, like, you could see what it meant to fall away, but at the exact same narrative, you can't only have winners. Sometimes you need to take it through. And look at that. That is a surreal statistic, Komodo. Domination. 15 first kills, and I mean, for Boom, how many of those are contributing to round wins when we've got multi-frags added into the mix, right? Because on those first kills, we had so many quick reactions to come out from Zerxia as well. Is it the staleness of Zerxia that was a little bit of their downfall as well? Not as reactive as what Boom were doing. Look, maybe one could argue that, but you cannot deny who stepped up the most today, No Mac. chance. The big man, famous, the eyes on the prize, delivering so much goodness thanks to Indonesia. And oh my lord, Boom, they qual off the back of what he brought. It was what, 40 kills going into the final match? Yeah. How much did he end up with? That was nuts. Jesus, yeah, it was a surreal experience to watch him there. 62 kills across the series. No that way. is a performance to remember. And the amount of first kills, like I think especially as we move in towards Ascent, right, he was really going toe-to-toe with Alert. The amount of opening picks he was able to find, the operator frags that he pulled out, it was just no question that Famous really did it. But I can't put it just on him, right? Because the amount of frags that came out from the other team, from the players on the team, really meant that it was a group effort that made this work. 300 ACS over the series in a game like that. That is pure impact. That is pure performance. And Famous, if he can keep that performance moving into the playoffs, then I'm worried about the other, other group as absolutely. well. I have no idea how it's going to end up playing out. But look, he's plus 23. He barely died. He clutched up so many times. There was just everything going for him. We said that Berserks had to show up. He showed up as well. Everyone showed up. And you called out Severine at the end. You were saying, hey, he did nothing on the first 2 maps, but he found the impact he needed, getting that 3K to lock down the one that mattered, the one that got the W. And we've got Blaze King up on the stage for an interview as well. Let's go chat to the winners. แม่เกม 3 ของเราครับ โอ้โหตึงอย่างที่คิดไว้จริงๆครับแต่ผู้ที่ชนะออกมาได้นั้นฮะนั่นก็คือนะครับผมโหเป็นปูมอีสปอร์ตนั่นเองนะครับที่ชนะมาได้นะซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่กับโอ้โหผู้เล่นคนนี้นี่พลาดไม่ได้จริงครับนั่นคือ Blaze King นะครับ and of course we have our victors which came out of a very intense match and that is Boom Esports and we are here today now with Blaze King. I believe a lot is going through your head right now. Yeah. Exactly. But I do have some questions for you นะครับและมีคำถามครับอยากรู้มากๆเพราะเกมนี้นะครับเป็นเกมเดียวเลยนะเป็นแมตช์เดียวเลยนะที่มี3เกมนะแล้วเกมที่2เนี่ยเซอร์เซียตีตื้นขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรู้เลยว่าเฮ้ยแล้วพอผ่านเกมนั้นไปเนี่ยเขากลับมาตั้งหลักกันยังไงนะครับ So the first question we already know that in game number 2 Zerxia made a
very, very nice comeback. Their momentum is very, very strong. Of course, the fans here are really supporting them. So yeah, game number 2 was really strong for them. How did you and your team prepare yourselves mentally for game number 3? Actually, we just like try to reset from the map 2 and then try to not talk about it. And then, yeah, we just move on. And then like, let's say, hey guys, focus on map 3. We're not gonna finish here. So I'm not going home soon. โอ้นะครับสำหรับง่ายๆครับคำตอบนะฮะบอกว่าก็เอาง่ายๆเลยนะรีเซ็ตอะไรที่คิดไว้ในเกิดขึ้นในเกม2เราทิ้งมันไปซะแล้วเราไปโฟกัสในเกม3อย่างเดียวเพราะว่าเราจะไม่กลับบ้านเร็วๆนี้นะครับแหมเป็นไงความมั่นใจนะครับผม Blaze King นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะก็เอาใจช่วยพวกเขาไปต่อด้วยนะครับแต่คำถามต่อไปครับเพราะว่าพวกเขาได้อยู่ใน Playoffs นะฮะก็คือมีพื้นที่แล้วแหละอยากรู้เหมือนกันว่าเขาเนี่ยกำลังมีความกลัวหรือว่ากำลังต้องศึกษาทีมไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับผม so given that you have locked your position in the playoffs already, congratulations. Is there any team that you would find to be one of the biggest obstacles for you? If you want to talk about the biggest obstacle for us, it should be like the D+ Kia because we scrims against them a lot and then I know they are good. They're winning the Korea VCT, so I think they are the best team here. But everyone is actually strong here, so everyone is an obstacle here. Very nice answer นะครับสำหรับคำตอบนะฮะบอกว่าเอาจริงๆนะไม่ใช่ว่ากลัวทีมไหนเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่ากลัวทุกทีมเก่งทุกทีมจริงๆนะครับผมตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็น D+ เนาะเพราะว่าก็อย่าง VCT ฝั่งเกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะเล่นกันได้น่ากลัวมากๆนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกทีมที่มายืนอยู่บนเวทีของ Ascension ได้เนี่ยเป็นทีมที่น่ากลัวหมดครับเพราะฉะนั้นนะฮะบอกเลยว่าต้องติดตามต่อไปนะครับผมสำหรับรอบ Playoffs ของเราครับแต่อย่างไรก็ตามครับสำหรับวันนี้นะครับแมตช์ที่3นะฮะก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่ากรุ๊ปสเตจยังไม่จบเรายังมีกันต่อนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเพียงเท่านี้นะครับ and of course ladies and gentlemen back at home who's watching and of course from all around the world today has been quite an amazing journey. We're now done with match number 3 and we still have a bit of a group stage left but for now you guys can go take a rest, especially you, after a most intense game. But for now, I'll take it back to the panelists and good night. Put your hands up. 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 Put your hands up.
Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.